I think they're going to be coming in confident, very cool-headed. Sort of my concern for Alliance is that T1, on the other hand, I just see sort of T1, this TI, they seem to have the same pressure. You know, I don't think they're going to be necessarily feeling that. I think they're going to be coming in confident, very cool-headed. Sort of my concern for Alliance is that T1, on the other hand, I just see sort of T1, this TI, they seem to have the same sort of energy to me that you saw sort of when OG won their first TI. Yeah. You know, they're coming out, they're laughing, they're smiling, and they're playing just some of the best Dota that they've been able to bring out. Sure, they got knocked down here to the lower bracket, but taking a game off LGD, like, this team is really, really good. I hope we get a close series, but I would not be surprised if we do just see T1 roll over Alliance here. It's so true. I saw T1 at breakfast, and you know, I said hi, and they were chatting. I was sitting at a table, and they were singing and laughing, and like they were so carefree. I just love this because I've been following these guys for 2 seasons in the DPC, right? And Whitemon is the one that puts the key in ignition and just lights things up. He's the one always smiling. He's just having a blast every single time, no matter what. Every single game that we watched or interviewed him, he's just a pleasure to be around, and it's very reminiscent of Jarax in OG. Sounds like music to my ears, Lizard. Now let's talk about S4 versus Cuckoo. We've got our off-lane captains. What is the difference between these two, if we were to put them head-to-head? I would say... Oh, no, go ahead. No, you go ahead. No, you You're go so ahead. kind to each other. I'm just going to go to Lizard in a second. Gods, you go because you're in the middle. I would say Cuckoo's a bit more stable with his play, but at the same time, they both can have very hot and cold games. I think Cuckoo's got a better ability to like take over games with a good start. S4 a bit more stable. You kind of know what you're getting, playing more of kind of maybe the more team fight centric heroes, whereas Cuckoo sometimes will. Freeze हो गया. You're all going the way of T1. A little bit, I believe, right? Are you guys the same? Yeah. I don't think it's like going to be super. I think Alliance being underestimated by a lot of people, but T1, they took a game off PSG.LGD. That's something very few people have done here at TI, so I have to favor T1 based And they on also that. made it feel competitive throughout all 3 games. It's not like they just took one off and that's it. The whole series looked nice. If you're Alliance right now, and you're looking at what T1 were playing yesterday against LGD, what are you trying to do in terms of the build you're going to be doing? तो होम किधर है ये रहा? और एक लेवल मिल जाएगा तो मेरे को ये मिल जाए. I like this. 5 बॉक्स होगा. Apparently मुझे 3 ही बॉक्स मिले. एक ट्विस्ट से मिला, 3 यहाँ से मिला, तो मेरे पास 4 सेट ऑलरेडी है. फिर मिल जाएगा. Like to see this Earthshaker or this Dazzle. कोई भी. तो डिलीट नहीं कर सकते. Fnatic आउट हो गया ना अभी. और एक 5 कार्ड. एक 30 वाला कार्ड एकदम बकवास है. किसी भी इज गॉन. लाइक ये तो बहुत पहले ही गॉन हो चुका है. Predator. Oh, 14 डस्ट. कौन आज कर जाएगा.
फाइनली ओजी का मेरे को मिला एक. That's good. But if you're out of position in one of two team fights, your whole OG का game already मेरे falls पास apart. 2 है. However, when you're playing that Dragonite and you slowly win the lane, then your whole team converges around you and you're the focal point of your team fight, then Alliance looks a lot stronger and so does Limp. And what do we mean by the phrase beautiful Dota? Because I've also heard Alliance being described as a team that gives good, beautiful Dota. Gods, what does that mean? Because my games are never beautiful. For me, when I hear it, it's like you, as a viewer, as a commentator, you're watching, and every move makes sense. Like there's a clear purpose that you just see, like the rotations when they're, like, for example, collapsing around certain objectives, like the power runes. They're setting traps. They're making smokes at the right times. You know, being in the right place to contest a Roshan. So to me, I always look at the movement of heroes around the map, and when they're, you know, playing alone, when they're, you know, syncing up together, and that's something that Alliance on their best days do really well, but a lot of the time it can also look a bit more disjointed. Now, I wish we could pull up some highlights from yesterday's match between LGD and T1, because I do think it still bears talking about, especially the second game in that 3-game series, where we saw a 10-man buyback fight, and all the couriers also coming back online as well. I feel like that might be one of the most memorable moments of TI, of the main stage so far. I don't think I've ever seen that ever. No, never. Not even at TI, like any tournament. Any tournament, any single TI, not even any pub games. Not Yeah, even just in pubs. any Dota games, full stop. Yeah. That was incredible. And it was so enjoyable to watch that game and just be a part of it. T1 versus PSG.LGD definitely did put a mark on the whole main event. Do you think that the reason that T1 couldn't pull it back in that last game was just kind of LGD just saying, okay, right, we need to take things up a notch? Do you think it was down to that Ursa? What do you think was the thing that really knocked T1 out of the running? LGD definitely did step it up a little bit at the end, but at the same time, they did allow T1 to have all of the good stuff in the second game, and they struggled against it. However, once you negate a couple of those heroes, which I assume Alliance will do in their first draft over here as well, then it does become a little bit easier. And I think the scary thing with LGD is they're not just like a momentum team. When they lose a game, they learn a lot and adapt quickly. I think there are some teams, you know, one of the big examples always EG, once their drafts maybe get figured out, they can't adapt as fast. But for LGD, with Zhao Wei, it just feels like they lose a game and they come back twice as strong the game afterwards, typically. Apparently, we're having a few technical issues on stage right now. They're just fixing some audio issues. So apologies for the delay. We are going to try and get you into the match as soon as possible. Don't panic. But I want to talk about also T1's T1 drafts. That's how Game 2's draft was described with the Medusa and Doom combo. What makes a T1 draft? I'm not interested. Fuck it. लाइक मेरे को जानना है मेरे इसका थर्ड स्किल कैसे काम करता है, लाइक उस एकदम शॉर्ट वाला एकदम शॉर्ट आने के बाद मैंने They cannot hide. It was time to prepare for battle. Point taken. Oh, sorry, remove that. Anyway. Why not? तो पीछे ही आ जाता है क्या? और मैं इस साइड पे रहूँ? I approve. Yes. You can like जाओ तो बहुत फास्ट भी हो सकते हो इससे. ये like इंस्टा कास्ट है.
investing on this or investing on that? Like, compared to my own. I think investing on this thing is like much better. The ground shudders. Magnum shot पे ज़्यादा better है. और Magnum shot जब use होता है तब like Ah, yes. GG. By the gleam of my horn. I shall find them. The thunder approves. रात का GG है वे. Trample them. Nobody. What a shame. I was hoping for some high. Are we playing Alright, hand slaps He's here? going to get... Oh. Oh, we Oh, are. we Here are. we go. Here we go, Owen. Okay. I don't even know how this game's played. What do you do? Just slap each Okay. other? So Cuckoo seems Oh, to he be going missed. first. You He's have on the to- offense first. he's not He very is good at this. Warning You his have to opponent. dodge the slap by doing the I up think and he's. down, I think he's teaching him how to Yeah, play. Yeah. Ah, yeah. Oh, he doesn't want to play now. Don't want to hurt your teammates' hands before No, this is throwing yeah, the match. probably not the best Probably not the idea. best Slapping the idea. hell out of your hands before a TI game. I think they've been talked out of it. Well, Maybe they're just short on hand warmers, you know, they're getting Warm up. innovative. Yeah, Well- there it is. Get those hands warm. sadly, Cuckoo is not going to be slapping his teammates' hands, but he did have a chat with Casey, I believe. So we're going to see what he had to say right now. The season for T1 may have ended on a high note, but it certainly didn't start out that way. The team was looking forward to finally attending a LAN event with the Singapore major in March. But their captain, Cuckoo, was suddenly unable to go. T1, playing with a stand-in, failed to even make the main event. Like many other teams, the transition to in-person events proved challenging. But for Cuckoo, he says it's where he really thrives. I did not play LAN for 1 year, and as a player, I really like to compete at LAN because the feeling is kinda unexplainable. Unlike the online, it's like you can like just The feeling chill, is unacceptable. watch some anime while playing tournament, something like that. But on LAN, you can feel that you cannot slack off or play like lazy. How have you had to change your leadership style as a captain with everything being so different? I think our coach helping me to improve as a captain. And at first, he's the one drafting for us. When the drafting also come back to me, I feel that I kind of step up a bit to perform well and to draft well for my team. And when did you step back in to draft for your team? DPC Season 2, the opening game. It's like my captains told me, "Hey, Ku, do you want to draft?" Something like that. I know my draft is good, better than much. Nah, just kidding. No, just kidding. With Cuckoo drafting, T1 went on to finish first in Season 2 in their region, giving them a direct invite to the ANA Major. And to earn enough points for a spot at TI-10, all they had to do was win one match. Me and March keep talking to the boys that don't think about the TI and the result. Just keep thinking about the game. Don't focus so much like on TI. If we go to TI, you can think about the TI, right? But if we fail on any major, there's no direct invite for Southeast Asia. Well, they won that match and kept on winning with a solid run that took them to the lower bracket finals, ending with a loss to EG that was so close it hurt. Still, after everything T1 went through this season, Cuckoo had led his team to a spot at TI. Let's pretend you're in the grand finals of TI-10. Who do you want to play? I want EG. Why? Because I wanna see like so many Southeast Asian player on the grand finals. If EG and us is like on grand finals, we can put like 7 Southeast Asian players on one grand finals, and I think it's kinda good for our region. This is my 5th TI, I think, and most of my TI memories is like after upper bracket, we lose, then lose again. So if I'm gonna go back, I really want to raise the ages as a player, as a captain. My goal for TI is like keep grinding and do my best.
Well, you can see in their plays, especially obviously from yesterday's match against LGD, that truly T1 have been grinding. But is it going to be enough to get them through this lower bracket run? And are we going to see them play against Evil Geniuses? You want to see that, Lizard, surely? Yeah, I would love to see it. Can't happen in the finals, unfortunately, but it could still happen down bottom because they're both in lower bracket now. So did I just say that I would like them to lose? Actually, they can continue here. It's the lower bracket. Yeah, sorry, how many games do they have to win? Is it this one? Probably next round they would meet. Yeah. Both teams win. Yeah. I wonder if we can actually bring up the lower bracket, if that's possible, and then we can actually have a look at it and we can see how that would happen if it can happen in the lower bracket, because it would be kind of cool to see basically who's there. Thank you so much, production. You are the best. So we've got Team Spirit versus OG. And then... So it would actually be the next round instantly. Yes, yeah. so because their round 2 happened yesterday. So T1 versus Alliance, VG versus EG. So in other words, we could actually see that matchup in the next round. We could see 7 SCA players play the game from EG versus T1. It would be hype. I would be really happy for the whole region as well, because it's so talented. Talking to any players, you know for a fact that their pubs are probably the most skilled, but also the most chaotic. And they take a lot of pride. I mean, we saw it there several times when Cuckoo was talking about qualifying for TI. He's like, he knew if they didn't do well enough for the Ani-Major, SCA may get one less slot at TI. So, he wanted to do well and represent his region. Even looking at the SCA region, you have 2 players on T1 who are the first Indonesian players to play at TI. So it's a big deal for Indonesia, the country, for the whole SCA region, that they're kind of like the last hope for SCA to do well here at TI. And it is a shame that we lost Fnatic in that match against Team Spirit yesterday. But at the same time, I mean, they made a player change just before their qualifier, and they still managed to make it through the best of ones here in the lower bracket as well, and make it through to a best of 3 on the main stage. So it seems like the future's looking bright for this region, Owen. Oh, absolutely. I mean, I'll go straight up and say my bracket predictions. I have T1 winning this whole tournament. Because I was just been so impressed with the improvement of them over the year, over the season. They came, 3rd at the last major. They just took a game off LGD. That sort of sold me enough. I think at the least we're going to see them get to the grand finals, and I think they can absolutely do it. This would be the year for Cuckoo to finally step up to the end here with an SEA squad. That is it's quite the endorsement from Mr. OD Pixel. Are they using your voice line in game? And they should, shouldn't they? Yeah, go T1. Cuckoo, you better buy my voice line. This is why I'm excited to interview the players. I've said I've shouted him out in cast enough. It's time for him to shout me back. I feel like every single game that I cast T1, it's always like Cuckoo this, Cuckoo that, Cuckoo. He's just making so many plays and making all the moves. He's always getting us excited. And they're letting me loose on the players later. So if you guys have got any requests, if you want me to talk to the players and just be like, hey, I've got these friends on the desk. They've got these cracking voice lines. I can just pitch them to you. They're going to be so annoying to your enemies. They're going to win you TI OG stuff. Who's in? Sign me up. Yep. Amazing. All right. Well, while we wait, I believe a PC has just been swapped out. We're going to have a little bit of fun here at TI because we have got a rapid fire session with Team Alliance. Welcome back. More rapid fire questions coming your way. I'm joined by Nigo Baby. I'm here with FNG of Alliance. Welcome, my friend. Yes. Who is, in your opinion, the worst teammate in interviews? That's a rough one. We're all pretty bad at this. So, it's hard to say. What was the last thing you ate? Fuck. The memory's so bad, you know? You don't remember what you ate? FNG, what was the last thing you ate? Bulba. Sorry, not the player. I mean, Bulba is a Belarus word for potato. Potato? Yes. Okay. Not the player. I'm sorry, Bulba. Potato. I'm sorry, Bulba. Everyone's going to keep that one going now. Can you tell us there, Limp, what about the last movie you watched? Actually, we watched Dune together. I wasn't really into the story so much, but 6 out of 10. Oh, you're going to make a lot of Dune fans unhappy with that. Wasn't my type that much. And you know a lot of people are waiting to watch that movie, and you're one of the blessed people. Yeah, I felt like they released it very early in Ukraine for some reason, but I'm not sure why. Can you tell me the last person you called on the phone using your voice? My brother. I mean, he was like, can you prepare better? I'm like, we're doing the best we can. He's like, did you prepare my strat offlane Medusa? I'm like, you don't understand Dota. No, I watch a lot of Dota. I mean, like, typical browser who's like, he knows what you're doing, but he doesn't understand it at all.
What a family affair for Alliance there. And if you want to catch up with Dakota and the gang, he's involved in The Late Show with Mr. Piri and Flack. So check that out tonight. But also, I want to see movie reviews with Alliance. I mean, they were quite harsh on poor Jude. They were really harsh. Did you watch it, guys? No, I haven't seen it, but I'm excited to see it as well. Yeah, I was waiting to go watch. I'm also in Ukraine, just like Alliance was, but I didn't go before TI. Now they kind of ruined it for me a little bit. Whose fault is that? Yeah. Now you've got the spoiler, the storyline. It's a 6 out of 10 apparently. Here I was hoping Alliance would do well, and now they're going off Flaming June. They're dead to me. Okay, so now you're saying T1. Who do you have winning your bracket again? I had Secret EG in the finals. Okay, it's a classic. Yeah, it's a bit hopeful. A bit hopeful. I mean, is it classic matchup? Is it a, is it an uninspiring? Not uninspiring. It wouldn't be an uninspiring matchup at all. It's just something that I think a lot of people would expect is all. Sorry, that sounded terrible. Yeah, I think at this point it'd be a bit of a surprise. I mean, EG have to make such a long lower bracket run, and then for Secret, I mean, they took out OG, but it's still a tough road for them through LGD as well. So yeah, the word I was looking for was obvious. I'm so sorry, Gods. Oh, you're good. Lizard, while I try and gather myself and remember that I'm meant to be a professional, what about you? No, I wasn't any different. I was just as bland as Parker when it comes to my predictions. Yeah, it was, what, PSG.LGD and OG, something like that. So yep. Very similar, very similar. No T1s I feel in the like mine's finals. a bit spicier than an LGD OG, you know? Actually, it is. Actually, it is. I give you that. That's true, but you don't want to upset the OG fan base. For sure. Hashtag DreamOG. I'm right there with you. I've been practicing my no-tail hair flips. I think they're going to be the first team in esports who are going to be sponsored by hair products soon. Oh, those hair flicks are amazing. The moment they uploaded a picture of no-tail, I tweeted that this hair already won TI. I don't care whatever else happens when it comes to pictures, when it comes to hairstyle. They have not only no-tail but Thompson as well, right? With long blonde hair. Their coach? Their coach, they've changed over this 2 years, and I would say for the better when it comes to when it comes to hairstyles. Well, you know what I've been very, very impressed by? Is the suits that you guys have been rocking. I would like to wear a suit as well. It's just that they don't fit me. Right now, they really do not fit me for kind of obvious reasons you probably can't see because of this laptop. It's hiding something. I'm clearly not trying to, because that would be impossible. But you know what? Over in the draft panel, we've got quite the spectacular look, and I would really like to show it off right now. Again, 2 of our panelists getting the wine memo. We've got basically Zim Fandel from Weatherspoons, and then we've got Pinot Grigio Blush in the middle, and then we have the sommelier, Fogged. Sure. How are you guys doing over on the draft panel? Yeah, it's good. You know, I've never done a draft panel without a draft, so it's a very unique experience. Welcome to the draft panel. Welcome. Who has the best suits, you or Iceman? Iceman? Who's Iceman? Is that Tsunami? Iceman. Is that what we call Tsunami? No, you or Bruno? You or our friend Bruno? No, I think it's Tsunami. I think that's the right answer. I'm sorry. Tsunami. I modeled. Okay. I went to my tailor and I showed him a bunch of pictures of Tsunami. I'm like, can you make me look like him? And he's like, well, I'll try. He's like, the beard is on you. You've yeah, got exactly. to do the beard yourself. And the face as well, you know, and the voice. But besides that, I think I'm doing a pretty good job. Yeah. And it's your first TI as well. Sorry, I didn't he mean to definitely interrupt, has the color variety coming down, right? Like Tsunami tends to have, like, he's got these purples, these greens. Everybody else sticks to the normal colors. Now we got the pink, so yeah, sticking to it. Something incredible has been happening, which is we've been matching without even realizing. Not me. It's just Dota 2. It brings you together. Yeah. Team Merlot versus Team Pink, basically. Mm. It's like we've already set up our teams, and I'm so sorry to Team Merlot that I'm on your team by accident. Maybe I can be in the coaching role and just do the shoulder massages. I can do a march, coach march, and this is my technique. What do you think? Oh, it's terrifying. That's scary. That's the only thing I'm... Well, I thought I was about to say that's the only thing I'm good at. It turns out I'm not good at that either. I'm going to ask about your brackets as well. I'm going to ask you to kind of predict the winner of TI right now, because why not? We've got time. PSG.LGD.
I was gonna say Vici originally, but I'm leaning towards LGD now. Yeah. I had LGD IG finals. Okay. LGD winning. Yeah, me too actually. So definitely it's going to be China's year, you're thinking. Okay. Any particular reason why? This is a really stupid question. They're two of the best teams in the world right now. But you know what? Answer it anyway. Why? Just dominance throughout group stage, dominance throughout the year, comfortable players, powerhouse players, and I think there's a lot of clutch factors that comes into once you get to the grand finals of these like powerhouse mid players in particular, and I think LGD and IG literally have like my two favorite mid players at the moment. So. You don't think that Arme is going to be haunted by TI's past? No. I hope not. I don't think so personally, because he's just been playing out of his mind. He's been grinding pubs every day. I initially had LGD IG finals as well, but I think we might see LGD VP in the grand finals. Oh. VP? Is that because of their performance yesterday? Yeah, because typically they do choke on main stage, but they didn't this time around. And I think they've got a lot of potential that might actually just surprise everybody. I was a fly on the wall in the interview between Slacks and DM. I thought I would shadow him and get some tips, and I have to say, he is so confident. One, incredible English, natural interviewee. I was quite jealous of Slacks, actually. But also, yeah, they're just taking it completely in their stride. And I suppose you've just had a win. Of course you're going to come into the interview room. Of course you're going to be feeling confident. But it does seem like there is something about these young players who've grown up watching TI where, of course, they care, but also they have this phenomenal self-belief, and I kind of want to read their self-help manuals. Listen. Yeah, I think it's actually very specific to VP. They consider themselves like this new generation, and they approach TI like, step aside, boomers. We don't need any of your advices. We're going there with our own strategy, with our own belief in ourselves, and we will take it. There's quite a lot of optimism surrounding them at the moment. You feel optimistic? I feel optimistic. What about you guys? Obviously, I think you do. They went for the strat where they pretend to reveal other strats in an interview, and they're like, we got you. We were actually saving a bunch of them behind, you know, because DM was very talkative in that interview. I was very surprised. Usually players don't say as much. So I'm hoping that's what they're going for. It's the mind games, right? Right, Lizard? Yeah, for sure. Yeah. That's it. We got to cover them a lot in DPC, and sometimes, you know, maybe a little bit of overconfidence was a bit of their downfall. So that's one thing where I always have to be like, you know, VP, you can have that confidence, but rein it in a little bit. You have to give some respect to your opponents. They're here for a reason too. So, you know, I think they are a super dominant team, but like in DPC, they had some games where they literally would give the opposing team their best heroes, and then we'd be like, why'd you do this? And it'd be like, because we wanted to challenge ourselves. So sometimes I think you got to be a little bit careful with that. Some things linger on from the old VP. The old VP, like, historically did like A to Z challenge, trying to pick every single hero in a turn. Yeah. They never picked the same hero twice in the same tournament. So some of that, you know, bravado still remains. And that same bravado and optimism can come to haunt you a little bit, because as Evo said, during that same interview, he was pretty much revealing what their most comfortable strategy is. He said, oh yeah, this is our most comfortable draft, and we were happy to play it, and we won with it. Well, guess what? Now everyone knows what's your most comfortable draft. It might be a little bit of a problem, but if you adapt to it, I think you can make it work. Surely you can also see that, though, by watching the games. It's hard to tell the mental state of the players during the game, so having that information it's like the confirmation, as Lizard says. So. Yeah. Lizard and Evo. Evo. I like that Our two favorites. No, I think with younger players and less experienced ones, anxiety does play a huge role in how they perform at TI, and we saw that with Beast Coast, who a lot of us had really high expectations for. And I remember an interview that we did with DM at ESL One Fall, and he said that they've been changing the way that they approach life recently. They brought someone new into their team, and he's just been adding routine and discipline and structure to their schedule and actually making them like go outside and things like that, and it's been really good for them. But the thing about VP is when they start to lose, they kind of fall apart, and we really haven't seen them yet. Because I remember they were willing to do interviews at ESL One Fall up until they lost one game, and then they just didn't want to talk to us that day. So there really could just be some psychological block that they have going on. They also represent the whole region, right? And when you're representing Eastern Europe, do you have a lot of pressure on you? There's team spirit, though. Yeah.
That is true. No, for sure. Just the main organization from the region. Another man who likes to pile on the pressure is Dakota. So let's find out how T1 fared under his rapid-fire questioning. Hi, welcome back to more rapid-fire question action. I'm here with 23 Savage of T1. Welcome, Carl. How you doing? I'm good. You ready for some rapid-fire trivia? I'm ready. Who played in the grand final of the first TI? Navi. And? I don't know. Nobody knows the other team. IG? Close. Another Chinese team. Rhymes with Fleabone. Navi and IG? Oh, close. Navi and Ihom? You're right. Good job. You'd be surprised how many of your teammates said IG. Who is most likely to yell on your team in a match? Yeah, I think it's me. You get loud? You yell? Yeah. Okay. I'm always hype. You're always hype? Yeah. You seem pretty hyped for this interview. Can you tell me the worst roommate on your team? Can I say coach? Of course. I think coach. Who's the best player on your team? Me. Nice. Who's the most improved over the last year? Carl. Can you tell me the last movie you watched? Squid Game. Squid Game. Yeah. Squid Game. You watched Squid Game? I watch Squid Game. Squid Game. Yeah. Of course. How do you think you would do on Squid Game? Maybe gonna die. Like. I think I died. I was right at the end of the interview. I can't do much. I could barely do it in the first place, and now that's absolutely killed me. I like that that's also a movie, and I know that obviously it's a TV series, and obviously English isn't the first language. But now I'm thinking about a 9-hour Squid Game movie, and I could only watch one episode of that thing at a time, so I cannot imagine the tenacity and also the trauma of watching 9 hours of Squid Game. That would be a little bit too much, even for a Dota player. We go through it one game at a time, but even for us, it would be too much. Yeah, we're used to the suffering, but there's still a limit before you gotta kind of take a step back. Do Victor, would you commentate a Squid Game? Oh, if the Dota players were playing it, absolutely. You know, let's get all the Dota players in. Every much, we're playing for so much money. You know, we could put a bit more on the line than just a bit of video games. Come on, let's make it interesting. Let's make it exciting. Next year, we'll be there. We wouldn't have a scene anymore. Wow, there's so many players. We've got just a few use we the can get retired players, you know, the All-Star game or something. There we go. Not doing anything else. Go and play a bit of Squid Game. It's nice. Which Dota professional would win Squid Game? Oh, I'd have to go with Fly. Fly. Yeah, Fly. Fly would win. Fly. Probably. Yeah. Do you think it's going to be an awkward dinner? Again, I don't want to do spoilers. I want to be careful, but like Fly, No Tail, Puppy. That would be a very interesting trio to watch out for. Probably the one that Owen would be most typecasting. Yeah, that'd be hype on. That would be hype. Yeah. It's fine, right? I'm going to order myself a gold animal mask. Again, trying to avoid spoilers here. So moving swiftly on to some interesting stats from TI. I think these are overall TI stats as opposed to TI 10 statistics. We're going to bring them up in our impressively massive monitor. Unfortunately, you cannot buy these in the secret shop. Over 10 years of TI, 1,598 matches played, and I think Owen has cast approximately 600 of those. Any highlights? See, that's a lot, maybe. Any hype from all TIs? Or from these stats specifically. I mean, there's a lot of creeps. You know, I feel bad for the creeps here. 2.8 million creep deaths. You know, it's not talked about enough. If we get enough in the chat, please, for every single creep that was killed over the 10 years of TI. It's not their fault they became creeps. Exactly. I thought more would be killed. I'm a bit underwhelmed. You want to see more Are you really underwhelmed? I'm a carry player, yeah. I want death to all the creeps. That's what they're there for. I kind of want to see what the last hit statistics are. Just because that's when we can get properly judgy and pretend that we would be able to do so much better. I think we might even have some more stats. Oh. Team total wins. There we go. Interesting that OG have the least amount of wins, but you have to remember that when they won TI 8 and TI 9, it was through the kit, and obviously they formed, I think their first TI was TI 6? I think so as well. Because Monkey Business formed 2015, I believe. Yeah. Yeah, and then they went through a couple of majors and then straight into the TI. That's probably why they have the least amount. Keep in mind that PSG.LGD, have they been at every single TI since TI 1? Yeah, they're just this historic TI organization. EG has, and I'd say, look to the other team next to them. EG has had so much TI success. This is a team that just has been like a top, you know,
4 to 6 team in almost like every TI, it feels like, other than 1 or 2 years. And when you look at IG, it's pretty much the same situation because T1, most of their players in that interview thought that IG was the team that won TI1, but it was actually the TI2 that they won, if I'm correct, right? Yep, they won that one over Na'Vi, and yeah, all those orgs up there, fantastic historic orgs. LG, the only one that hasn't won a TI, actually, right? Yeah. Yeah, so maybe this is the year. Well, unfortunately, we've still got some technical difficulties in the pods going on, but it's fine. Stay with us. Stay with us. We could do a little fashion show. We're not going to do a fashion show. We're still going to talk about Dota. Don't worry. I'm not going to start talking about Counter-Strike. Don't switch off. Stick with us. In terms of yeah, I mean, I did mention it briefly earlier when we were looking at how many matches are played, but Aaron, is there a particular match that you've casted at International that has really stood out and stayed with you? I know there have been quite a few. Well, I mean, it's probably obviously the Seb game, isn't it, right? TI Grand Finals, when OG do it. That's probably one that stands out the most that I casted. I think outside of that, of course, there's a lot of fantastic games. I mean, was it what it was Ice. What was he playing on? Was it back on where the one that Cap casted? That was one of the considered one. Oh, of the EG Ehome, yeah, yeah. That he was playing carry. Yeah, in terms of just all games, that was quite a spectacle. Do you get royalties from the Seb scarves? No, I should, shouldn't I? I should. You know, I'm very bad at business and stuff. You know, I like to do things. People can make money out of me. I don't mind. I'm just here for the good times. OG, you've won if you want to send twice. me a check in the post, though, OG, I'll take it. You've won TI twice. You don't need the money. This man, however, look, he's not even wearing a proper shirt today. I've not even only got a wore scarf. T-shirts. Oh, it's cold Absolutely shocking. And you know what? We are going to have to take a short break while we get this technical stitch sorted out. I'm going to grab my little screwdriver. Yes, it is maroon. And we will be back with you as soon as we can. Technical stitch sorted out. I'm going to grab my little screwdriver. Yes, it is maroon. And we will be back with you as soon as we can. बकचोदी कर लो सालो. कोई नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुआ अभी तक, ज़्यादा लेट नहीं हुआ. 12:30 बजे चालू होने वाला था, अभी 1:30 बजे. 1 घंटे लेट हुआ और 1 घंटे लगेगा फिक्स होने में. Rank. Let's play. तो नया हीरो प्रैक्टिस करते हैं. Let them try and stop me. रन रग मिलता है तो मिल नहीं रहा है ना, कोई सब देख रहे. टेक्निकल लोगों का टेक्निकल इशू हुआ तो जो डेस्कटॉप पे प्रॉब्लम हो रहा है.
इनका जो डेस्कटॉप है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है और ये बंद है. Your turn to ban. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. I am Inai. Moving without traveling. Prepare for I know the way. With purpose. Could it 30 be seconds otherwise? to battle. Manual relocation. Other One of the options heroes are mere experienced some illusion. technical difficulties. टर्बो एंड टर्बो में भी पहुंच है. हेलो, क्या हो गया? T1 नहीं देख रहे हो क्या? टेक्निकल डिफिकल्टी, सिस्टम उड़ गया उनका एक. लॉल. बोला क्या करूंगा, बैठ के बोर हो रहा हूँ मैं टर्बो ही खेल लेता हूँ, ऐसे खुजली करता हूँ. क्या मैं फिर से क्या हुआ? लेजेंड एंशिएंट पहुंच के फिर से नीचे आके 2 रैंक नीचे आया मैं. तो लेजेंड 3 हुआ, बहुत रैंक नीचे आ गया. फिर से एंशिएंट हुआ. मतलब ऊपर नीचे हो ही रहा, मतलब वो एंशिएंट का वो. पैकेट में. हाँ, वो मैंने रियलाइज किया जैसे मैंने एंशिएंट टच किया जकीरो से. मेरे को वो साइलेंसर ने मेरा औकात दिखाया, बोले मेटा समझ पे और धोया मेरे को उसने. तो उसके बाद मैं सोचा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ये करंट रैंक अप में, कि बहुत ज़्यादा बाउंसी हीरोज है. बाउंसी हीरोज मतलब Escape उड़ते वाले. उड़ते हाँ उड़ते उड़ते मारते, तो उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था. इसकी वजह से मैं जकीरो खेल रहा था कि मैं पक, स्टॉर्म, क्वीन ऑफ पेन फिर यूज करके मॉर्फलिंग. आइस पार. नहीं, मॉर्फलिंग भी नहीं. मॉर्फलिंग भी नहीं उड़ उड़ के नहीं आ नहीं रहा नहीं है. मिड. नहीं, उड़ उड़ के नहीं. वो मॉर्फलिंग तो पैसिव ही रहता है, मतलब थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, तो दैट इज फाइन. बट वो लोग हीरोस आते हैं, उनको पकड़ नहीं सकते. और उनको मंकी किंग ये सब उनको पकड़ने के लिए ना बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है. मतलब 4 लोग उसके पीछे घूमते और बाकी का देखते. तो ये तो जकीरो लेने की वजह से मैं उनको यूज करके आइस पर डाला, तो ब्लिंक नहीं कर सकते. मरने का कंपलसरी मरना पड़ता. वाइड स्पिरिट है सब. तो फिर बाद में साइलेंसर आया, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. रूबिक भी थोड़ा तकलीफ दे रहा था. तो मैंने बाद में रियलाइज किया कि
और मेरे यहाँ पे कैरी अच्छे नहीं हो रहे थे, मेरे यहाँ पे कैरीज अच्छे नहीं खेल रहे थे, तो इसलिए मैं आजकल ग्रिमस्ट्रोक की स्पैम कर रहा हूँ। मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ग्रिमस्ट्रोक से मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एग्नम बना के उनके इल्यूजन, उनके कैरी को कॉपी करके वो पीके भी रहता है कांस्टेंट वो कॉपी इल्यूजन को, और उससे मैं काफ़ी मतलब कम से कम मैं भी कैरी खेल पाता हूँ उसकी वजह से, क्योंकि अभी उनको मतलब झेपरा नहीं है कि ग्रिमस्ट्रोक, अभी कल का तुमने जो गेम देखा रहेगा ग्रिमस्ट्रोक लिया था जिससे वो ये हार गए, कौन सा टीम था वो, लोअर ब्रैकेट में चले गए फैनेटिक और T1 ने ग्रिमस्ट्रोक उठाया था फैनेटिक ने, तो उसने ग्रिमस्ट्रोक क्या बोलता है कि तेरा कैरी का मैं कॉपी करूँगा। हाँ उसका एग्नम सेप्टर ओपी है। हाँ तो बेसिकली पैसिव जैसे PL WK जगरनॉट इनका पैसिव है, और अगर तुम ऐसे हीरोज लोगे जैसे कि स्वैन कुंका तो इनको कॉपी नहीं कर सकते, इनका डैमेज किल बेस्ड काइंड ऑफ है। व्हाट दैट मींस मतलब वो गॉड स्ट्रेंथ तो तभी खुलता है जब ये होता है, राइट? तो इसलिए कोई अभी तक उठा नहीं है, तो लूना भी ना उठा है तो फिर भी मेरे को मतलब एक इल्यूजन निकालने का, वो पुश कर देने का। दो कैरी उठाया तो बहुत अच्छा, अगर मैंने दोनों को अल्टी में पकड़ा और मैंने वो इल्यूजन कॉपी का डाला था, दो कैरी के इल्यूजन कॉपी होते हैं, एकदम पागल जैसे मारते हो। Each step taken, a gift from the void. I refocus. The natural course. Fear nothing but. Creation is. My embrace awaits. In preparation. Killing spree. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. I must be attentive. मेरे को लगता है रेंज ग्रिप बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसको आधा होने के बाद तो थर्ड स्किल से चेस करने लगा। ये गेम में वो टॉपसन वाइट स्पिरिट खेलना पड़ेगा। टॉपसन ने कल वाइट स्पिरिट बहुत मस्त खेला था, उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था, मतलब कैसे कैसे सरवाइव कर रहा था। हाँ तुमको ये गेम टॉपसन वाइट स्पिरिट खेलना पड़ेगा। मतलब फुल मैजिक। ओके आगे बहुत सारे फिजिकल है। I walk the mortal way. Do you think I've not seen? लास्ट हिटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। No longer hidden. Moving without traveling. प्रैक्टिस कर रहा। It was always so. वैसल बनाओगे तो भी ठीक है वैसे। A dominating performance. तुम्हारी टीम में भी बना रहा है। पर बना। I do not hesitate. Everything in its time. The easy way. Oh. Trials. There's nowhere to run. It seems promised. तो जल्दी करने का बंदे से। An echo from the void. The void path proceeds. मैं खेलता नहीं हूँ ना, ऐसी प्रैक्टिस है। मैं सपोर्ट के साथ विकी बहुत अच्छा मेटा सपोर्ट बन सकता है। A voidful procession. क्या खट्टी है। मिड लिया और फोका उसमें। टॉपसन कंट्रोल कर डीडी पे
पूरे टीम को हील कर रहा था वो। I know the way. Other options are mere illusion. तुम्हारा प्रेडिक्शन कितना जा रहा है? As I guard the temple, प्रेडिक्ट नहीं किया। ओ fear no blade. क्या प्रेडिक्शन? Could it be otherwise? पैरेकेट जो भी है। समझा नहीं मैं। ओ कौन जीतेगा वो वाला प्रेडिक्शन? नहीं किया मैंने। नहीं किया, एकदम भी नहीं किया। नहीं क्या फायदा, नहीं करके भी क्या फायदा मेरे को। वो वाला चेस्ट मिलता ना, वो गोल्डन वाला। मैंने तो ये खरीदा ही नहीं तो बैटल पास नहीं, वो फ्री में ही दे रहा है ना। क्या करूँगा मैं यार, को स्किन्स में यही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। Powerful manifestation. Do you think I've मुझे लगता है तुमको छोटे क्रिप को लेकर तुमको छोटे क्रिप्स से ना उनके यहाँ पे काम करते सर वो ऐसा है, तो दिमाग क्यों कर रहा है? तो जस्ट ये हीरो प्रैक्टिस करना है मेरे को। ड्यूल्स क्यों बना रहे हो? सर नो स्नाइपर रैग्नम बनाएगा। ड्यूल्स मत बनो, सीधा रैग्नम करो। स्नाइपर है तो क्या हो गया? नहीं मतलब स्नाइपर को पकड़ने के लिए बोल रहे हो क्या? तो भी पकड़ सकते हैं, बच भी सकते हैं उसके अल्टी से। बचने के लिए तो तुम्हारा डिसेबलेट है ना वो सेकंड। उनको ये भी चाहिए उसके लिए, अब जो है उसको फिर से क्यों बनाने का? I reach from the void. Manual relocation. तो ये लेना चाहता हूँ मैजिक, क्या वो डैमेज डैमेज नहीं, वो इंट का वो लेना चाहिए था पहले वाला। इंट का डैमेज है वो, एक है डैमेज, दूसरा माना रीजन। नहीं एग्नम का बोल रहा हूँ। ओ पॉइंट बूस्टर। समझ गया। मैं भी वही गलती करता था ग्रीन पे, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को स्लॉट खा रहा है और अनऑरिजिन डैमेज है जो भी कैपेसिटी भी बढ़ता है तो made for felling with purpose. One of the heroes experienced some technical difficulties. In preparation. Never a false step. Your bottom tower is under attack. Could it be otherwise? Your bottom tower is under attack. लेट हो गया। तो ये फिर से अरे तुमको डालना चाहिए था OW। हाँ नहीं माना नहीं था डब्ल्यू का लिए, मैं सोचा अल्टी मार के निकल जाऊंगा। नहीं था माना, सच में था। मैंने लेवल अप किया था। हाँ मैंने देखा नहीं, मैंने लेवल अप किया, मुझे लगा मैं अल्टी मार के निकल जाऊंगा, बट गोली बहुत तेज था, बहुत तेज गोली था। Like breathing. I do not like to be touched. Each step taken.
Other options are mere illusion. Where to next? Welcome, Something wicked at your middle tower. no longer hidden. I know the तो way. हीरो को like practice करना. Always watching. Bounty. Novel. There's nothing for you here. There's nothing for you anywhere. It was always so. Well-gotten gain. You think you're nuts? Okay. Manual relocation. Moving without traveling. Was the end of your top Could tower. it be otherwise? Your movements, if my enemies had hope before, none remain. Call it a premonition. स्नाइपर टर्बो के लिए अच्छा है. तो मार सकता है, टावर का डैमेज भी कम होता है. A void for procession. No longer hidden. Your middle tower. Out of step. Your bottom tower is under attack. As I guard the temple. जिन होकर कहाँ मार रहा है. हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है इधर. कुछ और डैमेज चाहिए. Perhaps I was hidden for too long. Your bottom tower is under एक टर्बो में जो बड़े बड़े कूल डाउन है स्किल का, वो बहुत गंदा है. लाइक वो सब हीरो लाइक ज़ीयूस, टाइड हंटर. Proceeds. Your bottom tower. This will open a dark path. A movie? Okay. Your middle tower is not doing well. My work here is not yet done. Your bottom tower is being invaded. My diminishment. Do I choose this Something path, wicked at or your does it middle choose tower. me? Other options are mere illusion. I must be attentive. The deep shadow that me, I feel more myself. I do not hesitate. क्या था बट हुआ नहीं था. Step. I know the way. I walk the mortal way. I
novel. Do I choose this path, or does it choose me? Do you think I've not seen this? Could it be otherwise? We cannot touch the void. Killing spree. Killing spree. It seems promised. Killing spree. The only way to travel. The void path proceeds. Your bottom tower. Dominator, I guess. Spotted trouble at your top tower. The natural course. One moment. I do not hesitate. Myself. Manual location. Void. Double kill. Killing spree. More than 2 kills, but less than 4 kills. Call it a premonition. With purpose. In preparation. Your top tower is under attack. The enemy's middle tower is torn down. Your top tower has fallen. Too bad. Normally. इतना हमें like turbo में ये सब use कर रहा है. It won't keep for long. Do you think I've not seen this? No evidence. Nothing comes. No longer is. I walk the mortal way. Nullifier. The void path proceeds. The next label play. The next label play. Could it be otherwise? There's nowhere to run. They test my faith in another touch. My preferred pathway. Not quite as slow now. I must be attentive. Call it a premonition. Phantom strike. The power of the void breaks across the plains. It was always so. Your bottom barracks are under attack. As the face of the void, no mortal hand can touch me. In preparation, the natural course. And mortals underestimate its power. The next label play. When the time is right, I do not hesitate. What chance have you? Dominating, I guess. I'm not ready.
illusion. When the time is right. I know the way. Do I choose this path, or do I create opportunity? A voidful procession. Your enemy's middle tower is gone. I want the hidden path. Dire just fortified their structures. Each step taken. With purpose. I walk the mortal way. Strive in vain. Well-gotten gains. It was always so. Do you think I've not seen this? A taste of the void. In preparation. It seems promised. The next label play. The next label. No. Moving without traveling. Easiest money of my life. The next label play. I want the hidden path. Do I choose this path, or does it choose me? Call it a premonition. Normally. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom barracks are shaken. Your middle barracks are no longer. Your middle barracks crave your attention. Your middle barracks are no longer. I have reforged myself the fabric void. Could it be otherwise? Echo from the void, where a moment. I return to my Exactly, Jagannathan. कोई फायदा नहीं है. ignorance take you all. My finest work. अच्छी. Normally. Something wicked at your 2 मिनट चालू हो गया. I think चालू हो गया. And so ended the story of your middle tower. Your middle tower is not doing well. खत्म क्यों नहीं कर रहे लोग like literally. Is under attack. That was a scramble. Like not even ending. टर्बो में भी किल के लिए पड़े. मैं टर्बो में ऐसे लिए खेलता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस करना है. कोई हीरो मेरे को आता नहीं है. आई वांट टू प्रैक्टिस. मैं अपने गेम देखना चाहूँगा. मुझे से. What they had hoped, just basically just bombed out both times. So something wrong. What did you?
mastered it at that event, and they did such a great job just playing the map at a different level from other teams that eventually they got caught up to, and then they started losing in subsequent tournaments after TI. But I think S4 really a clever player. So hopefully the prep that he has done going into this will show. But so far so good for T1 in the lanes, I would say. Carl in the mid lane, Lina against Ember. I have a loss. 3 loss aa raha hai mera. No, this reminds me of a game we had yesterday. Was it Emo who played Ember against Shadow Fiend from ज़्यादा loss आता है तो मेरे को 2 days ago by now. Time flies when you're having fun. But it was the IG versus Team Spirit series in the upper bracket, where Emo got a last pick Ember into a known Shadow Fiend. Yep. So picked it into a losing lane, but they assessed that it was still worth it for its overall potential. And they did end up winning that game, obviously. Been a similar situation here. Lina's a tough met. You're not going to win this lane ever if the players are equally matched. And I think Carl against Limp is a pretty fair lane matchup overall in terms of just raw lane mechanical skill. So I would imagine Carl will be pulling ahead here. Yep, I mean, relatively even to start things up. Of course, it is early, like you said. They're going to get each respective water rune. Nico Baby this time around will be playing the Morphling in this bot lane. And we can talk a bit about Dawnbreaker, who get it canceled there. FNG Shockwave brings him back in. Zephyr secures the first blood with that last right click. When you're playing these squishy 5s against Dawnbreaker, you need to be quick on your fingers. You need to be ready for that play to come. As soon as the Celestial Hammer goes out, you have to run here. Hansken hesitated for too long there, or sorry, FD, not Hansken. Let's focus on the right player here. Hesitated for too long with that Earth Spike and ended up taking 2 attacks from the Windbreaker. Yeah, that needs to get stopped instantly. As the hammer gets thrown, you have to stun, and it gets punished there, and Zephyr managed to get first blood. Very good for the Dawnbreaker. We'll be getting boots as a reward. This hero is exceptionally good at chasing down heroes because it's just so strong in lane. So these freshly picked boots look for Zephyr to just go aggressive. He's going to take some damage here. We've talked about the Dawnbreaker support pass, and some lineups feel a little iffy, as it were, especially as a support. Obviously, she's going to be very good at the laning stage, as we're seeing right now. But this game in particular, there are a lot of stuns that set up her ultimate for the later stage of the game. You have the Nightmare, you have the Fiend's Grip, obviously. LSA's pretty low cooldown, Wraith, Fire Blast as well, and then huge RP. So literally every hero can theoretically set up a Solar Guardian, which, I mean, I think you and I agree is probably the most important aspect of that hero going mid-game and beyond. Absolutely. Oh, Top lane, White Bond going to get caught out, takes considerable damage, but will live through it. Nightmare into the Wraith Fire Blast now, 23 damage, locking S4. He will be able to walk away as those little silly buddies are chasing him. The boys, as we call them. The boys. I think that's copyrighted by a TV show. Oh, say that. Okay, well, hopefully they're not watching that. There's probably not that much overlap between the writers of that TV show and TI, but you never know. You never know. You get surprised sometimes with where people's interests lie. So, especially you. Yeah. Yes. Because you have no interest. That was awesome. Zephyr makes it to the top lane. Wraith Fire Blast into the Starbreaker. Burrow Strike is there in time for S4. But he's going to take so much damage from that hammer. I think one saving grace for Alliance here against the Dawnbreaker ult, like we talked about. Yes, you have a lot of good combos with it, but it's not a good Ags game at the very least. There's no hero on Alliance that really suffered against that 60% evasion. Morphling a lot of the time can, you know, go for more of a magic-based build with E-Blade, and I think Waveform, attack talent, and all this stuff that comes way later in the game, I can't miss. If I'm not mistaken. I'm actually not 100% on that. Good with one bomb. And that's a play out to Looks like Kuku might take a tumble here. Has his skewer available, but it's just completely stun locked by Alliance, who get their first kill of the game and this series. Yeah, they can easily take advantage of that with the Dawnbreaker rotation top. They know they're 2v1. Lion, one of the best supports in the game, 2v1. Not that good 2, especially as 5, but whenever you outnumber, you just have so much lockdown for your carry to just go to town. And they do kill Cuckoo's mag. So he has still managed to almost find level 5 down here, so I don't think Cuckoo is too concerned. The game plan is coming along nicely. Lean and Wraith King are having total free games, basically. Team के captain offlaner है. Not the biggest of deals, but obviously Alliance will take what they can get in these lanes. Now, why I'm not able to secure the rune. Limp will still get the invisibility. As looking at the overall CS here, let me bring it up real quick. Wraith King
sitting at 38 and 10 versus a 33 and 8 of the Morphling, so relatively even. Of course, 23 Savage will eventually go into the jungle. This is the thing I like about Wraith King as a position when it kind of creates space for some, like a position for like Dawnbreaker theoretically to get some once he enters that jungle. Yeah. My full time, if that's even a word. Just go ahead. That's called part-time. Part-time job as S4 gets the purple strike off. Whitemon taking some damage, but the cookie ends up saving S4 for about 2 seconds. But Zephyr is there to clean up yet again. Gets to be everywhere. He doesn't even have his ult yet. He has a lot of freedom to move. Cuckoo's doing such a good job playing alone down here. He's almost level 6, so you don't even feel bad about this. Zephyr might even end up killing Hanskin here if Limp doesn't come over to help. He's going for it. Limp he has in the the hammer. And not going to pursue any further. Cuckoo getting some mana drained here. Has to skew out the safety, and that means he's completely depleted. Surely Zephyr doesn't do this, right? Okay. It almost looked like he was going to fountain dive at 7 minutes. Yeah. Learned from Cuckoo from yesterday. Just go for it, and then if you fail, you just write, we need wards. So that's true. He did have a ward. That is the play. Earth Spike into the waveform. Cuckoo looks to be done again. So 2 kills in this lane for Alliance. Yeah. Nico Baby and company. This game, which I mean, it's not like it's out of reach by any means, but T1 definitely off to a slightly start right now. And Nico claiming that is very, very good for his economy. 250 extra gold here, getting the treads blown out now. Very curious to see what build he goes for, right? Because as the draft panel pointed out, there are some aspects of this game that can be dangerous to Morphling. So you can maybe see him go for something like a Lincoln Spear against Bane, which isn't necessarily ideal. Okay, FNG in his first breaker, not fully connect on FNG. Lim gets the nice cookies and the regen rune, and Carl just getting kited around. Another kill goes the way of Alliance as FNG taking some harassment, but looked like he will live through the day thanks to the support of the rest of his team. Great rotation there. Bringing Hanskin was crucial to killing off the Lina. They're going to smoke here in full vision though. So T1 definitely know that this is happening. Let's see if they guess the right move though. FNG mana burning here. Zephyr's going to walk right into him. Yeah, the fact that Zephyr is level 4 despite being involved in so many kills is kind of weird actually. Feels like he should be a level right now, but he hasn't taken much lane. That's what you trade off when you leave the off lane, right? So that you give the Magnus the soak experience, and while kills are nice, if you don't soak up any lane space, you don't progress, right? So I think now that Zephyr is showing that he can even sit here all the way until level 6, because Ben will need the tome in this game. We might just park him here. Never refuse good. As you pointed out, top lane is also an option. You could just put the Dawnbreaker in the safe lane, put Wraith King into the jungle. But this way you're definitely going to get more gold on Wraith King if you let him take the lane and the big camp on S4, making sure that is not the case here. Digging that up with a bound, getting a boundary out of his good. Whitemon with a quick burrow strike. There's a stun from Zephyr. And S4 looks to be mega dead here. Actually does a nice job of sidestepping the Starbreaker, but it just delays the impulse here. Keep in mind, this is a Sand King with Vanguard against the Wraith King skeletons, and he's still dead. So you can't really be tankier than this at this point as Sand King with Soul Ring Vanguard, but it's not enough against these 3 heroes. Alliance looking a little bit lost over here in the triangle, I gotta say. They've been standing here for quite a long time, and they're just on top of a ward, so essentially kind of wasting their time. They obviously don't know this, but T1 are just not gonna go there. And you understand what Alliance are thinking. You're playing against a lineup that has Magnus Wraith King. You're assuming it's gonna be big Ancient stacks, but T1 honestly haven't really paid much attention to the area just yet, so I don't know if this is going to be something we see developing as like a new meta almost, where teams, because of the anticipation that the opposite team are going to invade a triangle, you just don't focus on it that much earlier unless you feel like you can clearly defend it, and you just don't next level thinking essentially. It's a Solar Guardian as well, but S4 able to get the burrow off in time, a little bit of distance, but again, completely outnumbered. ये बहुत अच्छा support बन सकता है future में. T1 in the vicinity. He is now 0-4. It was what Fogg was talking about. This happens in a lot of games for offlane Sanking, especially if he's left alone. And now, finally, all right, FNG, I think, took the Tome of Knowledge, so he's going to make a move with Limp. They have Finger of Death. Could very easily burst anyone they find, except Wraith King, who can, of course, put a point in the ult. They will find Carl. That would be a very big pick. Yeah, this would be looks like it's going to be an easy one on top of that. FNG gets his first finger stack of the game.
some pressure being applied. It's tier 1 उंगली mid की शक्ति in favor of Alliance. Do that in connection with the siege creep being alive mid, and he is going to tank this at least for a bit. Okay, searing chains with the Mortimer's kisses. Look, that's from super long range. Great anticipation as well. Alliance. Very tier 1 as well. Alliance, yeah, getting the tower out of that original smoke to move on to the Lina. That's a very high value play. More stabilizing the game with that, actually. They were 2k gold behind, but found a lot out of that. And of course, let's keep in mind, Nico Baby is getting a lot of space as well. Opting to go for first item Scotty here. Interesting choice. Wow, first item. Well, after more mass, but that's I don't know if I've ever seen that actually. It's not the most common build. A lot of the times you see Morph getting some sort of a build of like, well, sometimes you get Yasha, sometimes you get a full Manta, sometimes you see the Diffusal. It's a good game for that. Super good Scotty game against Dawnbreaker. And the likes of Bane's going to be taken out. Okay, 3 hit पे खत्म. 3 shots from him. I love Armlet on Wraith King. It is such a good item. Whatever you go out, if it's the Silver Edge build or the Deso, or I guess in some edge cases Radiance, I really like the Armlet first. It's such a strong peak already 10 minutes into 2 items. You saw him basically 2-shotting Lion there. You know, that massive crit. 270% critical strike damage on a 4-second cooldown is no joke. That's the old CK skill too. They kind of swapped. Yeah. CK. I guess people are more have an affinity towards Wraith King more than CK these days anyway. Yeah. Well, what they did do for CK though, they increased their chance, right? I think at some point the critical strike was 11% chance, now it's 33, and the numbers were obviously tweaked. 11? Are you sure about I'm pretty sure it used to be that. It's a long time. 11? We're both old. I'm gonna say 18 just so that one person in chat being old, okay? You have a lot of things you remember, you'll have a lot of things you can't remember, and a lot of things you might misremember, which makes for great conversation. Sometimes you're right, sometimes you're wrong, but at the very least, people are talking. Sometimes you're right, sometimes you're wrong, and you're always an idiot as well. Yeah, so. that's true. That comes with getting older. Indeed. Bottom lane, tier 1 tower getting harassed a bit here. As Limp & Company. This could be a strong flank area, yeah. Flank now T1. 23 damage. Someone's trouble. Handskin in the trees. If they can get Limp, that'll be the high priority target. Looks like it'll be Handskin instead. The rest of his team abandons him, but with good reason. Alliance stepping there with 1 death is very good. Considering what angle T1 got there, and how Alliance's heroes were positioned, that could have gone way worse. If 23 Savage could have found a priority target. The question is, does T1 actually want to push this? Because S4 looks to be mounting some sort of defense. S4 not too far away from a Blink Dagger himself. This wave will almost ensure that he picks that up, in fact. And with that, like to try to get something started. Of course, this is the beauty of Zephyr, like you talked about so many times. Or I should say, Dawnbreaker. 1 time. Well, we know we've talked about this twice. I did talk about it twice. We've had a couple games here. See, that's one of the perks of being old. You can just make, you know, once or twice. I don't know. You talked about it a lot, you know. Anyway, not that you rudely interrupted. Sorry. Solar Guardian just allowed you to be everywhere. It's like a mini haunt. Oh, not this. It's like a haunt on a support hero. You can push the lanes really easily and then join the fight whenever. Yep. And if you die, it's really not that big of a deal. All right, so if you're confused about what he just said, the point he's making is it's a global ability, okay? That was the point of the Haunt. It has nothing else in common with that ability. I really appreciate it. It is global. He's going to skew for at the fish. Is not safe. Be out as a result. S4 has the Burrow Strike to cancel the TP. Handskin and Company should be able to clean up Bane pretty easy. Actually reminds me, the extension was updated to a bunch of features, one of which was the most, what is community out well, what am I trying to say? The one that people want the most, which is the top has the skills videos. Very nice. If you don't understand the word that we're trying to explain in terms of the abilities, you can Dota में देख रहा हूँ और stream हो रहा है मेरे को भी इसमें ही देखना पड़ेगा स्ट्रीम पे डोटा पे आज का छुट्टी है तुम्हारा छुट्टी लिया है क्योंकि कल भी छुट्टी है तो यूजुअली मैं छुट्टी के वो नवरात्रि में छुट्टी नहीं मिलेगा क्या है ना कल छुट्टी है ना मेरे
नहीं नवरात्रि में जैसे वो बेगम को पूरा एक हफ्ते छुट्टी है। नहीं ऐसा नहीं मिलता भाई। हमारा क्लाइंट यूके का है भाई। हम तो क्या हुआ, बेगम का भी तो बाहर का ही है ना। हाँ बट मैं सपोर्ट वो गुजराती है, डांडिया खेलेगा। नहीं मैं सपोर्ट टाइप टेक्निकल सपोर्ट ऐसा सब करता हूँ, तो वो लोग ऐसे नहीं बोल सकता कि कुछ कर ही नहीं सकते करके। तुम गुजराती नहीं हो ना इसीलिए। नहीं गुजराती नहीं, हमारे क्लाइंट उसके क्लाइंट का ठीक है, ही इज ओके विद देम नॉट कमिंग, बट हमारे इसमें नवरात्रि इज लाइक तुम्हारा मेन फेस्टिव नहीं है ना, तुम्हें छुट्टी मिलेगा क्रिसमस में। हमारा कौन सा कैमरा है? मेरा उसका उनका कैमरा है, तो इंग्लिश वाले का। हाँ क्या लगता है कौन जीतेगा? तुम्हारा कैमरा भी एसके के ऊपर है ना? हाँ इसका साउंड ही नहीं आ रहा। इंग्लिश पे डालना पड़ेगा, तुम्हारा वॉइस बंद होगा, ऑडियो में जाके वॉइस को बढ़ाओ, सेटिंग्स में जाके ऑडियो वॉइस चेंज करोगे तो उनका कास्टिंग साउंड आएगा, नहीं तो कास्टिंग साउंड नहीं आएगा। उनका कास्टिंग साउंड नहीं चाहिए मेरे को, कैसे कास्ट वो कैसे बंद करूं? सेटिंग्स पे जाओ, ऑडियो पे जाओ, अभी उधर वॉइस वाले को 0 कर दो। नहीं म्यूट को। हाँ म्यूट ऑप्शन है क्या? म्यूट ब्रॉडकास्टर को ब्रॉडकास्टर का ऑप्शन था, अभी नहीं है पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ उधर वो सेटिंग्स में जाके वॉइस है ना, इन सेटिंग्स पे ऑडियो सेटिंग्स, उधर वो वॉइस वाले ऑप्शन को 0 कर दो, तो फिर वो कास्टर का साउंड नहीं आएगा। क्या लगता है इस टूर्नामेंट तो किसका चांस है? खेलते हो, एक्सपीरियंस्ड हो? ऐसा कुछ नहीं है, बट डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी ये लोग ड्राफ्ट हक के ये लोग को मतलब अभी ओजीपी गए बार टीम सीक्रेट से उनका ड्राफ्ट बहुत घटी था। हाँ लास्ट मिड हुडविंग मेरे को कभी भी पसंद नहीं आया था। मैं सोलो ड्राइव नहीं कर सकता। मेरे को दो मतलब इस पैच में सबसे बुरा लगता है ऑफलाइन अक्षयकर, लाइक किसी काम का नहीं आता है सिवाय एको स्लैम मारने का, और वो बहुत घाटी है, लाइक वो इनिशिएट नहीं कर पाता है। बड़े डॉन ब्रेकर बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मॉर्स को लाइक काट दे रहा है इस पैच में, उसके फर्स्ट किल से। एक कू करके एक बंदा है, वो कुकू ही है ना? हाँ कू ये है मैग्नस कुकू, उसने अपना नाम चेंज कर दिया, कुकू से कू कर दिया। तुम ये डॉन ब्रेकर सपोर्ट ट्राई क्यों नहीं करते हो? मैं ट्राई किया, तो कैसा हुआ? लेनिंग स्टेज में सिर्फ एग्रेसिव खेल सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं उखाड़ सकते। नहीं उसका एग्नोसेप्टर से तुम 60% ये दे सकते हो अपने कैरी को। क्या विजन उसका अल्टी पे। मैं क्या बोल रहा था, बाउंसी हीरोज है राइट? हाँ लाइक डॉन ब्रेकर का जो सोलर गार्डियन है, अगर एग्नम सेप्टर बनाते हो तो इज लाइक 6 सेकंड तक तुम उसको कास्ट कर सकते हो, एंड 60% इल्यूजन जब तक वो हवा में रहेगा। बर्स्ट कर देते रे कैरी को, फिर मैं आके मरता हूँ वहाँ पे अल्टी डाल के। नहीं तुम्हारा कैरी वो गोले से निकल जाता है ना। अगर गोले के अंदर तुम्हारा कैरी रहता है तो वो कर सकता है। देखो ना ये डॉन बे का सपोर्ट है कैसे काट रहा है। ओ टिप्पी करके निकल गया। टिप्पी कर दिया। स्नैपर बहुत पिक हो रहा है। हाँ स्नैपर बहुत पिक हो रहा है, फिर मंकी भी बहुत ज्यादा कंटेस्ट हो रहा है मंकी के लिए। टाइनी तो फर्स्ट पेज पे बैंक कर देते हैं। मंकी टाइनी उतना ज्यादा नहीं, बट मंकी के लिए बहुत ज्यादा कंटेस्ट हो रहा है। लाइक मंकी अदर बैंड हो रहा है या फिर पिक हो रहा है। मंकी के वो वार्डिंग के लिए मतलब विजन के लिए मंकी पिक कर रहे हैं लोग बैठ के, तो इनको विजन चाहिए, फुल ऑन विजन। मंकी पेड़ के ऊपर ही खड़ा रहता है।
वो क्यों है क्योंकि जो सपोर्ट्स अभी के जो अच्छे मेटा सपोर्ट्स है वो हाई ग्राउंड विजन नहीं ले पाते, इसके वजह से वो लोग बोल रहे हैं। और भी एक कारण है क्योंकि सपोर्ट में जितने भी मतलब सपोर्ट है वो कास्टिंग मतलब चैनलिंग कास्टिंग है उनका स्किल सब, और मंकी स्टन कर सकता है उनको, वो भी एक रीजन है। मंकी इंस्टा स्टन देता है ना, हाँ तो करके इंस्टा स्टन देता है। लाइक तुम देखो ये सामने वाले टीम में ये बेन है, देन डॉन बेकर है, और इस साइड पोजीशन 4 मंकी लेते हैं। हाँ मोजी पोजीशन 4 मंकी है, मतलब सेफ लेन का मंकी उतना इफेक्टिव नहीं है। नहीं, वो स्पेस क्रिएट करने के लिए पोजीशन 4 है। यस, क्योंकि वो अपने कैरी को बचा सकता है स्टन देके, और एक किल भी मतलब किल के लिए पोजीशन भी बना कर दे सकता है। लॉक कर सकता है, एक तो लॉक करके फॉलो अप डैमेज मतलब फॉलो अप स्टन के लिए वो एक क्या बोलते हैं तो वो सेटअप कर सकता है। हाँ, और उसका जो अल्टी है उसमें हेवी आर्मर भी देता है उसको, तो अपने कैरी टीम को भी आर्मर देता है, तो उसने अल्टी मार दिया तो लाइक सामने वाले उधर फाइट ही नहीं लेते अंदर। भाई क्या लाइन्स को क्या धो रहे हैं लाइक। बढ़िया, मैग्नस का एग्नम शॉट बहुत ओपी है इस सीजन पे। तो ऑन टॉप क्या? हाँ हाँ ऑन टॉप यस, Hello, this is Gabe Newell. और मैग्नस के ऊपर वो वाला भी बना रहा है, हेल ऑफ डोमिनेटर लेके एक्स्ट्रा क्रीप लेके घूमते हैं। तो मैंने जितने भी मैग्नस को देखा ऑफलाइन में, उनका एग्नम शार्ड और हेल ऑफ डोमिनेटर एंड ब्लिंक डैगर, ये 3 आइटम है उनको जो बनाना ही है गेम में। उसके बाद देखा जाएगा क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाना है। मैग्नस के यूल्स और पीछे बुला के लेके आता है टीम को। हाँ, ब्लिंक डैगर करके हॉर्न टॉस मार के सीधा उसको लेके आ गया। आई थिंक स्पिरिट मेटा, स्पिरिट ब्रेकर काम का नहीं है। नहीं स्पिरिट ब्रेकर नहीं, स्पिरिट मेटा है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ना तो एक स्पिरिट पिकी होता है, व्हाइट स्पिरिट या एम्बर स्पिरिट या स्टॉर्म स्पिरिट, एक ना एक स्पिरिट तो आता ही है मिड में। या लाइक स्पिरिट का ही ये है, मतलब उनका वो मोबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा वो पिक होते हैं। लाइक हमें मोबिलिटी चाहिए, इसलिए मेरे ग्रिमस्ट्रोक उठाता हूँ मैं। बट ग्रिमस्ट्रोक को स्पिरिट से फाइट ले सकता है क्या? वो वाला चूतिया था तुम्हारा जो वीडियो था, स्टॉर्म को मारा था। वो वाला ना, वो पीएल ने मारा। पीएल ने, वो वाला चूतिया बस था। मतलब स्टॉर्म के पास पता नहीं, उसको शायद पता नहीं कि ग्रीमस्टॉक बना सकता था। बट मेडुसा के खिलाफ ग्रीमस्टॉक बहुत काम आता है, मैंने देखा है। इल्यूजन टोक देता है। हाँ देखो प्रॉब्लम क्या है ना, डॉन ब्रेकर को सेटअप लगता है। तूने देखा टॉपसन का डॉन ब्रेकर वहाँ पे सेफ क्या कर रहा था, स्टन कर रहा था, मार के पहला फिशर, फिशर के बाद सेकंड के बाद अल्टी। तो जैसे ही मतलब वो पोस्टर है ना वहाँ पे, डॉन ब्रेकर चैलेंजिंग करना चालू कर देता है, तो उसको बर्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कौन है उनके लिए? लायन है राइट? नहीं, लायन तो दूसरे टीम में है। यहाँ पे मैग्नस है। बेन है, बेन सुलाता है। बेन सुलाता है, डॉन ब्रेकर अल्टी मारता है। नहीं, डॉन ब्रेकर का मुझे ये अच्छा लगता है कि वो कभी भी मतलब आ सकता है अपने टीम के लिए, और वो डेड लेन पे बैठ के फार्म कर सकता है, और कभी भी अपने फाइट में ज्वाइन कर सकता है, लाइक उसकी तरह तुम्हारा। डॉन ब्रेकर से मैं एक ही गेम जीता, उसके बाद मेरे को लगता है कि लेनिंग स्टेज खत्म होने के बाद वो यूजलेस हो जाता है। नहीं, तुम बैठ के फार्म कर सकते हो ना टॉप लेन में, सेफ लेन में, और तुम्हारी टीम को जब जरूरत है तुम सीधा आ सकते हो। डॉन ब्रेकर तो इनिशिएटर तो थोड़ी ना है वो। नहीं, ये लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, डॉन ब्रेकर दूसरे लेन में जाके फार्म कर रहे हैं ताकि लेन पुश ना हो, एंड जब भी बॉटम लेन में फाइट ले रहा है, लाइक टॉप लेन में डॉन ब्रेकर फार्म कर रहा है, बॉटम लेन पे फाइट हो रहा है, डॉन ब्रेकर सीधा उधर अल्टी मार के घुस रहा है, एंड उसके बाद उसका सेकंड एंड फर्स्ट लाइक ह्यूज स्टंट, सेकंड स्किल फर्स्ट स्किल से लाइक लिटरली किल कर रहा है वो। लाइक कल देखा ना, वो मेडुसा को तक मार रहा था टॉपसन का सेफ लेन मिड लेन था।
गाड़ी हो गया मॉर्फ का। मॉर्फ का मैंने ये देखा है लाइक इस पे मतलब टीआई में बहुत लाइक कम वो ई ब्लेड पहले जा रहे हैं, स्कार्डी पहले जा रहा है, लाइक मॉर्फ स्कार्डी पहले जा रहा है, मेडुसा स्कार्डी पहले जा रहा है। हाँ ऐसे कि डॉन ब्रेकर के लिए थोड़ा सा तुम्हें टीम कोऑर्डिनेशन चाहिए। वो तो है ही नहीं ना। 2 स्टनर एटलीस्ट तुम्हारे टीम में होना चाहिए डॉन ब्रेकर के लिए। आज से कर तो नहीं होगा हमेशा। सैंड किंग भी अच्छा है डॉन ब्रेकर के साथ कॉम्बो करने के लिए। बट वो वाला सब मतलब मुझे बेस्ट लगता है कि मार्स अच्छा है। नहीं मेरे को मार्स और ये पता नहीं, मेरे को मार्स का पोटेंशियल बहुत कम लगता है। क्योंकि मार्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, वो अल्टी मारने के बाद कुछ नहीं कर पा रहा है। डिपेंड करता है मतलब वो पूरा टीम स्पिरिट का लेस्लाव का मार्स एकदम खतरनाक है। हाँ लाइक डिपेंड करता है कि वो मार्स कितना मतलब टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। बट मार्स अल्टी मारने के बाद उसका मतलब कोई सीन ही नहीं दिखता है। मार्स तो उतना टैंकी भी नहीं हो सकता है जितना टाइड हंटर एक टैंकी हीरो है। आमलेट टॉगल करता ऑफलाइन वाला। हाँ बट खेलने आए तो वो निकाल सकते हो। बट टाइड हंटर और तुम मार्स के अंदर किसको चूज करोगे टीम फाइट के हिसाब से? डिपेंड करता है। अरे ओके आमलेट टॉगल बचा लिया। बस्ट नहीं हो रहा हूँ, उसको बस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। 23 को आमलेट टॉगल ने बचा लिया। मैं वहाँ पे तो चोक कर देता थी सीरियसली। मैं वहाँ पे बीकेबी सब कुछ तो चालू कर देते हैं, फिर डॉन ब्रेकर होता था वहाँ पे अल्टिया के। नहीं बीकेबी इसलिए चालू नहीं किया कि उसके पास ये ना दोबारा पैदा हो जाएगा ना। नहीं तो फिर भी उसको मतलब दूर से ही मतलब स्किल डाल के उसको ये कर रहे ना, ठोक रहे ना। बट बीकेबी उसने इसीलिए नहीं चालू किया कि उसको सेकंड टाइम यूज करेगा। जो मर के पैदा होगा ना तब वो बीकेबी यूज करेगा। अगर दूसरा कोई हीरो होता बीकेबी चोक कर देता वो। पर उसको पता था वो मरेगा नहीं करके। हाँ क्या कॉन्फिडेंस है भाई। नहीं उसको पता था कि वो मरेगा इसीलिए उसने बीकेबी चोक नहीं किया। कि वो मरने के बाद दोबारा जब पैदा होगा तब वो बीकेबी वन करेगा। कुछ वो लोग जस्ट चेक कर रहे थे। ओह शिट, ओह मिस लायन ने मिस कर दिया। ओ एक शॉट में खत्म। मां कसम गायब ही हो गए हो। बाप रे, वन शॉट। बाबा रे, उसने पूरा तलवार उसके मुंह के अंदर से घुसा के निकाला। बाप रे, वो एक ही शॉट है। मतलब इतना ज्यादा डैमेज एक शॉट में। लाइक लायन द्वारा कितना डैमेज दिया ये रहा 1745 डैमेज वन शॉट। अन्याय हो तो थोड़ा ऐसे एक शॉट में मरना अन्याय है। कौन सा एक गेम था जहाँ पे मतलब वो लास्ट बॉस बहुत ओपी था, मतलब बॉस वो एक ही शॉट में मार देता था। उस गेम में उनको मतलब चेंज करना पड़ा ताकि वो एक शॉट पे ना मार पाए, लोगों को मतलब एक मौका मिले एटलीस्ट। याद नहीं हो गेम का, कोई तो एक था। नीना के पास एजेस से लोग एक टावर निकालेंगे एजेस से। लाइक निकाल सकते हैं लाइक 2K नेटवर्क लीड। ओह नो 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 1% अलायंस को जो हारेगा वो निकल जाएगा राइट। हाँ इनमें लोअर ब्रैकेट है ये, अपर ब्रैकेट का रात को होगा। बेटा ने तो फिर भी मुझे नहीं लगता वो मारता था, बट स्टिल नहीं स्टन बैठ जाता तो उसको मार देता। वो क्या लीना अल्टी डाल देता था क्या? हाँ लगुना ब्लेड, और उसका लगुना ब्लेड डालने। ओ आरपी, ओ लॉर्ड, एक नंबर आरपी। यही है इसका, यही फंडा है। इसके सीधा डिलीट हो गया। अभी लगुना लग गया, ये देखो डॉन ब्रेकर को चढ़ने नहीं दिया आसमान में। डॉन ब्रेकर चैनलिंग है ना, मर गया डॉन ब्रेकर।
पेन भी गया, बियॉन्ड भी गया, बेन गया। पेन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और स्टन मारा, अल्टी मारा। लायन का नहीं उसका सेजेस है वैसे भी। हाँ नहीं मेरे को आउट ऑफ पोजीशन था, पकड़ सकते। बट इनके पास उतना मोबिलिटी नहीं था, इन्होंने सब उसके ऊपर ही खर्च कर दिया ना, रेड किंग के ऊपर। लाइक बेन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया सपोर्ट में, क्योंकि बेन का सपोर्ट बीकेबी प्रेसिंग है उसका अल्टी, एंड जितने भी स्पिरिट आ रहे हैं इनको रोक सकता है बेन। एक्चुअली बेन और इसका कॉम्बो है डॉन ब्रेकर का। प्रॉब्लम ये है कि डॉन ब्रेकर जब घूमता है ना तो उसके तरफ जाने का रहता है, तो फिर वो स्टन नहीं बैठता। जब समझ रहा है ना, मतलब उसको निकल जाना है। उसका फर्स्ट स्किल है ना, सामने सामने आते रहता है, तो उसके थ्रू जाने का मतलब वो आगे निकल जाओ उससे। हाँ, तुम पीछे भागोगे ना तो तुमको स्टन बराबर बैठेगा। तुम स्ट्रेट चलते जाओगे ना, वो घूम के आएगा, कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो पीछे नहीं जा सकता घूम के। अलायंस कमबैक कर घूम के सिर्फ आगे जा सकता। ओके ये मैग्नस का ये शार्ड वाला बहुत लाइक, पहले डोटा ना 20 मिनट में गेम खत्म हो जाता था, अभी डोटा 20 मिनट में गेम शुरू होता है। शार्ड आ जाता है ना, ओ 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिया। मार दे भाई। ओह मैग्नस का अल्टी मेरे को लगा ही था। मैग्नस नहीं करेगा, मैग्नस अल्टी मारेगा उसके लिए। बायबैक है उसके पास। हाँ है, एक्चुअली उसको बायबैक करना चाहिए अभी। हाँ तो वेट करेगा नहीं, पर अभी जल्दी से बायबैक नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जैसे टावर को छुएगा वो बायबैक करेगा। टावर उड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता उसको करने देगा। बॉर्ब जिंदा है ना, प्लान क्या है यहाँ पे? सेव कर रहा है। बोल रहे हैं टैंकिंग के बिना, रैंकिंग आने के बाद वो बायबैक करेंगे। या सैंड किंग के पास अल्टी है ना पब्लिक, अभी किया बायबैक। मॉर्फ को छुआ ना उन्होंने, इसकी वजह से। पता नहीं इधर लाइक ये लोग मतलब थ्रोन के लिए नहीं जाते, ये लोग ये करते हैं, मतलब मेगा के लिए जाते हैं। नहीं, वो लोग इतने पीछे थे क्योंकि मैग्नस का अल्टी नहीं है और लीना का अल्टी भी नहीं है। नहीं, मुझे लगा था कि बायबैक करेगा क्योंकि मैग्नस के पास अल्टी नहीं था, फाइट ले सकते थे ये लोग रिटर्न। नहीं, वो लोग जा रहे हैं तो उनको रीसेट होने दे रहा हूँ। नहीं वो मैं भी कुछ आइटम टाइमिंग के लिए वेट कर रहा है। क्या है उसके पास, मॉर्फ के पास? मॉर्फ के पास बीके भी जा रहा है अभी, लिंकन बनाया एंड बीके भी जा रहा है। एंड नहीं, मैं एम्बर की बात कर रहा हूँ। एम्बर को बायबैक करना चाहिए था क्योंकि उनके पास आरपी भी नहीं था एंड लगूना ब्लेड भी नहीं था। किया ना बायबैक, पर उसमें और लेट किया ना, लाइक 2 बैरक उड़ गया उनका। मैं कुछ कर नहीं सकते थे सच बोलूं तो। मतलब ये एटलीस्ट वो तुम्हें याद रखो उनके पास मॉर्फ है, टावर को 1 सेकंड में मेल्ट कर सकता हो। एक गलत मूव हाँ T1 का 1 लाइक रॉन्ग मूव मॉर्फ खत्म कर देगा, थ्रोन कैप्चर कर लेगा। ओ भाई देखो अंदर ही स्मोक करके इधर ही खेल रहे लोग। लायन मरने वाला है। नहीं मारो, ओ गुस्से नहीं ये लोग। ये देख, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लाइक सेफ लेन का टावर 34 मिनट तक खड़ा है। अच्छा नहीं गया। मतलब सेफ लेन का टावर सबसे पहले उड़ता है, दोनों साइड का, कोई भी साइड का ले लो। चलो एजेस खत्म हो गया। इसके पास तो जेम था ना? इसके पास आई थिंक मैग्नस के पास जेम था। अभी होगा। हाँ ना, अभी नहीं, पहले ही लिया था। अभी भी है, जेमी है उसके पास। रिकी भी अच्छा सपोर्ट बोल रहे हैं लोग, मतलब कास्टर सब बोल रहे हैं रिकी अच्छा सपोर्ट है। बिकॉज उसका जो डार्ट है साला 4 सेकंड के लिए स्टन कर देता है। स्लीप करता, स्टन नहीं करता। हाँ वो स्लीप करता है, स्लीप। ओह या स्लीप करता है 4 सेकंड के लिए। मतलब वो वहीं पे खड़े रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं। वो एक्चुअली कैरी के ऊपर डालकर पूरी टीम को खत्म करने का, नहीं तो बहुत बड़ा लाइक 4 सेकंड बहुत ज्यादा है जब टीम फाइट चल रहा है।
एंड उसके साथ वो भी बनाता है रिकी लाइक मीटियोराइट हैमर हाँ वो तो है एंड इज लाइक एक्चुअली मतलब अभी तक मेटा में आया नहीं है 31K लीड और नो क्या करने वाले लोग पता नहीं ये लोग मतलब मुझे लगता है इनको एयरलाइंस को होप छोड़ देना चाहिए मेरे पास इतना कोई हेवी ओ देखो टैंकिंग गया वही गलती कर रहा है फिर से लाइक मैग्नेस है यार पकड़ के लेके जाएंगे तुम लोगों को कुछ भी कर सकते हो वो ब्लाइंड ये मार रहा है ब्लाइंड ब्लिंक मार रहा है नहीं उसका रेंज काफी अच्छा है बहुत बड़ा है भाई एक हिट में खत्म मेंबर और ये रहा कल्लो को जो करना है बेन का अल्टी जी जी बेन का अल्टी एकदम ओपी है उनके जो लाइनअप था ना डॉन ब्रेकर को फुल सपोर्ट था मैग्नस का अल्टी रीना का सेकंड बेन का स्लीप और WK का स्टन मतलब तुम समझ रहे हो चेन स्टन के लिए डॉन ब्रेकर अच्छा है वो भी आ सकता है क्योंकि दुश्मन तो एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा राइट नहीं वो डॉन ब्रेकर अच्छा कर सकता है क्योंकि मैग्नेस है मैग्नेस अगर आरपी मारते डॉन ब्रेकर सबको हिट मारेगा भी है उसको बैटल फ्यूरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा Magnus पता and नहीं give इन्होंने them मॉफ like क्यों the पिक किया सच बोलूं तो कौन सा पिक ये लोग फुल आउट ड्राफ्टेड हो गया ये लोग पता नहीं क्या करने का सोच रहे थे एलायंस मेरे का को तो हाँ आई थिंक ये लोग अच्छेकर और उसका कॉम्बो करने वाला था अच्छेकर उन्होंने पेंट कर दिया मुझे लगता है लाइक तुम्हारे अगर टीम के पास अच्छा कॉपी करने वाला स्किल नहीं है जैसे आज शेखर मॉर्प लाइक तब मॉर्प पिक करने का कोई फायदा नहीं है तुम्हें एक अच्छा स्किल चाहिए जिसको तुम कॉपी कर सकते हो ये कास्टिंग में इतना बकचोदी करते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है देखो कॉपी मेरे को एक्चुअली पता नहीं उनका पिक कैसा हुआ था वो मेरे को आइडिया नहीं है कोई नहीं है मैं खेल रहा था वेट करते क्या हो तुम लोग क्या बोल रहे हैं पता नहीं कुछ तो बोलेंगे पिच पे ओके अभी T1 वर्सेस अलायंस होगा और इसके बाद BG वर्सेस EG होगा उसके बाद इनका होगा IG वर्सेस सीक्रेट मेरा तो पूरा धज्जिया उड़ गया फर्स्ट डे पे ही उस चीज का प्रेडिक्शन का लाइक मैं इस टीम को बहुत ज्यादा मतलब पसंद कर रहा था ये बीस्ट कोस्ट बट उन्होंने पूरा ट्रोल करके हारा गेम जानते हो सैम अब एक ओजी दो जीतेगा तीन ओजी चार वर्सेस पाँच VP बोल रहे हो क्या ओजी वर्सेस अभी होगा इनका क्या बोलते हैं तेरे वो नहीं डूडू क्या वो टियर 1 टीम नहीं है बीस्ट कोस्ट नहीं वो बहुत अच्छे खेल रहे थे नहीं 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 इतना अच्छा नहीं है और तो बहुत पॉपी का अच्छे देखने का वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला था लाइक सीक्रेट के टीम खिलाफ लाइक बहुत टीम के खिलाफ अच्छा खेला था उन्होंने लाइक ग्रुप स्टेज पे भी अनडाइंग अच्छा खेला था ये बहुत कड़क मैच होने वाला है आज आईजी वर्सेस टीम सीक्रेट क्योंकि आईजी का विन रेट भी मतलब ज्यादा है आई थिंक टीम सीक्रेट का भी आईजी अच्छा का है मैक्स है और आईजी का मैक्स है आईजी का सबसे हाईएस्ट है लाइक हाईएस्ट है हाँ उन्होंने अनडाइंग आईजी के खिलाफ भी जीता था आई थिंक नहीं टीम सीक्रेट के पता नहीं किसके खिलाफ जीता था अनडाइंग पड़ेगा टीम सीक्रेट देखो सेकंड पे आईजी आईजी तेरा लाइक अनडाइंग 14 आईजी के to खिलाफ एक जीता था एंड विविल जीनियस के खिलाफ भी एक जीता था T1 के खिलाफ नहीं जीता वीपी के खिलाफ नहीं जीता वीपी मेरे को अच्छा लगा वीपी का भी गेम प्ले बहुत अच्छा है इस बार अनडाइंग का मतलब उनका वो था मतलब उनका जो स्वेन था ना वो क्या ताबड़तोड़ लाइक 30 मिनट में उसने 450 लास्ट हिट ले लिया समझ रहे हो 400 के करीब 30 मिनट के अंदर स्वेन टैग किया रहेगा ना उसको लिए हाँ नहीं स्टैक टैग नहीं उसका गेम मतलब इतना बुरा गया लेन में वो जंगल करके मतलब पूरा फार्म लेके जिताया गेम वो गेम ओजी को स्टार क्यों किया है तुमने वो फेवरेट में डाल के रखा है वो कैसे डाला फेवरेट में वो
इधर है होम के अंदर जो सपोर्ट ऑल क्लब है, ऑल टीम, तो वहाँ पे अगर ओजी लिखोगे तो उधर स्टार पे लग सकते, लाइक स्टार ये रहा। लाइक मैंने 3 टीम को ये स्टार कर उसको रखा था अंडाइन को, बट हटा दिया, लाइक टीम सीक्रेट, वीपी एंड ओजी। तो मुझे ये मैच देखना है, लाइक दोनों ताबड़तोड़ टीम है, आईजी वर्सेस टीम सीक्रेट, एंड मुझे लगता है टीम सीक्रेट ही जीतेगा। एंड आईजी भी अच्छा खेलता है। आई थिंक कौन है आईजी में? आईजी नथिंग टू में से एक ने PSG.LGD में नथिंग टू तो से। साला आईजी नाम में कौन है? काका काका इम्बॉटन काका फ्लाई इमो जेटी ओली ऑयल फ्लाई 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 रहेगा। फ्लाई 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 वो वाला फ्लाई नहीं है, इविल जीनियस वाला, ये है फ्लाई फ्लाई, ये 2 बार उड़ा। टीम सीक्रेट भाई एक मटुम्बा चाइनीज में, टीम है ना आईजी तो। हाँ आईजी प्योर, आईजी सेकंड टाइम जीता ना, टाइम टीआई जीता था। राइट राइट राइट। मेरा डेवलप मेरा एक ही ये है कि चाइना ना जीते, कोई भी जीते, लाइक टीम सीक्रेट जीत जाए, वीपी जीत जाए, है ना, ओजी जीत जाए, चाइनीज टीम नहीं जीतना जो चाहिए। लायक है वो जीतेगा। इनमें से जीत जाए, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, चाइना को नहीं सपोर्ट करूंगा। टेक टीम स्पिरिट, लाइक ये चाइनीज नहीं है, बट इसका क्या पता नहीं कैसा, मतलब देश का कौन से कहाँ से है। इंसिडेंट नॉर्थ अमेरिका है ना शायद से। एक वो लोग है ईस्टर्न यूरोप, नहीं नहीं नहीं, ईस्टर्न यूरोप। आई थिंक वो रशिया और टाइप्स वाले हैं। हाँ, और ये क्योंकि जो, उनके जर्सी में पेरी पेरी करके लिख के आ रहा था, जो मतलब रशिया वाले करते पेरी पेरी मैच करके ऐसे। और ये T1 जो है, ये मतलब साउथ ईस्ट एशिया से क्वालिफाई किया, बट चाइनीज टीम है, मतलब मेन टीम चाइनीज है, लोग साउथ ईस्ट एशिया से, इसीलिए वीजी भी साउथ लाइक चाइना का है। वो वीजी तो कतई नहीं जीतना चाहिए, ईजी धो डाल वीजी को। जब कुकू को ऐसे पूछा था, जब इंडियन टीम को वो हराया, कुकू को ऐसे पूछा क्योंकि उसके टीम में कुकू को शायद से बात करने आता है, या फिर इंग्लिश में कुकू ही मतलब थोड़ा वेल नोन सेलिब्रिटी है, तो इसलिए उसको सामने लेके आए, पूछे कि इंडियन टीम को तुमने हराया, तुम उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? तो वो बोल रहा है कि उन मुझे हमको सब पता है ये वो लोग क्या करने वाले हैं, और हमने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं किया उनके ऊपर, और हमको सब पता था वो लोग क्या कर रहे थे करके, तो इसलिए हमको कुछ मतलब उतना फर्क ही नहीं चैलेंज पड़ा, भी नहीं लग पड़ा। चैलेंजिंग नहीं लगा, लाइक कोई मतलब होमवर्क नहीं करना पड़ा, ऐसे ही खेलने आ गया हाँ, था। हम लोग ने कुछ काय किया भी नहीं। तो क्या बोलना चाहते हो? मतलब वो होप भी नहीं दिया उसने, वो हंस रहा था वो। हाँ, ऐसा भी लगा उनको थोड़ा करना चाहिए, वो लोग आगे आएंगे अभी अभी। मतलब कुछ मेच्योरिटी दिखाई नहीं मतलब उसके बातों में कि हाँ अभी अभी डोटा, लाइक इंडियन नेक्स्ट टाइम डोटा अभी अच्छा अभी। खेलना, नेक्स्ट टाइम अच्छे खेले तो नेक्स्ट टाइम नहीं, और ज्यादा बेटर हो सकता है, ऐसे ऐसा इंडियन मतलब डोटा अभी चैलेंजिंग अभी ही आ नहीं रहा था है। उनके लिए, चैलेंजिंग ही नहीं था ये लोग। उन्होंने इज्जत भी नहीं दिया डूड, मतलब ऐसा भी नहीं बोला कि इंडियन डोटा अभी अभी चालू हो रहा है, उनको थोड़ा और टाइम दो, समय एक्सपीरियंस दो, लगे, एक्सपीरियंस लगेगा समय उनको दो, आने वो के लिए। लोग धो बट डालेंगे। ऐसा कुछ बोला ही नहीं, वो हंस रहा था वो, मतलब हमको कुछ करने ना मतलब। प्रॉब्लम है कि ना क्लोज मैच होके भी हारे ना, तो मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया, हाँ ठीक है। वो क्लियरली दिख रही थी कि इनके दिख रहा था कि उनका गन फट रहा है, उनका फट रहा है कि उनको मतलब वो क्या करेंगे करके। तो इंडिया का हाईएस्ट कितना हो गया एमएमआर, लाइक टॉप है ना 100 पे इंडिया है, वाले है। टॉप 100 पे है। है। साउथ ईस्ट इंडिया एक्चुअली इंडियन सर्वर नहीं, साउथ ईस्ट हाँ एशिया हाँ सर्वर है। है। टॉप 100 में आते हैं। तो ये लोग मतलब हम्म, क्या करते हैं, मतलब अब टीम वर्क नहीं है, ये तो पता है इंडिया में टीम वर्क का नहीं कोई टीम वर्क। कल्चर नहीं है। अभी तुम लीडर बोर्ड देखोगे ना, उसमें इंडियन वाला इंडिया का फ्लैग तो तुमको दिखेगा ही होगा इसमें। डोटा का लीडर बोर्ड कहाँ देखो से तो। देखते हैं? डोटा डोटा लीडर बोर्ड डालो ना, ऐसी है लीडर बोर्ड। Dota2.com जाकर लीडर बोर्ड ऐसी है। चाइना एसीएस अपना इंडियन बंदा एक है है ना, नंबर, क्रिश करके 60 पे है, टॉप 60। पीजू उस पीजी, दिख रहा है क्या? हाँ क्रिस देख, करके कुछ तो, हाँ। फिर आता है क्या लेकिन इनका पता नहीं, ये भी इनमें से हो सकता है, बट इन्होंने डाला नहीं है।
में कोई है ही नहीं क्या? पाकिस्तान से जोकर। जोकर, हाँ वही पाकिस्तान। फिर लास्ट में आता है किड करके 333 पे। एक पाकिस्तान। फिर आता है आरओजी का वर्ल्ड डॉट फेव 383 पे। जापान, जापान से भी साउथ ईस्ट एशिया खेलेंगे क्या? जापानीज है या कोरियन है? व्हाइट एंड रेड ब्लैक, वो पता नहीं मेरे को। या किड? और कौन है फिर? ये है रोग 83 पे। फिर आर्क मैच एडी। आई थिंक आर्क मैच में जानता हूँ, लगता है पुणे में कहीं पे तो है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आर्क मैच कहीं पे तो देखा था, ऐसा मेरे को लग रहा है। हॉन्टर, पता नहीं हॉन्टर नीचे चला गया लगता है, छोड़ दिया उसने। और एक है अभिषेक रहेगा उसका नाम, 707 पे। आई थिंक वो अभी मेरे फ्रेंड लिस्ट पे है। ओके। ये नहीं, ये डाउन हो गया ये पहले इसका ये था, नंबर पे था। प्ले स्टाइल आता 917 पे। फिर अभी टॉप 1000 के अंदर था इसका कुछ। डार्ट्स और पीप। तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत कम लोग है डूड। तब गिने चुने ही कुछ है। टील, पीएसवाई, तेरा लिल एमकिंस, कुश वैंकिश वैंकुश, हाँ। रुकी। हाँ मैं कुटक्लू, क्या है वो भी नहीं समझ में। टन मार्क्स का फैन होगा। नील, तेरा नील हंसम। अर्जुन, अर्जुन बस। ये क्या पल पल अपडेट होता है या लाइक वीकली अपडेट करते हैं? दिन में एक बार होता रहता है, बट ये कंडीशन में मेरे को नहीं लगता कि हाँ इंडियन डोटा कभी आएगा करके। यही नहीं है ना, क्रिएटर ही नहीं है, कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है, तो इंडियन आए। यू कंटेंट क्रिएटर इंडियन डोटा नहीं, इंडियन मतलब कंटेंट क्रिएटर को अभी तक क्या दिया है? या मतलब मेरे को उन्होंने बताओ। डोटा ने भी, डोटा को फर्क क्या पड़ता है? नहीं, बात फर्क पड़ने का नहीं। तुमको तो पता है इंडिया में, इंडिया इंटरनेट को आजकल ड्राइव करता है, यूट्यूब को ड्राइव करता है, मतलब इंटरनेट को हम लोग ही ड्राइव करते हैं। हमारे पास उन्होंने एक्सपोज डाला, फ्री गेम है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है, मार्केट काफ़ी अच्छा है। बट उन्होंने उसके लिए चांस दिया था, मतलब वो ESL इंडिया 1 आया था उसके लिए। बट कुछ हुआ नहीं फिर। अगर वहाँ से अगर कुछ पीक पकड़ता डोटा में तो फिर कुछ होता। हो सकता बट था वो ऑप्टिकल गेमिंग में था, वो जाके वहाँ चोद दिया इंडिया का पूरा जिंदगी। वो तो CS में था ना कि डोटा में था। हाँ CS में था। हाँ। तो ऑप्टिकल वो इंडिया मतलब डोटा का नहीं करते, डोटा का भी करते। एक- अगर तुम मुझे बोलो कि इनमें से किसी को भी लाइक 5 जन का टीम बनाओ जो इंडिया से है, मैं इनमें से आई थिंक एक जन को भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। बस पहली बात तो 5 जन का टीम बनाना बहुत मुश्किल है। डिपेंड नहीं करता है कि 5 जन टॉप टियर में हो, 5 जन मिड टियर पे भी हो सकता है, एंड अच्छा टीम बन सकता है, एंड देन वो लोग ग्राइंड करके टॉप में जा सकते हैं। ये अच्छा किया उन्होंने, देखो अभी तुम्हारे स्क्रीन में जो टीम बाहर निकल गई उनको मतलब ब्लैक गोल्डन कर कलर दिया। का, यहाँ ब्लैक ग्रेड आउट कर दिया उनको फुल। अच्छा है, मतलब आ गए लोग। फनाटिक भी बाहर निकल लाइक गया ना, टीम स्पिरिट ने तुम उनको उधर निकाल दिया। देखो, लाइक वैलोरेंट में लाइक श्राउड बैठा है, निंजा पता नहीं, वैलोरेंट में निंजा को फॉलो नहीं करता हूँ बट श्राउड को फॉलो करता हूँ। लाइक वैलोरेंट में लाइक श्राउड लाइक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है।
लाइक वैलोरेंट का टूर्नामेंट होता है, वैलोरेंट के टूर्नामेंट में लाइक 30-40 हजार लोग देख रहा है, श्राउड वही टूर्नामेंट देख रहा है, साला 3 लाख के ऊपर लोग देख रहे हैं। तो गौर का भी तो वही सीन है ना। नहीं, गौर को उतना हाई नहीं है अभी तक, उतना हाई ए नहीं बच। भाई उसके यूट्यूब पे जाके, गौर की यूट्यूब पे जाके वो उसने कम्युनिटी स्क्रीनशॉट डाल, देखो कम्युनिटी में जाकर उसने स्क्रीनशॉट डाला है डोटा का जो है ना ट्विच पे, हाँ। उससे आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 व्यूअर्स ज्यादा है अरे उसके उस इसमें टाइम पे तो शुरू किया था ना। 26 आवर्स स्ट्रीम किया था उसने। या लाइक तो वैलोरेंट का भी इंडिया में भर भर के लाइक कंटेंट क्रिएटर इंडिया में वैलोरेंट का। नहीं वैलोरेंट नहीं भर भर के, वैलोरेंट नहीं भर भर के पबजी का PUBG तो हम उसको तो अब मोबाइल गेम को ऐसे पीसी गेम में लाइक कमेंट भी लाइक काउंट भी नहीं करते, लाइक उनका पूरा नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है लाइक पबजी। जो पॉपुलर है वही चलता है ना, क्या नहीं, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे मॉर्टल, ये लोग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग मतलब जगह पे है। लाइक पबजी और तुम डोटा को कंपेयर नहीं कर सकते हो कभी भी, गेम प्ले वाइज, यू नो, द टेंशन वाइज। लाइक डोटा में ये जो लोग बैठे हैं ना, इनके अगर इनके शरीर में साला बर्फ दौड़ता है, खून दौड़ता था ना, इनका दिमाग वहीं पे फट जाता। मेरे को क्या लगता है कि अगर इंडिया कुछ तो एटलीस्ट रैंक 1 ऐसे कुछ तो आ जाता ना, तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी करने लायक तो रहता था, बट छाप ही नहीं सकते कहीं पे भी, क्योंकि न्यूज़ गांजा 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 ढूंढो, गांजा छाप देगा। तो कहीं पे तो प्रिंट नहीं करके लेके आ नहीं सकते, अगर नहीं आएगा आगे तो लाइक क्या मैं कैसे बेगम होगा। से बात कर रहा था कि अगर इंडिया से कोई टीम कभी भी जाता है टूर्नामेंट में, उसका जर्सी होगा या फिर रेनबो कलर का ये होगा, लाइक कितने सारे स्पॉन्सर होगा, पान मसाला तो 3-4 कंपनी बैठा है। हाँ विमल जुआ केसरी टीआई में बैठ के पान मसाला का ऐड चल रहा है। तो स्नैपफायर और यूजुअली स्नैपफायर और चेकर या फिर ऐसा कुछ तो कॉम्बो लेते हैं। आज चेकर आया तो वो भी आता है, मंकी किंग और टायन ही तो बैंड होता ही है, नहीं तो ये पिक हो जाते हैं। ओह ट्रिएंट उठाया उन्होंने, ट्रिएंट बहुत ट्रिएंट टैंक क्यों उठाया मेरे को समझ में नहीं आया, स्नैपफायर है ट्रिएंट क्यों उठाया उन्होंने। वो ट्रिएंट तो वो कौन है? ये कर सकता है ना, स्टन कर सकता है प्रेडे के अंदर जा जाके। नहीं वैसा नहीं, स्नाइपर मतलब मिड गेम की तरफ से भी सोचो ना, वो थूकेगा अल्टी तो ट्रेंड मारेगा ना, काहे के लिए उठाया मेरे को समझ। ओ बट मेरे को लगता है स्नैप फायर से मैं नेचर प्रॉफिट पे जाना चाहूंगा, एग्नम सेप्टर बिल्ड। टाइड हंटर आया इस बार ढंग का पिक किया, लास्ट बार पिक किया किसी काम का नहीं था। तो वही है कि लाइक इंडिया में जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए भी डोटा का कुछ है नहीं जो कि डैमेज चाहिए राइड को काटने के लिए, लाइक तुम फिजिकल डैमेज चाहिए, मैजिकल चाहिए ज्यादा करके, कुछ तो एक स्पिरिट आएगा। स्प्रिट तो एक आने वाला है, दो भी आ सकता है लाइक दोनों साइड से, एम्बर और उधर। आज स्प्रिट लाइक पिक ही नहीं हुआ इस सीजन पे। लूना बैन किया उन्होंने। आयो बैंड नहीं किया ना अभी तक, लूना को बैंड कर दिया। मुझे लगता है नाइट स्टॉकर आना चाहिए इनके पास, T1 के पास, नहीं तो नाइट स्टॉकर अलायंस पे अच्छा है सच बोल, पर उन्होंने ऑलरेडी ऑफलाइन पिक किया। नाइट स्टॉकर सेफ लाइन खेलेगा तो भी ठीक है, अच्छा है एक्चुअली। 5 seconds remaining. क्या पता ये टीआई का इनका बोल नहीं सकते ये लोग, लाइक टाइड अंडर का पोजीशन 5 खिलवा देगा। तेरे को एक ही आइटम चाहिए और ब्लिंक डैगर, आके अल्टी मार देना। Dire team ban. टाइड हंटर सॉरी, इनको इनका क्या पोजीशन 5 स्नैपफायर हो सकता है राइट, और पोजीशन लायन 4, और पोजीशन 4 स्नैपफायर। पोजीशन पोजीशन 4। पोजीशन 5 पे स्नैपफायर मैंने बहुत कम देखा। 5 seconds remaining. क्या स्पोर्ट है ये, खेलता है नाइट स्टॉकर, Radiant team क्वेश्चन ये है। लीना बैन किया उन्होंने, क्यों लीना को डील नहीं कर सकते थे क्या लोग, उनका लाइनअप लीना को सपोर्ट नहीं करता क्या। इनका लाइन अप लीना से डील नहीं कर सकते क्योंकि लायन और ट्रेंड प्रोटेक्टर दोनों है जो स्टन कर सकता है। ट्रेंड प्रोटेक्टर का कुछ मैंटा हीरो चाहिए इनको, मैंटा कैरी चाहिए क्योंकि
ट्रेंट जब अल्टी डालेगा तो मैंटा खोल के बाहर आ सकते हो ऐसा यस कुछ। लाइक ट्रेन का तो अल्टी बीकेबी के ऊपर पीएल भी जाता है, अच्छा है, सच बोलूं तो पीएल अच्छा है। और पीएल पिक होते नहीं देखा है मैंने। पीएल ने तो नागा भी अच्छा है। Dire team ban. आईओ बैंड किया देखा आयो आयो क्यों इन्होंने, मतलब ये लोग पोजीशन 5 ये लायन आयो क्यों ओके उन्होंने उन्होंने आयो उन्होंने बैन है। इनका ओके आईओ पिक होने का इनका चांसेस था। पोजीशन मतलब स्नैपफायर पोजीशन 4 वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं और आयो पोजीशन 5 रहेगा। यस ऐसा क्या? हाँ, आईओ मॉर्फ आईओ, तब आईओ 5 फिर तुम्हारा seconds वो remaining. गायरोकॉप्टर, पुराना कॉम्बो है। झाड़ कौन सा मार्स अभी झाड़ कौन सा तो हीरो तोड़ता है। मार्स तोड़ता है, झाड़ एल्डर टाइटन भी उतना नहीं तोड़ता है बट कम तोड़ता है। ठीक है, अगर झाड़ तोड़ना है तो तुम वो उठा लो ना सीधा टिम्बर सा। नहीं मुझे लगता है सफ कैरी नाइट स्टॉकर आने वाला बेटर ही रहेगा बट ऑप्शन। एस4 क्या नाइट स्टॉकर खेलता है ये? एस4 भी नाइट स्टॉकर नहीं खेलता है, निको बेबी को भी नाइट स्टॉकर नहीं देखा है। हम लोग सोच रहे क्या बैन करने हैं, क्या मंकी की तो बैन हो गई है। ये लोग को अभी पोजीशन 3 अच्छा एक नहीं पोजीशन 3। कैरी और ऑफलेन इसी को ही बैन कर रहे हो लोग अभी अलायंस। हाँ तो कैरी तो और ऑफलाइन में तो उनका बचा है ना, लाइक मिड लेनर, सेफ लेनर एंड ऑफ लेनर, वो 3 पिक होना बचा है। लायन लाइक ट्रेन प्रोटेक्टर ऑलरेडी पोजीशन 5 पोजीशन 4 दिख रहा है हम लोगों को। मुझे लगता है एक स्प्रिट बैंड करना, एक्चुअली दोनों स्प्रिट बैंड करना चाहिए। एक स्प्रिट लाइक स्टॉर्म को बैंड करना चाहिए इनको, एलाइस को। सैम आई थिंक वाइट स्पिरिट थोड़ा ज्यादा कड़क है सब स्पिरिट्स में 10 क्योंकि seconds उसका वही remaining. साइलेंस है ना उसके पास बहुत बट तकलीफ स्टॉर्म देता के है। पास वो अपना 5 लाइक seconds एग्नम सेप्टर से सेकंड स्किल बहुत ओपी है। Radiant team pick. Dire team pick. Earth शेकर मुझे लगा था 3 ओ वाला हीरो भी है, जगह नहीं है उसको करने का टीम। डार्क 10 सिरर seconds मतलब नहीं देखा, remaining. उनके खिलाफ डार्क सिरर बैंड हो जाता है ओजी के खिलाफ। 5 seconds remaining. डार्क सीकर पिक करना है इनको। इनके साइड से डार्क सिरर आया तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। लाइक टाइड अंडर को पोजीशन 4 बना सकते हैं एंड लाइक स्नैप फायर को पोजीशन 5 बना सकते लाइक Dire team pick. मेडूसा रे 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 इन्होंने अभी पेडूसा उठा लिया। हाँ जल्दी उठा लिया इन्होंने मेडूसा और एंटीबैच को बैन करना पड़ेगा। एंटी मैच पिक नहीं करेगा क्या सैम तुम पब मैच सोच रहे हो क्या? 10 seconds remaining. मुझे लगता है आरटीसी के उस हालत में, टीआई 8 के हालत में एंटी मैच उसके बाद पिक ही नहीं हुआ कभी भी। आई थिंक मेडुसा को माना देने के लिए, मेडुसा एंड आई टाइड थिंक हंटर। उनको साइलेंसर लेना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस माना से। क्या फर्क माना से मे बी वो स्टार्ट गेम एग्रेशन को रोकने की या फिर स्पैम करने की सोचेंगे बट स्टिल लाइक क्रिस्टल मेडन को एग्नम सेप्टर चाहिए होगा कि क्योंकि ट्रेन प्रोटेक्टर अच्छे करन लायन तीनों है, क्रिस्टल मेडन का भी अल्टी यूज नहीं कर पाएगा अपना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्नम सेप्टर से भी लाइक एग्नम सेप्टर की बीकेबी से भी कुछ नहीं कर सकता क्रिस्टल में, ट्रेन उनका प्रोटेक्टर लाइनअप का अल्टी पसंद है। नहीं है। सच बोलूं तो मेरे को उनका लाइनअप बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब सीएम पिक मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा मेरे को नहीं भी नहीं लगा। अच्छा लगा। लाइक सीएम किसी काम का नहीं है, ट्रेन प्रोटेक्टर अल्टी मार देगा, सीएम का अल्टी वहीं पे कैंसिल, भले उसके पास बीकेबी हो। इन्होंने इनकी कवर खोद ली Dire है। team ban. लार कोटा है। अभी इनको कौन सा हीरो चाहिए? मिड हीरो चाहिए अलायंस को। और उनको कौन सा हीरो चाहिए? उनको कैरी आ उनको गया, भी मिड चाहिए। उनको भी मिड चाहिए राइट। कौन सा 10 स्प्रिट होगा seconds बताओ सैम? remaining.
वाइड या फिर स्टॉर्म? अगर 5 seconds. एम्बर। वाइट स्पिरिट बैन करने चाहिए, नहीं तो इनको पिक करने, वो लोग छोड़ दे रहेंगे क्योंकि उनको पिक करना है, ऐसा भी हो सकता है। और ये पिक लाभ फाइनल पे अर्ली पिक होगा अलायंस के पास। हम्म ब्लड सीकर तो नहीं, वो तो मिड नहीं आएगा। मेडुसा मिड कर सकता है, बट अगर ब्लड सीकर उठाए तो सच बोलो तो ब्लड सीकर बैन नहीं हुआ है, रेजर बैन किया है। हाँ रेजर इसको तोड़ सकता है ना, मेडुसा को तोड़। पर एम को खुला रख रहे हो लोग, एम नहीं सच पिक बोलो। होगा। नहीं एम नहीं पिक होगा, सॉरी। मिड क्वार्टर क्या ज्यादा हो गया सब। 10 seconds remaining. क्यों नहीं, तुम सोचा ना। लाइक अलायंस अगर मिड कोटेल पिक करता है और हारता है। बस मेडुसा मतलब उनको एग्रेशन दिखाने का है और उनको फाइट्स में कॉन्स्टेंटली आने का है, तो कुछ स्पिरिट्स आएंगे, उसी के लिए वेट कर रहा हो। लाइक एक स्पिरिट चाहिए ही चाहिए टीम अलायंस को, क्योंकि मेडुसा को टाइम देना है। मार्स बैन के मार्स क्यों बैन किया उन्होंने? इनको लग रहा है मास मिड आ सकता है। लाइक स्लार्क लाइक मार्स के उससे नहीं निकल सकता है ना, स्लार्क का पाउंस। 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. हमका हो गया खाना दोपहर का। मैं गए मैच का पॉपकॉर्न या फिर पोहा खा के नेक्रो बैन किया उन्होंने। माय गॉड। मतलब स्पिरिट को ओपन रख रहे हो ब्रैकेट, मतलब नेक्रो 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 नेक्रो, मेरे को समझ में नहीं नेक्रो के बैन किया, सच बोलो तो। 10 seconds remaining. या तो फिर वो ब्लड सीकर पिक हो 5 सकता है, या फिर seconds स्पिरिट, remaining. कौन सा भी स्पिरिट पिक हो सकता है। मुझे वो लगता लोग है भी खुला रख इनके रहा है। साइड पे स्टॉर्म या फिर एम्बर होना चाहिए, तो नहीं दूं। वॉइड नहीं पिक करना चाहूंगा अलायंस के साथ। उनका उन्होंने बैन किया, उनका क्यों बैन किया? मतलब कौन मिड में आने वाला है? इन्वोकर, इन्वोकर बैंड है ऑलरेडी। एक्चुअली क्रिस्टियन बड़े की जगह साइलेंसर भी लिया रहता ना, तो फिर अच्छा रहता, सच बोलूं तो। 10 अच्छा seconds अगर फिशर remaining. मारता है तो को मारने कहीं कूदेगा। 5 seconds बहुत remaining. अच्छा। Radiant team pick. वाइट स्पिरिट, मैं बोला ना, मैं बोला था। ऊपर एम्बर पर या स्टॉर्म या फिर वो टॉप्सन जैसा मिड पे डॉन ब्रेकर पिक करेंगे। डॉन और वाइट स्पिरिट आते ये ही डॉन तब ब्रेकर खेलता नहीं है 10 ना। seconds remaining. 5 seconds remaining. ये स्टॉर्म नहीं तो एम्बर, ऐसे कुछ वो हो सकता है, नहीं तो कट पकड़ने वाला ऐसे कुछ तो स्लार्क तो है वो स्पिरिट्स को पकड़ने के रूट लिए। करने के लिए। मेडुसा को मेडुसा के सामने टिकने के लिए अच्छे करे मेडू। मेडुसा के सामने टिकने के लिए नहीं, इनको जल्दी गेम खत्म करना पड़ेगा T1। लेट गेम पे नहीं। इनका जितने भी पिक है लेट गेमर मुझे नहीं दिख रहा है। स्लार्क को तुम लेट गेमर नहीं बोल। हाँ, वो मिड गेम लाइक बोल सकते हो, वो अगर उसने लाइक डिफ्यूजल बना के फाइट करने आया है तो बोल सकते हो मैं। लाइक अगर वो उसके पास वो स्टैक होता है बट वो उतना इसलिए उन्होंने इफेक्टिव। सारे अर्ली गेम्स वाले बैन किए लगता है, जैसे कि लश ये सब बैन किए, लीना बैन किया, अभी मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि इनका हाई टेम्पो है। एम्बर कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, मैं वही बोला कुछ स्पिरिट्स ही आने वाला लास्ट में। दोनों साइड पे नहा स्टॉर्म के आता है एम्बर मुझे लगता है जल्दी ऑनलाइन आता है कंपेयरिंग टू स्टॉर्म, सच बोलूं तो। या स्टॉर्म को एग्नम चाहिए होता है कम से कम उसको ऑनलाइन आने के लिए। नहीं स्टॉर्म को एकदम हाँ उसका वो एग्नम से ऑर्किड नहीं तो ऐसे कुछ तो नहीं ऐसे हो। मतलब ऑर्किड तो चाहिए चाहिए बट एग्नम मतलब उसका अल्टीमेट आइटम है, वो सबको मतलब खींच सकता टिंकर है। लेते तो भी नहीं, टिंकर भी है नहीं, एम्बर ही ठीक है, पर ठीक है बट बट मुझे जब लाइक ट्रेन प्रोटेक्टर एंड लायन दिखा
तो मैं मेडुसा की जगह स्पेक्टर पसंद करता। स्पेक्टर नहीं का नहीं एग्नम नहीं सेप्टर बहुत ओपी है सैम इस बार। ये दोनों को मार सकता था इजीली। मेडुसा अच्छा है सच बोलूं तो। चलो तुम देखो, मैं नहा के आता हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक है। Помогите, 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 помогите. Time for preparations. Prepare for a lesson. Balance in all things. 30 seconds remaining. This pleases me to no end. It was your MMR own is just a damn number. fault. MMR is just a number. Heroes rode out to the field of glory. First. लाइक मुझे लगता है सीएम लाइक स्लोली पिक हुआ टाइड हंटर के लिए, टाइड हंटर अपना एंकर स्मैश लाइक यू नो कंटिन्यूअसली यूज कर पाए। वो भी है, थोड़ा माना रहने से ये भी सरवाइव होता है। कौन? मेडुसा। मेडुसा, बट स्टिल
और मे भी वो चाहते हैं कि उनका फास्ट लाइनअप है, इसके वजह से वो लोग माना का ओवरऑल माना उनको पैसे बचते हो, ऐसा ही कुछ क्लैरिटी नहीं खरीदना पड़ेगा ना, वही तो है, वो तो है। अरे बोला था ये पोजीशन 4 ही होगा। स्नैपफायर पोजीशन 5 पे मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को खेलते हुए। पोजीशन 4 इसलिए क्योंकि वो कुकी देता है, फर्स्ट किल देता है और वो आर्मर हीरो रिड्यूस ऑन भी पे करता है, आर्मर रिड्यूस भी मर करता जाता है। ये मरा हाथ से करके एकदम वो डंडा से फोड़ दिया। भाई तो चूहे जैसी हिलती है यहाँ पे, भी मरा। बचा और नहीं बचा पाया कुकी से भी। ये स्लार्क का पावर, स्लार्क मार ही देगा। एक मिनट क्या पावर। Radiant has reinforced their structures. Let us rattle some trees. I fall where the sun can't find me. Ice is not always nice. Denied. Oh my god. Oh. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Nice try. Dire's middle tower is under attack. Never refuse gold given. Snark had his way with you. मेरे पास ऑलरेडी 2 आ चुके हैं। Bounty. एजीलिटी लेके घूम रहा है। फैल्कन ब्लेड इतना ओपी हो गया क्या? राइट अंडर का गेम। स्टार्क एंड मंकी 2 हीरो है जिसको अब मैं लेन करना चाहता हूँ।
Dire's middle tower is under fire. Prepare for a lesson. Not quite as slow now. I guess. पीएम का फार्म देखो 800 गोल्ड. का गोल्ड 800 तक सिर्फ 150 ही फार्म किया 10 मिनट. Mega kill. T1 का क्या कम्युनिकेशन है? Aims to see. उनको T1 को मतलब अलायंस का मतलब वो लेट गेम से जाने से रोकना है वैसा. क्या अलायंस लेट गेम पहुंच गया तो उनके पास बहुत चांसेस है. एक वाइड स्पीड का एग्नम सेप्टर आ गया तो एक गेम तो कभी लाइक जब से कड़िया ना एग्नम. I see that they have just fortified their structures. ये देखो मंदिर का घंटा है बाजार वाला. क्यों वो डराने की कोशिश करे, डर नहीं रहा हो. They're unstoppable. क्या कर रहा हो? फाइनली इम्बर को किल. What is a flame? Radiant's middle tower may need a hand. Dire's top tower. Radiant's middle tower. मार दिया सैफ ने. Dire's top tower is not on top of things. Radiant's middle tower may need a hand. मेडुसा ने क्या आइटम बनाया? माइडस की मेंटा नहीं जाएगा. अच्छा मेंटा जाने में पहले. अगर इसने पकड़ा ना ट्रेंट ने या फिर शेयरिंग चेंज भी पकड़ा ना तो मेंटा मार सकता हूँ. ताग ने पकड़ा तब भी मेंटा मारना पड़ेगा उसको. मेंटा से निकलता है क्या? नहीं निकलता मेरे हिसाब से. लाद के उससे निकलते पाऊँ. नहीं. वो लीश है, वो रूट नहीं है.
Radiant's bottom tower has uninvited guests. उनको ट्रायंगल पे फाइट लेना है। Dire's top tower is under attack. Killing spree. Dominating, I guess. I will ignore your email number of kills. क्या अच्छा था वो, इसलिए वो मतलब दूर जा रहा था ना, क्या बोलते हैं, स्नैप फायर भी दूर जा रहा था। दोनों मतलब बाजू में नहीं थे। डंटर ने बहुत गंदा लैग या लैग इसका मतलब क्या है? छूट के चल रहा है। नहीं, इनका एक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ था सुबह, मतलब इसीलिए 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हुआ इनका मैच चालू होने में। पकड़ा फायदा कुछ भी नहीं हुआ, सब मर गए। में लगता, सच में लगता, सच में लगता। मतलब फायदा का फायदा ये हुआ कि तुम्हारे मेडुसा जिंदा है और मिड लेन उठा लिया मेडुसा ने। इसका मिड लेन उठाया इसलिए नेटवर्क का गैप उतना नहीं बढ़ा, 1K पे ही अटका है अभी। इसका स्मार्ट है ना, लगे डिवोर्ड गया। कल तो स्मार्टनेस उसने दिखाया था सास्का ने। इधर मिड लेन में टॉपसन मरने वाला था वाइड स्पीड लेके, मतलब उसके पास यही माना रीजन HP रीजन कुछ नहीं था। सास्का उधर जाके मर गया मिड टावर पे, मतलब सेफ लेन में, और फिर इधर बॉटम में टीपी करता है, बॉटम मिड पे टीपी करता है बॉटल रिफिल करने के लिए। वो चेक कर रहा है विजन है कि नहीं, देख रहा हूँ। तार को खाना दिख गया क्या? नहीं, आई थिंक विजन फॉग विजन के लिए नहीं दिख, नहीं उसको सेंट्री नहीं दिखता, ऑब्जर्वर ही दिखता है। नहीं फॉग विजन के लिए स्लार को मेडुसा नहीं दिखा था। तो स्लार का जो पाउंस है इसको मतलब वो क्या वो शिप स्टिक जैसा बनता है, वो उसमें काउंट होता है क्या? नहीं, लीश में काउंट होता है। पक्का अल्टी, मेरा अल्टी, मेरा मतलब ग्रिमस्ट्रोक का अल्टी, पक्का अल्टी। ग्रिमस्ट्रोक का अल्टी तो कनेक्ट कर देता है, लीश होता है वो। तो शिप स्टिक किस में काउंट होता है? एक्स में हो तो ऑलमोस्ट रे, बच के निकल जाता हो।
बच के ना न्यूट्रल क्रिप मार दे देगा। लाइक उसके पास अगर वो होता तो न्यूट्रल क्रिप से मर जाता रेन ड्रॉप। तो उन्हें सीएम भी इसलिए लिया है क्योंकि वो फर्स्ट किल से थोड़ा विजन मिलता है ना कहाँ पे है करके। मैं निक्स लेना पसंद करता। और मेरे को विजन ही चाहिए, मैं क्लॉक ले लूंगा, मच बेटर है। क्लॉक बहुत कम पिक हुआ इस पैच में। मेरे को क्लॉक मतलब वो मैं डिवाइन ब्रैकेट में पहुंच गया ना, मेरे को समझ गया कि मेरा क्लॉक कुछ काम का नहीं है करके। वैसे अभी जकीरो किसी काम का नहीं है हेडशॉट के बाद। जकीरो मतलब प्रॉब्लम ये है कि जकीरो अच्छा हीरो है, टीम कोऑर्डिनेशन चाहिए। बट अगर कैरी मोटा हो जाता है तो उससे मैं डील नहीं कर पाता, प्रॉब्लम वो है। और ग्रिमस्ट्रोक को वो दोनों ऑफर करता है, मतलब मैं एग्नम का ऑप्शन से मैं कर सकता हूँ। मतलब उनके कैरी अगर ज्यादा मोटा हो गया तो मोटा कैरी से ही मारेंगे। हाँ मैं तो वही कर रहा हूँ अभी, सच बोल मेरे को ट्रिपल किल वो सब मिल रहा है। सच बोल रहा हूँ तो ठीक है, मेरे कैरी लोग मंद है तो उनको तो इससे बेटर है कि मैं उनका ही कैरी कॉपी करूँ जिसका दिमाग है। देखो लीस्ट लिख के आ रहा है, देखो लीस्ट। तो लीस्ट अलग होता है, वो लीस्ट मतलब पट्टा कुत्ते को बांधते हैं ना वैसा। हाँ लायन दो से पीछे हट गया अल्टी मारने में। Sometimes the little fish eats the big fish balls. बस लग बहुत बकबक करता है। आई थिंक सबसे ज्यादा बकबक डूम करता था। नहीं स्काईरात मार रहा है, ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। एग्नम में कैसे यार नहीं ना, एग्नम रहता तो बहुत बड़ी जंप बहुत बड़ा हो डरा रहा है, देखो डरा रहा है। माय गॉड क्या है मेडुसा के पास कुछ है क्या आइटम? जब से गाड़ी बना रहा है मेडुना ने संजन याशा बनाया। आई थिंक उससे बचने के लिए संजन याशा बनाया तार के लीश से। नहीं जल्दी खत्म हो जाएगा ना लीश। एक्चुअली संजन याशा डिसअसेंबल होता है। हाँ बट संजन याशा का तुम वो एजिलिटी वाले को तो मांटा बना सकते हो, स्ट्रेंथ वाले से क्या बनाओगे? स्ट्रेंथ वाले का पता नहीं, बट उसके पास है मांटा जाने का ऑप्शन है। हाँ मेडुसा के पास मांटा जाने का ऑप्शन है। बट मेडुसा आई ऑफ शकाडी जा रहा है क्योंकि अभी तक वो फाइट में नहीं घुस रहा है ना। उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है करके। उनको बोला कि अभी फाइट लो तो क्या करेगा वो, इसलिए शायद से उसने एसएनवाई बनाया है। आई थिंक एसएनवाई इसीलिए बनाया क्योंकि वो फाइट में नहीं घुस रहा है ना, वो उसको फार्म करना है अभी। जब एसएनवाई एक्चुअली फाइटिंग के लिए भी यूज होता है एक्चुअली, सच बोलो तो। बट मुझे लगता है एसएनवाई सर्वाइव के लिए ज्यादा यूज होता है, लाइक बचने के लिए। वो स्टैटस रेजिस्टेंस देता है वो सेज। यस तो इनमें एक्चुअली लायन का स्टन, हेक्स, रूट, बहुत कुछ है इनके पास, सीयरिंग चेन्स और ये सब है इनके पास, सब है। हेक्स है, मतलब अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आया, वर्स्ट केस सिनेरियो तो वो लोग ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं क्या, तो मांटा मतलब वो सेंजनी ऐसे से फाइट लेगा, उसको तोड़ के मांटा बना सकता है। और उसको मतलब फाइट में घुसना है कि अभी फाइट करना ही है। हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है करके उसने आई ऑफ सकाडी बना दिया उसने। क्या क्योंकि और क्या टाइमिंग है, उन्होंने स्मोक भी किया, दोनों ने स्मोक किया है। सकाडी इसका ये बना ना आई ऑफ सकाडी। ओ स्मोक टूट गया। ओ नो 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 नो। अच्छे करके बस मौका मिला तो अल्टी चेप देगा अच्छे कर। बीके भी ऑन हो गया। पीछे कौन मरा? वो मरा पीएम। मैंने वो फट से घुस के पीछे के ब्लैक लाइन्स को हटा दिया। अच्छे करके बस माना नहीं है। मार अच्छे कर।
बहुत लेट था, बहुत लेट हुआ, बहुत लेट था। ओ 5 मैन वाइप उनको आउट। बी होना चाहिए था बट उन्होंने अक्षकर बहुत लेट अपना रैवेज मारा, बहुत लेट। और सेकंड टाइड हंटर सॉरी टाइड हंटर आउट ऑफ पोजीशन था, मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि कुछ नहीं कर सकता। और प्रॉब्लम ये था कि एम्बर क्या बोला कि मैं पिच जाके उस सीएम को और सपोर्ट्स को काटता हूँ करके। ओके मतलब उनको जो टाइम मिल गया उन्होंने मतलब सब इधर उधर भटक गए। लाइक हम एक साथ नहीं है हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। नहीं उसने वही किया ना, टायर्ड हंटर के एक बंदे के लिए अल्टी मारेगा क्या? नहीं उधर वो उसके ऊपर मार सकता था, स्लार के ऊपर नहीं लगता बट एक्चुअली एम्बर के ऊपर टायर्ड लगता। को अंदर जाना नहीं चाहिए था, उसको बी होना चाहिए था स्मोक टूटते ही। उसने वो गलती की अंदर जाने के लिए, छोड़ दिया उसने। तो इसका कुछ फायदा नहीं है। सीएम मुझे इसीलिए पसंद नहीं, उसका अल्टी किसी काम का नहीं है इस गेम में। एंड लाइक तुम एक सपोर्ट का एक अल्टी मतलब साइलेंसर ले लो भाई, ताबड़तोड़ अल्टी है। कोई भी सपोर्ट का अल्टी ले लो ताबड़तोड़ है, सीएम का कुछ काम का नहीं है। उनके पास इतना स्टर्न इतना कुछ है कि सीएम का अल्टी रोक देगा हर बार। अरे अभी तक 23 मिनट हो गए, अभी तक रोशन नहीं लिया। उसके स्काडी से कोई मर नहीं रहा था एक्चुअली, प्रॉब्लम वो था उसने डैमेज ही नहीं दिया, उसने चलाया ही नहीं अपना। मेडुसा जो अपना हथियार चलाएगा। मेडुसा कैसा पता है, एक टैंक जैसा टैंक। टैंक को तुम धक्का मार के सही जगह पे पहुंचा दोगे ना तो वो शूट करते रहेगा मस्त। बट अगर टैंक मतलब सही जगह पे नहीं है तो कुछ काम का नहीं है वो। मेडुसा ही मारा, अल्टी मार दिया मेडुसा ने। टाइड हंटर के पास डैमेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है घुसने का। एक शॉट में कट रहा है वो। अरे रे 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 रे। अभी तुम बोलो स्नैप फायर क्यों चल के आया, वो बचाने के लिए आया था उसके पास। हाँ स्नैप फायर तो सही खेल रहा है, स्नैप फायर तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, बट सीएम दोबारा 5 मैन वाइप आउट, वो भी बाईबैक में। कितने बाईबैक, इसका बाईबैक आया सीएम का। लाइक लुक एट दिस सीएम ने 1000 डैमेज दिया। और वही पे उनका सपोर्ट का देख लेते हैं, लाइक 200 कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइलेंसर लेडिंग स्टेज में साइलेंसर हेल्प नहीं कर सकता था, इसकी वजह से शायद से उन्होंने उठाया नहीं हो। लाइक तो लेडिंग स्टेज में ठुक जाते थे ना वो। बट इतना लाइक वीक थिंकिंग, लाइक तुम लेनिंग स्टेज पे गेम पूरा खेलोगे क्या? तुमको तो आगे बढ़ना है ना लेनिंग स्टेज से। साइलेंसर को रहता तो फिर भी कहाँ रहता साइलेंसर, तो बताओ। साइलेंसर रहता है एटलीस्ट एको स्लैम तो नहीं आता ना ऐसे। एको स्लैम नहीं, मतलब साइलेंसर रहता तो फिर उसको कहाँ रखते हैं हम लोग? पीएम की जगह पे नहीं, मतलब लेन वाइज क्यों लेन हार जाएगी ना मेडुसा तो। नहीं, साइलेंसर और ज्यादा हैरेस कर सकता है। ये देखो उसको दे रहा है डिवॉर्ड करने के लिए, बट फायदा नहीं है ना, जिसने सेंटी खरीदा है उसी को गोल्ड मिलेगा। ओके बट कैसा है ना, बट इट्स ओके क्यों बता है, क्योंकि अगर सपोर्ट सेंट्री डालेगा तो एक्चुअली उनको ज्यादा लोग मतलब उसको एग्जैक्टली पता नहीं रहता, बट स्लार को पता लगा सकता है। हाँ। तो वो एक बार में उसका काम हो जाता है। अगर मैंने गलत प्लेस किया तो मेरे को आई थिंक 2-3 सेंट्री लगाना पड़ेगा पता लगाने के लिए। या लाइक बट स्लार्क देखो, स्लार्क बच के निकल आ सकता है, लायन का थोड़ा सा सर्वाइबिलिटी में है ना। मैं रहता था ना स्नैप फायर वहाँ पे टॉप फाइट में, मैं अल्टी चालू कर देता था, अल्टी चालू कर देता था। उसने कोशिश किया था अपने टीममेट को बचाने का। और टाइड हंटर के जगह पे मार्स उठाना चाहिए था, सच बोलो तो। मर गया, उड़ के आ गए एम्बर, वहीं पे वो मर गया। एक मतलब डैमेज है, इसने रोका इस बार अच्छे कर को। मेडुसा के पास डैमेज ही नहीं है।
बट फिर भी इस टाइम पे इन्होंने फाइट थोड़ा सा सस्टेन कर पाया क्योंकि रैबिस सही टाइम पे था। मेरे को लगता है उनको शार्ड बनाना चाहिए। ओह नो, उनको लगा ये लोग चले गए। फक। वाला सरप्राइज। ओह लायन का अल्टी। ओह माय गॉड, आई लव दिस लायन एग्नम शार्ट बिल्ड। I'd say wicked sick. उन्हें क्या मन दे क्या ये अलायंस? आई थिंक सो। You think you caught me? बट इस बार इन्होंने फिर भी सरवाइव किया। लाइक लास्ट 2 फाइट में इनकी पूरी हालत खराब था अलायंस का। लाइक एम्बर कहाँ से उड़ के आके उसको खत्म कर रहा है लिटरली सीएम को। अगर तुम्हारे पास साइलेंसर होता है तो एटलीस्ट तुम उनका बीके भी पॉप अप करवा सकते हो, नेक्स्ट फाइट में तुम ले सकते हो। उनके पास ना बीके भी रहेगा ना ये रहेगा। लाइक इनका एक ही फंडा है, लाइक स्लार का एक ही फंडा है। इसका ये निकाल दो, टाइड हंटर का रैवेज निकाल दो, सबकी फाड़ देंगे हम। I see that Radiant just fortified their structures. Dire's bottom tower is in turmoil. लाइक उसके बाद उन्होंने इसीलिए फाइट लिया क्योंकि टाइड हंटर के पास रैवेज नहीं बचा था। Invisibility. और मेडुसा के पास इतना डैमेज भी नहीं है कि टाइड हंटर के खिलाफ वो खड़ा हो सके। टाइड हंटर की बोल रहा हूँ, इनके खिलाफ। ये देखो अभी ये स्लार्क फुल तैयार हो गया है। ठीक है, भी आ चुका है स्लार के पास। कब का था हो गया, फाइट में आ गया था मुझे। तुम सोचो मेडुसा फार्म करने के लिए तुमको 4 बॉडीगार्ड लगते हैं। व्हाट द फक। हर बॉडीगार्ड ज्यादा नहीं हो गया? वही तो, मेडुसा फाइट करेगा, चारों लोग उसका मुंह दिखेंगे। मतलब तेरे को कुछ होना नहीं मांगता अभी भी तो फार्म कर रहा है ऐसा वाले। लाइक वांटा लाए मेडुसा फिर भी कुछ कर सकता है। लाइक मेडुसा के पास डैमेज नहीं है, कुछ भी डैमेज नहीं है। मेडुसा को सस्टेन नहीं हो पा रही। सपोर्ट जल्दी कट रहे हैं और सपोर्ट्स के पोजीशनिंग बहुत गलत है। स्नैपर पीछे रहने मांगती है, स्नैपर वो कुकी देने के लिए बाजू में आके मर जा रही है। मतलब कल एक मैच हुआ था, वो मतलब मेडुसा बुरा खेल रहा था। लाइक अर्ली में मेडुसा उतना नहीं था, मैग्नस मतलब ऐसे धो रहा था उड़ उड़ के। लास्ट में ऐसा हो गया मेडुसा को मैग्नस लेके आया टावर के नीचे, उनके टीयर 4 के। मेडुसा वहीं पे 4 जन को धो डाला अकेले। वो लोग ना मेडुसा से स्टार्ट कर रहे हैं, सच बोलूं तो। मेडुसा नहीं, वो लोग वो सीएम से खत्म। बहुत लेट था टाइड हंटर का। आई थिंक इट्स अ जीजी। मारो तुम लोग, निकलो यहाँ से, निकलो तुम लोग, ये टीआई से निकलो। निकल जाओ यार। तुमको ड्राफ्ट करने के लिए नहीं आ रहा है तुमको। क्या घाटी फेंकता। सीएम बहुत घाटी फेंकता, तुमने सही बोला। लाइक अर्चेकर का ऑफलाइन से मेडुसा हार गया लेन। तो उनका लायन देखो कितना इम्पैक्ट दे रहा हो। तो देगा ही ना, लायन है वो। और सीएम क्यों उठाया मर मर के। ठीक है, लोग नशा करके ड्राफ्ट करते हैं क्या लोग? तो कॉमन सेंस है इतना तो मेरे को भी पता है कि मैं तो खुद पंप्स में ने सीएम उठाता है, खुद पोजीशन 5 हूं। लाइक सीएम मतलब नॉर्मल 2 के 1 के ब्रैकेट में सीएम नहीं पिक होता है, और यहाँ पे लाइक ये भी उठा रहे लोग। मतलब क्या काम दे सकते हैं वो पैसिव माना के बदले, और क्या ही उसका औकात है? कुछ नहीं है गेम में। अगर तो वो लोग ये भी उठा लेते थे ना, क्या बोलो, अगर लीजन कमांडर 5 जैसे नोटेल खेलता है तो भी बहुत भाई लीजन कमांडर 5 ओपी है क्योंकि वो 20 लेवल पे शार्ड लेके आएगा एंड बीके भी फ्री का, बीके भी 2 सेकंड के लिए। डूड मतलब नहीं 20 लेवल पे क्यों? 20 लेवल पहले नहीं होता क्या? शार्ड एकदम शार्ड 20 लेवल पे, 20 मिनट सॉरी 20 लेवल बोल दिया। 20 मिनट पे एग्नम शार्ड लेके आता है एंड इज लाइक फ्री का है वो। अटैक स्पीड, बीकेबी, हील तीनों मिलता है उसमें। और उसके साथ वो डिबफ भी हो जाता है सब कुछ। हाँ, और स्ट्रॉन्ग डिस्पेल भी है उसके 4। मतलब बाय गॉड, मतलब एक स्टन बेटा रहेगा तो उससे भी निकल जाएगा वो। या तो सब कुछ है उसके पास, वो अल्टीमेट स्किल है। एंड
और वो डिसेब और वो मतलब आई वो थिंक स्किल वो इतना करता है 20 और लेवल पे या 25 लेवल पे वो एओई भी बन जाता है। और अगर किसी ने तो स्पिरिट ऐसा कुछ तो उठा है तो एम्बर को ऐसे ड्यूल करने का नहीं वो एम्बर को ऐसे मतलब एम्बर स्लार्क इसको डुएल करके होल्ड करके रखेगा, उसको मतलब मरने का कोई मतलब नहीं है। बाकी टीममेट मतलब पोजीशन बना के दे सकता है वो लिटरली एक किल के लिए। एक तो वो जल्दी मरेगा नहीं क्योंकि वो स्ट्रेंथ हीरो है, हाँ ठीक है। और अगर उसके ऊपर कोई चढ़ा भी ऐसा कुछ स्किल बिल डाला तो फिर वो अपने आप को पर्च करके निकल जाएगा। और अगर उसने एम्बर को भी ड्यूल किया, ठीक है, तो एम्बर तो ज्यादा करके मैजिक मतलब वो स्किल पे ही मारता है ना, तो इसलिए उसने उसको कौन से भी एम्बर को ड्यूल किया तो फिर उसमें मरेगा नहीं, वो उसको डिसेबल करके रखेगा। अरे 4 सेकंड के लिए तो एम्बर डिसेबल ही है ना, लेकिन कोई भी स्किल नहीं मारेगा एम्बर। तो मारा फिर से मेडुसा। जब मेडुसा से चालू करते देखा हैं ये सीधा वो उसके ऊपर जाके धोया एम्बर। हाँ एम्बर उसी के पास जाता है पहले। सपोर्ट को ही पहले धोएगा। हाँ सपोर्ट को ही मारा वहाँ खाली। मैं भी जब स्नैपर खेलता ना एम्बर मेरे को आके यही करता, मेरे को यूल्स आके करता पता है। हाँ जी तुम्हारी लाइक हो ही गया। नहीं है टीवी में, निकलो। मूड खराब कर दिया। क्या ये ड्राफ्ट फेज पे हार गए लोग। मूड की धज्जियां उड़ा दिया। इतना मतलब इधर भी बोलेगा। कॉमन सेंस है भाई तुमको, मतलब वो उनका कुछ तो लाइनअप था, सच बोलो तो उनको कुछ तो लाइनअप था, वो लाइनअप उनको बिटा नहीं तो वो लोग भाग गए। नहीं लाइनअप दोनों साइड पे मैं फर्स्ट 2 पिक सही था, ठीक है ना, टाइड हंटर एंड ये 2 पिक सही था। ये जो सीएम पिक हुआ ना, मैं मतलब क्यों, ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि लायन है और ऑलरेडी ये है लाइक नेचर लाइक ट्रेंड प्रोटेक्टर, ये 2 है। लाइक सीएम कब अल्टी मारेगा? सीएम का अल्टी नहीं है गेम में, कोई इम्पैक्ट नहीं बजेगा सीएम अगर अल्टी नहीं मार पाएगा तो। फिर भी उठाते थे ना मेडुसा की जगह पे, बट वो या फिर भाई वो 4 माना के लिए तुम पूरा एक 4x5 खेलोगे क्या? 4 वर्सेस 5 4 माना के लिए। साइलेंसर ने तो ऐसे कुछ तो चाहिए, साइलेंसर बेटर रहता था सच बोलूं तो। लाइक साइलेंसर अगर अल्टी मार के भी मर गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सीएम का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं था सच बोलो। लेनी स्टेज में हाँ उसने थोड़ा बहुत उसको ये किया, ठीक रस है किया होगा। चलो हाँ ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो लाइक सीएम के पास नेटवर्थ कितना है, लाइक 4193। तुम सोचो साइलेंसर ने एक साइलेंट ये डाला, ठीक है, एक फर्स्ट किल डाला एम्बर पे, क्या करेगा एम्बर? एम्बर को होल्ड देखो करना पड़ेगा, नहीं स्किल नहीं मारना नहीं पड़ेगा। नहीं एम्बर तो भी फाइट करेगा बट पीके भी मतलब ऑन करना ही पड़ेगा उसको। नहीं टिकिंग टाइम बॉम्ब है उसके ऊपर। हाँ मतलब वो कितना स्किल यूज करते जाएगा उसके ऊपर वो बढ़ते जाएगा, राइट, मतलब वो ड्यूरेशन नहीं एक्सटेंड होते जाएगा। लाइक मैं और सैम तुम बात कर रहे हैं ना कि एंड में जाके स्प्रिट आएगा, कोई एक स्प्रिट आएगा, 3 में से एक स्प्रिट आएगा, और स्प्रिट को मारने के लिए साइलेंसर से अच्छा कोई हीरो नहीं है। पोजीशन 5 के लिए हाँ लाइक ग्लोबल साइलेंस ओपी है, लाइक कोई भी एक स्प्रिट पकड़ लो जिसको तो मारना है तुमको। तुम बोलो मेरे को मेडुसा के सामने सब कोई साइलेंस टेक क्या उखाड़ेंगे वो मेडुसा के सामने, मेरे कुछ को नहीं कर बताओ। सकता मेडुसा को। कुछ नहीं करता, अब तो डीके भी अच्छे को रोक चाहिए। सकता है, लाइक ट्रेन प्रोटेक्टर को रोक रहा है, लायन का स्टन रोक रहा है। लाइक मेडुसा खड़ा ही नहीं हो सकता इस गेम में, लाइक हर कोई आके उसको स्टन कर रहा है। मेडुसा को स्कार्डी के बजाय मेडुसा उस टाइम पे आई थिंक मैंटा नहीं मैग्नम चला जाना अगर चाहिए था। हाँ एग्नम, राइट में वही बोलने आना था। एग्नम और एक डैमेज आइटम कुछ तो ये भी स्कार्डी पकड़ लो, मैंटा मेडुसा भी का जरूरत स्कोर नहीं देखो सैम 0-5। 0-5। मतलब इतना रॉकेट साइंस नहीं था, बेसिक मैथ्स था। तो मैं ही कर पा रहा है, उसमें क्या है। और ये देखो एम्बर स्पीड सबको ही रिफ्रेशर लेके आ सबको रहा ही है। सबको ही को लगता है कि नहीं मतलब मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि एक स्प्रिट आएगा, कि दोनों साइड पे स्प्रिट आएगा ही आएगा। कि हम लोग तुमने इतना सोच तुम्हारा सकते बैंड देख के हम बोल रहे हैं कि उस सामने स्प्रिट खाली रख रहा है, स्प्रिट आएगा, कि बैनिंग फेज में स्प्रिट पता चल रहा है कि स्प्रिट आएगा। हाँ तुमने वॉइड उठाया, वॉइड के पास एग्नम शिफ्टर आता है तो वो साइलेंस कर सकता है,
बट बहुत लेट आता है वो एग्नम सेप्टर। वाइट का फर्स्ट पिक ऐसे एग्नम सेप्टर नहीं लाना है मेरे को कि गेम में उतरना है, मेरे को बॉटल चाहिए, एग्नम सेप्टर चाहिए, नहीं होता है वाइट का। वाइट को दूसरे आइटम भी चाहिए होता है। एग्नम सेप्टर इसका लाइक अल्टीमेट लाइक थर्ड मेन आइटम होगा प्रॉब्ली। और उन्होंने उसके लिए ये भी उठाया, लायन उठाया। लायन से क्या होता है पता है? यहाँ से हैक्स करता है, इंस्टा हैक्स। या लायन का हेक्स इंस्टा है। इंस्टा है, तो इसके लिए वो स्पिरिट को ऑलरेडी उनके पास जवाब है, इसलिए उन्हें फर्स्ट पिक लायन किया है। यस। और इन्होंने वहां पे जाके सीएम जब तक कास्टिंग करेगा अपना लाइक सेकंड स्किल, तब तक साला भाग जाएगा। सीएम सिर्फ देखने के लिए भाई, तुमको उसको देखो, मस्त दिखती है, ये वो बस लाइक उतना ही है, बाकी कुछ एलायंस का खेलो ये मत। पूरा गेम 4v5 चल रहा था। लाइक सीएम इज लाइक जस्ट अ क्रीप। 3v5 मेडुसा क्या उखाड़ा? सब तो मेडुसा से स्टार्ट किया है। हाँ मेरे को मेडुसा। बताओ, तुमने टाइट हंटर ने क्या उखाड़ा? मार्स रहता तो भी ठीक रहता था, सच बोलूं तो। फिर भी लाइक टाइट हंटर ने बहुत गलत किया, गलत पोजीशन था उसका। वो उधर बॉटम में मिड पे फाइट हुआ, पोजीशन ही गलत था उसका। मतलब वो बैठा है कि कब अल्टी मारू, लाइक अल्टी। मार्स बैन हुआ था क्या? नहीं ना, आई आई थिंक थिंक बैन बैन हुआ हुआ था, था। बैन हुआ था। इन्होंने ही बैन किया था, इन्होंने टाइट हंटर फर्स्ट पिक किया था ना। ठीक है, टाइट हंटर फर्स्ट पिक किया तुमने, बट लाइक इनके पास कोई भी मतलब डिजेबल के नाम पे एक टाइट हंटर की अल्टी ही है। एंड मैं सीएम की सेकंड स्किल को डिजेबल में काउंट नहीं करता। और सीएम का आइटम भी देखो, ईथर लेंस, कास्ट रेंज ज्यादा चाहिए उसको। और सीएम का ईथर लेंस का जवाब लाइक एम्बर को कुछ आइटम ही नहीं चाहिए था। देखो एम्बर ने क्या बनाया, एक मेलोस्टोम बनाया, देन आइटम वाइज अगर उसने देखता है क्या बनाया, फर्स्ट एम्बर ने मेलोस्टोम बनाया, देन बीकेबी लाया। क्या करोगे लाइक टाइड हंटर, सीएम, तुम स्नैपफायर, वाइट स्पिरिट। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आगे वाला स्पिरिट आने वाला है, तुमको पता है एम्बर आएगा, स्टॉर्म आया, ठीक है, उसको तुम कैसे पकड़ोगे? यही मेरा को यही मेरा ये क्वेश्चन का जवाब मैं आंसर नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने जकीरो उठाया, या फिर मैं ये उठाता हूँ, अभी मैं ग्रीन स्ट्रोक उठाता हूँ। बट कैसा चैलेंज सिर्फ ये है कि हमारी टीम में किसी को तो बैकअप स्टन करना लाइनअप। पड़ता है, स्टैट स्टन, या फिर उसको एक ही जगह पे मतलब दो चीज, साइलेंस बिठाने के लिए दो चीजें से कर सकते हैं। एक, उसको मतलब पता नहीं है कि तुम बाजू में हो, या फिर उसके तरफ साइलेंस आ रहा है, ऐसा सा उसको मतलब ग्रिमस्ट्रोक का साइलेंस बहुत स्लो है, ऐसे दूर से दिखता है वो आ रहा है करके, तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है वो। तो इसलिए मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे कैरी या किसी जो भी इनिशिएटर है उसके ऊपर थर्ड डालता हूँ, वो जाके वहाँ पे रुकता है, स्टन पे बैठता है 2.5 सेकंड के लिए, 2.75 सेकंड्स, और फिर मेरा सेकंड उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, और बाद में मैं उसके ऊपर अल्टी डाल देता हूँ ग्रिम स्ट्रोक का, तो मतलब उसके टीममेट के साथ चिपक जाता है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, अल्टी यूज ही नहीं कर सकता वो। या लाइक वो बहुत ओपी अल्टी है कि टीममेट के साथ अगर चिपक गया तो कुछ नहीं यूज कर सकता है भागने के लिए। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता लाइक सीएम का इम्पैक्ट किसी भी गेम में कुछ नहीं है। लाइक सीएम का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। लाइक बेन का इम्पैक्ट मैं देख सकता हूँ, लाइक एक एम्बर आया तुम्हारे ऊपर चढ़ के आया, तुम उसके लाइक बीके भी है तब भी तुम उसको रोक के रख सकते हो। बेन क्या फुल चौकता हूँ, लाइक फुल उस दिन चौकता मैं ठीक है। तुमने बताया था कि मैं वो क्या विंटर राइवन खेल रहा था, एंड लाइक माँ ये आके मैग्नस आके मेरे को टारगेट बना रहा था, तुमने ब्लिंक डैगर बोला, नो गेम कम बैक किया। लाइक मैं जानता हूँ, मैं सपोर्ट खेला कुछ दिनों से, और मैं जानता हूँ कि लाइक सपोर्ट पहला टारगेट होता है, और सीएम के पास सर्वाइबिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होता है। अरे वो लोग बैकलाइंस पे रुकते हैं, ठीक है, बैक मतलब लाइन पे रुकने के बाद भी सीएम वो और फर्स्ट टारगेट है। सीएम और स्नैपफायर पीछे रुकते हैं, पीछे रुक के वो एम्बर जैसे फाइट चालू होता है ना, वो सीधा पीछे जाता है और उन दोनों को धोता है, वो पहले सीएम को धोता है वो। नहीं वो कुछ भी है, पीछे रुकने के बाद भी वो फर्स्ट टारगेट बनते हैं। तो अगर वो देखो हर स्पिरिट का मतलब क्या है, स्पिरिट का ये माँ है कि आत्मा। वो नहीं नहीं नहीं, मतलब मीनिंग नहीं बोल रहा मैं, स्पिरिट मतलब मैं माना खर्च करूंगा, मेरे को किल मांगता है, हाँ ठीक है, स्पिरिट मतलब माना खर्च को, अगर मैं माना खर्च करके मैं आगे वाले को नहीं मारा, मतलब पूरा वेस्ट, पूरा टाइम वेस्ट, और कंपलसरी मरने का वहां पे,
यस लाइक मेरे पास एस्केप होने के लिए माना नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो वहाँ पे उन्होंने एऑन डिस्क या फिर कुछ तो पकड़ने के लिए रूट वो सीएम इसलिए बनाया था शायद से वो रूट करेगा करके ऐसा सोचता था, बट कुछ हुआ नहीं। एटलीस्ट ग्लिमर केप बनाता था तो भी आई थिंक सीएम बच जाता। नहीं, उसे फोर स्टॉप भी बना नहीं नहीं मतलब नहीं होता वो। कुछ तो मुझे लगता है कि एलसी नहीं तो साइलेंसर ऐसे कुछ तो चाहिए था। साइलेंसर ना होता बेन भी होता, मैं मान लेता। बेन बी के भी पियर्सिंग है, उसका मतलब हेवी इम्पैक्ट होता है। लाइक बेन भी वो पकड़ सकता था बट या लाइक सपोर्ट में बहुत चॉइस था, सीएम किसी चॉइस में नहीं आता है। इनको मतलब इन्होंने मतलब सही से सोचा नहीं लास्ट मोमेंट पे। लाइक सपोर्ट क्या में बोल रहे इतने सारे चॉइस है, क्या लाइक बोल ग्रीम रहे स्टोक। वो क्या बोल रहा है? क्या बोलेगा, बोल रहा होगा भोसड़ी के चुतिया थे। Remember the good old times because it's time क्या to बोल रहा था, कुछ ask the सुनना players पड़ेगा। what they remember. नहीं सुनाता है साला पुराना बीच पे। तो हो गया तो इट्स ओके। अभी वो इविल जीनियस एंड पीजी का गेम है, आई थिंक इस गेम में हमें अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक अलायंस से एक्सपेक्टेशन है क्योंकि उन्होंने टीआई क्वालिफाई किया। Welcome to the Dota Archives. Today we shall be discussing something many of you seem to struggle with: items. The game of Dota contains more than 200 of them, with many more having fallen by the wayside in Dota's मुझे march लगता है ना कि towards टीआई इतना कॉम्प्लेक्स है करके, सच बोलूं तो, या फिर मैं हम लोग ही स्मार्ट है, मेरे को ऐसा लग रहा है। Sorry, Fusion Rune. मतलब स्ट्रेटजी फेज में एटलीस्ट कोच बीच बनना चाहिए। Free, as अप्लाई the करेंगे kids हम say. लोग। One in तुमको वो कर लेना चाहिए, वो पाँच जैसे करता था ना, और जो एनालिस्ट करो तो भी देखो नेक्स्ट ईयर तुमको भी बुला लेगा। but instead used by your worthless Legion commander to level 1 jungle. But Dota take my word for it. Here we are. शेरलॉक होम्स टाइप कुछ तो इमेज बना रहा है। Pro players, आयरन टेलर remember बहुत when बुरा आइटम है। Iron Talon existed? О, талон. Мне очень нравится талон. Да, еще даже когда он нитрака был, я помню, во-первых, его сам себе берешь, и у тебя появляется возможность типа где-то проиграть, где-то выставить, если ты пятерка, например. Плюс ты мог большого крипа просто нажать талон, там нюк, и он умер. I miss Iron Talon न्यूट्रल because में the मैं जिंदगी offlane गुजार is दूंगा। starting and आयरन right टनल now इसलिए बैन हुआ क्योंकि sometimes न्यूट्रल I में want to वो start on मिलते तो jungle, न्यूट्रल so चले I जाते थे। cannot feed as offlane. चारों दिन मरे तो फिर भी न्यूट्रल में That's ही the time मारते you play post for like you buy on Talon jungle level 1. It wasn't even Dota. You would just jungle. People in pubs would start jungling with Iron Talon level 1. There was like, it made no sense. It actually made no sense. 辅助玩家就打对线会比较用力，然后把对方大哥जंगल करते थे बैठ के।对方钻野一下就起来，这种感觉真的很糟糕。 You just find the Iron Talon. पैसिव डोटा को डोटा टॉप goes करता with है। items and समझ में आ रहा है क्या? इसके आयरन टनल तुम पैसिव हो रहे हो, तुम अपना दुनिया अपना ये कर रहे हो, तो दैट इज नॉट एंटरटेनिंग। सच बोलूं तो टीम फाइट नहीं हो रहा है ना। टीम नहीं, टीम फाइट भी नहीं, कुछ कोऑर्डिनेशन और कुछ एंगेजमेंट रहना मांगता है। एक दो के साथ लाइक टाइड हंटर का अल्टी, इन्वोकर का कैटेक्लिज्म, वो गिरना चाहिए गेम में, एंटरटेन होना चाहिए पब्लिक जब देख रहा है। पुअरमैन शील्ड भी इन्होंने निकाल दिया उसी रीजन के लिए। पुअरमैन शील्ड के साथ वो जंगल कर पाते थे, आयरन टनल और पुअरमैन शील्ड। हाँ, पुअरमैन शील्ड और आयरन टनल लेके तुम साला जंगल में चले जाओ, घंटा तुम आराम से लेवल 1 से ये कर सकते हो। तो वही करना एक्स पे दो शाउट शील्ड लेने का और Yeah, it just was just bullshit. You just like शाउट शील्ड को भी बैन कर दिया। 40 damage, which is support hero. You're tickling the guy, and you kind of feel like, well, you know, enjoy your lane carry. I'm getting the hell out of here. You know. The patch before it got removed, it was just every mid melee hero bought it and went mid, right? And then they just won the मेरे lane. को उसमें से or something that had some crazy block. मेरे को बोल देते, मैं साइलेंसर बोल देता, मेरे को उसके लिए कम से कम चले 10,000 रुपए, $100 दे देता तो हो जाता। $100 बस, $100 ज्यादा भी नहीं मांग रहा। मतलब तुम समझो वो गेम वो लोग जीत जाते तो मैं 10,000 रुपए मांगता। मतलब तुमको दिमाग नहीं है तो एटलीस्ट मेरे से कॉल करके पैसा। मतलब उनके कोच तो बैठा था ना वहाँ पे,
and पिक के टाइम पे कोच बैठा रहता एक्चुअली है। क्या था ना the उनको offlaner मतलब who's like level 2 struggling in like struggle city, and I'm like just chilling. पता नहीं, मे भी उन्होंने सोचा रहेगा what's going on. साइलेंसर के बारे में, बट have only just recently left us to कुछ go हुआ to नहीं। Ice Frog's item heaven in the clouds. मार्स अच्छा था, आई थिंक वो मार्स मिड मार्स करते तो भी ठीक रहता था, सच बोलो उन्होंने तो। बैंड कर दिया था ना मार्स को। Because they belong in hell. कुछ तो या तो फिर नेक्रोमा बुक 没有比这个道具更让酱油讨厌的道具了，哈哈。 एक और भी अच्छा रहता, running around and stuff, साइलेंसर like, के this guys just साइलेंसर gang नहीं up रहता on me तो and kill me, and I'm like, हाँ। that's cool, I guess. डार्क विलो That item was definitely an हाँ डार्क विलो अच्छा था। at the end. I like डार्क विलो का अल्टी मेरे को ज्यादा पसंद है क्योंकि तुम्हारा एक फुल टीम दे, मतलब टीम को रिपोजिशन का टाइम दे देता है। बेसिकली क्या है पता है, इनके पास डिसएंगेज करने के लिए नहीं था। ये देखो नेक्रो बुक भी सीएम को मार रहा है। 这个真的是恐怖。 इतना बकवास है सीएम। Yeah, I don't like my worst to be killed by some guy that just clicked one button and doesn't have any skill. I spam a lot of tag gears and like people just buy Necro Book level 3 and like clear all my bombs. So like yeah, it's very good that Necro Book is gone. Короче, нереально бесстильно. As a good riddance, I'm happy they removed it. अगला मैच कितने बजे है? Yeah, good riddance. अगला मैच अभी चालू हो जाएगा ना, टाइम है? हाँ। Why they remove the 16:30 मतलब 4:30 बजे पे, तो 1 घंटा मैच खेलता था। आधा घंटे तुम खेलो, कोई बात नहीं, तुम तो स्ट्रीम नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ ना, बता दूंगा। They are kinda sad, so I feel good when they are sad. सपोर्ट के लिए बहुत ओपी आइटम था नेक्रो बुक। As a man greater than I once said, everything can work, and you, the player, अलायंस ने जो भी सोचा वो दोनों गेम में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, स्पेशली S4। मुझे लगता है S4 का हीरो पूल की वजह से थोड़ा मेरे को लगता है ये सच बोल। फर्स्ट गेम में फिर भी खेला था, सेकंड गेम में कुछ नहीं कर पाया। नहीं, मेरे को लगता है S4 को उठाना चाहिए था, या फिर जो भी कैप्टन है उसको उठाने का, S4 को उठाने का। और नहीं मतलब कैप्टन की मेन गलती है, कैप्टन आई थिंक S4 ही कैप्टन है अभी अलायंस का। क्या बात कर रहे हो? हाँ गधा है मतलब वो। Ladies and gentlemen, welcome back to the International 10. There नहीं सुन पाए। या फिर पक भी लेते तो भी ठीक रहता था, आई डोंट माइंड, क्योंकि उनके कौन से भी लाइनअप में एक कॉम्बो नहीं था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कॉम्बो नहीं, इनके लाइनअप पे ऐसा कोई हीरो नहीं था कि सामने वाले को कुछ भी करने के लिए फोर्स करे। लाइक उनका बीके भी ऑन करवा दो फाइट से पहले, एंड बीके भी खत्म हो गया, तुम उसके ऊपर फाइट ले सकते हो। सोचते ना, मतलब सब स्टार्ट से जाते लेनिंग स्टेज में वो मतलब एक कॉम्बो डाल के किसी को धो सकते हैं क्या? नहीं, इन्होंने लेनिंग स्टेज का ही सोचा है, उसके बाद का कुछ नहीं सोचा टीम गेम का। एक बात का सोचता तो सीएम पिक नहीं होता। मेरा वही कहना है कि लाइक वो लोगों ने देखा टाइड हंटर के अल्टी लाइक रैवेज निकल गया, फिर उसके बाद फाइट लिया, भले इनका एक बंदा कम है, क्योंकि इनको मालूम है सामने सीएम है, कुछ नहीं कर सकता। अगर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब T1 ने ऐसे लाइक नॉर्मल मैच खेला है, चालू होने मतलब ये लोगों का दिखा रहा है। अब देखते हैं आरटीसी के का क्या करेगा। आरटीसी भी चुतियावा करेंगे इविल जीनियस। स्टैंडिंग में अगर हम देखें मैच होगा इविल जीनियस वर्सेस ईजी का। मैं इधर से कॉपी मारूंगा टाइटल को। एक गेम खेल कर हाँ खेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
थोड़ा सा वॉशरूम होके आता हूँ. स्वप्निल आवाज तो ऑन करो. आवाज बंद करके रखा क्योंकि हम बात कर रहे थे ना. मैं不求一定要就是打进去，但是一定要就是把自己平时训练的那种东西打出来，就输的也输的不遗憾那样。ये वही सेम चीज सुनाता है बार बार. 这个外卡赛程打完之后啊，因为第一天表现不是很理想的关系，我可以看到社交媒体上啊、论坛上啊，其实有蛮多的给你们压力的这种评价。你们打完之后会去看这些东西吗？还是在比赛期间你们基本上会脱离这些东西？可能他们会有看吧，我看的会少一点。这种东西说实话感觉有点唯结果论，而且来打外卡的队伍这一届真的是太厉害了，能输还是能赢，全凭那个就是临场状态吧。哎，这就有点像你拿你刚才高考的这个说法，就是哎，我正常高考和我参加了1年高复班之后再去补考，到底是感觉去年状态更好一点，还是此时此刻状态更好一点？ लगता है स्वप्निल इस बार TI कौन जीतेगा बताओ. 去年会状态更好一点。哦，真的吗？怎么讲？真的。ये लोग सेम डायलॉग दिखाते हैं. लाइक फर्स्ट टाइम जो दिखाया वही दिखा रहा है. 然后现在的话，因为中间隔了快1年之久，然后有1 इसलिए 年没有 बोर 走出 होता 国 हूँ 门 लाइक लिटरली. 现在的竞技状态可能 स्पेशली इनका कुछ समझ भी नहीं आता है, अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते. 你感觉那种国际比赛的就是氛围和这个保持一个频度的刺激，对你来说是一个正反馈，是能提高你的这个水平和状态的。对的，就是你能够在国际赛场上跟不同国家的队伍交手，会一直激发你去前进，就是去跟他们做对抗。लाइक इस सीजन में पोर्तुगीज लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ये कर रहा है. लाइक ब्राजील से भी कास्टर बुलाया गया है. अगर इंडिया से कास्टर बुलाते हैं, इंडियन लाइक जो हाई टियर का कास्टर है, और वो लोग जाके कास्ट करते हैं तो शायद डोटा थोड़ा सा इम्प्रूव हो इंडिया में. Absolutely. Thank you so much for DY, and we are so excited to get into this match. Gentlemen, I've been talking this entire time. Love the time, by the way, Tsunami. I get the joke. That's hype as hell. But let's start things off at the top, and we'll make our way down. Cinderin, how are you feeling about this matchup, baby? I mean, I want to start out saying
imagine this, one of these teams doesn't get top 8, right? That's just like a starting point going into this match that I think a lot of people wouldn't have expected pre-tournament. Many people had both teams even finishing top 6, top 4. So that already to me is a crazy storyline, that one is going home 9-12. अगर top 8 पे पहुंच जाता तो उनको $1 million मिलता है as a prize. A mixed bag for both teams. They've had some really good games, and there's been games where they've सस्ता kind of, mousepad like 200 का मिलता है ये mousepad मेरे पास था पहले. They've been rolled completely. ये बहुत सस्ता I mousepad है. think it's really hard to call who has the advantage. Obviously, Vici Gaming came in from the upper bracket. They lost a close series yesterday. Yeah, it was close. EG got a 1-game win on the main stage so far in a less close game. So I don't know, based on that, who you would say looks stronger. I think it's going to be pretty close. Yeah, I agree. I agree. I just want to talk about the interview because I got some vibes from that interview. I know he was saying like, oh, you know, maybe we're feeling like a little bit less competitive this year, this TI, you know, compared to the previous. But were you guys getting the vibes of like they're just kind of chilling, like they're chill, like low pressure and almost like putting up the front of like, oh yeah, maybe we're not so competitive, but like really. To me, that's almost a good thing because of like the lack of pressure. And I remember DY said in another interview that when he was there question about the small hero pool of Vici. They've one of the smaller hero pools of this tournament, and he said like, yeah, we have a small hero pool, but nobody's figured us out yet. Nobody's figured out our heroes yet, and so we haven't had to pick our like pocket picks. And so the vibes I'm getting from Vici are just really chill. And I feel like given how this TI has gone so far, that's going to help out a lot. Well, just because something's small doesn't mean it's not effective, Tsunami. You know, and on the panel can surely attest to that. What are you thinking about with this match, sir? Do you think that EG have this one shut in? Give me percentages, buddy. Oh, you want percentages? I want percentages of EG taking it. Okay, so I see Jenkins' angle of low pressure, but I think that could be also interpreted as complacency to an extent. Okay, sure. I think that they are kind of low pressure, but that means that they don't really get that fire. And I think of all the teams here, I think coming second place, they say that on Olympic podiums, it's usually the silver medalist who is the least happy. Gold medal, obviously, you're very thrilled. Third place, bronze, you're just satisfied that you were able to make it onto the podium in the first place. But silver medalists have the chip on their shoulder, and EG have been silver medalists this entire time. So if you want percentages, I'm saying 69-31 EG. You can't say 69 on a T9 panel. So you're saying EG were happier last year when they were getting third every time. I do think so. Because then they were lower on the podium, so that was a good thing. I mean, Vici has also been getting like second and third all year, too. I feel like these two teams are very similar in that regard. This year specifically has been EG in the silver medal finish, whereas Vici Gaming, you saw at Singapore, they were just like nothing too special. It was IG that was setting China on the stage at Singapore, and then at the Animator it was LGD. Vici Gaming has always kind of taken a passenger seat throughout the DPC and throughout on offline events. I think your 69 number might actually be quite close because Vici actually has a 40% win rate against EG. Exactly. Going into this, and so. On one side, you have Vici who came in from the upper bracket, and I think they looked really good in the VP series. I mean, the first two games, like, they looked Vici favored. At some point, they looked very Vici favored, and then VP eventually won and then stomped the third game. Yeah, I agree with you there. I feel like they learned a lot of lessons out of that one. They looked so dominant in game one. And then the Underlord pick, I believe, coming out to counter the Terrorblade, that was an educational game for pretty much everybody at the tournament. And I also agree with you guys on the second place thing. I mean, as my father used to say, second place is biggest, best loser before he would shun me out from the house. So understandable. That is coming out here today. Luckily for us, whoever is eliminated from the International 10 after this series won't be anywhere near second. Cinderin, my friend, let's talk about some drafts here. Right. Well, what do you want to know? Oh, just start talking. I usually just throw it over to you and you don't shut up, so I'm trying to... I was like, we have a draft panel for that. What am I talking about? Well, I'm talking that? about anything surprising. Okay. I think that EG has had some surprising picks. As we've discussed, Vici Gaming, not so much. Did you know in their last series, they picked Snapfire in the same position every single time? Yeah, they don't have to change. They don't have to change checks anything. Out Yeah, with like what Jenkins was saying. Yeah. I don't know. I think the if you want a little bit of draft insight, I think the players to watch in the draft, honestly, a lot of it comes down to, first of all, Abed's hero pool in this tournament has been very, like,
how to say, it's been very uniform. It's been a lot of these spirit heroes mid. It's been the tempo controllers. Yep. Against Vici Gaming, they're going to know what's coming because it's been the same basically every game from EG here, let's be honest. So the question is, okay, how are Vici Gaming going to adapt to that? Because sometimes in Vici Gaming's draft, they get very passive. They pick like these massive teamfight heroes that need really long. I think there was a game at the last major where it felt like, okay, Vici Gaming are just playing until the game is over, and they never really got the fight they were looking for. Yeah, they have some of the longest games of the tournament. And there's like two ways of approaching this kind of EG strat. One is that you fight them head on and you have something that's just as good, or you pick some defensive team fighters that can hold towers, and then you put Poyoyo on some of his like hyper carries like Spectre, Terrorblade, whereas Arteezy in this series I think is maybe more likely to play something like the Luna that we saw the other day. So maybe EG, this is one of the few opponents that they're actually clearly faster than on average. So I think you should play to that if you're EG in this strategy. How do you know that they won't go, I can outlate game you? Because we saw Arteezy also playing some Naga Siren as well and stuff like that. So which approach do you think that EG would favor? I think if I were EG, I would probably try the slightly higher tempo, because when I see Vici Gaming struggle the most, it's when they get pressured really hard in lanes. And that's something EG's players are very good at. I think that strategy is way more likely to work against Vici than, say, someone like PSG.LGD or IG, who have been, in my opinion, overall looking more consistent in laning stages. So trying to take advantage of that. Carries that I would love to see for Arteezy, Luna, Ursa, you know, these like high-tempo heroes could be great. All right, well, fantastic. Looks like things are about to get rolling, my friends. It is time for the draft panel. Let's throw it on over to Avocado and the boys. It's Avocado. It's Avo. Evil geniuses! माय गॉड सीरियसली ओजी वाले भी मैच खेल रहे हैं लिटरली देखो ताश का अच्छे कर खेल रहे और कोई है ओजी वाले है कोई इसी में आई हेट दिस थिंग लाइक नया वाला जो उसमें ऊपर में लाइक तुम्हारे फ्रेंड दिखाएंगे नीचे लाइक जो प्रो प्लेयर है वो लोग नीचे जाएंगे क्योंकि अब तमिल क्या खेल रहा है खेल नहीं रहा है आज का पॉइंट कितना हुआ मेरा फैंटेसी में अभी पॉइंट कमाया अलायंस वालों ने मेरी इज्जत डुबा के रख दिया निको बेबी ने जीरो किल किया साला ना बकवास कौन खेलता है बहुत बकवास खेला एविल जीनियस एल्डर टाइटन बहुत अच्छा पिक है इस सीजन में Radiant team pick. Dire team Monkey King. Lion and Monkey King like सैम होता तो मैं बोलता सैम को लाइक देख मंकी किंग एंड लायन कभी छोड़ते नहीं है लोग लाइक ये दो हीरो कभी मतलब लायन को ऐसा नहीं है बट मंकी किंग को छोड़ते नहीं है मंकी किंग लेगा ही लेगा यो विजन बहुत इम्पोर्टेंट है 5 seconds remaining. बोनस विजन मिलता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है जाना है तो अपने शाम को जाना है क्या मैच हो जाने के बाद जाऊंगा मैं पकौड़ा थोड़ा सा खरीद के लाऊंगा समोसे पकौड़े ऐसा लाइक पूजा के टाइम पे खाने का मन कर रहा है मिठाई कुछ ओ मिठाई से याद है मेरे रूम में मिठाई पड़ा है मिठाई Dire team ban. Beastmaster. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban.
Okay, there's some issue. It's okay now. It's not working. क्या ओडी पिक्सल कास्टिंग कर रहा है? शायद मैं ओडी पिक्सल का कास्टिंग भी सुन सकता हूँ बैठ के. I don't know. शायद. And मिठाई खाऊंगा. 10 seconds remaining. I'll eat some sweet. 5 seconds remaining. By the way, रसगुल्ला खाने में कौन सा ज़्यादा पसंद आता है? Okay, I lose some frame. Radiant team pick. Dire Not team supposed to pick. lose frame, and there is the lag. I don't like to lose my frames. Like Remaining. YouTube server change करना पड़ता है. तो YouTube server से problem है. मेरा गेम प्ले एकदम perfectly चलता है without a loss. इस बार स्टॉर्म स्पीड पहले ही पीक हो गया बीजी की तरफ से. Dire team pick. Imba Spirit. Radiant team pick. Sky Wrath Mage. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. रसगुल्ला बनाना नहीं आता यार, इसको बनाना सीखना पड़ेगा. बट अभी रसगुल्ला नहीं, अभी मेरे को कैंडी बनाना है. I might make a candy shop someday. अभी एक दिन कैंडी शॉप ओपन कर सकते. 10 seconds remaining. मेरे को विंटेज चीज ज्यादा पसंद है. लाइक 5 seconds remaining. अगर मैंने कभी शॉप ओपन किया लाइक टाइप्स ऑफ और पे पुराने ज़माने में जिस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था वो चीज़ मेरे को बनाना है. लाइक पुराना कैंडी, नॉट लाइक डेयरी मिल्क ये सब नहीं, बहुत पहले जैसे बनाते थे वैसे. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज़ नहीं होगा हाथ से ही. एंड दूसरा वो के अंदर लाइक मैं वहाँ पे एक ग्रामोफोन रखना चाहता हूँ अपने शॉप में जो बजेगा. 10 seconds remaining. 5 seconds जैसे remaining. अनलो की चीज़ लाइक अमूल बटर हर किसी ने खाया है. लाइक अमूल बटर तो बहुत फेमस बटर है. मेरे घर पे अमूल बटर पसंद नहीं करते क्योंकि इन्होंने उससे भी बेटर बटर खाया है जो होममेड बटर है. अगर मैं कभी भी कुछ शॉप ओपन करना चाहता हूँ तो मैं वो होममेड वाला चीज़ बनाना पसंद करता हूँ. 10 seconds remaining. एक लोगों को क्वालिटी वाला चीज़. Remaining. एक उस शॉप का एक प्लान है. एंड देयर इज अनदर प्लान फॉर माय स्टूडियोज. एंड पॉजिटिव और कर्नल का जो प्लान है वो प्लान है उनका, उसका ब्लैक स्मिथ शॉप बनाना है उसको. लाइक प्रॉप्स बनाने के लिए स्मिथ शॉप भी काफ़ी अच्छा है. एज ए स्मिथ शॉप मेरा भी ड्रीम है. लाइक पॉजिटिव कर्नल बनाता है तो आई लाइक टू वर्क देयर. मैं उधर काम करना चाहूँगा. 5 seconds remaining. एंड मैं खुद का स्टूडियो बनाना चाहता हूँ. एंड देयर इज द थिंग, a sweet shop or candy shop. Radiant team pick. Thanks. Old. खुद का स्टूडियो
lastly, but it's not that big plan, but it's like little bit of plan. मेरे को flower shop बनाना है, वेस्ट बंगाल का सबसे बेस्ट flower shop. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. अगर पॉजिटिव होता है लाइक वो काम कर सकते हैं, मेरे सोलोली इस पर काम करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज मैं मटेरियल जो सामान है वो बना सकता हूँ, बट मैं वो बेच नहीं सकता हूँ, मेरे पास वो स्किल नहीं है कि बेचने वाला 10 जन के साथ बात करके एक चीज़ सामान को बेच सकते हैं ऐसा ऐसा, बट कर्नल के पास वो स्किल है, लाइक हमारे एक भाभी जी है उनके पास भी ऐसा स्किल है, लाइक लोग बहुत जल्दी किसी को फ्रेंड बना सकते हैं ना, हम लाइक बंदा हरामी है क्योंकि मैं खुद ही हरामी हूँ। इसके साथ पिकिंग फेस हो चुका है द इंटरनेशनल 2021 का EG वर्सेस VG लोअर ब्रैकेट बेस्ट ऑफ 3 RTC Killings। Look at this Storm and Ember, like Storm पिक हुआ, Ember पिक हुआ, Ember पिक हुआ, Storm पिक हो गया, like स्प्रिट को मारने के लिए स्प्रिट ही चाहिए। Look at this, इनका पिक में कितना वर्सेटाइल है, like VG का पिक, like Storm, मेडुसा, इन्होंने ऐसा नहीं है कि मेरे को लेन में मेडुसा के साथ CM चाहिए, और इनके पास मंकी है तो इन्होंने बीस्ट मास्टर उठा लिया, लाइक लिटरली अ बीस्ट मास्टर, बिकॉज मंकी पेड़ के ऊपर रहता है, बीस्ट मास्टर पेड़ काटने में एक्सपर्ट है। सैम होता तो सैम को ये पिक देख के मजा आता। सैम क्या ऑनलाइन है या चला ही गया पूरा? सैम ऑनलाइन है। ओके द प्लेयर फर्स्ट बाय अ ब्लिंक डैगर, सो हम इविल जीनियस को सपोर्ट करेंगे इस गेम में। ब्लिंक डैगर कौन खरीदेगा स्टॉम? तो कोई भी टीम को ब्लिंक डैगर तो नहीं दिख रहा है, आई से ही खरीद सकता है, ब्लिंक डैगर से अल्टी मारने में इसका आसानी होगा। द हाईएस्ट अमाउंट फिजिकल डैमेज हीरो विल बी डू अनदर हीरो इन वन हिट। 750 से 1100 और बाकी का बहुत ऊपर डैमेज पड़ता है। द टोटल नंबर ऑफ टावर किल बिफोर 25 मिनट 0 to 5 बिकॉज बोथ टीम मंजो है खिलाड़ी है, मंजो है द प्लेयर विद द लीस्ट डेथ। लाइक टू सी एबेट, बट एबेट से भी ज़्यादा लीस्ट डेथ अगर किसी का है तो आरटीसी का होगा। मरेगा नहीं बंदा, बंदा फार्म करेगा बैठ के। इसके साथ पॉज हो चुका है गेम, पहला पॉज। PSG. Now, where were we? You are most gracious. I am in your debt. 30 seconds remaining. मतलब दोनों टीम बहुत अच्छे है, मतलब दोनों टीम का ड्राफ्ट भी अच्छा है। क्लिंग्स है मेडुसा को काउंटर करने के लिए, स्टॉर्म है एम्बर को काउंटर करने के लिए, बीस्ट मास्टर है मंकी को काउंटर करने के लिए, स्काई रेड मार्च है ब्लड सिकर को काउंटर करने के लिए, एल्डर टाइटन है उसको काउंटर करने के लिए। दोनों टीम को इक्वल बाउंटी रून, लेकिन इनका कोर को बाउंटी रून नहीं चाहिए होता है। दोनों टीम के लाइक कोर लाइक ब्लॉकिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा है, हालांकि इसने ब्लॉकिंग में थोड़ा सा डिफोकस किया। हाँ एबेट का ब्लॉकिंग तो हमेशा नंबर 1 है, बट उससे ज़्यादा बेटर ब्लॉक आरटीसी कर रहा है। लाइक लाइन भी अच्छा ब्लॉक कर रहा है, बट आरटीसी ज़्यादा बेटर ब्लॉक कर रहा है। और इसके साथ सेकंड स्किल मार चुका है ब्लड सिकर, जो ब्लड सिकर का सेकंड स्किल बहुत बकवास मारा है। उन्होंने HP कम कर दिया तो लेन को आगे लेके आ सकता है। मेरा 6 लॉस आ रहा है, but it doesn't matter. I don't care for that loss because I have a high ping, like high ping आ रहा है मेरा। अब ताली के लिए वेट कर रहा है। like, मुझे लगता है मैं इस गेम को देख पाऊंगा ऐसे।
मतलब इतना heavy loss पे मैं game को नहीं देख सकता. मेरे को चाहिए Steam open करना है. And मैं उधर से चालू करने की कोशिश करूँगा. Loss में मेरे को उतना फर्क नहीं पड़े. Yesterday it feels like he had a bit of a rough series after that first game. Easy courier here. Nice grab. That was the salve. Do they have any extra region? Okay, PYW did bring a salve out. They're going to need to use it soon. We're just watching the poke. Look at old 11. Just getting constantly hit from those searing arrows, hit from the Astral Spirit, and just walk down. He's going to get salved up and have to hide himself for a moment. Mid lane, pretty even at the moment. 8 for 1, 7 for 1. I wonder how well they're going to be able to secure Poyoyo's farm as well. It's a Monkey King, so traditional the Monkey Kings, we'll watch PYW eat a couple hits. He should be okay. Yeah, it's going to take 2 more. And he's got the Dukes hit round the trees. Oh Fly my won't be God. able to find him. But yeah, they picked a pretty greedy safe lane, it feels like to me. Monkey King, usually versus these melee heroes, he thrives, like Beastmaster. But Beastmaster plus a ranged hero is actually really strong versus this Monkey King Medusa lane. So I think securing the farm for Poyoyo could be a little difficult as the levels do start coming out for crit. Because you can't trade. That's the problem with Monkey King. Versus these ranged heroes, you get on top of them with Tridents, you have to commit for a kill, but trading is just not really much of an option. And with sort of Beastmaster, the hero in general, why is it that I feel like we just didn't see this hero as much as we thought we would see it coming into the tournament? Already taking a hit there. I think it's just a very player-specific hero, and also it's not this big team fighter. I think TI tends to just bring more team fight than any other tournament, so he's just different. He's a pusher. He's always going to be good with the itemization, especially when Dominator's populator, but you're not a massive team fighter. You're all about like pressing your advantage and taking objectives. He Already built seeing an different. early rotation. Crit. Hanging around the mid lane. Abed is having a pretty damn good time. He's played really nicely around his Sleight of Fists with his Flame Guard and dodged out, I think, 2 or 3 Remnants to keep it active. And it's pressuring Ori. And we do see the early point in chains picked up on Abed. So it could look to set up for early kills with those crit moves. Arteezy does take a Blood Right, a big one. Yeah, how's he doing for regen? He's just got the stick on him as Fly. So now got that side back out, he does. Yeah. So TZ will be topped up. Some definite pressure. I mean, old 11, for the struggles you thought he may have up here, he's farming pretty darn well. Yeah, he's definitely recovered really nicely. Killing that courier, I think, was a big deal too, because Fly has no regen, so that he can't like trade as effectively. So they are able to pressure Arteezy a little bit more. And bottom two, I mean, DY's doing pretty good work. Poyoyo is up to that 17 last hits. I think he secured 1 or 2 boars as well. So whenever you can kill even 1 boar in the lane, it always feels great. That extra big burst of XP. Are seeing the runes being checked out. DY camping bottom. Abed able to get the 1 rune. DY will look to protect this one for Ori. But Abed's coming out even in the matchup, and we saw, of course, how GPK, he really handled Ori in that one. But as we know, Abed very comfortable in this matchup, knows exactly how to play around those slight dodges versus the Remnants to keep Flame Guard active. I mean, all things said and done, out of all 3 lanes, all cores are having a fine time. Nobody's getting bullied completely. First blood will finally fall on the top lane. And they won't look to dive for Arteezy. Old 11 able to beat him back. So these kills already, I think, get some level advantage on the Bloodseeker. The setup is there. Arteezy, he's in trouble. He's going to get taken down. PYW finding him. And I guess Arteezy just not expecting PYW to lead him through the trees and the burst to be there from the setup into the Blood Right, but it was. That's Arteezy out there. I mean, that's huge. That's blowing that top lane wide open. They're playing the lane just like really well. PYW is perfectly in position every single time. Mid, you see that crit rotation. PYW is coming in to help. See, they get the kill. PYW won't be able to set up anything on his own. So EG at least able to make something happen elsewhere whilst the top lane starts to fall apart. Abed sees a small camp stack. He also identifies that there's vision on the high ground there. Actually, cool play there by Abed, dragging the wave to the left so he knows there's an obstacle there. It's only there for 10 more seconds, so unlikely they'll get the D ward. But now mid, PYW shows his face. Yeah, Abed's just going to jump straight away. He's got the 6 and he uses it immediately. And he goes with the Remnants, the follow-up burst from crits enough. Making sure only used the couple there as well. He's still got the Remnant to
reset, and return back to the lane. And immediately double checking runes. Fly checks top rune. They have crit double stacking ancients to make sure that the Clinkz is able to catch up after this little of a tough start in the laning phase. And they will be able to get that illusion rune top. Abed also steals the small camp stack that we were mentioning from before. Really looking to shut down Ori. They look like they're bringing both supports though now. Vici, this is a very common move we've talked about. I know at Animajor people were really harping on how much Vici did do their double support movements around that 6-minute mark to help out Ori. I think EG's kind of expecting that. They're starting to make their move away. They're leaving Arteezy up top and just making the moves around with crit and with fly toward bottom. I mean, top Arteezy's got to be careful. He really PYW's does. coming over again. 6 is about to be there on old 11. If they get any sort of setup onto Arteezy here on his own, he's not going to stand a chance. Bottom lane, trying to get him with the aggression, EG. 2 supports backing up Ice, but Poyoyo keeps himself firing it back. We'll see the attempt up top, but not quite able to go there. Old 11 didn't quite have that level 6 here. Still waiting on it in a creep or 2. They've slowed down Arteezy so much. We've seen a lot of times with these Clinkz, they just rush the Maelstrom without even boots. He has to go boots in this matchup just because he's getting run down. And yeah, Old 11 is gonna be 6th. Yeah. With treads, with Urn, very strong. I mean, can Arteezy even stay up here on his own now? It seems so dangerous. Perhaps waiting for them to maybe overcommit, checking if Abed has a TP, then they'll probably look for a counter gank play. Doesn't want to just straight up abandon the lane. They are seeing the rotation though. They have this ward that Fly did place yeah, he's before got he to left get the out. lane. Yeah, he's backing off. Yeah. Arteezy knows he can't stay up here any longer. They already have a jungle ward though placed for him, so they're gonna be able to watch him if he ever does farm these camps inside their safe triangle. Abed though, since he sees the storm move top, immediately starts pressing onto mid, looking to go for some tower damage. And they will send Poyoyo to the mid lane. So again, both of these safe laners abandoning their lanes. इस बार का pick अच्छा है. And Poyoyo as the Medusa can sort of sit around and farm this mid area of the map without any threat from EG's heroes. Yeah, they've got the counter What a game. loss आ रहा है Ori, इस he game walked में. top, he didn't make the teleport, so he didn't have to use his teleport. Same thing for Old 11, they both have TPs available. If Poyoyo gets gone on, I mean, he's priority #1, they'll double TP to protect him. Loss खत्म हो गया. So laning phase, first 8 minutes, Vici. Invited guests, gallant Radiant have fortified their structures. Dire's top tower is not on top of things. Radiant's bottom tower has a nasty... तुम्हें इस बार का pick देख के अच्छा लगेगा. को स्काउट करने के लिए हाँ? मंकी किंग को स्काउट करने के लिए उन्होंने बिस्ट मास्टर लिया. Yes. एम्बर भी अच्छा है. Storm को. क्लिंक्स थोड़ा मेडुसा को. थोड़ा मुश्किल है, बट उन्होंने ब्लड सीकर उठाया है बार. लाइक दोनों टीम एक दूसरे का काउंट, लाइक ब्लड सीकर को काउंट करने के लिए स्काईरेथ मार्च है, लाइक मंकी को काउंट करने के लिए ये है बीस्ट मास्टर. दोनों स्पीड एक दूसरे को काउंटर करेगा. एंड क्लिंक्स मेडुसा के लिए पिक हुआ क्योंकि क्लिंक्स भी टैंक की बहुत ज़्यादा बन सकता है. एंड एल्डर टाइटन तो यही है हारने के लिए. तुम जीते या हारे तुम्हारा मैच? मैं हार गया क्योंकि ओडी ऑफलाइन था हमारे में. ओह माय गॉड, तुम्हारे लेवल पे भी ऐसे होते हैं चूतिया. मेरा दोस्त इमोर्टल डिवाइन या इमोर्टल है, वो बोलता है उसमें भी ऑफलाइन टीए उठाते हैं, बोलता है कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसे टाइम पे क्या करते हो, गेम छोड़ देते हो या फिर? नहीं, खेलता है, कोशिश करता है क्या कितना हो सके अपने आप को पुश करता हूँ, बस उतना ही. बट अगर पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है तो मैं बोलता बेस में मैं एफके हो जाता हूँ. मैं थोड़ा ये नहीं हूँ कि जब तक के जान हो सके करो, वो पागलपन नहीं करता मैं वैसे. वो अपना भी खत्म हो गया. नहीं वो क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब कैसे बोलूँ मैं, जब तक मुझे पता है कि कुछ होने नहीं वाला, मतलब इतना मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा. रिटर्न में कुछ नहीं. मेरा एनर्जी भी एक रिसोर्स है, राइट. मेरा एनर्जी, मेरा टाइम, वो भी एक रिसोर्स है. मेरे पास अनलिमिटेड नहीं पड़ा है, तो मेरे को पता है मैच में कुछ होने नहीं वाला. मैं आई के लिए मेरा 200 IQ यूज करने का, तो छोड़ो, उससे अच्छा मैं दूसरे गेम में जाकर मैं खेलूंगा करके, वो बेटर रहेगा.
मैं उनको कुछ बोलता भी नहीं हूँ, बस मैं बोलता हूँ कि फाइटिंग हीरो लो, फाइटिंग हीरो लो। मेरे को पैसिव गेम प्ले अच्छा नहीं लगता सच बोलूँ तो। जल्दी खत्म करो। नहीं जल्दी खत्म करो ना, मतलब लेन में एडवांटेज लेके आओ मार मार के। पर आई थिंक स्काई भी एक काउंटर है, स्पिरिट का काउंटर है गेस। हाँ स्काई ये रूट बनाता है, रूट डाल के अल्टे डालने अगर क्लास उसके पास एक हीरो कल उनकी टीम में 2 साइलेंसर एक्चुअली अलायंस के टीम में किसी के पास भी साइलेंस नहीं था। यस उनका एकदम अजीब ड्राफ्ट था, कुछ कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करता था। ना ही साइलेंस था ना ही बीकेबी पियर्सिंग था। यहाँ पे मतलब फ्लाई का कुछ तो है वो, मतलब वो बीकेबी के ऊपर गिरता है, उसका अर्थ स्प्लिटर बीकेबी के ऊपर गिरता है। एंड लाइक यू नो स्काई एटलीस्ट किल नहीं कर पाएगा, बट सामने वाले का बीकेबी पॉप अप करने में मदद करेगा। एंड उसके नेक्स्ट फाइट में उसके पास बीकेबी नहीं रहेगा, जो बहुत इफेक्टिव है। कौन जीतेगा? मेरे को एक्चुअली ईजी का ड्राफ्ट बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी उनके पास काउंटर है सब, सिवाय क्लिंग्स के। बट तो फिर भी उतने नेटवर्क में उतना डिफरेंस नहीं है। वो नेटवर्क पे तो वीजी ज्यादा है, मतलब इस गेम को बोल नहीं सकते इस गेम को क्या होगा। लुक एट दिस मेडुसा डिलीटेड। वो ओवर कमिट किया उन्होंने, रिस्क नहीं ले रहा है। फक डबल वैक्सीनेशन हो गया उधर, रिस्क नहीं लेना। ओ स्टॉर्म बचा। ओ एवेट क्या बचाया खुद को। बैठ गया। हाँ स्पिरिट से यूज कर, हिलने का नहीं, अल्टी से ही चलने का। हाँ मेरे को ये ना, ये हंसी है ना मेरे को पसंद नहीं। बोला हंस मत, मेरे कोई भी ऐसा हंसता है ना मेरे इसमें। अरे तुम जानते थे जब ग्रुप स्टेज में चल रहा था ना, सब ऐसे लड़कों वाला ये करता है और अचानक ये लड़की का हंसी यूज होगा। हम लाइक व्हाट द फक। मैं तो म्यूट कर देता था। मैं बोला एक और बार कर, मैं म्यूट कर रहा था कि मैं फोकस से खेलता हूँ। को मतलब पता नहीं ये लड़की का हंसी डाल के रखा है, बकचोदी है। लाइक गेविन को और पैसा चाहिए। एक्चुअली उनका मतलब ये है ना, वो लड़की जो है जिसका हंसी है, उसका सिग्नेचर वाला वो ये ज्यादा बिका है, टॉप बिकने वालों में से वो। हाँ क्योंकि वो लड़की का है। तो पता नहीं लड़के के। ओह शिट। हाँ एबेट ने क्या डॉज किया साइलेंस को। आई थिंक वो लड़की का जो हंसी है वो सबसे ज्यादा यूज हुआ है इस सो फार। वो लड़की ट्विच स्ट्रीमर है। हाँ क्या? हाँ ट्विच स्ट्रीमर है राइट। उसने तो इस बार ही तो ज्वाइन किया ना, वो एनिमेजर से ही वो ज्वाइन हुआ है। क्या आवाज तो कर नोबड़े, क्या बोल रहा हो? वो माइक ये बंद था, मैं म्यूट करके वॉशरूम गया था तो इसीलिए बोला है इसने। आवाज ऑन करने के लिए बोला था तो कर हो गया। ऑन तो कर, ऑन नहीं आया। और सबसे ज्यादा गंदा लगता है मेरे को मिड लेन लूना, समझ रहे हो सैम? ऐसा भी होता है क्या मिड लेन लूना? ड्राफ्ट में यस। मेरे को मिड लेन लूना देख के मेरे को थ्रो करने का मन करता है लिटरली। एक दिन एक लूना आया, मिड लेन लूना बोल रहा है, मैं लाइक मेरा मूड नहीं है खेलने का, खत्म हो गया। बोल रहे वाह मिड लेन लूना। हम लाइक एक चीज बता, 2 जन जंगल में फार्म कैसे करेगा? पीए ने बीके भी बना ही नहीं पाया, सामने वाले धोके चले जा रहे। लाइक पूरा टीम उसको लाइक लास्ट में जाकर टीम बोल रहा है अरे लूना फार्म करना बंद कर, पीए को बीके भी बनाने दे। उसका बीके भी इंपॉर्टेंट है बट उसका लाइक लूना इज लाइक नोप। ओल्ड 11 शायद से इसमें था। कौन? ओल्ड 11 आया था वो इटर्नल एनबी। नहीं ओल्ड 11 उनके साथ था क्या? इटर्नल एनवी के साथ? नहीं इटर्नल एनवी कुकू के साथ ही था वो। T1 ने ESL इंडिया में आया था ना, क्या वो टीम का नाम? T1 ही था आई थिंक।
नहीं T1 तक फॉर्म नहीं हुआ था, T1 अभी भी फॉर्म हुआ है। फनाटिक TNC प्रेडिएटर उनके साथ था, KPI फेबी ये लोग सब थे। आई थिंक वो डिसबैन हो गए ना TNC इस बार, ये नहीं हुआ। डिसबैंड थोड़ी ना होता है वो लोग, मतलब हाँ डोटा क्वालिफाई नहीं किया। क्या फुकट का सैलरी क्यों देंगे पेरोल पे, इसमें उन्होंने डिसबैंड कर दिया। अगला T1 TI खत्म होने का तो रोस्टर रोल लेंगे। या ये TI खत्म होने के बाद दोबारा रोस्टर बनाएंगे नए टीम के साथ। लाइक डिसबैंड की बात करो तो अलायंस कितनी बार डिसबैंड हुआ है। एक बात तो अलायंस पूरा बंद हो गया, अलायंस मतलब रिटायर्ड ही कर दिया डोटा से। लाइक इस बार वो S4 आके अलायंस को ये किया है, बट अलायंस ने बहुत गंदा खेला लास्ट मैच सामने। ठीक है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अलायंस फाइनल पहुंचेगा क्या? फाइनल नहीं पहुंचे, एक फाइट तो देगा ना, फाइट तो देगा। अरे वो मतलब मेंटली हार, स्ट्रेटजी में हार गए वो लोग, क्या बोलने का, ड्राफ्ट ही हार गए वो लोग। नहीं ड्राफ्ट में उनको मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैं समझ गया कि नहीं हो सकता है इनसे। बट इतना महंगा कोच रखने का क्या फायदा अगर इस ड्राफ्ट में हक दे। क्या उस तुम्हारे पास टाइम रहता है, प्रेशर रहता है, पता है ना, तुम जानते हो VP के पास 2 कोच है इस बार। हाँ क्या? या एक वो बास्केटबॉल का कोच है, मतलब जो टीम वर्क बिल्ड करता है, और एक मतलब ये डोटा का। वो मेंटल इसके लिए ऐसा देखा जाए तो EG में भी एक डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट के डॉक्टर के हेल्दी गेमर, डॉक्टर के बोल के कौन है? हाँ डॉक्टर के, हाँ उसका मैंने देखा है बहुत सारा वीडियोस। ये इस बार इन्होंने ये डॉक्टर रखा है लाइक मेंटली। नहीं अगर उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है उसके तरफ से 2 कोच रखने का, क्योंकि एक NBA प्लेयर जानता है कि 5 जन को एक साथ कैसे खिलाना है। वो शायद ये नहीं जानता है कि डोटा कैसे खेलना है, बट 5 जन को एक साथ लाने में वो मदद कर सकता है। बॉन्डिंग और कंसंट्रेशन होता है। या और वहीं पे खलास, टॉम वहीं पे खलास, बट आ रहा है वापस। नहीं टॉम तो मर गया। एम्बर उसके बाद एजेस था। ये देखो कैसे खेल रहा है। मंकी किंग क्या कर रहा है? लॉल सपोर्ट है, क्या करेगा? मार के जाएगा एम्बर मेडुसा को। उनको पता है डूड, मैं बोला ना उनको पता है कैसे खेलने का। क्या टॉप 1 एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 था। हाँ नंबर 1 था। 10K MMR पहली बार रीच हो, ऐसा कुछ तो है। हाँ फर्स्ट 10K MMR पे रीच करने वाला था एवेड। मतलब सोचो डोटा जैसे गेम के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ रहा है खेलने के लिए। हर एक स्पोर्ट्स में रहता है, तो इसमें क्यों नहीं? जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे अगर मतलब तुम कितना कॉम्प्लेक्स गेम हो सकता है, समझ रहे हो? नहीं अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है तो तुम ज्यादा प्रोसेस कर सकते हो, राइट? यस मैं ई पे क्लिक कर देता हूँ। होल्ड करके रखना पड़ता है। हाँ क्या? हाँ फिर क्या होता है? चिल्लाता है। होल्ड करके कितने देर रखने का? वो गोला आता है ना एक, हाँ वो फुल हो गया तो इस बार वो विजिटर्स नहीं है ना, ऑडियंस नहीं है ना, हाँ तो इसीलिए तुम घर से चिल्लाओ ऐसे। आई थिंक जिन्होंने लाइक एक टिकट सर्विस बेचना चाहिए था, लाइक उसके लिए क्या बोलते हैं, जूम कॉल के लिए, जैसे IPL में था ना। जूम कॉल IPL पे है जूम कॉल, लाइक जो मतलब वो मैच देखते हैं लाइक मेन इसमें से जूम कॉल, या फिर जो भी है लाइक कैमरा ऑन करके लाइक चीयर करते हैं। ओ स्काई को पकड़ा, बट फायदा नहीं है, मार भी दिया स्टॉर्म को फिर से।
कैसे मारा स्टॉप? क्या ट्रेड है मेरे को बोल। 1 वर्सेस 3 क्या ट्रेड है? वो भी सपोर्ट। तुम्हारा दोनों सपोर्ट मर गया, उसके साथ कोर मर गया, तूने एक सपोर्ट को लिया। आपको कोलैटरल डैमेज तो होने वाला है राइट? लाइक तुम किसी को मार रहे हो तो तुमको तो लगने वाला है। एक सपोर्ट का सैक्रिफाइस तुम ले सकते हो, बट 2 सपोर्ट का एक को मारने के लिए नहीं डिपेंड नहीं, मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो फर्क पड़ता है तुम ऑब्जेक्टिव्स क्या ले रहे हो उसके साथ। अभी ये डाउन टाइम में कितना ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं वो मैटर करता है। बट तुम लेना चाहोगे क्या? एक सपोर्ट के बदले तुम अपना कोर देना चाहोगे? दूंगा, अगर मेरे को एक ऑब्जेक्टिव मिल रहा है तो मैं दूंगा। ओडी जैसा कोर है तो दे ही दोगे। ऑफलेन ओडी। कौन सा नशा करके करते हैं? लाइक अभी अभी मैच देख के आया क्या ड्राफ्ट करने के लिए? सीएम फिर से स्टॉर्म मर गया। मेडुसा का फुल काइट कर लिया। ओ लायन का स्टर्न ट्रिपल होता बट पीके भी वन लायन बचेगा। ओ लायन दिख गया। वो छुपने के लिए अच्छा जगह है वैसे तो। देखा कैसे? उसको पता कैसे चला? मेरे को इतना बड़ा दिमाग नहीं लगता डूडे डोटा के लिए। तो मेरे को तो देख के समझ में आ गया कि इनका ड्राफ्ट अच्छा है करके, काउंटर पिक्ट हो गया ये करके। हाँ मेरे को भी तो जब ड्राफ्ट हो रहा था लाइक फुल ऑन काउंटर पिक है इनके साइड पे। गेमिंग क्या होने वाला है पता नहीं इनका। Like actual 10 minutes of perfection, right? It just they had काफी अपने थे विची गेमिंग, इनका अच्छा सीरीज चल रहा था ना? या वो अपर ब्रैकेट में थे वीजी। weren't able to force any fights, and then EG just hit this दिमाग timing नहीं of the लगा Beastmaster, started the push, took over Ancients, and like you said, नहीं मेरे को लगता है दोनों साइड अच्छा ड्राफ्ट था, वैसे गंदा ड्राफ्ट नहीं था। मंकी किंग मंकी क्या बोलते हैं? फर्स्ट पिक था मंकी किंग। EG ने लाइक फुल ऑन काउंटर पे गया। EG लाइक फुल ऑन काउंट करना है उनको। नहीं उन्होंने स्टॉर्म क्यों पिक किया मतलब ऐसे सिचुएशन में? आई थिंक वो मंकी के लिए, मंकी के साथ खेलने के लिए स्टॉर्म। EG के पास स्टॉर्म नहीं था, EG के पास बनाया वो लिंकिंग जाता, डैमेज नहीं रहता उसके पास, स्किल पोटेंशियल कम हो जाता, तब तक क्लींस हो। मतलब उन्होंने मतलब खुद का ही कवर खोदा है ये ड्राफ्ट से। बीजी वाले को टाइम नहीं दिया, 20 मिनट में गेम खत्म। लेट गेम के लिए जाना चाहिए बीजी को। तो है बट हाँ आगे कौन रहेगा? उनका ड्राफ्ट देखो कैसा पेपर टाइप है। ऑफलाइन कौन था इनमें? आगे कौन रहेगा फिर ऐसा ड्राफ्ट रखेंगे तो? Thank you so much, Odie Picks on Fog. My goodness. Blink if you miss it. EG. वो लोग स्लार्क एक्सपेक्ट कर रहे थे लगता है। My man. पता नहीं, वो लोग सोच रहे थे कि क्लिंग्स को रप्चर करेंगे ऐसा ऐसा कुछ। आबिड देखो 0-6 ICC से एक भी बात नहीं मारा ऑफलाइन होने के बावजूद। इन्होंने इनका सोच ही, इनका अप्रोच ही गलत था पूरे गेम। सही अप्रोच नहीं था इनका। पता नहीं इनका अप्रोच शायद ये मेडुसा को लेके था कि मेडुसा खेलेगा तो सब फाड़ देगा। अरे यार तुम वो देखो, इन्होंने भी करने की कोशिश किया था बट अबेड ने आउट प्ले कर दिया। उसने मतलब जो डॉज किया लिटरली ब्लड से कर को। अबेड 0, आई साइज भी 0, एक बार भी नहीं मरा। क्या बोलोगे? लाइक 22 मिनट में गेम खत्म कर दिया। हाँ अगर ये गेम लेट गेम जाता 35 मिनट तक खींच लेता वीजी ने तो वीजी के पास बहुत ज्यादा चांसेस था, बट 35 मिनट तक खींचने के लिए इनके पास कोई फ्रंट लाइनर नहीं था। मास्टर है डूड, कैसा पुश होगा गंदा। फ्रंट लाइनर ही नहीं है इनके पास एक भी। लाइक ब्लड से कर को मैं फ्रंट लाइनर काउंट नहीं करूंगा कभी भी नहीं। स्लादर चाहिए था, बैन हो गया रहेगा। स्लादर अच्छा था। स्लादर भी अच्छा होता। कैसा ना इंस्टेंट स्टन फिर फॉलो अप स्टन नाम का कुछ चीज होता है। लाइक लायन फॉलो अप स्टंट दे सकता है, मंकी फॉलो अप स्टंट दे सकता है। नहीं लायन इनिशिएट कर सकता है ब्लिंक लेकर, बट वो मारेगा। मतलब इट्स बेटर कि जो भी बट स्लाडर अगर स्टंट देगा ना तो वो मरेगा नहीं, वो थोड़ा सा सरवाइव कर सकता है और वो आर्मर रिड्यूस बहुत अच्छा कर सकता है। लाइक कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने मंकी और लायन सबसे फर्स्ट पिक किया तो इन्होंने भी ये और बीस्ट मास्टर उठा लिया।
like Sky और Beast, Sky ना Elder Titan और Beast था शायद. फिर इन्होंने Storm उठाया, इन्होंने Ember उठा लिया. बात कर रहे हैं. ठीक है, मैं आता हूँ वॉशरूम जाकर. Don't break yourself down mentally. Go next game. And I think EG is the type of team too that they probably weren't considering this, but just as like a fact, like EG is the type of team that during the whole NADPC, we saw that they would often take these really long games, but the moment that you give them an opening, they go straight for the jugular and they just destroy you. So EG was this weird team where they would be very patient. They would play for only like perfect plays, the best opportunities. But then the moment that they could get that, it was like just all gas, no brakes. And in this game, it just happened so early that it was arguably, this was like the biggest stomp of the playoffs, I would say, so far. Yeah. Is that how you feel, Tsunami? Secret OG, maybe game 2. Yeah, but at least they fought until that like was an EU stomp. They fought it out. Yeah. And at least like tier 3 towers are falling at some point, tier 4 towers, so you call GG after that. Whereas this one, and it's what I have been critical of for Vici for a long time. I don't think that they have the same killer instinct that Evil Geniuses does. Even though both these teams have been proven to be very consistent, Vici Gaming is just consistent to a slightly less flamboyant degree, and they will be top 6 finishers consistently, but rarely ever grand finalists. Well, this is the chance to prove it, right? I mean, they've got to win this one out and move on forward. This is TI, man. This is like the make or break moment. Do we continue to follow in kind of the calm that we were talking about, the same kind of drafts that are a little predictable, or do we pull out something crazy? Now, speaking of crazy, by the way, we had some nuts moments on our first draft, and I want to make sure that for Game 2, this is a very serious series where someone will be going home from the International, that we keep things professional and on track. So I would like to welcome a friend to the panel here. Ladies and gentlemen, if I may please introduce my little friend Peepo. Peepo the tiny meepo. Now Peepo is here because, don't touch Peepo. Peepo is here, and he does not like it when people say cringy or weird things. So Jenkins, if you ever say anything, you're going to make little Peepo cry. Don't touch little Peepo. Three bees can replace every bird. Birds are not held accountable. They should be held accountable. Oh, he's blurring out. He doesn't like that. You're fading him from existence. I blurred him out. Don't walk in front of little Peepo! Hey, what the? Little Peepo cries! Do not do this anyway. Who's been a good boy? Don't touch little Peepo. Focus on the panel. Thank you very much. Very important match here. And little Peepo, he will cry tears of shameness for what you've done here today. Anyway, we got a little piece here to give you guys some more insight into Vici Gaming. Do not touch little Peepo, please, as we take you over to there. Let's take a look. Little Peepo. 就是整个 TI 生涯里面最伤心，或者说最惋惜的一个场景，应该是在。那可能是 TI6 那年，我好像在以后面打的 TI 嘛。 然后那年小组赛也比较顺利的。然后我们赢了 A 队以后，我们已经锁定前6了。然后在下一场的胜者组决赛那个比赛中，我们就是那一场比赛对我们来说很关键。我们在那一轮遇到了一级战队。当时其实我们觉得一级并不是很强，我们挺有信心拿下那场比赛的。 This racetrack, that's going to be mega. EG going to need a miracle, not a position you like want to be this in if you're old EG right now. UI interface 网。然后当时场面我记得我们还是挺优的，甚至一度破了别人的3路，已经出了超级兵。 EG might just not have the bodies to do this. Can they get PPD out? He gets a more tap away, but no! The extra damage comes out from the Warlock as the Fatal Bonds eliminates him, but Zeiss! He almost dies! They're can they do it? Any pickoff on a core might enable them to still win this game. Like an EG might be able to do this. Evil Genius is holding. They're holding his defense here again. If they kill him, he'll take him out. Oh, they revive back in his here. Oh, the throat's going down. The throat down to Game 1。然后就被超级兵翻盘了嘛，然后就作为史诗一直被大家吐槽嘛。
就领先特别多，然后被超级兵翻盘了。TI 上的超级兵翻盘，因为我跟艾斯艾斯的关系也好嘛，然后我就打完特别生气，然后就非常生气的指着他说：“哎，你小狗实在让我太失望了。”然后直接影响了我们那一把输了以后，直接影响了我们第2把的心态和操作，直接导致我们第2把输的很利落。All right, fantastic there. As we enter, little Peepo, he's still here. Get him out of no, here. No, keep him. He does not like cringe. Look, he danced as soon as you he started doesn't talking. like Anyway, cringe. back to this. We have one game away He's come from to the wrong panel. potentially Vici Gaming exiting TI. Please stop dancing as we continue now. Idle animating. That is an idle animation. He seems to like it. He is not dancing. So, oh, okay, that There was he cringe. goes. Let's Yeah. move on. Cinderin, back to getting serious here. Little Peepo, get out of here. Don't make Daddy smush you, little Peepo. It's time to go. Time to get serious again. Bye-bye. Perfect timing. Great. We practiced that for 6 hours this morning, so I'm glad that it went through. All right, so, Cinderin, you're in Vici's shoes. Is that a game that you would have GG'd out quickly to get your head back into the game? And I would like to say to the new viewers here at Dota 2 that doing such an action, not a bad thing. You got to get your head in the game. You got to move quickly. Cinderin, I rescind my question to you because our teams are simply entering the arena. I don't care what you have to say, Cinderin, because I would rather see the teams enter. It is almost time for game 2 as EG face off once more. All right, now you can Let me know what answer you the care what I question. think. Go ahead. I'm ready. Cinderin, You care now? I do care. Unrescinded. Where's Peepo? Where is Peepo? Please focus on the match Okay, here, Cinderin. so I think it depends a bit on your team dynamics. There are some teams that the most important thing, honestly, is that the team is on the same page about what your your approach is to GG calls. Some teams have the mentality we play until the throne falls, no matter what. Others have the mentality that if it's over, it's over, and those two things don't necessarily always align. And for Vici Gaming, I honestly don't mind the GG. Like I said, I feel like the game's just lost, and it's something we've seen championship teams also GG out in similar situations, especially player that comes to mind, a lot of PPD-led teams will GG out in positions like that because, like, I had a strategy, I had a game plan. It either we mis-executed or it was a bad plan, but either way it's over, and you don't want to waste all that energy just grinding through a loss if you feel like it's hopeless, right? It can look like tilt. Like I said, I think Vici Gaming are going to look better in this game, and they're going to change some things up, and they just identified that game was just not going their I way. think so too, and I think Vici is the type of team that they usually have a pretty stable early game. Their laning is strong. Like I said, they don't go for kills, but they're really good at playing the laning stage efficiently. So coming out of it and getting snowballed on like that, I don't think that's necessarily something that they're used to. Their warding in the early game too is like, I think they have top 3 efficiency in terms of top 2 efficiency in terms of warding. I alluded to it previously, but yeah. There's this interesting मैंने आज metric तक on बुलबा को how कभी efficient फुल you are पैंट through पहनते sentry हुए wards, नहीं how many देखा sentry wards it हमेशा places शॉर्ट्स में you place घूमता to है find an observer ward. LGD obviously the best because they are seemingly the best at everything, but Vici Gaming is a close second. Are you telling me that people actually keep track of the efficiency of Correct. sentry wards? Very My much so. goodness gracious. I don't even buy them. Yeah, while you were doing a little Peepo, 100% he was efficiency. researching that. That's right. You know, if you don't buy sentry wards to de-ward, that's 100% efficiency, guys. Divide by 0. That's right. So anyway, though, interesting to talk about these drafts again. Tsunami, you've been a little critical of Vici for kind of playing by the playbook, always doing it the same thing. Do you expect us to go to potentially crazy places here in this draft? No, see something new? I think they should go back to more what they were familiar with. You mentioned that they had picked Snapfire every single time previously in their upper bracket series, and so I think that that's something that they can rely on. It's even tough for me to diagnose something that was wrong with them. I think it was just EG getting everything that they wanted. I think maybe ban out Ice Beastmaster. I think the vision thing was, to me, the downfall, especially in such a quick game. I think with Ice could have been on a variety of different heroes, but it wouldn't have ended that quickly. So giving Ice such a powerful vision hero, like maybe even ban out Night Stalker, stuff like that,
I want Vici to focus more on not letting Bulba get what he wants, not letting him have his Kyle Egg strategy come to fruition. What in the name? Oh, What did is you- the Kyle egg? I believe didn't- I missed that. You didn't hear the interview? Does Kyle lay eggs? Yes. Actually, he did not specify where the eggs came from, so it's a very real possibility. I wouldn't put it past him. Kyle is known to drop things on the TI main stage, It's so true. definitely could drop an egg and I would not put it past him. So He's not here to defend anyway, himself, please. what was I gonna say? So I think I'm assuming in this game the pick order is gonna be mirrored. I think Vici Gaming will try to get their hands on the last pick of the first phase this time around, and that changes the dynamic a lot. Because if you have that spot, you don't necessarily, like you pointed out, Beastmaster could be a target ban against EG, but you don't. He does this all the time. He I does. love that he does this. He's so zen. I don't know out if there. he's memeing or if he's actually All right, guys. meditating. It looks like it's time to wrap it up. We have the hell of the best draft you have ever seen coming up, and we are going to do it with Avo and the panel. Evil Geniuses versus VG Gamers. पहले झटके में नहीं घुसा, सेकंड झटके में घुसा है। Radiant team ban. Dire team ban. आयो एंड वीवर साइड से बैंड Radiant team ban. आयो बैंड करने का समझता बट सर इज लाइक सपोर्ट बहुत ज्यादा पिक हो रहा है एनफोर्स जीनियस बैंड डूम। एक डूम बैंड करने का मतलब इविल जीनियस के पिक में आइदर मेडुसा रेड स्प्लिट तो ऐसे ही होगा। 10 यही है seconds remaining. Pick. एक सेफ लेनर में ऐसा हीरो होगा जो हेवीली अपने एबिलिटी यूज कर सकता है लाइक के लिए टेरोब्लेड मंकी मॉर्फ मेडुसा इनमें से कोई एक होगा। तीन ही सोच में आ रहा है बट लिंक्स भी हो सकता है लाइक सेफ लेनर के लिए डूम बहुत 10 seconds remaining. इरिटेटिंग है लाइक Radiant team. सेफ लेनर डूम के खिलाफ जाके फाइट करेगा बहुत इरिटेटिंग है। पीजी ने दोबारा मंकी एंड लायन दोनों को पिक कर लिया। पीजी ने दोबारा एल्डर टाइटन पिक किया सेम लास्ट टाइम की तरह। दोबारा बीस्ट मास्टर पिक नहीं करेंगे इस बार। Dire team ban. Beastmaster. Fuck it, I'm wrong. सेम ड्राफ्ट हो रहा है। लाइक वीजी को एक स्प्रिट बैंड करना चाहिए। एक अगर मैं सामने मेरे पास अगर फर्स्ट पिक है तो अगर मुझे स्प्रिट देना ही है तो मैं उनको स्टॉर्म देना पसंद करूंगा। Radiant team ban. स्टॉर्म को काउंटर करना थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिव एम्बर क्योंकि स्टॉर्म के पास डॉजिंग स्किल सिर्फ एक ही है, एम्बर के पास डॉजिंग स्किल 2 है। उसका रेमनेंट के साथ अल्टी जो है वो उसका डॉजिंग है और उसका सेकंड स्किल भी उसका डॉजिंग है। स्टॉर्म के पास सिर्फ उसका अल्टी डॉजिंग है। वाइड स्पीड के पास भी 10 2 डॉजिंग seconds है। remaining. तो मैं कोशिश करूंगा कि सामने वाले को स्टॉर्म स्प्रिट चिपकाने का। मैं खुद स्टॉर्म स्प्रिट लेना नहीं पसंद करूंगा। एंड टाइट हंटर एंड टिम्बर्स ऑफ बैंड बाय इविल जीनियस एंड दे बैंड पोकर। क्योंकि सारे स्टॉल लाइक स्प्रिट के पास एक Dire team ban. के पास उसका चेन है करता है आई थिंक। टॉम के पास है जो के पास उसका रेमनेंट है। 10 seconds remaining. मैं अगर सामने वाले को देना 5 चाहूंगा तो seconds स्टॉर्म ही दूंगा। remaining. आज स्प्रिट पर से लाइक कैरी पकड़ते नहीं। ओके वीजी ने स्टॉर्म को बैंड किया। लेकिन अगर सामने वाले को स्प्रिट देना ही है स्टॉर्म थमाओ। स्टॉर्म को ऑनलाइन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक सबसे जल्दी अगर ऑनलाइन कोई स्प्रिट होता है तो है एम्बर।
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Dire team pick. Enchantress. The unique. अगर तुम्हें इंचेंट्रेस के खिलाफ खेलना है, मेडूसा काफी अच्छा होता है, चिकन कमांडर भी अच्छा होता है इंचेंट्रेस के खिलाफ, वो डिसेबल कर सकता है, 5 seconds remaining. तो डुएल बुला के उसको है ना क्लोज गैप में रख सकता है। इंचेंट्रेस कमांडर को खत्म नहीं कर सकते कमांडर, एक दूसरे का काउंटर है। लूना अच्छा है, लाइक लूना मैंने देखा है एन्चेंट्रेस जब पिक होता है, लूना लाइक मेन हीरो के एन्चेंट्रेस के ऊपर हिट नहीं करता है, उसके बाजू में जो है रहता है उसको हिट करता है, उससे वो एन्चेंट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। मेडुसा के लिए भी सेम है, लाइक मेन एन्चेंट्रेस को हिट नहीं करना है, उसके बाजू में जो है उसको हिट करना है, एंड एन्चेंट्रेस के ऊपर डैमेज कितना रहता है। ओके, सैम का फेवरेट हीरो कोट्टम 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 या कोट्टम जो भी बोलता है। 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Razor. रेजर अच्छा है एन्चेंट्रेस का काउंटर, एन्चेंट्रेस को भगा भगा के मार सकता है रेजर। रेजर का जो लिंक है वो लिंक करेगा तो एन्चेंट्रेस को भगा भगा के मारेगा, बट अदरवाइज लाइक डिफरेंट जो 3 पिक है उसके सामने रेजर कोई काम करेंगे। 5 seconds remaining. डिफरेंट तो लायन एंड दोनों स्टन करके आराम से बच सकते हैं रेजर से। क्वीन ऑफ पेन, रेजर का काउंटर नहीं बोल सकते क्वीन ऑफ पेन को, बट क्वीन ऑफ पेन भी रेजर भी क्वीन ऑफ पेन रेजर को मार सकता है, बट क्वीन ऑफ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Ten seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Pick. Radiant team pick. Void incarnate. Hello? Behold you.
Ignis and Void Spring. तो फिर Razor is a safe laner, देख ही सकते हो. Like this pick, like दोनों टीम का draft little bit similar है last game की तरह, but this bar now set चमका रहा है like दोनों. चलो एक ही set देखो. Rich Kid, Avid का set देखो. RTZ के पास भी one of the expensive set है. There the highest total रिजर्व भी कर सकता है. Prepare for battle. बट कहीं दूंगा. Just tag. PMA की PSG. दोनों टीम में एंशिएंट लेने वाला कोई नहीं है. स्टैक बना के स्टैक उठाने वाला कोई नहीं. बट 10 कर सकता हूँ. There the 30 to 37. ये like हर गेम की तरह ना हो और जी की लिख दे. Thirty seconds to battle. May the best team win. अब आई थिंक एक गोल्ड का अमाउंट भी होना चाहिए. गोल्ड अमाउंट भी होना. Small adjustment. ताली बजाए. पर क्लिक ओवरराइट हो गया. कंट्रोल ओवरराइट कर लिया. हिल्डा टाइटन बहुत ज़्यादा इस बार हो रहा है. हिल्डा टाइटन बहुत ज़्यादा विनिंग रेट भी काफ़ी अच्छा दे रहा है. हिल्डा टाइटन दरमंग के साथ हिल्डा टाइटन सस्पेंड करके मैं टाइटन बॉटल आ रहा होगा. हिल्डा टाइटन बोल रहा हूँ. वाइट स्पिरिट. Come on, sprites.
Denied. चल पाएगा करता है रोगा वन बी ओह लाइन ने क्या आरटीसी का कनेक्शन अभी बना है You've just achieved first blood. And Thanks survived. and have fun. I'm just getting started. Pew 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 pew. लायन का स्टन एंड माना रीजन बच्चे क्लिक कर लिया लायन के ऊपर डैमेज ज़्यादा गिरेगा तो उसका मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है बट लायन को पकड़ नहीं पाएगा सारा स्टन ये पड़ा नहीं लाइक नहीं क्या बच रहा है वेट का मतलब भी लाइक टॉपसन का ही टॉपसन जिस डॉक्टर को दिखाता है एबेट भी उसी को दिखाता होगा पुराना को कुरियर ओह सीरियसली ये सर्वाइव 1 HP आर्टिस्ट इसके साथ लिंक बना सकता है अगर फ्लाई स्टार बैकअप दे पाए तो इस बार आई से इसको बोला भाग के टीपी ऑफलाइनर दोनों इस बार सही कर रहे हैं लास्ट हिट वाइज देखिए 30 इस बार ईजी का थोड़ा सा जादू कम चल रहा है this I need to this My sprites are with us. मारना पॉइंटलेस टाइम के ऊपर बेस होता है पर मेरा ना बॉटम में टॉप में उस जगह पे होता मिड पे किराना का पीठ के पास के पास ना जाने से अच्छा सपोर्ट का पास ही रहे मंकी के ऊपर क्या एरो लगा लिटरली मंकी ने भी क्या टाइम पे चेंज मारा तभी आ चुका है मैंने ऑलरेडी ये कर चुका है बना लिया कोई ना कोई मारा जाएगा बचने का चांसेस भी मारा गया मैन का स्टड ने एक किल में मदद किया लगे टाइटन का बट यू लूज और
गेट। अपना मिड लेनर को गवा दिया तो सबसे ज़्यादा महंगा था इस। लाइक अगर हम फाइट में गोल्ड चेंजेस की देखें लाइक 308 वो लाइक 94 का हुआ एंड 300 लाइक 400 और इसके साथ फ्लाई बॉटल रिफिल कर दिया एपिट का लाइक भाई बॉटल ले पानी का एक हाथ में ऐसे पानी लेके आता है बॉटल में डाल देता है फिर जो मिड से आता है टीपी करके। अच्छा आज स्ट्रीम नहीं कर रहा है ना मैं आज कितना सोया था पता है मस्त ना मैं देखो तो जब आया था ऑनलाइन मैं देखा था तेरा स्ट्रीम तो मैसेज लिखा मैंने जीजी लायन वाला बस वो मैं आधे नींद में ही देख रहा था तो तब से मैं सोया लाइक 1:30 पौने 2 बजे अभी उठा मैं कल कितने 3 बजे सोया 4:30 बजे मैंने सुबह 5:30 बजे फिर से सोया 12 बजे 8 बजे उठ गया भाई T1 वालों ने धो दिया मतलब अलायंस को ऐसा बात कर रहे थे बहुत साला कौन पिक करता है सीएम अलायंस ने सीएम दूसरे मैच में फर्स्ट मैच में फर्स्ट में तो लायन था दूसरे में ही होगा पढ़ दिए गाना चलाया कुमारी सुकुमारी इजी एक मैच जीत गया हाँ फर्स्ट मैच में 2 दिया दुर्गा पूजा में श्रीलंकन सॉन्ग बज रहा बोल रहे किसी को समझ आ नहीं रहा है चलो चलेगा कि भाई ये भी माता जी का ही सॉन्ग दूसरे लैंग्वेज में आजकल के लोग इतना बड़ा चूतिया नहीं है मदा 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 फकर वैसा नहीं है आजकल के मदा 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 उसका गाना उसने पूरा नहीं बनाया वो तो नहीं है 1.5 मिनट का ही है वो बीट पे ही वो बन गया एवेंट ने थोड़ा सा जल्दी कर दिया सब पे नहीं मार पाएगा ओ मर गया पिक्सल Radiant's middle tower is not safe. Dire's top tower isn't well. वीजी चाइना की टीम है ना इसको भी निकालो मैच क्या डिलीट करो इसको और इजी को लाओ यस और इजी को लाओ ओजी के सामने अगर इजी ये जीतता है और ओजी भी वो जीतता है तो इजी के खिलाफ ही होगा नहीं ओजी के खिलाफ का इसमें से जो जीतेगा ओजी के सामने जाएगा नहीं इसमें से जो जीतेगा वो उनके साथ खेलेगा TYW वो T1 के साथ खेलेगा ओजी वर्सेस टीम स्पिरिट का होगा उसमें से जो जीतेगा वो इसके विनर से जीतेगा वो आईजी और सीक्रेट में से जो ये होगा गिरेगा उसके साथ खेलेगा कितना मैच खेलना मतलब इन दोनों का आपस में मैच नहीं होगा समझ रहा है इजी वर्सेस ओजी का नहीं होगा या इनका आपस में मैच हो सकता है यहाँ पे जाके फाइनल में 5th राउंड पे अगर जीतते हैं तो या टॉप 4 के सिचुएशन में ये लोग आपस में करेंगे ओसी टॉप 4 जब ये होगा वहाँ पे ये लोग फाइट करेंगे और ये लाइक लोअर ब्रैकेट राउंड 6 में टॉप 3 जो होगा मतलब 3 थर्ड पोजीशन के लिए ये थर्ड पोजीशन है सेकंड पोजीशन के फाइट होगा मैग्नस भाई हर गेम में पिक कर रहा हूं वो मैग्नस का नया स्किल है ना एग्नाम शॉट के साथ टॉस आया मंकी पकड़ साले को पकड़ बंदर को अरे हो गया यो भाई इधर लायन ने मार दिया किस गया था पकड़ पैरों मार दिया मैग्नस के ऊपर ओ तेरी कोई ना पेन को तोड़ डाला कोई डैमेज ही नहीं पड़ा कोई ना क्या आइटम है वो ओ
क्या डैमेज मिलेगा एंडर टाइटन को अगर ये जब वापस जाएगा? एक हिट में मार देगा ये सब। 337 डैमेजेस, 237। Dire's middle tower has fallen. आज बाहर नहीं गया, बाहर नहीं जाएगा। कहाँ? अभी थोड़ी शाम को। शाम होने में 5 बजे इधर सारा धूप है। तो शाम कब होता है? 9 बजे? 7 बजे के बाद। Radiant's top tower needs bandages. 6:30 के बाद। Shadows, take us. सारा बिसल बैक सीधा कान फाड़ देगा लायन का अगर। My sprites are with us. This master. Let's see कर दी। ये होगा क्या? Dire's top tower is not on top of things. Shadow summon storms by kisses. ये क्या है? क्या आ गया? एवेट भी है पीछे से। ओ पकड़ा गया, एवेट पकड़ा गया, बट एवेट नहीं करेगा। ओ फाड़ दिया कान में से। एवेट को एक मतलब माइक्रो सेकंड मिल जाता वो बच जाता। सीधा निकल जाता अल्टी मार। 1 सेकंड स्किल मारता। जैसे दबा रहा था सेकंड स्किल डब्ल्यू टक 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 करके। थोड़ा सूप बनाया भैंस का, पानी बढ़ गया इसमें। कौन सा सूप बनाया? मैगी का? नहीं रे, वो हॉट एंड सोर नहीं था, चिंग्स का आता है 10 रुपए वाला। बना लेना घर पे साला। पानी ज्यादा हो गया, कोई स्वाद नहीं आ रहा। गरम पानी पी रहा तो वो उसमें ये कर, वो नमक डाल। अरे नमक वैसे नहीं रे, पानी ज्यादा हो इतना पतला हो गया है ना। तो बता रहा हूँ ना, नमक डाल ना साले। ऑलरेडी नमक है इसमें, और डाल क्या करूँ? वो डालते रहे, क्या बोलते हैं, कोला मसाला है क्या? गरम मसाला। फिर वो दूसरा एक मसाला, तो अगर वो मैगी का मसाला भी डाल सकता है, लेकिन उसी के अंदर मैगी डाल दे एक साला। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ रुक रुक आता। एक मैगी बना के उसी के अंदर डाल दे। Dire's top tower isn't well at the moment. Dire's top tower is under attack. Let's give it. Radiant's bottom tower has a nasty situation. Nature attacks. Dire's
भाई लायन क्या मैगी बनाया? एरो से बचा तो उससे कटा। हाँ क्या क्या सूप का? कुछ नहीं, ऐसे ही पी रहा हूँ। मैगी बना के कुछ डाल है ही देता ना। नहीं, मैगी कुछ डाल है ही देता। नहीं। मैगी ये नहीं है। लास्ट यही बचा था। हाँ, एक पैकेट था और दूसरा पैकेट में डाल देता इसके अंदर। Hello, this is Gabe. मैगी भी नहीं है। Thanks for playing Dota 2. कुछ नहीं, मैगी है। आज नहीं मैगी है। मैं दूसरा 10 रुपये का टकना लेकर आया। दारू तो मिलता नहीं, लेने का क्या ही उपाय देगा। सॉलिड मस्ती खा रहा हूँ। पिज्जा मंगवा ले साले। पैसा नहीं है ना, इसके साथ 10 रुपये का सूप पी रहा हूँ। मेरे पास क्या था, टोकन था कैसे? मैकडॉनल्ड्स का 200 का मंगवाओ फ्री में आता है। ओहो स्टन नहीं लगा, मर गया। It suits you. इसके बाद वाला मैच मजा आएगा। सीक्रेट वर्सेस LGD का है ना? यस, टॉप टियर वो लो अपर ब्रैकेट है। वही तो। ओह मर गया मैग्नस। You sons of Arthur. This will hasten my footfalls. ओ भाई, ये बेड को देख। वो साला पागल हो रहा है नकली बुर्ज खलीफा के लिए। कोलकाता में बनाया ना बुर्ज खलीफा का पैंडल मंडप के लिए। Radiant's bottom tower is under attack. कल साला टॉपसन अकेले ने पूरा दोनों गेम कैरी किया। वो सेकंड मैच में टॉपसन ने क्या खेला? वो लेके स्टॉर्म लेकर। उसके पहले वाले में भी भाई वो लूना लेके भाई स्ट्रगल ही कर रहा था सुमेल। उसने भी तेरा वर्ड स्प्रिट लेके पूरा गेम कैरी किया। मर जाएगा इनके। बोले मार देगा आरटीसी मार देगा। बोले में मरना थोड़ा सा। टीपी मारेगा साला। आरपी का मौका ही नहीं दिया भाई मारने का। यही दो डालना है। हेलो बोलो सैम। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये सेम ड्राफ्ट रिपीट मारो, थोड़ा चेंज से रेजर का। और नहीं, इस बार ईजी अच्छा खेल रहा है। इस बार इनका सीएम उधर क्या था, सीएम अकेला ही था। इधर इनके पास देखो कितने लोग हैं बैकअप करने के लिए। मिराना है तुम्हारा, ये है बीस्ट मास्टर है, बीस्ट मास्टर एल्डर टाइटन है। इनका बेस पूरा उसके ऊपर ही है ना, रेजर के ऊपर, बट बाकी लोग है ना इधर। मतलब मेरे जितने भी टीआई मैच देखा, इस टीआई मैच में मैं ये देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मंकी किंग पोजीशन 4 को काउंटर करने के लिए बीस्ट मास्टर पीक हो रहा है। हाँ यूजुअली पोजीशन 5 एंड पोजीशन 4 को काउंटर के लिए कभी पिक नहीं होता है।
नहीं उनके पास कुछ था ही नहीं, स्टारफॉल नहीं डाल पा रहा था। वो साइलेंस था। साइलेंस था ना, हाँ वही कुछ कोई नहीं ना कर पेन ने सकता। साइलेंस कर दिया। साइलेंस नहीं होता तो मर जाता हो। एरो भी मार देता है। एरो तो उसने स्टार्टिंग एरो में मारा मारा था उसने स्टार्टिंग एरो। टीपी करते ही मारा था। टीपी करते ही टीपी मतलब वो टीपी जैसे टीपी हुआ तुरंत मारा उसको। अरे फिर टीपी मार के भागा, अभी क्या नहीं बात नहीं कर रहे वो हैं? टीपी अरे क्या, जब मिराना जब टीपी टीपी करके आया ना तब ओके, आते ही मारा हाँ। उसने, टीपी करते ही मारा। कोई नहीं, उसका स्टारफॉल भी गिर जाता तो भी मर जाता। इसका तो साइलेंट कर दिया उसको। रैम का तो फेवरेट हीरो है ना मिराना। मिराना अच्छा हीरो है, स्किल्ड हीरो है बट पूरा। आजकल बाउंटी हंटर उठाते साले लोग। ओ भाई फ्री का गोल्ड देते हैं ना, वो देखो एरो लगा दिया मिराना ने। उस मिराना बहुत ज्यादा स्किल्ड हीरो है। मिराना के लिए ये लगता है, क्या बोलते, सेटअप लगता है। मिराना खुद ही सेटअप करके देता है। नहीं, उसके लिए उसका वाइल्ड स्पिरिट सेटअप के लिए है, ईटी सेटअप के लिए है, और बीच मास्टर का स्टंट सेटअप के लिए। हाँ मतलब ऐसे बोल सकते हो कि मिराना वो एक्स्ट्रा सेटअप देता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है सेटअपिंग में। अंधेरा करके। अंधेरा नहीं, वो एरो मतलब इंस्टेंट डिसेबल टाइप तो नहीं है जैसे कि है, मतलब वो बीच मास्टर का या फिर नहीं मिराना इंस्टा डिसेबलर नहीं है, बीस मास्टर है। नहीं, उसको फॉलो अप लगता है, फॉलो अप डिसेबलर है। बट बीस मास्टर है ना इंस्टा डिसेबलर, एंड बीस मास्टर बच्चे भी स्लो करते हैं तो मिराना के लिए लाइक सिचुएशन बना सकता है। वो है, बट उसके बच्चे तो और मिराना शायद से उन्होंने इसके लिए भी लिए रहेंगे, एन्चेंट्रेस को काउंटर करने के लिए। हाँ एक्चुअली एन्चेंट्रेस का काउंट पिक होने के बाद ही मिराना पिक हुआ है। हाँ, क्योंकि वो ये मारता है ना, उसका वो बच्चे लेके आएगा तो एक एरो मारेगा, खलास हो पे माइंड फक ने। नॉट ओनली उसके पास भी बच्चे होते हैं, मैग्नस के पास। उसके बच्चे को भी एक एरो से मतलब बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता है, वेल ऑफ डिस्कॉर्ड के मतलब उधर से मारने गए। तो एन्चेंट्रेस के लिए वो आंसर है वो। मतलब इविल जीनियस का दोनों मैच में दोनों पिक यही है कि काउंटर कर दे नाइट सामने स्टॉकर को। बैन रहेगा, नाइट स्टॉकर बैन था क्या? नहीं नाइट स्टॉकर पिक नहीं हुआ, बैंड नहीं था। ऑफलाइन में नाइट स्टॉकर भी अच्छा है, बट ठीक है, वो कौन उनको बीच किसके? मास्टर का लाइनअप किसके साइड है? बीस मास्टर तो मंकी को देख के पिक हो गया। मंकी लाइन पिक हुआ, सीधा बीस मास्टर पिक हो गया। तो ये एल्डर टाइटन एंड बीस मास्टर। वो बोले कि हम बीच मास्टर को देख लेंगे। ओ चला गया, चिल्ला के कान फाड़ दिया। ओ लायन के लिए चिल्लाना। वो दोनों बीकेबी उनका टिपी कर दिया उसको। बीकेबी टिपी था उनका, बट और तेट था नहीं, लाइन के लिए अल्टी उन्होंने इसलिए नहीं, बट अरे बार अगर बीच मास्टर का अल्टी बीकेबी पियर्सिंग है बाबा। यस पर वो विजन में नहीं था ना, तब ये तो फट से टिपी मार दिया। नहीं, बट उनका बीकेबी पॉप अप करवाया, आई थिंक ओतेट है। बीकेबी पॉप अप करके उनके ऊपर अल्टी डालता तो और बेटर रहता मेरे हिसाब से। तब तो मतलब मंकी किंग के कोर है क्या? नहीं, पोजीशन 4। तो फिर क्वीन ऑफ पेम पे अल्टी मारना बेटर रहता था, बट वो विजन में नहीं था आई थिंक, इसीलिए वो मरना मांगता है, क्योंकि अगर वो बच के भाग गया तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है, वो अल्टी वेस्ट हो जाता है। पर मंकी किंग मतलब वहाँ पे सिचुएशन कैसा था, अगर वहाँ पे मिराना तो था क्या, अगर मिराना रहता था तो फॉलो अप स्टन ऐसे करके फिर डैमेज आउटपुट देने के लिए ऐसे लाइक अल्टी मारने की जरूरत नहीं था लायन के ऊपर, मतलब ऐसे ही मर जाता, गुदगुदी करता तो मर जाता। उसका मतलब ये है कि वो फाइट नहीं लेंगे। अभी आ गया उसका अल्टी, देखो बीच मास्टर का। हाँ उसका अल्टी तो आ जाएगा। 60 सेकंड का ही है ना? हाँ 80 सेकंड्स का है अभी। नहीं इधर 80 सेकंड का है अभी, मतलब लेवल 2 का है वो। लायन को डिसेबल कर रहे हैं। मेरा ना इस मर जाएगा। डिनाई करेगा क्या मेरा ना को? नहीं करेगा डिनाई। नहीं बॉटल सब खिला रहा है।
जिंदा रहने के लिए चाहिए अगर तो क्यों इतना जिंदा करके रख रहा क्यों है वो इतना जिंदा? बॉटल सब वो खिलाया फॉलो उसको। अप के लिए, फॉलो अप स्टन के लिए। बाप रे, वो आर यू सीरियस? वीराना ने सब खा के भी मरी नहीं पोजीशन 4 होने के बावजूद। व्हाट द हेल? उसको खिलाया ना, वो आके बॉटल खिलाया, वाइट आके बॉटल खिला रहा है इसको। बट उसके पास ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं, अल्टी ने रीजन नहीं है ना, तो क्या करेगी रुक कर? नहीं, उसके पास स्प्लिट वेसल है, एक ही है, एक खा लिया वो था। है वो आया मेरा ना। क्या लगा ही तक एरो लग जाएगा। बीकेबी पॉप अप हो गया, दूसरा बीकेबी पॉप अप हो गया। एग्नेस ही पकड़ा गया, बाकी सब निकल गए। ये भी टीपी कर रहा था पर इसका कैंसिल हो गया। मेरे को ये ताली मारने का काम ना पसंद नहीं है, सच बोले तो। आई थिंक वो एनिमे के चलते बहुत ज्यादा फेमस है। क्या? वो ताली मारने वाला सीन उधर आया था ना, उस एनिमे, उसमें एनिमेजर जब चालू हुआ था तब से आया है एनिमेजर। हाँ, और उस टाइम पे वो हाईक्यू बहुत ज्यादा फेमस था एनिमे। हाईक्यू में जैसे वो स्वाइप करते थे तो ऐसे ताली मार के घुसते थे, मतलब वो सीन बहुत मस्त दिखाया ताली मारने का। जैसे दो जन ताली मार के, मतलब एक जन बाहर जा रहा है तो दूसरा जन अंदर आ रहा है तो ताली मार के घुस रहे, तो ताली मारने वाला सीन वही से कॉपी है। टैग टीम का है ना साले। टैग टीम नहीं रहे, मतलब एक जन वो बाहर जा रहा है ना, उसको मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है, चेंज कर रहा है। हाँ वही WWE में नहीं आता था टैग टीम। वो टैग टीम वाला उसमें उतना फीलिंग नहीं है, बट उसमें जो फीलिंग दिखाया था ना, मतलब वो बहुत ज्यादा एपिक मोमेंट था। हीरो ऐसे ताली मार के घुस रहा है, तो उसकी वजह से ही लाया था ताली। क्या इरिटेटिंग है वो। हाँ इरिटेटिंग है। मेरे को वॉइस लाइन्स डिसेबल करने का कुछ ऑप्शन चाहिए, और कमांड में नहीं है क्या? नहीं है, अभी सब आ रहा है क्या? मेरे पास होता तो मैं ओजी के हर एक मैच पे डिसेबल कर देता। कल फर्स्ट मैच के बीच में लाइक टॉपसन की बोल रहा हूँ, सेव का वॉइस लाइन ही नहीं आया था। लाइट्स डिसअपीयर। हाँ लाइट्स डिसअपीयर हो रहा है। अरे ओ लगा दिया। ओ इसका भी, अरे खड़ा रहता उड़ा लेता। क्यों ऐसे क्यों? कुछ जेबा नहीं मेरे को। बीके भी ऑन कर दिया इसीलिए। लास्ट 6 सेकंड का बीके भी है उसके पास अभी। आरपी था मेम पे गलती भी थी। बिना पेन क्या फेंक दिया। ओ आरपी गया क्या? आरपी गया, इसका आरपी पे कोई नहीं लगा। आरपी निकाल लिया, अब क्या डर रहे हो? घुसो सब साले। फाइट प्लेयर इनके पास कुछ है ही नहीं। ईटी का अल्टी नहीं है। मेरा ना कभी नहीं है। माइंड पर कर रहा है, देखो आइस। क्या कर रहे हो? वो जिम गिर गया। क्या था ये फाइट? वीजी ने थ्रो कर दिया था फिर भी जीत गए। हाँ जीता, फाइट हार गया। हाँ जीते, कम ऑन। अरे वीजी नहीं, थ्रो मतलब सिर्फ वीजी ने आरपी हक दिया। आरपी हक दिया था। आरपी हक दिया था और उसका और क्वीन ऑफ पेन का वो उसके चिल्लाने से भी कोई नहीं कुछ डैमेज हुआ। आई थिंक थर्ड मैच होगा। बहुत बुरा थ्रो था ईजी की तरफ से ये। ईजी ने अपना लाइक ईटी मतलब एल्डर टाइटन का एक चीज याद रखो, आरटीजी नहीं मारा। हाँ मतलब उन्होंने दोनों अल्टी कमिट कर दिया, उनका दोनों मेन बड़ा अल्टी। जो भी हो, पर आरटीसी नहीं मरा। आरटीजी नहीं मारा। शॉर्ट फिल्म देखा था एंटी मैच का? सेम एंटी मैच फार्म ही करता रहता है। हाँ वो आरटीसी को देख के ही बनाया, वही जीता भाई। बेस्ट शॉट। इसके पास भी बायबैक नहीं है।
गया कोई ना पे तो भाग के आके काट के निकल गया साउथ इंडियन मूवी की तरह हो गया सीन देखो उन्होंने एजेस पे ऑब्जेक्टिव किया बट क्वीन ऑफ पेन चाहिए उनको ये टावर इन लोग ने अगर निकाला क्वीन ऑफ पेन के पास बायबैक नहीं है बट इनको मालूम नहीं है कि क्वीन ऑफ पेन के पास बायबैक नहीं है पैसा कम है क्वीन ऑफ पेन के पास नहीं मंकेन का सेफ लेना था मैं भूल ही गया था साला पोजीशन 4 की बोल रहा हूँ कोई मैं बोल रहा था पोजीशन 4 के से पोजीशन 4 ये था लायन था और वो तो फिर पोजीशन 4 के बीकेबी इतना जल्दी कैसे आता मैं वही सोच रहा था मैंने भी गलत बोला लास्ट गेम में देखा पहला आइटम बीकेबी बनाया रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था अब मेरे को याद आया कि मंकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन था 4 पोजीशन रहेगा ना तो वो बीच मास्टर ठोकता है उनको बट अगर 1 पोजीशन है मतलब कैरी वाला तो थोड़ा मुश्किल है बट बीस मास्टर फिर भी स्पेस की रेट मतलब उधर दे सकता है बीस मास्टर के पास वो पेड़ काटने का है शक्ति बट बीस मास्टर से मुझे लगता है आईओ बेटर है टिम्बर्सो सबसे बेटर है काट दो साला पूरा जंगल सब कर दो स्मोक वर्सेस इनविजिबिलिटी स्काउट ने हॉक ने स्काउट किया कि नहीं मुझे पता नहीं हॉक ने पता नहीं उधर का किया है इसीलिए लोग पीछे हट गए हॉक ने देखा था मतलब उसका वो 20 मास्टर के बच्चे ने देख लिया इसीलिए लोग पीछे हट गए अब सीधा हाई ग्राउंड चले गए लोग टू भी नहीं भाई सीधा अंदर ही चले गए भाई उनके पास एजेस है वो लोग फाइट करने वाले हैं फाइट के लिए तड़प रहे हैं मेरे को वो पता है इसने देख लिया मतलब मिराना ने अल्टी मारा सीधा हाई ग्राउंड चले गए लोग मतलब फाइट के लिए आओ तो कुछ नहीं देखना इनको मतलब इनको बॉट से आना पड़ेगा आना है तो आई थिंक वो ट्रायंगल पे कैंप करना चाहिए उनको उनके सीजे से ठीक है आई थिंक वो टॉप लेन उड़ा सेफ लेन लेना चाहेंगे उसमें नेक्स्ट रोशन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है आई थिंक डायर साइड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये फाउंटेन जो भी है छोटा आउटपोस्ट लाइक डायर साइड का डिसएडवांटेज है मिराना का एग्नम शिफ्टर अच्छा है मंकी के खिलाफ वो पेड़ दिखा देता है कौन से पेड़ के वो एरो मारता है तो उसके ऊपर उसका फर्स्ट किल गिरता है लाइक पुराना वाला एग्नम शिफ्टर से ये वाला एग्नम शिफ्टर अच्छा है नहीं पुराना वाला ही बेटर था सच बोल ये गिरता रहता था वो बेटर था हाँ तो मैं मिराना खेलता हूँ क्यों मैं बताता तुमको जो काम एक स्किल एक बटन से होता है अभी वो काम 2 बटन से हो रहा है तो कौन सा अच्छा है हाँ एरो मारने पे एक स्टारफॉल आता है फिर फर्स्ट स्किल मारने पे एक स्टारफॉल आता है हाँ राइट तो अगर मेरे को एक स्किल में ही मेरे को मतलब एक बटन पे मेरे को डबल स्टारफॉल मिल रहा है तो अभी मेरे को एरो भी यूज करना पड़ रहा है वो वेव क्लियर करने के लिए वो बचा क्या वाइट स्पीड वो वाइट स्पीड क्या बचा मैग्नेस को रोक दिया सीधा आके उनको ऐसे ही काट दिया उसके अल्टी में अभी बस बाईबैक नहीं है अगर मर गया तो गेम खत्म हो जाएगा अगर मैं गेम हार रहा हूँ वेराना के साथ मेरे को वेव पुश करने का है या फिर क्रीप कट करने का है मैं क्या करता हूँ कि मैं लीप मारूंगा फर्स्ट एक बटन दबाऊंगा विच इज फर्स्ट स्किल
मेरा क्लियर में लीप मार के भाग जाऊंगा फिर से, बट अभी वैसा नहीं है, मेरे को एरो भी डालना पड़ रहा है। हाँ तो एरो पे ही तो क्रीप वेब निकल जाता है फुल अभी। नहीं निकलता, टारफॉल डाल के फिर एरो डालना पड़ता है। पहले तो एक ही गिरता था, वो उसकी तरह था। नहीं 2 गिरता था, 2 टारफॉल होते थे। हाँ मतलब उसकी तरह था वो, क्या जायरोकॉप्टर की इसकी तरह, लाइक 8 सेकंड बाद एक गिरता रहेगा। आई थिंक जीजी हो गया गेम, बाईबैक ही नहीं है इनके कोर के पास, बट इनको मालूम नहीं है कि बाईबैक नहीं है। एक वीजी डराने में कामयाब हो गया। और लोग इससे पीछे हट रहे क्योंकि उनके सारे स्किल सीडी पे है ना अभी। और उनका वो भी मर गया आरटीसी। सीडी पे नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि उनके पास बाईबैक नहीं है, क्योंकि उनका बाईबैक मतलब पैसे के लिए कम है, ऐसा नहीं है कूल डाउन पे। नहीं क्यों ये लोग आगे है ना, क्यों इतना रश करने का, आराम से खेल सकते हैं ना। बनने वाला है। आगे कोई भी टीम नहीं है, दोनों टीम इक्वली है। आरटीसी का टीम आ गया है, वहाँ पे क्या लिखा है? हाँ 3K, बट 3K उतना मैटर नहीं करता है, लाइक 20K तक, 20K पे भी कम बैक कर रहे हैं लोग। ऑलरेडी उनका मतलब टावर पे खुजा है उन्होंने, बॉट का टावर निकाल दिया। बॉट का नहीं, टॉप का, सॉरी टॉप का टावर निकाल दिया। अब बॉट पे एम कर रहे हैं क्योंकि शायद से वो रैट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो रहेगा, पर रैट कोई करेगा नहीं। नहीं अगर बॉट में घुस गए तो वो लोग टॉप में भी घुस सकते हैं, लाइक कहीं से भी घुस सकते हैं। मिड पे घुसना सबसे हार्ड है। ओह टेलीस्कोप, सैम और मेरा फेवरेट आइटम। कौन लिया अभी तक मालूम नहीं है, बट मेरा एज ए सपोर्ट खेलूँ तो टेलीस्कोप इज माय फेवरेट। इसने लिया, मिराना ने लिया। तो स्नाइपर के ऊपर लेंगे टेलीस्कोप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि तुम्हें बोनस अटैकिंग रेंज मिलता है। और बीस्ट मास्टर के पास वो है बैंड। आई थिंक टेलीस्कोप, पता नहीं, टेलीस्कोप में अटैक रेंज भी मिलता है, सो मेराने के लिए वो भी इफेक्टिव है। मेराने का फर्स्ट किल लाइक वो भी रेंज बढ़ जाता है। बीस्ट मास्टर के पास हो तो भी मतलब कुछ कम नहीं है। अल्टी का भी रेंज बढ़ता है क्या बीस्ट मास्टर का? टेलीस्कोप से हाँ। रोशन रिस्पॉन हो गया, बट फाइट नहीं ले सकता, मैग्नेस जिंदा है। ओ फिर से रेजर मर गया। आरटीसी के पास बाईबैक है। बाईबैक मार के आ रहा हूं। उसको आना ही पड़ेगा क्योंकि रोशन फाइट लूज किया, मतलब रोशन निकल गया। भाई सीरियसली मैग्नेस के पास एवॉन्डिक्स है। ओह माय गॉड, पोस्ट अप करके कैसे ये कर रहे हैं। ओह एवेंटी का भी बाईबैक आ गया। मंकी तो सीधा रेजर एकदम पीछे भी आरटीसी मार देगा मंकी को। बहुत डैमेज चुराया उसने। मंकी का बाईबैक भी आ गया। ओह मेरा ना पकड़ा गया। बाईबैक देख भला, सबका बाईबैक आ गया। कौन मरा नहीं फाइट में टीम ईजी का? टाइटन बीस्ट मास्टर ने बाईबैक कर लिया। टाइटन है, कब ना बचा था। आरटीसी इवेंट दोनों मर गए, मिराना भी कर। रोशन के लिए क्या है रोशन के पास? ओ रोशन एकदम से कर देगा। आरटीसी रखेगा साथ में। नहीं आरटीसी के पास तो आरटीसी एजेस लगेगा। आरटीसी ने रखा, कहा ना आरटीसी रखेगा भाई।
eyes disappear. लाया खड़ा मंकी को। ओ इसने इसका ही खा लिया एन्चेंट्रेस ने, उसका भी ब्लैक ड्रैगन ले लिया। वॉइस स्पीड ने ये भी एरोनिक्स बना लिया। Invisibility. उनके पास ये जैसे फिर भी वो एग्रेसिव नहीं हो पा रहे। क्या लगता है सैम, इस बार 2 हीरो आएगा या 1 हीरो आएगा नया? हीरो आने वाला है क्या? हर साल ही तो आता है। हाँ ये बार टीआई हुआ वही बड़ी बात है। लास्ट ईयर टीआई नहीं हुआ फिर भी तो आया ना। तो ये कर रहे हो डैमेज चूज करो। ओ मंकी का अल्टी कैंसिल करवाया। बिग अल्टी Dominating, I guess. टीम ईजी के किसी के पास बाईबैक नहीं है। एन्चेंट्रेस का बाईबैक डाईबैक में परिवर्तित हो गया। ओ सीरियसली आरपी हक दिया दोबारा को। हाँ को आरपी हक दिया। किसको डालने वाला था वो? ये फ्लाई को लिए 3 मैन थे, आरटीसी फ्लाई और क्रीट थे, तीनों थे। कैसे हक दिया? तीनों निकल गए। बोला हम एक दूसरे को नहीं जानते। तीनों अलग अलग दिशा में निकल गए भाई। ओ पकड़ के लाया रेजर को एंड रेजर मारा जाएगा। जैसे उसके पास आरटीसी मारा, गेम खत्म हो गया वहीं पे। Bottom tower is on its way further down. Radiant's middle tower may need a hand. मंकी क्या डैमेज है। क्या है ग्राफ है क्या ये? हार्ट रेट बन गया ग्राफ। ये ना हमारे पुणे में जो पहाड़ है ना सर्बिया का, वो ये से ये ग्राफ इसी का ड्राइंग है ऊपर में सह्याद्री माउंटेन। ये सैटनिक बना रहा है क्या? कौन? क्वीन ऑफ पेन बना सकता है। हाँ सैटनिक ही जा रहा है। उसके पास पैसा बट बाईबैक के लिए रख रहा होगा। क्या लेवल 25 टैलेंट क्या गया वो? डबल लिंक इन लगा। हाँ मुझे लगा ही था। वही तो बेस्ट है ना। उसके पास वो फियर होता था पहले, वो अच्छा था। फियर नहीं है क्या अभी? अभी फियर नहीं है। फियर बहुत पहले हटा दिया। वो फियर एकदम ओपी था।
वो तो है। नर्व कौन सा हीरो होगा सबसे ज्यादा सैम इस बार, मतलब टीआई के बाद? टाइनी। फिर से तो बेचारा वो एनीमे से एनीमे मतलब उस मेजर से नर्फ होते आ रहा है, लाइक टीआई 18 से नर्फ होते आ रहा है वो। 18 से मतलब 2018 साल से वो नर्फ हो रहा है। कौन? टाइनी। अच्छा टाइनी नर्फ हो गया, पर सारा जो उसका आइटम है, आइटम देखना सब सिल्वर एज और इको सेबर दोनों को भाई इतना कर दिया वो 3 के है, तुम्हें समझ में आता है? वो सिल्वर एज और इको सेबर सिल्वर एज टन टॉस में और 2 फटके कितने डैमेज लगता है पता है? 3000 डैमेज। स्टार डिलीट डिलीट और ये नर्फ कर सकते हैं, आई थिंक सिल्वर एज नर्फ होगा। और उसका एचपी कितना रहता है? 3 के एचपी। 3 कैसे मारेगा तुम? और मूवमेंट स्पीड भी हाई होता है। उसमें भी वो भाई एसी लाता है, डेडलेस लाता है। उसके बाद उसके पास वो झाड़ लेने पर उसको रेंज मिलता है और वो क्लीव डैमेज है। बोलो अभी बैटल फ्यूरी। आरटीसी मरेगा नहीं, निकल जाएगा। ओ भाई स्टन मार कर रोका और यहाँ पे आरटीसी टीपी मर जाएगा। आरटीसी स्पेल ब्लॉक ऐसे ही बच गया भाई साहब। थर्ड मैच लग रहा है मेरे को होगा। आरटीसी कुछ कर मर गया। आरटीसी मर गया। अब किसी के पास बायबैक नहीं है ईजी की में से। एक 400 गोल्ड चाहिए आरटीसी को बाईबैक के लिए, और ईजी के दोनों कोर के पास बाईबैक है, देखना अभी। हाँ तीनों के पास ही बाईबैक है। पास मिराना एक के पास ही है बाईबैक। उसका बाईबैक का और उसका आ सकता है। हाँ वॉइड का आ गया। टैबलेट का बाईबैक आ चुका है। अरे कोई उसको दे दो फिलोसोफर स्टोन रेजर को। बीस्ट मास्टर का भी आ जाएगा अभी, जब तक टावर जाएगा तब तक। और एबेड ने इनिशिएट कर दिया तो फायदा नहीं इनिशिएट का। टाइम बाय कर रहा है, टाइम बाय मार दिया क्वीन ऑफ पेन को। ऐसा क्या डैमेज दे रहा है एल्डर टाइटन। एल्डर टाइटन का पंच देख रहे हो? वन मैन पंच है वो। वन पंच मैन है वो। और देख फिर से चुरा रहा भाई एल्डर टाइटन हेवी नर्फ। एल्डर टाइटन हेवी नर्फ होगा सैम, सब बोल रहे हैं एल्डर टाइटन बहुत ज्यादा नर्फ होगा। खेलने को आना मांगता है वो एल्डर टाइटन। हाँ वो तो सही है बट फिर भी वो नर्फ होगा। आई थिंक ब्लिंक डैगर भी नर्फ होगा। और गया बैठ गया। एबेड का बाईबैक आया। एबेड के पास चीज भी है। एबेड के पास सीधा आ गया वापस फाइट करने। लाइक मैग्नस का ये जो नया एग्नम शॉट है, इससे उसका लाइक आरपी के मतलब हमेशा आरपी नहीं मारना पड़ता है उसको। नहीं वो पकड़ने के लिए बेटर था, पहले वो पकड़ना मुश्किल पड़ता था। हाँ तो उस टाइम पे लिटरली तुम स्टन हो जाते हो। वो मिराना का डबल मंकी मर गया भाई, क्या फटके पे फटका दिया उसने। एमजे के पास बाईबैक है तो बाईबैक नहीं, इसने एल्डर टाइटन ने फटका दिया ना हपक करके। बट रोशन स्पॉन हो गया इस बार, ये रिफ्रेशर होगा। यस एक मशीन इलेक्ट्रिक मशीन ने एक डियर हाफ क्या है वो लड़की को धो दिया। पहले उसको सेंटर बोलते हैं, मतलब जिसका ह्यूमन बॉडी एंड घोड़े का, उसको सेंटर ही बोलते हैं। डमी ह्यूमन एनीमे के लैंग्वेज में डमी ह्यूमन। अज़म एनीमे में बोलते हैं ना डमी ह्यूमन। स्मोक क्यों मारा है? रोशन करेंगे रोशन सबसे एक्सपेंसिव रोशन नहीं है उनके पास। एन्चेंट्रेस तो आरटीसी के पास बाईबैक है, एबेड के पास बाईबैक नहीं है। मंकी और इसके पास बाईबैक नहीं है। मेरे को एक्चुअली लग रहा है कि लेट गेम चला गया, इसलिए से प्रॉब्लम है। और ये फाइट डिसाइडेड हो गया जो भी होगा ये।
इनके पास बाईबैक है आरटीसी हाँ तो वही ये लोग सब रिंग से हट रहे हैं। फाइट ओ क्या बीकेबी वन क्या बीकेबी अगर के लेके नहीं जा पाया हो नहीं तो मर जाता, अब मर भी सकता है। आरटीसी मरेगा। अरे भाई क्या फ्लाई का स्टन मर गया इधर। मर गया आरटीसी बाईबैक भी आ गया। बाईबैक करके आएगा बट मंकी मर गया। आई थिंक खत्म होने वाला है। कुछ भी नहीं कह सकते, दोनों साइड पे चल रहा है एकदम जबरदस्त। कल हम जानते नहीं हो 10 जन का बाईबैक आया, समझ रहे हो 10 जन का एक फाइट में। एलजीडी वर्सेस किसका था वो? ओ T1 का। हाँ भाई 10 मैन डेड 10 मैन बाईबैक। उसके बाद कोई नहीं मरा, डाईबैक भी नहीं हुआ। वो एन्चेंटर्स को सिर्फ मार रहा है भाई, इसको देख मार के आया, ये मर गया। कुछ नहीं है उसके पास निकलने के लिए। ओ भाई आइटम बिसल भाई 20 मास्टर पकड़ा गया। कोई नहीं भाई, उनका वो बच गया। एवेट बच गया, सीधा टीपी मार लिया भाई उसने। एवेट के पास कुछ नहीं था, वो छोटा सा छोटू सा वो टॉस लिया था, वो नेचुरल आइटम। न्यूट्रल आइटम, उसी से वो बचा। भाई वो बच गया वो, वरना वो उसकी सोनिक वेव में मर जाता वो। भाई 11,000 डैमेज, इसका लाइक 9,000 28,000। आरटीसी क्या बना रहा है, क्या क्यों किया उसने नेक्स्ट? आरटीसी ने एग्नम सेप्टर तो मिल ही जाएगा। है उसके पास। हाँ है तो ऑलरेडी। उसने कंज्यूम करके रखा है तो पता नहीं, उसने लिस्ट में तो वही रखा है। आई थिंक ये वाला एग्नम सेप्टर किसको मिलना चाहिए? बिसलबैक को, बीस मास्टर को या फिर मिराना को? मिराना का उतना इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं, मिराना का इफेक्टिव है क्योंकि उसका 3 एरो निकलता है, अभी पूरा वेव कार्ड देता है ऑलरेडी उसके पास 3 एरो। हाँ तो वेव कार्ड देगा ना पूरा। अच्छा वो स्टार उसके स्टार गिरेगा, 3 गिरेगा। चीज रखेगा एवेट, फिर आरटीसी। किसने? आरटीसी ने उठाया है। वो जाके बेचेगा मेरे को लगता है। सबके पास है भाई सेफ्टर। आइसाइस के पास नहीं है, या फिर मिराना के पास। ये बीस्ट को भी दे सकता है, मिराना को भी दे सकता है। बीस्ट को देगा तो उसका अल्टी और पावरफुल बनेगा। नहीं, उसका अल्टी नहीं, उसका फर्स्ट किल। वो कूलडाउन नहीं रहता, उसका कूलडाउन घटा देता है, मतलब होता ही नहीं है 0। फिर काटते रहो इधर से उधर स्टैक। मेरे को लगता है बेच देगा वो। बेच दिया क्या? पकड़ा। आरटीसी को धरा इधर, अल्टी बल्टी सब चिपक गया भाई, सीधा वो खत्म मैचेस। ओ ये लायन ने थोड़ी जल्दी कर दी। रिफ्रेशर सब मार दिया इसने। ओ बे तेरी, क्या रिफ्रेशर, इतना बीकेबी ऑन रखने के लिए इतना रिफ्रेशर? भाई साहब 3 डबल रिफ्रेशर यूज किया उसने, रिजन ने। वो देख मैग्नस 2 मिनट के लिए आरटीसी को सुला दिया भाई। रिफ्रेशर 60 भी था उसके पास। हाँ लाइक उसने एग्नम सेप्टर बेच ही दिया भाई, उसने कन्वर्ट किया उसके हॉक को। लॉल, उसने बहुत पहले किया। थर्ड मैच होगा। ये इसको ही दिया है, बीस्ट मास्टर को ही दिया। देख मारे जा रहा है कब से, देख। हाँ उसी को दिया भाई। वो बहुत ओपी है, लाइक हर बार मारने पे उसके ऊपर डैमेज बढ़ता रहता है। हाँ स्टेक होता है ना वो। बेड मरा तो खत्म हो गया। और ये लोग मेगा करेंगे। आरपी स्प्लिटर आ गया। कोई मतलब नहीं भाई, उन लोगों ने बना कर रखा हुआ है। कोई मरने रहा उनके। 20 मास्टर तो मारे ही जा रहा है। आई थिंक खत्म। लायन को भी नहीं मार पा रहा। जीजी हो गया। थर्ड मैच यार बहुत अच्छा गेम था, नॉट बैड। मतलब एक टाइम पे इजी के हाथ में पूरा था गेम भाई। एक टाइम पे बीजी के हाथ में भी था। पहाड़ था ना, सैम ने क्या बोला?
ऊपर नीचे हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मिड लेनर किसी को भी निकाल नहीं पा रहा गेम के बाहर। या लाइक दोनों टीम पे मतलब वो आरटीसी सिर्फ एन्चेंट्रेस को मार रहा, बाकी के लोगों को पकड़ नहीं पा रहे। यही मैं बोला ना, फुदकना मेटा। लाइक आरटीजी ने 6 बार मारा एन्चेंट्रेस को और लाइक मैग्नस को तो पकड़ ही नहीं पाया। मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत फुदक रहे लोग, उनको पकड़ना ही मुश्किल पड़ रहा है। भाई वो लास्ट में बट जो विनो पे ने सेट नहीं ऑन करके जो दिया है ना, वरना वो भी मर ही जाती थी। हाँ, वो भी मारी जाती, इसलिए उसने सटनिक बनाया ना वैसे तो। हाँ सेट ने खोल के भाई ठाप 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 दिया, फुल एचपी भाई, खत्म है हेलो वो। पहले गेम था वीजी की तरफ, देन गेम थोड़ा सा ना ईजी की तरफ रेजर की आते होते होता हुए है। फिर वीजी, देन लाइक पूरा गेम ईजी की तरफ, देन फिर से वीजी की तरफ थोड़ा सा, देन ईजी, वीजी जाने वाला था फिर ईजी ने पकड़ लिया एंड देन वीजी ने बोला आ जाओ बेटा, स्क्विड गेम की एक्चुअली जी तरह वीजी हो गया। ईजी वीजी नहीं, ईजी जब वो वीजी। लोग हाई ग्राउंड जाके टावर नहीं तोड़ पा रहे थे ना, तभी सब मतलब मेरे को लग रहा था कि कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। वो लोग एक ये लोग एग्रेसिव नहीं हो मतलब पा रहे थे। डेडलॉक हो गए थे, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे वो लोग। उनको समझ भी नहीं रहा था कि क्या करना है करके कि ईजी वीजी हो गया गेम में। बेटर है कि मंकी किंग को ही बैन करना है करके, नहीं तो मंकी किंग पिक कर लो, वो एक ऑप्शन है। अभी मंकी तो किंग आईजी तो का इस मैच इस होगा ना। शायद से वो लोग सेम स्ट्रेटजी रिपीट मारने की कोशिश कर रहे थे, बट ये बार विची गेम ही तैयार होके आया था। मेरा तो वही लग रहा है, बट मेरे को लगता है वो टॉपसन बिल्ड जाना चाहिए था, इथरल ब्लेड वाला। के ऊपर, वाइट के ऊपर। हाँ, क्योंकि वो वही मर नहीं रहा था ना उसमें। हाँ उसके उससे कोई मान नहीं रहा था, वाइट स्पीड से कोई किल ही नहीं निकाल पा रहे थे। वही तो। और Seeing फिर क्या Ahmed, you बचने know, के you क्यों Starcracker ने कोई and मर रहा था, क्योंकि Euroscepter. उसने I mean, this हेक्स is बनाया और उसने इवन डिस्क बनाया और बीके भी बनाया, वो मैं समझ सकता सबने हूँ ऑन बीके डिस्क भी। बनाया गेम में। बट बिकॉज एग्नेस ने भी बनाया था भाई। देखो, क्योंकि उनको समझ मैग्नेस में आ गया ये मंकी, बर्स्ट डैमेज। मैग्नेस मंकी ने भी ऑन डिस्क, इसने भी ऑन डिस्क, लाइक लायन ने ऑन डिस्क, सिर्फ नहीं क्वीन ऑफ नहीं, पेन ने इसने नहीं बना। नहीं बनाया, किसने? क्योंकि ये सब बर्स्ट कर रहे हैं ना। मैं हाँ वही बोला ना तुमको कि स्पिरिट का मतलब क्या है। स्पिरिट मतलब मैं घुस के मारा तो इनबा, अगर नहीं मारा तो तो चूतिया मरने का, वही तो चूतिया। वही पे मरने का। तो वही तो एवन डिस्क, ये सब एवन डिस्क है ना, ये सिर्फ इसके लिए ही है, क्या बोलते हैं, एबेड के लिए मतलब। लाइक क्वीन ऑफ पेन ने नहीं बनाया क्योंकि उसके पास दो दो ये स्पेल ब्लॉक है। हाँ, क्वीन, हाँ स्पेल वॉक है और बच के भाग भी सकते, वो मर नहीं हाँ रही थी राइट, क्योंकि उसके डेथ स्पीड देखो 6 ही है। या सो आई डोंट थिंक सो उतनी मर रही थी, उसका नेटवर्क भी काफी हाई था, शी वाज डूइंग क्वाइट वेल, सो इट्स ओके। लाइक मंकी के पास भी लाइक एवन डिस्क बनाना पड़ रहा है, इसको भी बनाना पड़ रहा है, एन्चेंट्रेस एंड लायन का मैं समझ सकता हूँ, लाइक मैग्नेस को भी बनाना पड़ा। मतलब इन्होंने हाँ काउंटर क्योंकि किया, लिटरली उन्होंने काउंटर पिक किया एविल जीनियस ने, और इन्होंने इन गेम में काउंटर किया उनको। देखो, कौन से भी स्पिरिट है ना, उसको काउंटर करने के लिए ऑन डिस्क ही है बस। डिपेंड करता है लाइक, या एवन डिस्क ही बेस्ट है क्योंकि हमारे लेवल पे तो चूतिया स्प्रिट आते हैं कि भाई डस्ट बस्ट नहीं खरीदते, इनके लेवल पे तो भाई शैडो भाई एम्बलेट क्या दिखा नहीं कि डस्ट पौछार करना चालू कर देगा, रेन कर देगा। भाई, वार्ड का भी भाई ठप 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 वार्ड लग जाते हैं वहां पे या तुरंत। और इधर साला कैरी चिल्लाता रहता है, वार्ड ला, सपोर्ट वार्ड। अबे तू कैरी है, तेरे को घुसना है, तू वार्ड लग ना भाई। लाइक साला सपोर्ट एक तो पीछे से हमारे यहाँ पे खेलेगा। सपोर्ट पीछे है, सपोर्ट डस्ट कैरी करो। साला सपोर्ट आ रहा है इधर, चलते 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 और चलते। उनके पास फिर से उनके पास लायन है। लायन मतलब इंस्टा लॉक करता है, और फॉलो अप डैमेज के लिए मंकी किंग का स्टन और मैग्नस का अल्टी है, जस्ट इन केस। मैग्नस ने 2-3 बार मतलब अकेले आरटीसी को पकड़ के लेके आउट ऑफ पोजीशन था वो। तो उसने रेजर को मस्त पकड़ा यहाँ रोसान फील्ड पे, वो मस्त था। आधा फाइट तो वो लोग इसलिए हारे क्योंकि आरटीसी साथ में, मतलब साथ नहीं था। 2-3 बार वैसा हुआ कि आरटीसी नहीं था उनके साथ। वो लास्ट फाइट में जब इन्होंने चला इतना बाईबैक आया ना, उस फाइट में बहुत गंदा था। यदि पेल रहे लोग Much for the मैं chat. बंद कर दिया। I would like to say डेमो that अच्छा थोड़ा टाइम kudos and shout outs to DY for walking in every fight, identifying
Well, number one, he's क्या a pathetic gold का support, ये so he खड़ा always कर करके has बैठा है ये buyback. लोग. The role, of course, position 5 is very ऐसे भी important graphics role. भी dirty है Walking in साला. always has buyback, setting up for his भाई team अभी तो to IG hit some वर्सेस nice RPs, to सीक्रेट का होगा focus उसके बाद LGD RTZ. का मैच. And I that think was ये the जो key difference second maker. दो team है ना ये You दो guys do team too, must right? team है. That was the key difference makers. The moment Vici started focusing यही तीन RTZ like in the आज के जो fight, तीन टीम है is the VG, moment IG they and started winning, PSG.LGD यही because तीन when टीम you चाइना look के at the बचा है. lineup, And there South wasn't East Asia really के any टीम other out हो गए. source of late नहीं T1 अभी भी है, sorry. damage other than RTZ, and he didn't have a T1 South satanic, East so Asia he was का है. actually quite squishy if you just hit him with all of your right clicks. Sure, he has 3 जो BKBs इसमें जीतेगा because उसके of साथ होगा. refresher देखते हैं orbs. कौन आता If I है. keep talking, you're just going to keep... ये थंडर पीडिएटर था साउथ ईस्ट एशिया का. पता नहीं कौन है थंडर पीडिएटर. ये सब जाते हो टीम एस्ट्रा हार गया था तो रो ही दिया था बंदा जब वो ये कर रहा था. चल मैं वॉशरूम हो गया था. Oh my god, I couldn't agree more. I got one better. जल्दी से क्या आराम से. Great spells. Better spells. Nope, sorry. Too slow. Let's go ahead and bring it back to How am I serious possibly going to mode, get that if many we coins can. anyway? It's over. You can have some- you can have some of mine. Please. This is an elimination game at the International. Please keep it tight planned this. if you can. So, Cinder, coming into this next game, we've seen such a back and forth. Let's talk about how EG must be feeling about this, because this is a game that they felt like they should have won, right? And now, after that comeback from that Vici Gaming, I mean, do you think they might be broken? RTZ has been broken before at this at internationals. This is a team that can tilt. Will we be seeing this in a potential game 3? I don't know. Why are you asking me anything? I have 0 coins. I'm like the least credible person who could possibly ask anything How right come now. yours are to the right of you and mine are directly in front of me? All right, Tsunami, perhaps you want to pick this one up? Yeah, but I think that with these, we talked about it a lot during the group stage. The Dr. K factor. Jenkins, Yes, of course. Healthygamer.gg on Healthygamer.gg. YouTube. I think in these internationals of yore that you speak of, it was a more skeleton crew of support staff, especially mentally speaking. But now the evil geniuses, they've got the technical know-how to recover from a game that maybe you should have won. Don't look at me. You know, it's always going to be hard. You know, the thing about a game like this is the players will have one perspective, right? Yeah. And then the coach will have a different one. And I think Bulba watching that game from the outside will feel like there's just as many moments that EG should have lost as they should have won that game. I don't feel like that. To me, watching that game, it didn't feel like a throw for either team. It felt like a bloodbath. And it's any given moment, anything can happen. And you can, like I said earlier, you can pinpoint, okay, RTZ dying in the jungle, then the end is the nail in the coffin, but there's just as many moments before that where things can go right or wrong and you just lose, right? So the most important thing, honestly, is just mental reset, right? Like, if you can somehow get yourself in the moment, okay, maybe not even think very much about what happened in that last game, but just, you know, stick to your guns, get good picks. If you wanted to change anything from the draft, I'm still not fully convinced about an open-ended Razor pick when all you see is a Monkey King. Who even could have gone in a different role. Do you think Vici Gaming responded to the Beastmaster well? This time they picked the they Enchantress in the post-game owned him interview. in lane. Yeah. Like Ice had a terrible start. It was actually incredible how much he came back. Not in the game, though. I feel like both of these games have been largely determined. Like, they've been in EG's favor, at least in terms of map positioning, and then eventually gold lead because of the Beastmaster vision and the ability to take over the entire enemy jungle. I do agree that the lane dominance was better from Vici this game, but I seriously think, and in the first game it was the same. Like, Beastmaster didn't do that well in the laning phase, but then the moment the laning phase ended, he did it a lot better than this. He did. But the moment the laning stage ended, the game blew wide open because of the map control that it gave them, and I think EG played really well around that. That is one of the things that I think Enchantress brings to the table too, though, is that one thing, she's good against Beastmaster in lane, but then when it comes to that mid game when the Hawk vision comes into play, Enchantress is the perfect dangling hero, as a certain banana guy would like to say. You send Enchantress in. If she gets gone on and has any sort of defensive item like Force Staff Hood, whatever it is, and even if you die, you soak up so much damage and so much attention that you set your team up for success. And a lot of the times these aggressive Beastmaster plays happen in the enemy jungle. There could be an outpost. You just die as Enchantress, buyback TP in, and you've given your team full vision for essentially whatever Enchantress's buyback is worth, which is not very much at that point.
and all the expended resources. I think Enchantress is better against Beastmaster than just the lane because Sure. of that. Yeah, okay. I think it's And pretty at good. level 20, she was taking the Ancients talent, and so even the Dom creep was, or the Overlorded creep was still being converted. Yep. And honestly, I have had much love for Ice at many internationals. He's always been a player who I wish would get an Aegis. But he seemed a little rattled at the end of that game. And not like, I didn't see the player cams or anything, but there was a moment where Crit landed a split Mirana arrow on the Lion, and immediately Ice roared the Lion. Even though it was like a long-range arrow, the Lion was going to be stunned for a while. And then in that precise moment, Abed went in to jump in on the Void Spirit. This is all during the top rack siege. And ultimately, I feel like Ice, for as chill as he seems typically, has kind of lost some of that magic whenever it comes to elimination time. So more than Arteezy, I'm concerned about Ice. Wow, that's a pretty good spot a impact. friend a coin, please. No coins for you, Cinderny. You have to make So good no points, my friend. So no coin. All right, so Give me your best tip. How do I make coin? don't How do I make spread coin? the coins around now. Let's focus up, please. All right, well, the teams seem to be coming out into the booths, and we are getting ready for a Game 3. This is a elimination match. This means that a team will be going home. VG Gaming, EG fighting for their lives in what could be considered as one of the most hyped series we have seen at this event thus far. I cannot wait to see the blood that shall be spilled by some of Dota 2's greatest competitors here at TI10. Let's take a look back at some past TIs, however, and get some EG memories about their times at the International. My most vivid memory was from TI8 group stage. There was this group stage match against Team Liquid. It was Kuro's team, and at the time, we thought we were really good. So when we played against them, we're like expecting to own them kind of thing. And then they just like, they shit on us like so hard. We lost to some like off-lane Drow Ranger kind of thing going on. Like, it felt like they're trolling us, but we lost. And I just remember sitting there after just laughing. I just started like, everyone in the room is like kind of serious, kind of sad, but I just started laughing and like, I started raising my voice and like yelling and like happiness. Like it was, feels good. It feels good to get owned. I think like the thing that I can't forget at TI was TI2. So it was it was kind of like my first time going to Seattle, and I'm a huge fan of oysters. So I went to an oyster bar and ate like 2,000 oysters, and I had like I was having the runs like throughout the whole tournament. That was actually an interview that I mentioned. I was having diarrhea throughout the whole tournament. How are you feeling about the tournament so far? What has been the highlight for you? Having a diarrhea every single day. What was that? But that was like a pleasant memory, I guess. Like the process of eating it was pleasant, not the rest. बहुत ठीक है pleasant memory. इसे बकचोदी कर लो पैसे के लिए किस हद तक बकचोदी Wow, करेंगे? what a fantastic piece about the memories of EG in this, the most critical moment they have ever faced. Will they have the run completed here at the International, or will they just slide on throughout the bracket? Explosive second game from Thank EG. you. I wish People was here to keep us on track, but we must continue as we move on to this extremely serious elimination Game 3 match. Gentlemen, this is what we're here for. This is Dota 2. If you are a new Dota player that's watching it for the first time, well, you are in for a hell of a treat. It is so good to have you here, about to witness TI history. So, Tsunami, my friend, we have seen so much. We have talked about how VG Gaming need to pull back from that last game. They did it, even though you kind of doubted. You think we'll be seeing that again? I think that Bulba is a very stubborn drafter, and I think that they have been kind of using Beastmaster as the linchpin for this entire series. And so I'm curious, because this has been the downfall of Bulba many a time, is he is very, very stuck on an idea, and he seems intent that
his line of thinking is the best, which came against him in Singapore. It absolutely did. Well, the time has come. No more questions. बता It is बेगम time कौन for सा the बिजनेस draft सबसे ज्यादा panel चलेगा? with Avo, Effie, and Lacoste. तेरा आवाज कम आ रहा है बहुत. आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं भाई, क्या लोग नहीं क्या मैं मार्केट बताता हूँ में। ना लाइक एक मतलब वो बेकरी कैंडी वेंडी ये सब समझ रहा है, मतलब कॉफी शॉप जैसा हाँ हाँ, और कॉफी हाउस. दूसरा स्टूडियो और तीसरा फ्लावर शॉप. स्टूडियो मतलब ऐसा स्टूडियो, स्टूडियो मतलब स्टूडियो फोटो स्टूडियो, फोटो फोटो. तीसरा क्या? फ्लावर फ्लावर शॉप. कहाँ पे करना है? वेस्ट बंगाल मैं करता हूँ मैं कभी. तेरे वहाँ पे अगर करना है तो फ्लावर शॉप ज्यादा चलेगा। मेरे को भी वही लग रहा है कि फ्लावर शॉप ही सबसे इजीएस्ट है. तेरे वहाँ पे वो ज्यादा चलेगा। अगर तू कोलकाता मेन सिटी मतलब मेन अच्छे मतलब बड़े जो सिटी है वहाँ पे हावड़ा बावड़ा या मतलब मेन सिटी जो बड़े बड़े हैं वहाँ का करना चाहता है तो वहाँ कॉफी शॉप चलेगा। अबे कॉफी शॉप नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे को बाहर ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सामान. क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे फ्लावर का डिमांड ज्यादा होता है कोलकाता में, ज्यादा मेरे को पता है। अगर वो कोई मतलब ये होता है जो मतलब मार्केटिंग कर सकता है फिर सही है. ये मेरे से मार्केटिंग नहीं होगा. इन लोगों ने फिर से एन्चेंट्रेंस लिया वीसी गेमिंग वालों ने, फिर से मंकी उठाया ना देख. इन लोगों ने फिर से एल्डर टाइटन भी लिया देख। तो फिर से 20 से भी उठाएंगे. उल्वा बोलेगा मैं प्रूव करके दिखाएगा मेरा बिल्ड मेरा पिक सही है. पर इस बार मैग्नस बैन कर दिया इन लोगों ने। लाइक 3 शॉप लाइक तीनों लाइक अगर मैं बेड का भाई इस बार स्टॉर्म पहले ही उठा लिया. बेड का हीरो आया है। आओ इसके काउंटर पिक ऑफलाइन पिक होंगे या मिड लेनर। लाइक अगर स्टूडियो खेलता हूँ तो मेरे को वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बनाना पड़ेगा. एंड लाइक अगर फ्लावर शॉप होता है तो इस लाइक मेरे को कोलकाता में कनेक्शन बनाना पड़ेगा. एंड लाइक बेकरी होता है तो मेरे को अपने एरिया में कनेक्शन बनाना पड़ेगा. फ्लावर सही है बट उगाना भी पड़ेगा फ्लावर. मतलब वही प्लस पॉइंट है कि अपने पास लैंड है जहाँ पे फ्लावर उगा सकता हूँ. वही तो मतलब मैं अगर मेरे को वो कांटेक्ट मिल जाए शादी वादी जो करवाते हैं मतलब शादी मैरिज वाला मैरिज भी जो डेली फूल चाहिए होता है, हाँ उनसे अगर कांटेक्ट मिल जाए भाई मस्त चलेगा. ओके नाइस. हेलो को खाना है उन्होंने अपने बचपन में वो खाते थे वही वाला बनाना है अपने को. लूना पक बैन हो गए. हाँ स्टॉर्म के खिलाफ पक पक छोड़ेगा नहीं साला. पक मार देगा स्टॉर्म को. उस दिन भाई स्टॉर्म क्या घूम घूम के ले रहा था सबके भाई, पक को तो नचा नचा कर मार रहा था. हाँ बट वो पक को मतलब धोया अच्छे से बट पक स्टॉर्म का काउंटर है. पता पर उस दिन तो उल्टा हो गया था भाई, बेचारा पक को मतलब कितना ढूंढ ढूंढ के मार रहा है. वो स्टॉर्म नहीं मार रहा था ना, वो मार रहा था तेरा क्या है उसका स्पेक्टर. हाँ वही तो, पर स्टॉर्म देखा ना कैसे कूद रहा था जूम करके. स्टॉर्म भी कूद रहा था, स्पेक्टर और एग्नम सेप्टर बनाए वो सीधा कूद रहा था. दिखा नहीं कि भाई सीधा कूद गया वो. ये वाला ही सही जा रहा है. Radiant team ban. चिप्स लेके आ गया. चिप्स पोटैटो चिप्स कैसा अजीब सुनाता है ना पोटैटो चिप्स. Ten seconds remaining. सबसे अजीब है वो बनाना चिप्स साला. Dire team ban. आया तूने बनाना चिप्स लाइक एलसी आया लीजियन. हाँ मेरा फेवरेट है बनाना चिप्स, मेरा फेवरेट है. बट अजीब है वो.
मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसमें भी स्वीटनेस तीखा वाला वाला। टेस्ट नहीं है वो, बनाना के अंदर जो स्वीट होता है वो चिप्स में नहीं होता है, कच्चा बनाना डालते हैं उसमें। यस, साला पका हुआ बनाना थोड़ी तलेंगे वो सब। कच्चा केला का सब्जी भी बनती है ना। 10 seconds remaining. कच्चा केला अलग है, जो सब्जी बनता है वो केला अलग है। 5 seconds remaining. क्या टाइप का केला होता है? बीज होता है, एक में बिना बीज का होता है। कली में दोया कला, काच कला, सिंगापुरी कला। एक मेनली कच्चा केला दो टाइप का होता है, दोया कला एंड काच कला। Radiant team pick. तो एक केले में बीज नहीं होता है, जो कच्चे में सब्जी बनता है, दूसरे में बीज होता है। ये लोगों का क्या पीक है बे एविल जेनियस का, देख। तो सही तो है। सब कैरी करेंगे, एबेड नहीं। करेगा, आरटीसी करेगा और एक और क्रीट भी करेगा साथ में। क्रीट का तो एल्डर टाइटन है कैरी। 5 seconds. फ्लाई और ऐसे ऐसे करेंगे, पता नहीं। अरे लीजियन कमांडर का आइस 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 है। तो फिर कल ओजी T1 के साथ खेलेगा। कतई धो देगा। आज क्या खत्म हो जाएगा क्या तेरा लाइक नवरात्रि, या कल खत्म होगा? बेगम हेलो, क्या? तेरा नवरात्रि कब खत्म होगा, आज या कल? मोस्ट प्रोबेबली आज। कल वो दशहरा होगा ना, रावण जलेगा, बट रावण तो कल ही मर गया रात को। लोग क्रीट खेल रहा है स्काई। ओ क्रीट ने इस बार फ्लाई खेलता है लेटर, सॉरी। आरटीसी का सेट देख भाई, क्या लग रहा है, स्ट्रोल ओवरलोड। स्पाइक करके आया, एकदम टिकटॉकर लग रहा है इंडिया का। हाँ लग रहा है ना इंडियन टिकटॉकर। एलसी ने वो गोल्ड वाला उतार के ना लगाया। एक वाइट के सामने स्टॉर्म। स्टॉर्म ही एकमात्र स्पीड है जो सबसे वीक स्पीड है कंपैरेटिवली अदर स्पीड जितने टाइम में एक्टिव होता है। एल्डर टाइटन के हाथ देख, पंच देख भाई, वो पूरा पंच दिखा है, एक पंच। और वन पंच मैन। तो ऑल द बेस्ट भी दिखाता है। नहीं, वन पंच मैन का उतना बड़ा हाथ नहीं है। ये देखना तो देखो ऑल द बेस्ट। वन पंच मैन का सीजन 3 आने वाला है इस ईयर के एंड में, विंटर एनिमे में, आई थिंक सो। एंड 22 में वो आने वाला है उस स्टूडियो का, चियाफुरु। रोम कॉम है। प्लेयर विथ मोस्ट डिवॉर्ड बाय 15। ये नहीं खरीदता है, फ्लाई वार्ड नहीं खरीदता है डिवार्ड के लिए। ये लग रहा है एन्चांट्रेस लग रहा है मेरे को। पीजी को सपोर्ट कर रहा है। अबे
सपोर्ट की बात थोड़ी है साले इसमें। Let the highest net worth in the end of the game. Spectre. RTZ. वो RTZ के नेटवर्क से पंगा लेगा। Last player to be killed. सबसे लास्ट में कौन मरेगा? ये मुश्किल है, लाइक स्पेक्टर भी हो सकता है, टॉम भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, बट मैं RTZ को ही देना चाहूँगा। मरता नहीं है ना, फार्म करता रहता है पूरा दिन बैठ के। 0-4 स्मोक गैंग। हेलो। हाँ क्या चालू हो गया क्या नया मैच? हाँ गेम चालू हो गया, फिर से मंकी आया, बट इस बार मंकी पोजीशन 4 है। 30 seconds remaining. इस बार स्पेक्टर है। इस बार का पिक देख के क्या लगता है सैम तुमको, कौन से साइड में है? एलसी ऑफलाइनर है तो भाया वाला। PSG. ट्रोल उठाया वो काउंटर करने के लिए एमके के लिए। ये ट्रोल का पिक थोड़ा सा जचा नहीं है। तो बाकी सारे पिक मुझे मतलब सुटेबल लगा। ट्रोल का पिक, लाइक ट्रोल को काइट करने वाले बहुत हीरो है। स्पेक्टर काइट कर सकता है, लैग होते होते हो रहा है, तुम्हें भी वैसा हो रहा है क्या? नहीं मेरा लैग नहीं हो रहा है, मतलब पिंग हाई आ रहा है, 150 पिंग हाई आ रहा है। सही चल रहा है, मेरा 40 पे चल रहा है। मेरा पिंग 40 है बट थोड़ा लैग अब कुछ है थोड़ा सही हो रहा। अरे ग्राफिक्स ज्यादा हाई होगा शायद से। अरे मैं वही बोल रहा था, उनके पास लॉकडाउन नहीं था, मतलब कॉम्बो नहीं था, क्योंकि मरने रहा था उनके इसमें से। इधर भी तो कॉम्बो नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। लाइक 15 लेवल पे इसको 40 बोनस अटैक HP रीजन मिलता है। My thanks. I shall not report you. लाइक आर्टिस्ट ने अगर किसी को पकड़ लिया तो वो बच के नहीं निकलेगा, ना जान लो। बट उनके पास काइट करने के लिए बहुत कुछ है। इस बार टीम VG के पास लाइक उतना स्टन नहीं है। फर्स्ट ब्लड हो गया तो दिखाना ही नहीं है। फर्स्ट ब्लड हो गया इनको भाई, बॉट कैमरामैन चला गया, कैमरामैन चला गया सुट्टा मारने। मार दे भाई, एक डीवा एक हिट मार दे, मर जाएगा स्काई। तो कैमरामैन ठीक है, कैमरामैन चला। स्पेक्टर को क्लिक करके छोड़ दिया उसने। स्पेक्टर का देख सिर्फ मूवमेंट दिख रहा है। मेरे पे तो बहुत स्पीड का दिखा रहा है। अभी आया कैमरामैन। क्या स्पेक्टर के ऊपर ही है कैमरा अभी हिल रहा? मेरा इधर चेंज हुआ। मेरे पे तो भाई स्पेक्टर का वो दिख रहा है, प्लेयर व्यू। स्पेक्टर जहाँ क्लिक कर रहा है वो सब दिख रहा है। चेंज करो। हाँ वही दिख रहा है ना, स्पेक्टर का प्लेयर व्यू दिख रहा है। देख मैंने चेंज किया ना, एक बार इंग्लिश में गया दोबारा फिर से। हाँ फिर से करो, सेंड करो, फिर से हो जाएगा। कमेंट्री भी बंद हो गई सारा।
अरे रे रे ये लड़की की हंसी साला दिमाग खराब कर रहा है। कमेंट्री आ रही तेरे में? मैं बंद करके रखा हूँ। मेरे में आवाज ही नहीं आ रहा, अभी तक तो आ रहा था। दोनों फरूल मिल गया। इस बार सबसे गंदा कमेंट्री हो रहा है। कमेंट्री का क्वालिटी साउंड क्वालिटी बहुत गंदा है। लगता है बाथरूम में बैठ के कमेंट्री कर रहा है। खाली हॉल में बैठ के कर रहा है ना, इसलिए इको हो रहा है। तो हाँ लोग वोग नहीं है, क्या करेगा। अगर ऐसे ही टीआई करना था तो लास्ट ईयर करने में क्या हंस था इनको। लास्ट ईयर अलाउ नहीं कर रहे हैं। अरे उनको ऐसे नहीं होना मांगते कि वैल की वजह से कोविड ज्यादा हो गया करके। खुद प्लेन भेजेगा वेल्व खुद ये खरीद लेगा। सारा हॉस्पिटल खड़ा कर देगा उधर। हाँ खुद प्लेन भेज के एक देश खरीद लेगा वेल्व। पाकिस्तान तो आ ही जाएगा वेल्व के पैसे में। वो खरीद के क्या करने वाला हो? तुम्हें को गिफ्ट कर देगा। लाल अरे क्या इनबा मतलब सेटअप था वो आ रहा था इसीलिए तो उसने सेटअप मतलब ये किया। हम बात कर रहे थे उस दिन 6 होने से पहले 2 बार मार दिया उसको। हो गया वो। मेरा बहुत लैग हुआ था। हम उस दिन बात कर रहे कि अगर ओजी हार जाता है लाइक नोटेल सीधा किसको फोन करेगा, आना को फोन करेगा। और आना बोलेगा मेरा कॉलेज है मेरे को पास होना है। नोटेल क्या बोलेगा? बोलेगा तू यूनिवर्सिटी का नाम बता खाली। अरे 6 होने से पहले 2 बार मारा रे उसको हो गया। और रून भी नहीं आया। फिर से उस तरफ जा रहे हैं। उसका कमबैक का चांसेस बहुत कम है। बॉटल सिप डाला और बॉटल भर के देके गया। भाई क्या लैग हो रहा है मेरा। तुम्हारा सेम? मेरा भी ठीक है। मेरा पहले हो रहा था, फिर मैं छोड़ के फिर से ज्वाइन किया। मेरे को भी करना पड़ेगा लगता है। मेरा 8 लॉस आ रहा है। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर। देख रहे हो कहाँ पे खेल रहा है स्टॉर्म? देख रहे हो बॉल्स देख रहे हो इसके? भाई एबेट का स्टॉर्म। एबेट है सैम। 3 जन रोटेट मारे, पता है? 3 रोटेट मारे। और वो सर्वाइव स्टॉर्म बच के भी निकल गया। भले उनका ये मर गया। स्टॉर्म तो मरने वाला ही नहीं था। पोजीशन 4 मारा ना उनका। मिड पे इतना हैवी प्रेशर, वो तो उसके जिंदगी बर्बाद करने के लिए रुका है। इधर मार दिया स्टॉर्म ने इसको आके। एबिड ऐसे पहले रोटेट कर रहा था क्या? नहीं लास्ट गेम में इतना रोटेट बोला उसने। क्या लैग हुआ मेरा। अरे अरे ऐसे मारा रे। 3 रोटेट हुआ बॉटम में भी। लाइन ने बोला होगा भाई साले रोटेट मारा कर मिड से वरना हम नहीं आएंगे। वो स्टॉर्म के पास माना नहीं है। स्किल नहीं था। माना तो था। होल रिंग है उसके पास। और स्टिक में भी 8 चार्जेस है। पोर्टल फुल करने के लिए आ रहा है देखो फ्लाई। और एक सिप देने का। पोर्टल फुल होते हैं एक सिप देने का। ओ भाई लेक्चर का अल्टी आते हैं सीधा अल्टी। वेयर यू गोइंग? भाई 4 लोग आ गए मिड पे फाइट करना। वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। मतलब मेरा इंटरनेट सही चल रहा है बट इधर बहुत ज्यादा टावर तो लैग हो रहा है। तो होता है कभी कभी। तो जो होता है सर्वर रीजनल सर्वर सिचुएशन। हम बोल रहे हैं आज तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। दुनिया का इधर की उधर हो जाए।
फाल्कन ब्लेड क्यों बनाते हैं लोग? फैल्कन ब्लेड अभी बफ हुआ है ना। फैल्कन ब्लेड एंड एग्नम स्पेक्टर का बिल्ड है अभी। हेल्थ मिलता है, डैमेज, माना। फैल्कन ब्लेड एंड एग्नम स्पेक्टर बना लिया, स्काई को कभी भी मार सकता है स्पेक्टर। डुएल भी बुला लिया। स्टॉर्म उड़ के आ रहा था, बोला जरूरत नहीं है। आई थिंक एलसी का एकमात्र अल्टी है जो मारने पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ? ओ मरते हो तो क्या? अगर नहीं मरते हो मतलब किसी को मतलब किल स्टिल हो जाता है एलसी के अल्टी से। मतलब कोई चिल्लाता नहीं है कि सर तूने मेरा किल ले लिया। या एक लायन का अल्टी ले लो, नेक्रो का अल्टी ले लो। नेक्रो का अल्टी पे तो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। बस वो तो भाई प्योर केस करता है उसकी ओर से भाई। या ज़्यूस का अल्टी, बट एलसी का अल्टी में लेके अगर मरता है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फास्ट पेस किल खेल रहा है। ओ भाई क्या डैमेज मिलेगा इसको। क्या लैग हो रहा है मेरे यहाँ पे। तो मैं तो आगे क्यों आ गया? कैमरामैन कौन है ये? पहले कैमरामैन कौन है? कसम से बहुत बहुत चूतिया कैमरामैन। चलो एक काम करो, मंगल पे लगा दो कैमरा। नहीं थोड़ा सा जूम कर दो, हम मिनी मैप ही देख लेंगे। और जूम भाई वही तो टॉप का भी दिखा दो क्या चल रहा है साथ में। गेवन ऊपर खड़ा है। मैं रशियन के पास जा रहा हूँ, रशियन कैमरामैन। भाई साहब मतलब पूरे फाइट में पता नहीं क्या दिखा रहे भाई। साले लैपटॉप में देखते हैं, तो दिखता नहीं है ना इसलिए। साला 15 इंच का डिस्प्ले है। मैं गेम ही रीस्टार्ट करता हूँ, साला बहुत ज्यादा लॉस आ रहा है। मेरे को लगता है इसीलिए दिखाते होंगे और ये लोग लैपटॉप में देख लेते हैं ना। और दूर रखते हैं ना, बहुत दूर रखते हैं। हाँ और 15 इंच का लैपटॉप होगा, साला उसमें दूर से देखते होंगे तो सब आते नहीं होंगे हीरो, इसलिए जूम आउट करते हैं। जानते नहीं हो कल सैम कल बेगम का 100 वॉचिंग था। पता नहीं कैसे। पता नहीं। यूट्यूब पे 120 गया था मैक्स। तो बात कर रहा था क्या? बात करने पर कोई दिक्कत हो रही थी। हमने बात करना बंद कर दिया। पता नहीं वो एक भी इंडियन ऑडियंस नहीं था, मुझे पता है उसमें। सब बाहर के थे, पता नहीं कैसे आ गए थे सब। और दूसरे मैच में कंटिन्यू 70 प्लस पहुंच गए। आला क्या लॉस आ रहा है। क्या हो रहा है तेरा मतलब नेट का दिक्कत हो। अरे बस दूसरा चीज है, किधर हो? कुछ चल रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं चल रहा है, वो लाइव। He's got Haunt also to join inside the fight. DD Rune does spawn bottom, and EG will be able to claim themselves that tower. जब तक ये फिक्स नहीं होता है तब तक यहीं पे देखना है। Immediate smoke with the DD. उसमें देखना बाहर है स्क्रीन पे They डायरेक्ट। have the vision up top too. बट They उसमें see क्वालिटी थोड़ा Poyoyo. कम है। He's on the creep wave, but they did see him setting up there initially. The smoke was seen right there. पर इसमें बचर बचर करते हैं ना ये लोग। They're already setting up for it. They're making the right read too, because they know EG wants to make the move onto the Spectre, because otherwise Spectre's just going to haunt into the fights and they're going to get outnumbered. So. See PYW, he will get caught out here. Did try and come over and was by the looks of it trying to at least dispel the smoke. Yeah. Keep the info ready for his carry, ready for वो वाला कॉम्बो देखा सैम तुमने लाइकन एंड टाइनी का? Gotta just protect Spectre. Everything is about Spectre. ओ भाई क्या कॉम्बो है। कुछ चिल्लाता तो बोनस डैमेज मिलता है हाउल से और मारता टावर क्या? नहीं टाइनी को खा देता है ना। TZ does finish up his own ancient stack without any help. टाइनी का एक शॉट में 1000 से ऊपर डैमेज गिरता है। 2K ahead का डैमेज पड़ता है भाई, और वो जो भागता है वुल्फ की तरह, भेड़िए की It's a तरह। good troll game, as we mentioned. So- It is a so very good मारता troll है। game that he's not really playing into any of the traditional counters of that kiting that just allows you to play around that battle trance. कॉम्बो बहुत होती है भाई। I also see that he's gone for, we'll wait for that for as Abed finds an easy pickoff. क्या उड़ के आया He's अबेड। gone for the build, which I've seen more and more players do lately, is you max your Berserker rage rather than maxing out your Fervor.
Just scales really nicely, and if you do get involved in the fights, which मैं you can, बाहर देख रहा हूँ ना, मैं Transmaelstrom थोड़ा सा without the delay Blink दिखेगा. Root is very effective. Absolutely. As it does increase. 2-second duration is pretty good when you're playing versus elusive heroes like a Void Spirit or even like Lycan, who can be speedy away. You get like 1 or 2 roots and they're just dead. So the setup down bottom here. They're looking towards Ice. Sold 11 comes in. Can they set up? They need a +1 though. They're a little hesitant. They know that there's going to be more behind Ice. Yeah. EG, you know, Abed just being in the neighborhood. We'll secure that Helm of the Overlord pretty much done for Old 11 though. Another smoke up here from Ori. Vision. EG's placed this ward every single game. This time it's gonna get found. PYW is gonna see it. He's got you also. They could set up potentially for Abed if they have the लोग लगा के रखे, लोग लग के रखे. Knowing that sort of timing was going to be coming out for Ori, making sure that there's no window for the play to कल देखा था सेव का बंद हो गया था. नहीं सबका बंद हो गया था फिर बाद में चालू हुआ मतलब हाफ गेम के बाद. नहीं कल का सेव का मतलब धो रहे थे ना सामने वाले. तो सेव का मतलब बंद हो गया यूज करना. सिर्फ नोटेली यूज कर रहा था. ना क्या था वो, मतलब अच्छे से खेलो जीत जाएंगे वो वाला था. Play together, win together. Yeah. And once they've got their first time or so, नहीं वो दूसरा तीसरा वो तो नहीं था. एक था I love this game और तीसरा और एक था Be positive and we win. ऐसा होता है ना. He's about to have Blink finished up on the Legion Commander too, and वो वाला यूज कर रहे थे लोग. Legion Commander post Skywrath. Almost anybody they find is going to just get killed from the combo hand. Now Orchid's done. Abed. भाई वो पहले दिन के ग्रुप स्टेज में बहुत चूतिया पा हुआ. स्पेक्टर को जो धरा है इजी डेड. क्या कर रहा था स्पेक्टर? तीनों जन गायब थे तो वहां पे काम कर रहा. They're going to try for Spectre. That's a big zip from Abed to close in. Set up with a silence. Easily done there. EG, they've got perfect pick-off potential now. The map's going to be a rather dangerous place for VG Gaming to play split up. With EG getting themselves these early tools to get online. Scary place for him to be as well in the Spectre in this game. Sure, he has the Haunt, but I feel like that's going to be Old 11's territory for the most of this game since he has this Helm of Overlord already done. Tower mid will get quickly taken out. So still getting their farm on Vici, but you can just see Arteezy. अब सही हो गया. अंदर चला है. नहीं है इधर इसके पास खाली है. ये भर गया. तो मारने देंगे. फ्लाई डेड है. आपको मारने देंगे. भाई लाइक निकल जाओ मेरे को छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं मर जाऊं. लाइक वो क्या लाइकन का इन्वेंटरी देखो ना कैसा है. क्या ये एकदम बना रहा है ना. मैं लाइकन का इन्वेंटरी उसने हेल ऑफ ओवरलोड बनाया है, ये बनाया अभी एग्नम जाएगा. स्पेक्टर का एग्नम हो गया है. वो स्पेक्टर को ही देगा लाइकन से. ओ एलसी लाइक अगर बच के निकल गया ना एलसी, सीरियसली इनको डूब मारना चाहिए. कूद क्यों नहीं रहा है मंकी? अरे रे डूब मारना चाहिए बीजी को. कूदा क्यों नहीं भाई? उधर कूदने के लिए ये होता है ना, पहले कूदा ना, कूदने के कूलडाउन था. मैम कुछ बोलना चाहोगे इसके बाद? नहीं मेरे को लगा कि कूदेगा करके. भाई मेरे को भी वही लगा. लाइकन के पास वो नहीं था क्या सेंटर? क्या लगा घूम रहा है वो? आई थिंक असरा एक आराम से रोशन मार सकता है, दूसरा ये ट्रोल ऑलरेड भाई ये बहुत रोशन मार सकता है इजीली. फिर उसको टैंक की जरूरत है. उसके बाद इतना अटैकिंग स्पीड हो जाता है ना. गेम होगा तो इसके बाद वाला फाड़ देगा साला. दोनों टॉप टियर की टीम है.
सीक्रेट वर्सेस कौन सा है? सीक्रेट वर्सेस PSG.LGD? नहीं GD नहीं है, LGD वर्सेस IG वर्सेस सीक्रेट PSG.LGD वर्सेस BP, दोनों अपर ब्रैकेट वाले टीम है। PG लाइक बोल रहा है मैं ही करूंगा T1 के साथ कॉम्पिट बिहान कल। दोनों भाई टावर पुश के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। नहीं अभी EG करेगा क्या कल उनके साथ? इसमें से जो जीतेगा वो T1 के साथ खेलेगा। नहीं हाँ के बाद वाले पे नहीं रे, इसी में से जो जीतेगा वो T1 के साथ खेलेगा। वो हाँ, इसमें से जो जीतेगा वो T1 के साथ खेलेगा एंड उसमें से जो जीतेगा वो BP और PSG.LGD के जो हारेगा उसके साथ खेलेगा। यूजिंग है यार साला इनका, IPL की तरह रखो ना कुतरिया। IPL में भाई फाइनल आ गया अब तो। कोलकाता है, कोलकाता वर्सेस चेन्नई बेचारा RCB उसका भाई नसीब नहीं है, नसीब बिना नसीब के पैदा है भाई। उसके अंदर कितने खाटे प्लेयर खड़े पड़े। RCB को मतलब चाय भी पीने जाता होगा, कप में नहीं देता होगा RCB फैन को। हाँ कप तो है ही नहीं है आपके पास। साला कप नमदे ऐड है क्या कुछ तो? इस साला कप नमदे है ना। RCB ने अभी तक एक भी नहीं जीता ना। क्या हो गया उसमें? 14 सीजन हो गए भाई IPL के, एक बार नहीं जीता है वो। और ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे खेलते हैं, वो लोग अच्छे खेलते हैं, मतलब अच्छे टीम है। हाय डिविलियर्स, कोहली सब बॉलर भी उसके मस्त होते उसके अंदर। फिर भी वो लोग मतलब जीत नहीं पाते। और वो RCB कौन ओन करता है? कोहली है उसका। मालिया किंगफिशर। वो तो UK में बैठकर भी अभी भी ओन कर रहा है क्या? यस तो भाई तक लगता है इंडियन पुलिस की ताकत है पकड़ने की। इंडियन पुलिस ही उसके हाथ में रहेगी मेरे को लगता है। नहीं उसमें बहुत रूल है। वो US सिटीजन है ना, UK सिटीजन है अभी, इसीलिए तो इंडियन पुलिस मतलब जाके दूसरे देश के सिटीजन को पकड़ नहीं सकते। UK वाले पे वहाँ पे ऐसा नियम है कि अगर कोई $2 मिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट करे तो वो इंस्टेंटली उस देश का सिटीजन ले सकता है। और उसने इस देश में जो क्राइम किया उस देश में शायद वो क्राइम एज ए काउंट ही नहीं होता है, लाइक फ्रॉडरी, तो मतलब नहीं देगा। ओ भाई। और तीसरा और एक मतलब मस्त फैक्टर है कि काट दिया भाई इसको, देख ओहो बच गया, मर गया तो भी। भाई वॉइड स्पिरिट क्या निकला है उधर से। मंकी फुल विजन दे रहा है। वो लाइकन बच गया, नहीं बचा भाई। लाइकन ने पूरा वो डॉज वो कर दिया, जीत गया था डुअल। मरा नहीं वो पूरा जीता नहीं, वो पूरा लास्ट किया बोल रहे हो। वही मतलब लास्ट तक लड़ाई किया, डुअल में मरा नहीं हो। जीनियस इस बार जल्दी खत्म करना चाहेंगे, लेट नहीं जाएगा भाई। स्पेक्टर, MK, वॉइड स्पिरिट, लाइकन। और तीसरा फैक्टर क्या है मालूम वैसे, लाइक वो लोग क्यों मतलब हमारे यहाँ पे मतलब केस चलता है तो उनके जो ह्यूमन राइट है कि तुम्हारा लाइक प्रिजन अच्छा नहीं है, तुम्हारा जेल अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो इसीलिए वहां से इधर पे जेल में नहीं डाल सकते हो तुम। अगर पहले अच्छा जेल बनाओ मतलब हरामी के लिए हम लोगों को पैलेस बनाना पड़ेगा। हाँ जब कसाब को धरा था रोज चिकन बिरयानी मुर्गा भाई क्या नहीं क्या मिलता था खाने पर भी वो अल्टीमेटली क्या होने वाला, लाइक रह तो नहीं सकता ना बिरयानी कितने देर खा, क्या होगा। नहीं जो साला आतंकवादी है उसके लिए चिकन बिरयानी बनाना पड़ेगा। ना इंफॉर्मेशन लीक कर देगा बोल रहा था ना, घंटा दिया उसने, कुछ नहीं दिया था, मर गया था वो। फिर वो रेप केस में भी लाइक मटन बिरयानी खा रहा है, वो तो कहता आमलेट टॉवल कर रहा है लॉल। हाँ और मैं बच पर नहीं पाया, ओह नहीं निकल पाया है बेड। टीजी के पास एजिस है, उसके पास माना नहीं है।
एजिस भी नहीं है, उसने सेटनिक यूज कर दिया, नहीं ऑन कर पाया, साइलेंस हो गया। नहीं सेटनिक था उसके पास पर यूज हो चुका था। नहीं उसका अल्टी आ गया था बट साइलेंस हो गया वो। अगर वो सिर्फ एक और ऑमलेट टॉगल प्रॉपर करता ना, आरटीसी बच जाता था। हाँ क्योंकि उसके ऊपर ही फोकस रहता। आरटीसी के पास थोड़ा ही नहीं वो करता तो उसके ऊपर फोकस रहता ना, तो आरटीसी को आके मारता नहीं। ऑलमोस्ट टीपी होने वाला था। अब उसको समझ लाइक उस दिन कल देखा ना तो सास्का ने कैसे सुसाइड करके मिड पे आके बॉटल रिफिल करके गया था। हाँ वैसा ही है सीन। लाइक अगर वो एक जाके मर के आया सेकंड टावर पे जाके, वो लाइक 1 सेकंड और सरवाइव कर लेता एलसी तो आरटीसी निकल जाता टीपी करके। रेस्ट इजी चाइल्ड भाई साहब, फुल टॉक्स। ये नॉर्मल है, इनका वॉइस का नॉर्मल है। ये पीयू के पास शायद है नहीं, इसीलिए स्टॉर्म स्पिरिट मिसिंग बोल रहा है। बना उसमें सिर्फ तो व्हाट द फक में देखा था मंकी किंग का कैसे एजेस गायब हो गया। यस पर वो भाई सोचना होता, 40 सेकंड था ना उसमें। यस 40 सेकंड था, गेम पॉज हुआ भाई, वो खत्म हो गया। गेम पॉज नहीं, वो साइलेंस हो गया। हाँ साइलेंस हुआ और भाई वो गायब। साइलेंस और उसके साथ वो भी यूज हुआ तो बोलते। तो क्या है वो वाला आइटम क्या है जो साइलेंस कर और जेट नुल क्या है, नलिफायर ये मार के क्यों भाग रहा है, क्या होने वाला है? नलिफायर से क्या एजेस रोक सकते हैं क्या सर? नहीं वो व्हाट द फक में रोक दिया आज। वो कहते हैं ना कभी-कभी ग्लिच हो जाता है, वही हुआ। या उसने सही बोला, डोटा इज लाइक बोल रहा है डोटा इज अ गेम ऑफ अ स्किल प्लेयर, दूसरा बंदा बोल रहा है डोटा इज अ गेम ऑफ अ बग एंड मेटा। 15 सेकंड बाद दूसरा रोशन रिस्पॉन होने वाला है शायद, मे बी इस बार ये होगा। क्या होने वाला है पक्का? नहीं गारंटी नहीं है, मे बी गारंटी होगा। वो गोल्ड जब दिख रहा है गोल्डन वाला जब आएगा तब गारंटी है। ये 43 सेकंड के बाद गारंटी। ओके वैसा है क्या? हाँ मतलब वो दूसरा वाला टाइमर रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जितना हाई पे जाता है उतना कम हो जाता है टाइमिंग। लाइक इसके नेक्स्ट वाले पे 2.5 मिनट हो जाएगा। हमने तो भाई पूरा बैठ के वो उसका कैलकुलेट किया है, नहीं भैया। हाँ कभी कभी रोशन खाना खाने भी चला जाता है इसमें। हाँ, आता ही नहीं है भाई, टाइम हो जाता है फिर भी। 17 सेकंड के बाद टाइम हो जाता है, आता नहीं है, खाना खाने चला गया। हाँ तो बात है, वो क्या आता है, तो मरना ही है जाके, तो फिर आधे खाली पेट नहीं मरना है। मतलब ये 45 सेकंड का मतलब बोनस मिला, फिर भी इनको साला इतना भी समझ आता है कि भाई 45 सेकंड का बोनस मिला। उन्होंने सीधा स्मोक किया कि रोशन रिस्पॉन होगा एंड फाइट लेंगे। पहले फाइट लेंगे फिर रोशन नहीं देना है ना, इसीलिए फाइट ले रहे हैं। क्रिट बच गया, मर गया। ओ भाई कट गया एमके। ओ एमके क्या बचा था भाई उधर, उसको फाड़ डाला। एमके पेड़ में बन गया था भाई, बेड भाग जाएगा। बेड तो इनमें ये देख एलसी का पावर ये है। हाँ सर झगड़ा करवाया, लड़ मेरे साथ बोल। नहीं एलसी का असली उसने बीकेबी दे दिया ना, बीकेबी दे दिया ना उसको, बीकेबी एंड एचपी रीजन। वो एलसी का बॉस है। इसी बात की बात कर रहा था कि साला सीएम ना उठा के एलसी उठा था। सीधा बफ खलास। आधा एचपी रीजन कर देता है वो लिटरली, आधा बार। रोशन आ गया, सबके अंदर ट्विटर पे मैसेज कर दो कि रोशन रिस्पॉन, लेट्स गो किल दैट रोशन। वो लोग खड़े हैं भाई पहले से देख। हाँ तो एवेड काटना चालू भी कर दिया। एवेड कहाँ पे है? आरटीजी
अरे मतलब अच्छा कॉम्बो है क्योंकि वो अटैक स्पीड ज्यादा बैठता है ना उसका, वो कितना उसका पैसिव बैठता है जल्दी ही अटैक स्पीड पे। अरे रे 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 बीके भी पहली ओपन, इसी ने उठा लिया। मर गया, इसका यूज कर दिया, उसका अल्टी फुल वेस्ट करवा रहे थे। उसके पास है अभी भी अल्टी मर गया, कुछ नहीं कर उसके पास नहीं, इसके पास है अल्टी भी, आरटीसी के पास अभी भी। क्या डाला नहीं क्या? अल्टी डालना ना आरटीसी ने। नहीं उसके पास 2 अल्टी होता है, 60 है देख उसके पास, डबल अल्टी होता है 60। उसकी तरह है ये, और फेक जगरनट की तरह है। नहीं एक अल्टी शायद से किसी को तो दे सकता है वो। कार्ड वाला अल्टी आई थिंक दे सकता है लोगों को। या ग्लोबल एक्टिव ग्रांट्स यू ऑल हीरो 70 अटैकिंग स्पीड एंड 25 स्टैट्स रेजिस्ट्रेशन फॉर 5 सेकंड। उसने खुद के ऊपर यूज किया था। ये ग्लोबल है, सबको मिलेगा आई थिंक। ओह मेरे को आज पता चला सैम। जगन से सारे थे इसका। हाँ सैम तुमको मालूम था क्या? मैंने पढ़ा था पर कभी देखा नहीं। मैंने भी पढ़ा, देखा नहीं कभी। grants all allies hero 70 attack speed और 25 resistance speed for 5 seconds। ओपी है इसका मतलब। On whichever troll currently। ओके तो अगर वो मिली फॉर्म में है तो shatter resistance मिलेगा और रेंज में है तो अटैक स्पीड मिलेगा। I think 25% status resistance ओपी है। डिपेंड करता है कौन से इस पे है तो। एक डेमो में जाकर ट्राई करके देख लो पता। अरे रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? अच्छा हाँ उसको यूज कर रहे हैं ना। Yeah. तो अगला आइटम क्या जा रहा है? बैशर जा रहा है। आई थिंक बैशर ही तो सही है उसके लिए। या बैशर रखने के लिए बॉटल, क्या बॉटल है उसके पास? बॉटल क्या फेंक रहा है वो? तर फेंक रहा है। फेंकने से हमको किस चीज मतलब याद आ गया। उसके पास वो देख टाइटन सिल्वर भी है ऑलरेडी, स्टैट्स उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। लाइक स्टैट्स रेजिस्ट्रेशन बहुत ओपी चीज है। स्पेक्टर कैसे मारने वाला रे इसको? स्पेक्टर नहीं मार सकता। स्पेक्टर क्या सोच के लिया इन्होंने यार, कोई समझ में नहीं आया। स्पेक्टर उसको मार सकता है ना, उसको कभी भी मार सकता है, और स्काईरेथ को। तो बॉटल ही उसको दे दिया डीडी सिचुएशन पे को देखकर तू ले करके। हाँ तू बाद में इस्तेमाल करना, वही कर रहे हैं लोग। ये गया एलसी कट गया, सीधा कट गया। ओफ ओके मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर उसको डीडी बीकेबी में यूज करना पड़ेगा फिर। मतलब वो जब फाइट लेगा तब बॉटल यूज करेगा तब। हाँ अपने यहाँ पे बॉटल का पानी मांगते हुए थे, उसके लिए किडनी मांग लिया, ऐसा करता है। मैंने सिर्फ एक ही बार डोटा के गेम में देखा, एक बंदा ने दिया था। क्या लाइक एक बंदे से बॉटल का पानी मांगो, फुल एचपी है, वो बोलेगा बाउंटी मत उठाना, तुम बोलोगे ठीक है बॉटल का पानी दे दे, वो बॉटल खा लेगा, खुद देना ही नहीं आता है। अगर को देखने का कब वो अपना ये डालेगा, कब डीडी चालू कर दिया, चालू हो गया, चालू करा नहीं, चालू ऑटोमेटिक बोले बॉटल ले ले तू। 2 मिनट का टाइमिंग रहता, सिचुएशन के ऊपर है। ये हारा ना, चप्पल से मारूंगा घर पे जाके। आरटीसी को तो खास यही ब्लेड से। हाँ इतना ट्रोल होगा ना, क्या बताए। आरटीसी स्ट्रीम करता है ना तो ट्रोल वॉलेट लेकर ट्रोल होगा। तो अच्छा दिखता है करके उसका स्ट्रीम चलता है, बाकी कुछ नहीं। और खेलता भी कभी कभार अच्छा, उसके कुछ प्लेस टीआई में, मतलब वो लाइफ स्टीलर का प्ले रैम्पेज वाला, वो क्या रैम्पेज था वो? हाँ वो रहा लकी रैम्पेज क्या था? वो स्टॉर्म ने सही वाले को पकड़ा बट किल नहीं कर पाया। आ गया देखो काटने के लिए। डीडी वाला था ना, डीडी चला गया। डीडी है अभी भी शायद, डीडी चला गया, खत्म हो गया। कौन मारा? स्काई मारा। हाँ स्काई मरेगा ही, वो तो बढ़िया। रोशन आने में टाइम लगेगा। आइस अभी मारा है। नहीं मेरे को अभी चाहिए।
कुत्ते बहुत डेंजर है, पता है तुमको? कुत्ते इनविस में रहते हो और उसके तुम्हारे ऊपर फॉलो पे छोड़ देता है, वो कुत्ते तुम्हें फॉलो करेंगे, काटेंगे नहीं। वो कैसे करते हैं? वो मूव कमांड है ना, एक मूव करके कमांड है वो डालने का रहता है। वो तुमको सिर्फ फॉलो करेगा, काटेगा नहीं, तुमको अटैक नहीं करेगा भाई। वो स्काउट होते रहता है वो। फक, हाई लेवल गेम में वो सब यूज करते हैं भाई। इधर करेगा भाई, हैक कर रहा है भाई, हैक कर रहा है। हमको लगेगा हमने बहुत इनबा किया है, पता चल रहा है हमारी मार रहे करके। 5 मैन स्मोक नहीं, इसीलिए तो वो लाइकन के खिलाफ हमेशा जेम खरीदते हैं लोग। मतलब वो बहुत पोजीशन तोड़ देता है। सेंट्री के थ्रू जा रहे हो, मतलब वो सेंट्री है सब सारे उनके एंट्रेंस पे सेंट्री डाल के रखे हैं उन्होंने। बहुत पोजीशन तोड़ देता है। ये देखो, देखा, पकड़ा और मारा इसको। ये स्काई तो मरने के लिए ही है भाई, वेक्टर का एलसी भी मरने वाला है। प्रेस द अटैक नहीं है उसके पास, आ गया। ओ भाई लाइकन का देख डैमेज, मर जाएगा। उनके सबने भाई टीपी मार के घर में अंदर। ये देख स्पेक्टर बन गया भेड़िया। हाँ, तो स्पेक्टर को ही भेड़िया बनाने के लिए साला पिक हुआ लाइकन। लाइकन लाइक सपोर्ट हीरो बन गया सैम पूरा वे। मतलब कैरी को और ज्यादा ताबड़तोड़ बनाने के लिए लाइकन है। कौन बन गया भेड़िया अभी? स्पेक्टर को बनाया था उसने अभी। 250 गोल्ड मिला, सीरियसली? मतलब गेम थ्रो करने के लिए बहुत है। ओवरलॉर्ड स्पेक्टर ऐसे क्या फटफट मार रहा है? मूनशॉट लिया उसने? वो भेड़िया बना था ना? नहीं मूनशॉट है उसके पास। ओ हाँ, मूनशॉट है तो भेड़िया बनेगा ना, इसीलिए। आरटीसी के साथ कैसे डील करेंगे हो? फुल स्टार सैटेनिक बनाया है स्टेटस रेजिस्टेंस के लिए। अरे ओ डीडी मिल गया उसको। काइट कर दिया ना। निकल गया मर जाएगा ये। काइट है उसने। ओ देख उसने फेक अल्टी चलाई, देखा? देख कैसे उसको काइट कर रहा है। फेक अल्टी, मेन अल्टी बाकी है अभी। वही चलाएगा जब उसका लौड़े लगेंगे। अभी दिया, मंकी गया। माना नहीं है उसके पास, अल्टी का माना नहीं है। वो आ जाएगा। अब आ गया, अब चला दिया अल्टी, मेन अल्टी। भाग रहा है साहब, उसको ही पकड़ा भाई। इसको देख कैसे काइट कर रहे हैं। बीके भी नहीं है क्या उसका? खत्म हो गया ना, पहले वन कर लिया था। जी गॉन। अभी यहाँ से हारेंगे तो कहाँ पे? बाहर घर गेम के घर। हाँ नहीं, इसके साथ होगा, T1 के साथ होगा, T1 के साथ। क्या इजी आउट नहीं रही, लोअर ब्रैकेट है ना ये। हाँ, मतलब T1 के साथ मैच खेलेंगे। क्या इजी घर चला जाएगा? ये लोअर ब्रैकेट चल रहा है। अच्छा हाँ, इविल जीनियस घर सीधा। ओ भाई ये लोग खत्म पे आ गए सीधा। आरटीजी को टिप कर रहे हैं सब, मिड वाले टिप कर रहे हैं। अब बैक क्यों हो रहे हैं ये लोग? तो टावर का मार खाएगा क्या खड़े रह के? हाँ, फर्क पड़ रहा है इन लोग से, बहुत डैमेज देता है। ये देखो एमके अल्टी, स्पेक्टर अल्टी। ओ क्या मारा फ्लाई ने अल्टी, सबको रोका। जी अभी तक लिखा नहीं है, बट ये खत्म कर देंगे। स्पेक्टर को डुएल मंकी ने खत्म कर दिया। देख आरटीसी का नेटवर्क से कोई पंगा नहीं लेगा। 2 सही मेरा, 2 गलत। मेरा भी। आरटीसी का नेटवर्क से कोई पंगा नहीं लेगा। लास्ट प्लेयर टू बी डाई किल्ड। अबे स्मोक गैंग मैंने 5 से 8 रखा था, 9 हुआ। और इसी के साथ बाहर इविल जीनियस निकल। चल पहली फुर्सत से निकल जा, उसके साथ खेल, एलाइंस के साथ खेल। S4 के साथ हो गया। भाई साहब क्या मतलब ट्रोल लेके भी काइट। भाई लोगों ने क्या बोल रहे हो वहाँ पे? बोल रहा है गांड मार दिया पूरा। पूरा गांड मार दिया है। It did, and that series as a whole, I think VG Gaming a lot to be very proud of. You imagine what we saw back in game 1 to come 800 I think 800 मिलेगा इनको। चलो मैच आता है। Incredible stuff.
And Vici Gaming, they'll be the ones holding on in TI and moving on, knocking EG out 2-1. 20 HP. The difference potentially between a TI moving on, potentially even a TI victory, to being knocked out. And with that, we say goodbye to North America in the International 10. Gentlemen, they might have gone out, but it was an incredible match. One that I North think America पूरा out हो TI गया. fans कोई and से भी Dota गया fans in अमेरिका से, general वो भी will EG भी गया. remember for a lifetime. Tsunami, wrap up how you're feeling on that one. I mean, whew. It was crazy. China's just an evil genius's kryptonite, it seems. IG was able to solve them in Singapore. PSG.LGD was able to solve them in Kyiv. And now Vici Gaming have solved them here in Bucharest. So नहीं हुआ. Evil Genius versus OG का match नहीं हुआ. Either of these teams would be so out, taken out at ये इधर सुमेल और नोटेल अभी नंगा नाच रहा होगा. This tournament has been thus far. And I think, honestly, looking back at this series and especially at this game, Vici Gaming just deserves it, right? सुमेल तो नाच रहा होगा. सुमेल को निकाल दिया है I टीम think a से. lot of people were scratching their heads. What is this Lycan last pick? How does this draft even make any sense? And you just got to see it come together. I think this was the hardest game of the entire tournament for Crit. He couldn't play Skywrath. This matchup is so horrible. Like, I don't know what to say. I've played this myself a couple of times. You pick Skywrath, you're like, oh, I'll play Skywrath this game, you know? And a guy picks Lycan in the enemy team, you're just like, okay, I actually just hate myself, you know? He presses one button, he sends his Granite Golem at you, it crits you like 2k range away from the fight, and you just die. Sorry for hitting you there. You're good. That's good, a little bit of metaphor for what's happening in that game. Granite Golem is coming. Exactly. You're like the Granite Golem. Yeah. All right, guys. Tough times. I must interrupt you there because we have an interview with your boy. Turn up. It is Avo with Arteezy for his exit interview. Hello. I'm here. Not with Arteezy. I'm here with Fly. भाग के आता है क्या हर बार? Thank you for your time, Fly. भागते रहता है. Yeah. नहीं ये वाला बंदा रेड सूट में. I honestly just want to know what's going on through your mind right now. It's obviously a lot of emotions. You kind kind of wait 2 years for something. Like go half right. It hurts, you know. That's the reality. It feels like the world is kind of crashing down. This literally happened like 2 minutes ago, so there's a lot to process, a lot of disappointment, and you know, what can you say? It hurts, and of course I'm sorry. Troll को kite करते लोग, Astra को kite करते, Astra का ulti one सीधा kite, Medusa का ulti one सीधा kite. I think this was not our best showing. No, still one crazy series. But मुझे अभी भी लगता है spirit में सबसे powerful spirit Ember ही है Sam. So thank you very much. Thank you guys, and whoever's obviously cheering for us, your support matters a lot during this time. So yeah. तुम्हें क्या लगता है Sam? कौन सा सबसे अच्छा spirit है powerful? A difficult loss. Actually, Ember physical damage पे अच्छा रहता है, magic damage पे Storm है और disable plus damage Void Spirit है. Thank you so much. Yeah, like मुझे Ember इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि Ember को उतना ज़्यादा item नहीं चाहिए होता है, like Storm को कम से कम item चाहिए. हाँ, level 6 पे जाके भाग के मार सकता है, but level 6 पे Storm का kill potential नहीं होता है until वो जब तक Lotus नहीं बना लेके Orchid जब तक बना के नहीं आता है Storm तब तक effective नहीं है. And Void भी like similar Orchid ही है उसका भी मतलब core item. अभी Orchid नहीं अभी Agnum Scepter है उसके पास like you know ये करता है. Orchid के ऊपर उतना invest नहीं करता है. But वही पे अगर तुम इसका ले लो, इसका investment Maelstrom तक ही है. And is this how you expected it to go, buddy? Some of these I did predict that T1 would IG and Secret का match PSG.LGD like TS versus OG and T1 versus VG. But I think Southeast Asia versus China. Like, you know, LGD is arguably the best team in the world right now, so that was IG versus Secret. The old heart there. I predicted Team Spirit. आज वो मैच है क्या? कौन सा? अभी upper हाँ अभी upper का होगा, lower हो गया. Teams just because I feel like they're the type of teams that can take a game off of anyone, but not necessarily the teams that can. ऊपर से अगर Secret या फिर IG हारा तो क्या होगा फिर? वो नीचे OG के साथ मतलब जो टीम इधर जीतेगा OG versus Team Secret उनके साथ खेलेगा. That will make it into the top 4 or at least are in contention for that. IG versus Team Secret में से जो हारेगा, IG versus Team Secret में जो हारेगा वो लोअर ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा ऊपर.
और टीम स्पिरिट वर्सेस ओजी में जो जीतेगा वो आगे जाएगा और वो उधर उनमें से फाइट करेगा। अपर ब्रैकेट में डायरेक्ट नॉकआउट नहीं है, बट लोअर ब्रैकेट में डायरेक्ट नॉकआउट निकल औकात नहीं है, ऐसा है, समझ रहे हो? ओके, वो नीचे आएंगे क्या? या मतलब टीम स्पिरिट और ओजी के साथ फिर से मैच होगा, अगर सीक्रेट हारा तो मतलब सीक्रेट या आईजी जो भी हारेगा वो नीचे आएगा और ओजी नीचे आएगा। ओजी और टीम स्पिरिट में से जो जीतेगा उनके साथ फाइट करेगा। सेम। मतलब मेरे को क्या लगता है पता है, अपर ब्रैकेट में तुम ज्यादा प्लान कर सकते हो, हाँ तुम थोड़ा तुम सा ज्यादा रिस्की। रिलैक्स्ड हो, हाँ ठीक है, तुम ज्यादा रिलैक्स्ड हो, तुम चिल्ड हो और तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और अपर ब्रैकेट में मतलब तुम्हें मैच भी कम खेलना पड़ेगा। लाइक टीम सीक्रेट अगर जीत जाता है, लाइक हाँ, उसने पहले एक और खेला, दूसरा, तीसरा एंड चौथे पे फाइनल। मतलब तुमको मतलब कम प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब या तुमको पता है कि हाँ मेरे को तीन टीम को ही लड़ना है, रादर देन छह टीम के लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना और 3 टीम के लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने में ऑफ कोर्स, और तुम ज्यादा रिलैक्स्ड हो तो तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो उस मतलब चीज पे। लोअर ब्रैकेट वाले जो मतलब बेस्ट लोअर ब्रैकेट थे सब निकल गए, कोई नहीं बचा। अभी कैसा है कि ये लोग जो मतलब लोअर ब्रैकेट में जो भी है हम्म। उनको मतलब और जैसे कि फॉर एग्जांपल हो जी, आज उनका मैच है भी नहीं तो फिर भी वो लोग देखते रहेंगे कि हाँ कौन है, हमको किसको या फाइट करना, वो पढ़ते रहेंगे वो लोग, ओके ये लोग है अभी। आईजी के रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी है उनको वो तो वो डम कर देंगे, आज जला देंगे। या बट नहीं उनके तो लाइनअप में देखो जो मतलब स्ट्रेटेजी बेस लोअर ब्रैकेट में जिन्होंने शुरू किया सबके सब आउट हो गए। अभी जो भी मतलब 8 टीम बचे हैं ये अपर ब्रैकेट की टीम है। 8 टीम तो लाइक आईजी, टीम आई थिंक स्पिरिट, टॉप सीक्रेट। 8 तक ही पैसा मिलता है ना, नहीं टॉप उससे 8 उससे टीम का। उससे मिलता है जो एकदम लाइक 15 एंड 16, लाइक 16 एंड 17 एंड 18 पे है, उसको 100K मिलता है। टॉप ओके, 8 में जो है सबको मिलियन मिलेगा, $1,000,000, जो टॉप 8 टू लाइक 6 to 8 में रहता है। तो नेक्स्ट मैच कितने बजे है फिर अभी? या अभी चालू हो जाएगा। लाइक क्या इधर बात कर रहे इधर हो? से मतलब जो 2 टीम हट जाएगा उनको मिलियन मिलेगा और उनके आगे जो जाएगा उनको 1.5 मिलियन मिलेगा। लाइक टॉप 6 में 1.5 मिलियन एंड उसके बाद वाले पे। अरे ऑलरेडी लाइव लाइव आ गया वो, नहीं वो लाइव वॉच नहीं इन है, गेम नहीं आया। वॉच इन गेम नहीं आया अभी। वो घुसेंगे, इनके बकचोदी होगा थोड़ा बहुत, लाइक 15 मिनट का ब्रेक समझ लो। पर मुझे लगता है चाइना का जो है टीम ज्यादा है ना, एक कितना है, या आईजी है, एक दो, PSG.LGD एंड VG, 3 है। वीजी, एक दो तीन, तीन टीम है। हम्म। और T1 कौन सा है फिर? साउथ ईस्ट एस एशिया। सी है, हाँ SCA, यूरोप है, टीम स्पिरिट भी यूरोपियन ही है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो रशिया टाइप्स लग रहा था। नहीं, CIS रशिया टीम, रशिया यूरोप के अंदर ही तो आता है ना। ओके, तो एक CIS टीम है उसमें, या और VP भी CIS है, मतलब 2 CIS, और वेस्टर्न यूरोप तो लाइक वेस्टर्न यूरोप में प्रॉपर ही है सबके ओ सब, वेस्टर्न एंड OG, ईस्टर्न। हाँ तो OG, EG, मतलब ये सब यूरो और ये, तो हमारे SCA को इंडिया को, मतलब इंडिया भी SCA में आता है, उसमें सिर्फ T1 ही है। या बट T1 भी मतलब चाइना ही मैन है इनका। जस्ट लाइक चाइना से नहीं क्वालिफाई कर पाया तो साउथ ईस्ट एशिया से क्वालिफाई कर लिया। बस है ही नहीं साउथ ईस्ट एशिया में टीम, चूतिया नहीं भरे एक्चुअली, बड़े। कैसा है कि ना, अम, तुम साउथ ईस्ट एशिया टाइप्स रहने के लिए भी तुम्हारे 3 मेंबर तो एटलीस्ट साउथ ईस्ट रहने चाहिए। नहीं इनका है 4 मेंबर साउथ ईस्ट एशिया का है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि भाई मैं एक यूरोप से एक बंदा लिया, 4 यूरोप वाले थे, तो नहीं, तुमको ऐसा नहीं, तुमको फिर यूरोपियन क्वालिफायर से खेलना पड़ेगा। अरे है ही नहीं ना साउथ ईस्ट एशिया में टीम। लाइक साउथ ईस्ट एशिया का टीम सब इधर ही कम 1-1, 1v1, कम 1v1। साउथ ईस्ट एशिया का मेंटेलिटी है 1v1, कुछ बोलो कम 1v1, आई विल शो यू। ऐसा नहीं है। लाइक तुम मनी मन बोलेगे भोसड़ी के तेरे से फाइट करूं या नेक्स्ट मैच में जाके गेम खेलूं। लाइक तो बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा तुम देखा जाए तो मैं भी, जब मैं जो गेम खेलता हूँ तो उसमें तो मैं भी तो गेम हारता हूँ, बट नहीं ऐसा इनको है कि तुम बोलोगे कि ये ना करके ये करो एंड इज लाइक कम 1v1, आई विल प्रूव यू। अभी तुम मेरा पिछला मैच देखोगे, ठीक है, मैं सपोर्ट पे क्या पहला आइटम बनाया, पता है तुमको क्या देखते लिया हैं, पहला आइटम? देखते हैं क्या लिया है। आई थिंक एकदम ही लिया होगा।
नहीं, पहला आइटम मतलब गेम स्टार्ट होते ही क्या लिया मैंने। ओह, देखते क्या लिया तूने। तुमने गेम स्टार्ट होते ही लिया है। तब होगा इधर क्वाड एंड वाइन लांस। जूते उठाए थे मैंने डायरेक्टली। नहीं, तुम्हारा जूते तो बाद में आया 6 मिनट पे। नहीं, पर मेरा फर्स्ट आइटम गेम स्टार्ट होता ही ब्राउन बूट्स था। या लाइक ब्राउन बूट्स और कुछ नहीं था, तुमने रेन ड्रॉप भी लिया। जूता मतलब तो जूता ही पहले मैंने तुम्हारा। मेरे पूरी टीम ने मतलब मेरे को तो मेरे मिड ने मेरे को फ्लेम किया, जूता क्या सपोर्ट है ये वो, पर फर्स्ट ब्लड तो मैंने उठाया। और मेरे अगेंस्ट कौन था पता है? मंकी किंग था। तो मेरे को पता है मंकी किंग मेरे को ऑर्ब ऑफ एनम से मेरे को मारेगा। ठीक है, मेरे को लाइक ऑर्ब ऑफ एनम सपोर्ट को तो मुझे लगता है जूता बहुत पहले खरीदना चाहिए उसको। लाइक सिचुएशनल है अभी। नहीं, मेरे को लगता है लाइक सपोर्ट को वार्ड लाइक एक वो टैंगो खरीदो और जूता खरीद लो सीधा, क्योंकि सपोर्ट के पास पैसा ही नहीं बचेगा। उसको अपना कैरी को मतलब जो फीड मतलब नहीं नहीं फार्म नहीं देना नहीं पड़ेगा नहीं ना। नहीं, वैसा नहीं रहे, वैसा नहीं। देखो, अगर मैं जूते नहीं खरीदता, मैं जूते कौन से इस पे खरीदता बताऊं? वेनो और एमके। क्यों? या फिर जो भी जिनके जो आसरा पॉइजनो आसरा और के खिलाफ भी जाओगे तो जूते लोगे, नहीं नहीं नहीं, और उसके ऑफलाइन। खिलाफ हाँ, उसके वो भी है। बट जगन्नाथ के खिलाफ अगर भी जूते लोगे। ओरसा पोजीशन 4 से नहीं आया भाई, जब मैं हार्ड सपोर्ट खेलूंगा तो मेरे को मेरा दिमाग कौन खराब करेगा? पोजीशन 4 ही मेरा दिमाग करेगा, पोजीशन 3 नहीं करेगा, वो फार्म करेगा, राइट? तो मेरे पास जब आया हो, मेरे को एमके मेरे को मारा, मैं भाग गया वहां से, मेरे को नहीं पकड़ पा रहा था वो। या मेरे पास जूता है। जूता है तो मेरे को मेरा मिड ने मेरे को फ्लेम किया, बोला कि क्या ये पोजीशन कैसा खेलता है तू, ऐसे वैसे करके। तो वो मैं वही बोल रहा हूँ कि समझना मांगता है कि कैसा डोटा मतलब आगे तुमको 2 स्टेप सोचना पड़ता है तो ही तुम जीत सकते। लाइक मुझे लगता है कि मैं अगर जूता खरीद लूंगा तो मैं अपने कैरी को ज्यादा अच्छे से बेबी सिट कर पाऊंगा। ये गेम जो मैंने चालू किया है वो मैं हारने वाला हूँ, ये तो मेरे को पहले पता है, बट ठीक है, खेलता हूँ तो लाइक फिर भी। लायन पे लिखा ही है कि तुम हाँ, जूता खरीदो। अभी मेरे टीम में क्या है, देखो मेरे टीम में WK है और मेरे टीम में मिड जकीरो है। अभी मिड जकीरो के लिए मेरे को नहीं पता वो नशा करके बैठा है। हाँ, अभी ये मिड जकीरो का काम चलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या बोलते हैं, वाइपर को इनबा खेलना पड़ेगा। वाइपर मतलब ऐसा माइंड फक खेलना पड़ेगा उसको, तो ही गेम जीत पाओगे। और पोजीशन 4 को because I have stun available, I have 4 stuff, and maybe if I like 4 stuffed first up the hill and then save my stun, I would have got him as well. But I just stunned because I went with my instinct and I missed, and then he TP'd away, so it looked pretty bad for me. But yeah, it was a good play by him. Like, and you missed by like a unit. Yeah. Evil Geniuses, off of winning this match, managed to go forward all the way and place 3rd and win $2 million. Newbie, on the other hand, they just bottom out of the tournament. So this match mattered a lot. A good juke is tough to come by. There's, really just a best way to play every situation. But occasionally there's some wiggle room, and that's where the outplays and the jukes become possible. I think juking is always instinctual. Hello, जी का एकदम front पे match है, first match. Every great play, there's a bit of luck involved as well. Like lower bracket में बहुत मैच खेलना पड़ता है, upper bracket में तुमको उतना मैच नहीं खेलना पड़ेगा। All the time at TI, but hindsight is 2020, and players always say they should have got it. But I mean, that's just a testament to the skill of the opposing team as well. Gentlemen, we are here to talk about Secret versus IG. Here with me to discuss that are Gods, Lizard, and Insania. Thank you so much for joining. So for this series, we're returning back up to the upper bracket, so a little bit less scary because there's no elimination. But at the same time, being at the top is still scary going down to the potential lower bracket. So tell me a little bit about Secret versus IG's play styles, gentlemen. Well, for these two teams, it's going to be, I think, a bit of a clash in style. I think for Secret, they're going to be a bit more kind of
focused on the laning stage, the early game. And while you kind of mentioned, yeah, they're in the upper bracket, they're a bit more comfortable, what they are competing for is a guaranteed top 3, which is a huge increase in prize money. So I think there is still going to be a lot of pressure on these teams. Yep, and at the same time, even though perhaps their playstyles Yeah, in-game are a little bit different, the way they got मैं तुम्हारा here is leaderboard they देख रहा हूँ, secured the spot अमेरिका में भी very Indian early player है. on in the DPC season, and then just, you know, chilled a little हाँ, bit, सर? said we're not going to be really ऐसा है क्या? revealing हाँ, like वो any of our 75 number पे. strategies. We'll be saving it all up for TI, and this is the match probably that they were waiting for a lot. Insania, what are we going to expect? I think what those are brought up is a really interesting storyline where you have two teams that haven't really been like on the radar the same way a lot of the other teams have been. Like in Europe, for example, you've had OG that I think has had a lot of the attention directed their way, and in China, you've had PSG.LGD. So both these two teams, I think, have flown under the radar a little bit, both like among talent, but also among the players, just based on like the vibe I get from talking to people. So it's gonna be interesting to see how they match up. I think Secret is like a little bit of the wall, and they proved yesterday, or yeah, I believe it was yesterday against OG, that they can hold off the aggression, and I think IG wants to put the pressure on. Well, it looks like both teams are ready to come to the stage. Let's bring them on. Team Secret is known as the dominator of 2020's online tournaments. It is thanks to this team that Dota fans have praised the European region. Since TI9, they have kept a rather static team, with Powerhouse Matumbamen being the only new addition to the likes of Nisha, Zai, Yapster, and Puppy. People have speculated that this team ran cold in the 2021 DPC to take the heat off, and they are proving that theory to be correct as they emerged second in their TI10 groups and have remained in the upper bracket by defeating defending champions OG in a whirlwind 2-0. On the TI stage, it is time for Team Secret to remind the world why their adaptability and the EU Dota region reigns supreme. यूरोपियन में बहुत सारे इंडियन होगा. Invictus Gaming, composed of Fly, Emo, JT, Kaka, and Oli, have remained a cohesive unit since September 2019. Taking first and fourth in the DPC's Chinese region, IG showed their true power in adversity after reverse sweeping Evil Geniuses in the Singapore Major Grand Final. At this TI, they placed first in their group with an impressive score of 14-2, and then sent Dark Horse Team Spirit down to the main event lower bracket with a 2-1. This year has heralded the reemergence of Chinese Dota as leaders of the pack, and IG is, with their pace setting and versatility, one of the reasons why. Let's take a look at the journey for IG. Team IG's road to TI10 started with a bang, winning the grand finals in the Singapore Major in March. With Kaka, they're led by an experienced captain, one who has played in 10 majors and 5 internationals. After reaching second place in TI7, he's now heading to TI10 with a unique perspective and a roster of new teammates benefiting from that experience. Okay. Thou? Question mark in the old chat. All right, I love that. GG's called. He was just standing there. All right. There we go, ladies and gentlemen, spicing it up a little bit. 转眼间过了5年之后，现在称呼你一声卡师傅或者是老将也不过分，而队里也有比较多的年轻的选手。那你现在再和大家一起去冲击 TI， 跟以往会有什么样的心理上的变化吗？还是你觉得，我卡卡依然是一个非常年轻、有冲劲的年轻选手？我觉得我个人感觉就是我跟什么队友区别不大吧。我觉得跟自己心态可能有点，心态上会有点变化吧。因为我觉得我之前 TI 打的就是有时候我会打的感觉，就我现在看啊，就感觉之前打的可能想的东西太少了。然后现在我觉得就是我的思维会格局会更大一点，就包括就是不止于我自己的位置，我
去说一些就别的位置，然后该怎么去运营，然后该怎么去打团之类的。就现在我觉得这种思路会更宽大一点，因为我觉得之前打的太偏个人了，然后偏的打的有时候也会就看起来就没那么有章法吧。It's been a season of high highs and low lows, ending with a tough performance in June's Ana Major when the wildcard round sent IG home before they could even see the main stage. 然后有别的队伍在聊到你们的时候，或者是有些观众在聊到你们的时候，认为你们是有隐藏实力，或者说不一定是刻意的隐藏，但是可能就是主观上没有那么大的强的动力，导致你们没有打出特别好的状态。你们会自己怎么来评价自己在 Ana Major 的一个表现Ana Major 就是我们也没有隐藏实力吧，就是我们就是5号位不在嘛，然后就是我们教练上会在那个线上的时候会出一些小问题，然后团战其实还是蛮好的，就是我们线上出的问题会比较大，所以打得没有特别好，但也没有隐藏实力啊，我们也是在认真打的。नया वीडियो दिखाओ इसमें पहली बार जो दिखाया वही दिखाया जा रहा है 和主观能动性关系不大。对 ，update नहीं हुआ。我觉得外卡赛队伍也是非常强吧，然后打比赛我觉得更看一个状态，就是谁状态好谁就能赢，这样。तुम्हारे कैसे बोलची ना तुम्हारे बोलची ना 你可以想象一下，现在登上 TI 的舞台要出场了，然后这个时候播放的是你们的采访片，这个时候屏幕里的卡卡说一句话，用一句一毛大神的话，就是让我们来看看谁才是真的 TI 冠军吧。Let's see who the strongest TI champion is. Those are very, very, very strong words from a very strong team. Now, a lot of people, when people think about the Chinese region, obviously one of the teams that people think of is PSG.LGD, but IG is also a really strong team as well. Lizard, can you tell me a little bit about what makes them the strong team? Oh, well, they came into the first season of DPC in the Chinese region not really with stellar performance. They had their ups and downs, but instantly into the major, they take it after the question mark. The mental strength that's necessary to go from 0-2 into winning a major, I think that's probably their strongest thing at the moment. Even at the TI, the fact that you have, besides them being obviously extremely good players with a lot of confidence, they can go as far as to the grand finals. And basically, since this team formed, I feel like they've been successful. Like right after forming, they won a minor to qualify for one of the old majors. I think it was the MDL major where they got 3rd place. So like even right after forming, they're getting top 3. Then the new season starts, they get 1st place at the Singapore major. And their result at the Ana major, as they kind of mentioned in the interview, was pretty much entirely down to having the stand-in. Right, because they had their coach stand in for them. Now, Insania, tell me how the TI experience might affect them here, because I believe that for IG, Fly and Kaka have attended TIs before, but for the other 3 players, this is their first TI. I think where you would imagine for a lot of players that adds a lot of pressure, I feel like Emo's the kind of person who just wants that. I think he thrives off He of feeds it. off. Exactly. To me, when I watch IG play and just the vibe that the team gives me, I feel like they're a team that likes this environment. They want to play high pressure games. And, you know, like we said, top performances at all their LAN events ever since the team formed, I think is a sign of that. Interesting. Well, while IG is a very, very accomplished and strong team, we also have on the other side Team Secret, right? And they've been doing extremely well at this TI. A lot of people were thinking, oh, maybe Team Secret is hiding their strats, and they came to TI and boom, they came out with a bang. They had impressive games, and now they're kind of looking like they're set to win in a lot of people's minds. What makes Team Secret a good match for IG? I mean, with Team Secret, there's always been a bit of a meme around this team about TI form. They're a team that has kind of repeatedly maybe disappointed their fans with their results. But realistically, when you look at it, they've gotten top 4, top 6 at all these recent TIs. And I think this year is no different, except for the fact they've added somebody, Matu, who has that experience. He's played at the TI main stage numerous times. He's won the TI championship with Team Liquid. And I think that kind of experience and kind of composure that he can bring makes a big difference when often Puppy has teammates who are like younger and more inexperienced. Also, TI was moved away from August, which is usually where Secret hit maximum TI form. October, they're usually very, very good, so.
I might also fade their straight after the TI usually they're precisely. Amazing. October's a good month for Team Secret. So are you saying that moving TI to October was a Team Secret buff? I do think so, yeah, absolutely. Also being in that incredibly strong wildcard at the end major with IG, I believe Nigma as well, and falling out of the major very early on, made them take perhaps some vacation a little bit earlier and come refreshed to the TI. So Matumbaman is like their new player, and Gods, you said that he's really, really strong. Do you think that the addition of Matumbaman as their newest player has changed how Team Secret has performed? I think Matu provides Secret with a lot of stability, and he's a player that you can kind of put into almost any hero, and he's going to be able to perform on it. And I think for Secret, it's nice to have someone, a carry player that can both be like a shining star for them, but he can also let the other people shine through. Like you have Nisha, Zai, Yapsor, you have all these like star players, even Puppy, like even their position 5 player sometimes turns into the carry. So I think having a carry player that's as versatile as Matumbaman is, plays hugely into their strengths. If you go all the way back to his Nigma days, right, like he was sacrificial one in a lot of games, and he was forced into sometimes playing these cheesy heroes that aren't necessarily the best in the meta, but are strong in certain circumstances. Having that as well on your side, even though it's not the focal point of the current meta, can prove to be handworthy. Yeah. So we have China and we have Europe, and a lot of people have said throughout the year that they have very different play styles. How will these play styles clash? Does Team Secret and IG, do they even follow their regional metas? Well, Secret, at the moment, in my opinion, has a perfect read on the meta. If you look at the way that they played versus OG, the way they drafted, the moment ET has been picked up by OG, a hero that has been picked up, I think, the most times at the tournament, they instantly respond with an Enchantress, which makes his laning a little bit more difficult and also makes everything easier for Team Secret. There was an interview with Seb post-game on the Chinese channel, and they asked him what happened in the game, and Seb was very honest. They just outdrafted us and then crushed us. It's just the way it was. I think Secret, what they showed in the OG series is that they can wall out this aggression that we've seen during TI. Like, I think PSG.LGD, IG, and OG are the 3 teams that they're able to just run at you and apply pressure and get their carry players to get ahead. But Secret proved that, you know what, we know how to like put up the wall. We can stop you from running at us. And I think that's something I haven't seen from any other team ever since, I would say, like LGD rose to dominance. So if Secret has figured it out draft-wise, how to like stop this fast-paced gameplay, I think they have a very shot at both beating IG, but going even further than that, maybe, you know, taking the next step into ऑनलाइन ही नहीं हो Dota में. अरे मैं एक्चुअली मैंने इनविजिबल रहूंगा फिर. Group stage, can you please explain what you mean by Team Secret's wall? Okay, so I think when you play against Team Secret, and something that I know we struggled against a lot personally on Liquid, is they will basically wall you out. They won't let you get onto their side without fighting you. And they will abuse the fact that, you know, you have to run up ramps to reach the high grounds of their side of the map. And Puppy will position himself there on this like ogre type hero or enchantress, and he'll just bully you out and be like, hey, you can't get past me. Just imagine Puppy standing on top of the stairs with a club, ogre club, waiting for you. And then middle me's approaching. And you're a Crystal Maiden going in for a gank, you're smoked, the smoke breaks, and so does your team fight afterwards. They're really good at breaking up team fights and setting up the perimeter around Matumbaman while he is farming. On the other hand, for IG, if there was like a signature move for IG, what would it be, if anything at all? Or is it just simple diversity? When I think of IG, I think of just Kaka and Emo as like the 2 big playmakers. I think Kaka, his Lion, you know, you go back, he's always played these big playmaking, stunning, start the fight kind of 4 positions, even like when Sankin was a 4 position. So he's a guy you kind of have to look out for to make those big mid-game plays. But really, all of their mid-game plays are centered around Emo and him being the kind of flashy superstar of this team who wants to pop off. It can be hit or miss at times, but if I think IG is going to take it against Team Secret, it really comes down to Emo a lot. Yeah, I absolutely agree. I think for IG, it's initiation. Like, Kaka will play a hero that's going to blink stun you, and Emo will be there to follow up. So if they can get that jump, if they don't get stuck on running up the ramps, I think IG has a really good chance of winning this. My just small take coming from the DPC seasons is JT, you can't allow him to have a great lane. If you're IG, that is, because every time he has a great, amazing lane,
लोगो चेंज कर दिया क्या? Easiest money of my life! What kind of heroes do you think are going to come out in this draft? It's going to be tough to say. I think yesterday when we saw Secret go up against OG, that was a really prepared Secret for OG specifically. I felt like they had hero answers for that team. And, you know, they've had the luxury of playing against OG for months in the European region. So I'm not sure how prepared they'll be for IG, but I'd expect to see them, you know, probably coming in ready, like having ideas for whatever IG might throw. Dire's top tower is not on top of things. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. कल I think OG पहला मैच जीतता है. Like कल जो टीम पहला जीतेगा वो 2 खेलेगा. It's like lower bracket round 4. Radiant's bottom tower has Round 4 means this one. ये वाला मैच like जो OG and team speed से जो जीतेगा वो सीधा यहाँ पे खेलेगा. Like आज जो टीम हारेगा उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होगा कि इनका मैच देखने का. And परसों भी like lower bracket round 4, upper bracket final, lower bracket round 5. Dire's middle tower is under attack. Lower bracket round 5 means ये वाला दोनों से जो जीतेगा वो ये वाले का ये इंतजार करेगा. And ये 17 तारीख को होगा. Lower bracket final like 3rd position का. Radiant's bottom tower has uninvited guests. Lower bracket final है. Yoga upper bracket. A dominating performance. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing. Lanham with Treant Protector and Abaddon and just running down people. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower isn't well at the moment. Dire's top tower was utterly destroyed. A dominating performance. Ownage. Radiant's courier has been slain.
Dire's middle tower is in the wrong end of business. A bauble from the void. Dire's bottom tower is in turmoil. Yeah, I just hope that just fortified their structures. they have players that have been players that have been doing really well at Okay. Hello. Thank you. तो निकाल नहीं सकता, नहीं तो निकाल देता. all according to Keikaku. सबसे अच्छा मतलब डायलॉग किसने मारा? Absolutely not what I expected. Honestly, I'm really impressed. Yo, I am so good at Dota. ने बोला ratata. Dota 2 is a fun and balanced game. What? Voice chat wheel line. कोई यूज नहीं करेगा ये. As long as we stay positive, we'll win. ये था Froggy का. As long as we stay positive and win. If they keep this up, there's going to be no coming back for the enemy team. It feels good to be this good. Honestly, I'm really impressed. Are they roshing? Hey, we can see you in the Roche pit. We see you doing it. Now, on the opposite side, Heen is the coach, right, for Team Secret, and he has performed at TIs as well, and he's also won Esports Coach of the Year last year, I believe. So tell me a little bit about him and how he has benefited the team. He's a TI champion. Everyone I've talked to who's worked with him has nothing but like the highest praise. He just seems like a really calm, steady voice. I mean, maybe you guys know a bit more about him on a personal level, but he seems like, you know, one of the best coaches in Dota 2. Yeah, he's always very calm. I think the Korean coaches, they're a little bit broken. We have one of our own. I feel like it's just the meta. You have to have a Korean coach. It's an advantage you get automatically. What is the advantage that you get sure. from that? It's just, I feel like, so we have Blitz, and I get a similar vibe when I talk to Heen at events, but it's just this very calm person. They give off good vibes. They're very smart, very intellectual. I feel like this has just been my experience with the Korean coaches I've ran into. Did Blitz pay you to say this? No, but he's on his plane on his way here now, so I'm a little so bit you're afraid. prepping the ground. I need to make sure I butter him up a bit. So understandable. At the same time, Secret in the last year, it was all online events, but What would you nominate? I'm just curious. he would nominate. yeah, I mean, it's impressive what March has done with T1 and how far they've gotten, but at the end of the day, I just think Zhao 8, to me, is like, he's such a standout person for LGD, and I don't think LGD would be LGD without him. So for me, he's probably the most obvious choice. Lizard? Yeah, I would go with March. I think the transformation that they've made on the side of T1 in the last couple of months is phenomenal. They looked, while Jackie was still in the team, they looked a little bit shaky. Replacing him for 23 Savage, they looked shaky again, but they found the right recipe to work around 23 Savage. They didn't fall apart after a rough start to the second season, and they pulled it together, and here they are, looking extremely strong. In the lower bracket, but still extremely strong. Gods.
I would have said Zhao as well, but I'll say who my runner-up would be Bulba. I think EG's been like the most consistent, top-performing team. Obviously, so we're saying this right after they got knocked out of TI, so it's a a tough moment for EG. But I think historically, Bulba and EG have had some of the best results in competitive Dota 2. Yeah, Bulba also has like a lot of. He's very actively involved in the team, right? Like he drafts for EG. Who drafts for IG and who drafts for Secret? Do you either? I think I've seen Super sit down in the chair at least a couple of times. I would imagine like it's a fairly, especially in Chinese teams, I think they tend to do it almost always. The coach is very involved in the draft, at least what it looks like from the outside. I don't know if they just do most of the prep work or if they just step aside, let me do the drafting. But for Secret, do you tell Puppy to stand up think, out of his chair? I think there's a reverse situation there. I think Heen is probably very much on the prep side of things, and Puppy's the one that makes the decisions ultimately in the end. So can you run me through how drafting works prior to a TI? Because teams are always discussing. He keeps it realistic. He's my Slav boy like that. They want to warm up a strategy. That's really individual, I think. I think some players, they like to go sit down and play a bunch of pubs. They just want to get warmed up. They want to get into the thinking of Dota, get into the flow of things. And others just want to relax. So it's very individual, I'd say. The last couple of days, there were not many pro players playing pubs. I can tell you that. Like, if you go into pubs and search a game, you're going to find some 1K MMR, 1K rank scrubs. You won't be playing the same matches that you were playing just before TI started. Yeah, during the group stage it was very different. I felt like because I'd see Secret play a two-game series, then right. Yeah, I guess it's true because it is really scary. Do you think that the teams are playing differently because they're in the upper bracket instead of the lower bracket? Because the lower bracket, from what I've been told, is preparing for that one important best of 3 that you've got coming up. Yeah. I guess it's true because it is really scary. Do you think that the teams are playing differently because they're in the upper bracket instead of the lower bracket? Because the lower bracket, from what I've been told, is where people start bringing out the cheese strats or like the secret strats, I guess. But what about an upper bracket? I think traditionally game 2 of either the opening game of the series in the upper bracket or the lower bracket. That's really when you're going to see like a prepared strat. Because coming into game 1, you've had a lot of time to think and a lot of time to prep. So whatever strat you're coming in with is what you theoretically thought, like, this is what's going to be really, really good against this team. And that's, I think, where you might see, like, these cheesier type heroes. They haven't really been that popular this TI, though. I think this is probably the TI I've seen the least cheese. This is a TI without a single Meepo picked. So that tells a lot about cheese picks. And no Brood as well, I believe. No Huskar either, I think. Yep. No. So maybe 1 or 2 Arc Wardens maximum. So I feel like IceFrog was like, we've gone 2 years without a TI, no cheese this year. We're going to make this a clean, a gentleman's TI. Has there been a Techies yet? What were you saying? I was going to say, no Quakebat TI, right? No Huskar, no Brood. That's true. That is true. I'm actually quite surprised by Huskar. I expected that hero to be picked up at least a couple of times. Coming into the TI, playing a lot of pubs, watching a lot of pro players, there was a lot of them spamming that hero. Yeah, I mean, Ame was playing it a lot. I actually expected to see more Huskar during the tournament, but it hasn't been picked at all. So maybe he figured out something we didn't. I think the Shard is very, very strong. And I think, there is potential. If there's going to be cheese, I think out of the options that are left, Huskar is probably the most likely. Interesting. Yeah. So is it just because of the Shard that Huskar is the secret strat? For me, at least, the power level of Huskar compared to the other heroes, he just seems like a better hero than the rest. I think Techies maybe, but it would have to be the right circumstances. He's playable. And the right team. You need like the Techie specialist. Right. I don't know if Xingqiu plays, or sorry, wrong series. Maybe in the LGD series, Xingqiu might play. I was talking about Huskar. He's kind of playable, right? Other heroes such as Techies, Meepo, definitely not. They're a little bit too weak at the moment. Yeah. If they get buffed eventually, they will be played, but before that. I'm really get bored. अच्छा सैम का ही मैच देखूं. Like चूतिया सा सवाल कर रहा है. Radiant's middle tower may need a Radiant's middle tower.
Radiant's middle barracks need a hero. Radiant's middle barracks were torn down. Radiant's middle tower is not safe. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Let's get Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks have fallen. Goodbye to Radiant's bottom barracks. for the treasury. Dominating, I guess. I know you are, but what am I? How'd that happen? Expertise from the experts. लूडा ने हक दिया सैम के गेम में Radiant's top tower was crushed to smithereens. Radiant's top barracks are at times. So the Radiant's top barracks get their demise. Radiant's middle tower may be down. Oh, no! Radiant's top barracks have fallen. Dire now have mega creeps. The Dota 1 heroes were in the game, I think, at TFC. I see. So there was just a period of time where Naga was just the hero. I guess the team fight carried. Also, Radiant's middle tower is under Every coin attack. helps. What are we laughing about? Such was the end of Dire's courier. That was the end for Radiant's courier. Speed and precision. A great admirer of your work. Earthshake in those ravages, but what about that Mirana? Mirana is Dominating, I guess. How'd that happen?
क्या बोलूं मैं वो लूना ही वैसा था, गाली खाने लायक ही था वो। चालू हो गया क्या? ना अभी तक चालू नहीं हुआ। The unpicked heroes वो in मैजिक गया वो लूना। I don't know लूना क्यों मैजिक जाता है। लूना का मैजिकल बिल्ड मेरे को सबसे घटिया लगता है। any heroes left नहीं unpicked. जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लूना का मैजिक, बट तुम क्या ऐसे लाइक यू नो his heroes. पूरा लूना का एंटायर गेम का फार्म एक आइटम डिसाइड करेगा बीकेबी। हाँ Yeah, he even plays some Zeus. हाँ? उसके बाद क्या ठीक है लूना ने अल्टी चलाया ठीक है, WK ने पूरा अल्टी टैंक भी किया, चलो माना पूरा अल्टी टैंक किया, फिर उठा, फिर उसके बाद क्या करना? तो पे अगर लूना फिजिकल डैमेज जाता है तो धो सकता है। पोजीशन 4 ये आइटम बनाएगा तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। पोजीशन 4 लूना क्यों जाने का? Now what about Omni Knight? Omni बड़ा Knight. अगर लूना वो मेरे को डर के उसने बनाया रहेगा शायद से, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरे को। In the last couple of बट तो फिर भी मैंने उसके इल्यूजन से 2 किल निकाले। या अगर लाइक मेरे पास Tell मतलब me दूसरा about that. ये What मतलब happened? मेरा अल्टी और भी ज्यादा पावरफुल लो कूल डाउन है, जैसे शैडो फ्रीड का अल्टी लो कूल डाउन है, ज्यादा पावरफुल है। And then Icefark decided, you know what? मैं I तब wanna see Omni सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तब मैं सोच सकता हूँ कि नहीं मैं मैजिकल जाऊँ, लाइक शैडो फ्रीड दोनों खेल सकता है, लाइक टैंकी मैजिकल भी खेलता है। WK भी इतना प्रॉपर नहीं खेला, वो जाके फीड किया उसने 2-3 बार, बट उसने भी क्या एग्नस विग्नम बनाया उसने, पता नहीं क्यों बनाया उसने, पर बनाया, उसको मजा आया। उसने तो ओपे छोड़ दिया था उसका डूम ने। जाकिरो को गुस्सा आ गया था, बोले मैं छोड़ू के मैं फीड करूँ क्या, ऐसा बोल रहा था वो WK को। तो इसको तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे हम लोग वाइड स्पिरिट को। मुश्किल से आदमी का भी रॉड ऑफ हेट और शैकल में तो मेरा सेकंड ऐसे कुछ तो लग के फिर वो ऐसे फिर मरा। पच को एक वॉर्ड डाला, पच ने डिवॉर्ड नहीं किया, वहीं पे उसका गेम खल्ला। पच बोल रहे हैं लूना का आइटम देखो, हम लाइक तू पच है पोसिडी के, तेरे को बोलने का हक किसने दिया? नहीं पच ठीक है, उसने पच लिया, मैंने देखा है पच को से, मतलब पच का एक ही दुश्मन है वॉर्ड, एक वॉर्ड डालने का बस उसने डिवॉर्ड नहीं किया मेरे को। और भी सस्ता लाइक लूना के लिए बीके भी चाहिए, पच के लिए 50 गोल्ड चाहिए ना, वॉर्ड तो फ्री है। मैंने लूना को कॉपी करके मैंने मतलब 2-0 कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है, तो लूना का मैंने कॉपी किया और वो इल्यूजन को मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया, ओगर के ऊपर छोड़ के मैं मतलब मेरे हीरो पे ध्यान देना, वहाँ पे वो डबल किल आ गया, समझ लो वहीं पे मर गया वो। बहुत उसका मूवमेंट स्पीड फास्ट है और बीके भी कांस्टेंट बीके भी रहता है, वो इल्यूजन को हाथ से मारना पड़ता है। और उसके पास वो ज्यादा डैमेज भी खाता है, ज्यादा डैमेज चाहिए होता है उसको मारने के लिए। मतलब आई थिंक 150% मैजिक ज्यादा डैमेज खाता है और देता भी है वैसा, तो इन टीरों के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया ना तो वो कुछ नहीं कर पाते, वो कंपलसरी मारना पड़ता है। वैसे और वैसे टाइम पे अगर लूना एनिमी है तो उनका टावर भी निकाल सकते हो बहुत जल्दी। कोई तो दरवाजे पे है। We need to draft some sort of spirit. It's either Earth, or sorry, it's either Storm, Ember, or Just Void not Spirit in Earth. every single game. Yeah, no Earth Spirit, unfortunately, but who knows? They might come out. It's not a bad hero in the mid lane, but you need to have a player for it. So maybe Thompson. Could be eyeing it up. But Maybe Thompson, Earth Spirit. Well, everybody, we just wanted to let you know that there are a little bit of technical difficulties. अब भोसड़ी का टीआई कर रहा है या रेलवे प्लेटफॉर्म में ट्रेन चला रहा है, लिटिल बिट टेक्निकल इशू। To the games. लो टेक्निकल इशू के शो थी आपा एंड के मुट मारो भाई। अबे कहां से सिस्टम ले आए? जॉन फुल तैयारी पे बैठ गया, लाइक गेम खेल रहा है तैयारी के साथ। 30 seconds remaining.
के साथ मैच खेलेगा एकदम फुल तैयारी के साथ एडियन। और ओजी बैठ के अभी टीम सीक्रेट का मैच देखेगा। ओजी को मालूम है अगर हम जब जीतेंगे हमको उनसे ही फाइट करना है। Heroes rode out to the field of glory. Just look with Manja. Just to make sure he's dead. Friends with a troll? Not likely. But we don't gotta be friends to win this fight. यही नहीं देखने के लिए। PMA, BSJ. तो मैच नहीं है ना, बैठ के इसीलिए खेल रहा है। First blood. Thanks and have fun. दूर तक सही है। बस सही हुआ क्या? Radiant's courier. Keep it PMA, keep it BSJ. अरे इजी जीतता तो एक सही हो जाता प्रेडिक्शन। Poor little Radiant's courier was slain. Double kill. Radiant's bottom tower has uninvited guests. That. Radiant's bottom tower has a nasty situation.
killing spree. lizard spit. A dominating performance. Hello, this is Gabe dead. Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. ओह इसमें नीचे से धुआं निकलता है इस हट से Because if you think about फाइनल इनका मैच चल रहा Dire team pick. इंडियन रेलवे लग सरकारी बैंक टेक्निकल इशू लिंक नहीं मिल रहा है लंच टाइम ये चल रहा है साला आज Enchantress. हम भी जरा देखें लोगों की जिंदगी कौन क्या अपलोड कर रहा है तो पैंडल देखने गया कौन क्या 10 seconds remaining. लोग व्हाट्सएप में अपलोड सब कुछ करते हैं 5 Board seconds up in. remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Dire team pick. Lena. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Templar Assassin. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Vengeful spirit. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Winter Wyvern. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. दोनों पे गांड पड़ेगा एक दूसरे का 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
Radiant team pick? Elder Titan. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Weaver. Choose your hero. It was time to prepare for battle. Okay, the match is started now. Number of the ancient attack. Four. Oh man. Lovely. Ouch, मेरा पैर सुन 30 seconds to battle. Ouch. बहुत बड़ा पैर. To victory. एक पैर के ऊपर दूसरा पैर.
थोड़ा सा भी मूवमेंट कराओ लाइक गुदगुदी होता है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर 10 महीने में होगा अगर सही सब कुछ सही रहा, लाइक दुनिया खत्म नहीं हो गया तो। ना कोशिश किया लास्ट हिट लेने का टीए ने, बट मिला ले ही नहीं पाया। इतना कोशिश किया टीए ने वो रेंज क्रीप को लेने के लिए। Radiant's bottom tower is under attack. मुझे टीए काफी अच्छा लगता है मिड लेन में बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन स्किल। ओह इसी के साथ यहाँ पे आराम से धज्जियां उड़ाते हुए लाइन की सीक्रेट का मटुम्बा मैन। ओह पपी ने किल लिया एक्चुअली। अच्छा खासा कैंप ही है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 करीब है। हर करीब से अगर लाइक 50-60 एक्सपीरियंस भी पकड़ लो, लाइक 50 ही पकड़ लो, लाइक 350 एक्सपीरियंस इजी लेवल अप फॉर मंकी। लाइक वेंचफुल स्पिरिट पता नहीं कैसे लाइक यू नो बाल स्ट्रेटनिंग करवा के आया है। लुक एट दिस वेंचफुल स्पिरिट, लाइक स्ट्रेटनिंग करवा के आया, हेयर कट करके आया। ऐसे जाएगा बॉयफ्रेंड से मिलने, भाई बॉयफ्रेंड सीधा देख के भागेगा फर्स्ट टाइम ब्लाइंडेड। बट एज अ ऑफलाइनर वेंचफुल स्पिरिट मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। सपोर्ट वेंचफुल देखा है, कैरी वेंचफुल देखा है, ऑफलाइनर वेंचफुल मैंने नहीं देखा। हाँ वेंचफुल स्पिरिट लाइक ये कर सकता है काफी अच्छे से। देयर इज समथिंग देखते हैं। इंग्लिश एक फॉगी था तो डायर साइड मुझे मतलब प्रेस हो गया कीबोर्ड पे F4 F5 वो से फॉगी हो जाता है। काका स्टैक बना रहा है, बना स्टैक ज़्यादा मत बनाना, 6 से ज़्यादा नहीं, 5 बना सकता है। 5 की मैं परमिशन दूंगा तेरे को, 4 की तेरे को, इनको 2 को, क्योंकि इनकी टीम में स्टैक लेने वाला कोई नहीं है। दोनों टॉप टियर टीम है लाइक यू नो इस टीआई में सबसे हाईएस्ट नंबर रखने वाले टीम। मैच में अभी तक लाइक बोरिंग वाला मैच लाइक कोई भी ये नहीं करना चाहते, टीआई में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। और फ्लाई को धो सकते हैं ये अफसर के सामने, अफसर बस सेकंड स्किल नहीं है बट फ्लाई बच के निकल गया, बट काफ़ी अच्छे डैमेज दे पाएगा, मौत नहीं होगी विंटर रेवन की। लाइक फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वीवर ऐसे कोर, लाइक अदरवाइज मैं टीआई में जब भी वीवर देखा ऐसे सपोर्ट ही देखा पोजीशन 4। टाइम अगर होता तो मैं पूछना चाहता था वीवर लाइक पोजीशन 4 कैसा है, तो वोटेड और नॉट। ये ऑप्शन ने रून सिक्योर करते हुए ये के लिए ठीक है, बस बॉटल में एक सिप है। ये का बूट भी आ चुका है, अभी तक बॉटल को खाया नहीं है। और मंकी दोबारा लायन के ऊपर, मंकी का और एक हिट हो जाएगा, जिंगल मास्टर चालू हो जाएगा, बट लायन ने काफी अच्छा स्टन किया। बॉडी ब्लॉक बाय पपी, यू आर a good body blocker, not a very good, like kill मिल जाता तो you are like awesome, excellent। दोबारा लायन का स्पाइक स्टन, बट इस बार ओह पपी का एक मटुम्बा में जिंगल मास्टर है, अगर लाइन दिख जाए तो वहीं पे उसको धड़ के उतार देगा। खत्म ना आगे पपी ऐसे लाइक पुल करेंगे इजीली, यू कैन सी इट। पपी ने छोटा पुल किया, या ये छोटा पुल बहुत इफेक्टिव है क्योंकि तुम अगर ऐसे रेंज क्रीप को मार दो ना, लाइक
ये शायद क्रीप तुम्हें लगेगा कि आगे है, बट आराम से वो पीछे आ जाएगा। और इसके साथ पपी स्टैक को देखते हुए लाइक यहाँ पे स्टैक बनाए दोस्तों, यहाँ पे स्टैक बनाए, आ जाओ किसी का मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, कहावत है। लायन पपी के पीछे और पपी के ऊपर ईमो भी हमला करने जाएंगे। ईमो के पास माना नहीं था बट माना आ चुका है। लगूना ब्लेड पपी को स्टन करने की कोशिश बट स्टन नहीं कर पाए। पपी सैक्रिफाइस हो चुके हैं बट यहाँ पे लूना नहीं बच पाएगा, सरवाइव नहीं है। आई थिंक इट्स ओवरटेड। लाइक पपी अभी मिड में आके इसका बॉटल रिफिल कर सकता है और जो करके देगा पपी या नहीं देगा। आई थिंक पपी रिफिल करेगा बॉटल। यस पपी इज कमिंग बैक। देयर इज लाइक बॉटल दे गया। तो कभी कभी मरना भी अच्छी बात है। लूना वापस आते हुए बट ये पे टी के पास इन दिस रोन है। टी काफी अच्छा किलर हो सकता है। यप सर। और लायन वर्सेस एल्डर टाइटन, लायन हार जाएगा, एल्डर टाइटन जीत जाएगा। यप सर बॉटम लेन में नहीं था इसीलिए बेंचफुल स्पीड को उसका कीमत चुकाना पड़ा। मिड में हम देख सकते हैं 3 जन का मिड में है ऑलरेडी। मंकी भी मिड पे आ चुका है। लायन का स्टन बट लायन मारे गए और इसके साथ मंकी का स्टन। लाइक टीम सीक्रेट इज ओनिंग आईजी। काफी अच्छा रोटेशन। टीम सीक्रेट अपना एक भी हीरो ना गवा के उनके 3 हीरो को धर दबोचा। तीन हीरो को जब तुम धर दबोच के ऐसे मार दोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ऐसे मिड टावर। आई थिंक मेरा देखा हुआ वन ऑफ द फास्टेस्ट लाइक टावर डिस्ट्रॉय, वो भी मिड में लाइक 7 मिनट के अंदर टावर डिस्ट्रॉय किया है। इट्स ह्यूज। और मटुम्बा मैंने अपना लेन चेंज करते हुए लाइक मुझे ये चीज समझ में नहीं आता लेन स्विच क्यों हो जाता है। काफी अच्छा स्टर्न विजुअल स्पीड की तरफ से फ्लाई पेड़ काट के एक जगह बनाने की कोशिश में और विजन में। ओ इनको विंटर वेवन दिख गया मंकी को। मंकी का और एक हिट चाहिए एंड विंटर वेवन। ओ मंकी पेड़ पे चढ़ा बट मंकी पेड़ से उतरा एंड देयर इज द हिट एंड स्टन एंड किल। वीवर को टीपी करके निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जन है, वो है वीवर और एल्डर टाइटन एंड मंकी किंग आ रहा है। लाइन ने वार्ड लगाया, सोचा कि वहाँ पे ऑब्जर्व वार्ड हो सकता है और मुझे लगता है वीवर के नॉट टिकट आ गया ऊपर जाने का। लाइक ऊपर के लिए नॉट ऊपर नहीं, उतना ऊपर नहीं जाना है। अगर वीवर लेन नहीं छोड़ा तो वीवर की लेन की धज्जियां उड़ जाएगी फार्मिंग की। बिकॉज विजुअल स्पीड एंड पपी एंचेंट्रेस लाइक बहुत अलग। इसके साथ मंकी आगे बढ़ते हुए मंकी के सामने वीवर लायन दिखते हुए और पीछे उनके दैट्स अ बैड स्टन बट कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज लाइक लायन गॉन। वीवर के ऊपर भी हमला फुल ऑन। ये कहाँ से आ गया? तो क्या कोई फायदा है उसका? ओ क्या बचा लिया यार लाइक। बोला था या मार्स इज लाइक हाँ मार ले मेरे को, मार ही दे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार दो। एंड लीना ही एकमात्र इस फाइट से सरवाइव किया क्योंकि लीना फाइट ज्वाइन नहीं किया। If you want to survive a fight in your real life, don't join the fight. That's the pro tip. Yes, मंकी को मिल गया 90 गोल्ड, बाकी टीम को 45 गोल्ड, हाफ गोल्ड मिलता है। एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं है 90 गोल्ड का 45 मिलता है, ऐसे ही फेंक दिया मैंने। और ये अफसर को इनविजिबिलिटी जोन मिलते हुए आराम से
ये अफसर हील कर रहा है, लाइक ये अफसर को इनविजिबिलिटी रूम में लगा, मतलब और एक किल कभी भी निकाल सकता है। कभी भी एक किल निकाल सकता है ये अफसर। तो मेरा पहला प्रेडिक्शन सही होते हुए हु इज गोइंग टू बाय फर्स्ट ब्लिंक डैगर, एंड मैंने बोला था निशा। निशा नहीं खरीद लिया। काफी अच्छा अल्टी था मंकी की तरफ से, एंड जाया का कॉम्बो। ओ इसका अल्टी मारने नहीं दिया वीवर का। जाया का स्वाइप एंड मंकी का अल्टी। मंकी तैयार हो गया, अल्टी मारना चालू भी कर दिया। जाया को बोला स्वाइप कर जल्दी से। Radiant's bottom tower is under attack. अंत करेगी दुनिया। एक मेरे लिए लगता है दोस्ती का मतलब एक गाना है, गाने में जो दोस्ती का होता है, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दूसरों के लिए दोस्ती का मतलब बहुत लोग हैं, लाइक सबके लिए नहीं, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में पर्सनली मीट किया है रियल लाइफ में, जिनका दोस्ती का मतलब ये है मैं इससे काम निकाल सकता हूँ क्या नहीं। Denied. दुनिया I love this song. These are like best friendship song. Don't mind if I do. Dire's top tower is not on top of things. आईजी का चमकना बंद हो गया, सीक्रेट कभी भी चमक रहा है। Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has risen well. Radiant bottom tower. भाई क्या स्टन मारा, लायन को तो ऐसे ही फाड़ दिया। वीवर के पीछे जा रहा है बट वीवर को नहीं फाड़ सकते। वेंचुअल स्पीड आगे बढ़ रहे हैं बट वेंचुअल स्पीड कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और इसी के साथ 3 सीक्रेट रोशन की तरफ ध्यान दे लिया। तो भागने दो साले को, पगोड़ों को भागने दो, रोशन निकाल लो चुपचाप। 10 सेकंड है, विंटर भी बन नहीं है, एंड 14 मिनट में बाई बैक कोई नहीं करता है। आई थिंक ये गेम पूरा टीम सीक्रेट का ही है, कंट्रोल में है पूरा टीम सीक्रेट के। और अगर हम परसेंटेज वाइज ग्राफ में बात करें लाइक 80-20, ये अफसर एक हिट मारेगा, खत्म। पटक बचक। ताली ताली, ये अफसर ताली। ओह नाइस टस्ट, लाइक Radiant's middle tower is under
ओ क्या रोका, विजफुल स्पीड आ रहा है, विजफुल स्पीड का स्टन गिर चुका है, अफसर का हिट गिरेगा एंड ओह दैट्स अ गुड अल्टी। अब दूर रहो, बोलो तब दूर रहो इधर से। ओह मंकी इधर लायन को मारते हुए एक हिट चाहिए, किल नहीं मिला। Radiant's top tower needs bandages. Radiant's top tower is getting walloped. ऐसे सॉन्ग अच्छे लगते हैं पुराने। Radiant's bottom tower. लाइन क्या ये क्या, हाँ टिया के लाइन तो 2 हिट में खत्म। लाइन अल्टी मारने का सोच रहा था बट काफी अच्छा स्टन। Radiant's bottom tower has uninvited guests. ओह क्या पकड़ा, मुझे लगा बच के निकल जाएगा लीना। पिट अप Dire's top tower isn't well at the moment. आ रहा है लाइक पप्पी भी आ रहा है, इधर ही भी है, गाय भी है। ओह ब्लिंक डैगर एंड टीपी। मंकी क्या करेगा, कूद के स्टन मारेगा, स्टन मार के कूदेगा, स्टन मार के कूदा। मंकी जानता है इसका पीछा करके कोई फायदा नहीं है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है यार, उसका स्टन भी यूज हो चुका है। तो मंकी बॉटम लेन पे टीपी कर लिया, बोला भागो इधर से, कुछ काम नहीं इधर। इधर ये है पप्पी है अकेला, नहीं पप्पी नहीं, इधर ये है, ये अफसर है एल्डर टाइटन पे, कर लेगा। ओ मैंने इस पैच में चेन पिक होते हुए नहीं देखा, आई थिंक बहुत ज़्यादा नर्फ हुआ होगा शायद। Radiant's bottom tower is under attack. Money to burn. Dire's top tower is not on top of things. Radiant has reinforced their structures. Radiant's bottom tower has uninvited guests. Dire's top tower isn't well at the moment. नहीं यूज करते मंकी अल्टी। Radiant's bottom tower is gone with the wind. Dire's top tower is not on top of things. Fierce and Dire have fortified their 3 मिनट के 3.5 मिनट के बाद मिनिमम रोशन रिस्पॉन हो सकता है, बट मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 6 मिनट बाद। 26 मिनट के अंदर रोशन, 25 मिनट के अंदर रोशन पक्का रिस्पॉन हो जाएगा। लिख के ले लो, लिख के ले लो। इसके साथ ही अफसर को देखते हुए 3 बंदे, अफसर के पास एक बहुत ही अच्छा स्टन करने का मौका था, बट मार्स ने आके स्टन रोक दिया। मंकी का अल्टी चालू हो गया, मंकी अल्टी में भी धो रहा है। ओह नाइस, मंकी का एजेस खत्म का टाइम है, सॉरी मंकी के पास नहीं, ये के पास एजेस था। If you want to survive a fight, then don't join a fight. Lina, written by Lina. सॉरी लीना नहीं, ईमो।
डीडी मतलब एक हिट में ही मरेगा लायन अभी। ज्यादा हो जाएगा 25 मिनट लाइक 24 मिनट या 25 मिनट लग जाएगा रोशन करने के लिए। अभी भी 4 मिनट ही बचा है। Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is getting walloped. Radiant's top tower is gone. भाई मंकी पेड़ के ऊपर मेरे को थोड़ा सा है ना ऑडियो लगाएगा। Yeah, right now to keep him alive against these heroes. Here comes a possible swap bottom. Yeah, again, they have the dust. Couple hits immediately over onto Fly. He's gonna have to time lapse away. He's gonna try to turn this around. Does have the Winter's Curse. Should be able to take down Poppy, but is going to pay for it with his life. And that's now a Winter's Curse that they don't have to worry about on the side of Secret. That's true, but any kill they can get right now with being this far behind in gold is going to give them a nice advantage. And that's 260 going to Winter Round, and now he's got a Blink Dagger. Oh, Emo, do you know what's lurking in the darkness? Oh, that's really scary. Look at him, he's just like, something's wrong, I don't want to be here anymore. Yeah, TA sits like that. She's prepping a double Gold Stripes. That's minus 16 armor on top of her Desolator. That's a lot. That's like one shot. Well, it's not gonna be one shot, but I guarantee Lena will die in 2 attacks from that. That's like if he gets within 600 units, which is quite a lot right now. Death if he doesn't use it in time. BKB picked up now. Lifeline. It's going to give him a little bit more survivability, but it is still very difficult, very dangerous, because he's got to make sure that he does not get stun locked before he's able to get off that BKB. And even then, it's not a game you want to buy BKB in my opinion. Like you can stop like Echo Stomp easier, but then Spirit Swap still goes, and you'll stop Monkey Stun, but like if Monkey just gets on top of him, he doesn't care. He's just gonna auto attack, slow him with Orb, slow him with Skull Basher, stun him with Skull Basher. But it's just it's an item he has to get game. There's too much at stake and it's too scary. Well, say though, you know, both of the cores over on the side of IG have been making, or not making space, finding the space. If you take a look at just what the net worth's looking, obviously we've got PA who's just been balling out of control, 14k, but everyone else is fairly close right behind, because they're finding these openings, but... बाहर चले गए थे। चलो अच्छा है। नहीं तो घर पे घर पे हक देता। हाँ, अभी वो थोड़ी ना अकेले बाहर जा पाएगा, छोटा तो है। क्या तुम्हारा डॉगी छोटा है? मार छोटा है। क्या मतलब नॉर्मल कुत्तों से तो छोटा है ना? पग ना? हाँ, मुझे लगा छोटा है मतलब बच्चा है, नया ले लिया कब मैं सोच रहा हूँ। नहीं। बट मर्स का अल्टी निकल गया और वहीं पे खत्म। कौन जीत रहा है? सीक्रेट ही दिख रहा है मेरे को तो। यस। क्या स्ट्रेटजी क्या है? कुछ नहीं, फाड़ दो डैमेज से। और कौन है इनमें से? वीवर हाँ वही लग रहा है। लाइक मुझे पहली बार देख रहा हूँ टीआई के मेन इवेंट पे वीवर ऐसे कोर, नहीं तो मैंने अब तक वीवर ऐसे पोजीशन 4 ही देखा है। नहीं वीवर अच्छा है, उसका बफ है वो। नहीं मैंने वीवर को ऐसे पोजीशन 4 ही देखा है अब तक। हो इसलिए 4 उठा है, ठीक है। उसको जरूरत पड़ने पर उसको कैरी भी खेला जा सकता है वैसे। उनको कुरियर मारता है, पता नहीं रखना मांगना, उनको पता नहीं लेना लगना मांगते कि कौन सा हम लोग खेल रहे। मतलब ऐसा हीरो यूजुअली सपोर्ट्स उठाते हैं जो ऑफलाइन भी खेल सकता है, सेफ लेन भी खेल सकता है, मिड भी खेल सकता है। तो उनके दिमाग में मतलब कंफ्यूजन रहेगा। अगर उनको पता है कि ये हीरो ये लोग सिर्फ यही पोजीशन के लिए खेलते हैं, तो फिर बाद में उसको वो काउंटर कर सकते हैं। इसका मतलब हुडूइंग उठा लो, मतलब फ्लेक्सिबल सब खेलता है हुडूइंग, सपोर्ट भी खेलता है, मिड भी जाता है, ऑफलाइन में भी जाता है, सेफ लेन भी। बैशर बनाया उसने तो और क्या बनाएगा? स्मोक करके जा रहे,
वो एक झटके में मार देता है ये इसको। ओ उसको रीजन दे दिया। क्या हील, क्या इम्बा हील दिया डूड। उसको अल्टी डाल नहीं दे रहे लगाया था तो मारने क्यों नहीं दिया? एल्डर टाइटन पपी खेल रहा है क्या? नहीं पपी वो खेल रहा है एन्चेंट्रेस। एल्डर टाइटन ये अफसर खेल रहा है। तुम्बा मैन अल्ट्रा किल। रैम्पेज नहीं हुआ। रैम्पेज क्या किल चाहिए अभी? देखो राई देखो फटाक से रेंज क्रिप को मिसाइल मार के पुश कर रहा है फटफट। बायबैक फोर्स कर रहे हैं लोग। मीनवाइल ये लोग दोनों निशा अकेले रॉड करेगा। निशा अकेले कर सकता है। वो आर्मर माइनस होते रहता ना मारते मारते। या वो अभी जाएगा। पप्पी थोड़ा टैंक करेगा। पप्पी को मारते मारते और रोशन तो ऐसा स्लो मोशन करेगा। पप्पी के पास बच्चा भी है। देखो 2 ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हो तुम एट द सेम टाइम। बस वो निकल के इसके निकाल रहा है। ये जरूरत नहीं है एक्चुअली। मंकी इज लाइक भाग इधर से, मैं खत्म कर दूंगा। अरे रे 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 नहीं फंसा मंकी में, नहीं फंसा। दस नहीं है रे। फाइट क्यों ले रहे हो? रोशन लिया ना इन लोगों ने और इनके पास रोशन लिया वो ठीक है बट इतना जल्दी फाइट। विंटर कस नहीं है। अरे मां कसम। अरे है बायबैक नहीं करेगा। कुछ फायदा नहीं है बायबैक करके अभी। तो बस अल्टी नहीं है। सैम का मां कसम। कैसे बचाएंगे? टीए को कैसे बचाएंगे? उसका जाना नहीं मांगता है। वो शहीद हो गया लगता है अफसर उसके लिए। ठीक है अच्छा था ट्रेड। नहीं अच्छा नहीं था। ट्रेड की जरूरत ही नहीं था। नहीं था जरूरत बट तो फिर भी मतलब क्या कर सकते हैं। हाथ घुसा दिया पता नहीं काय के लिए उसने स्वैप मारा। वहां पे निकल जाना मांगता था। कोई जरूरत ही नहीं था उस फाइट का। मुझे लगा विंटर कर्स नहीं होगा इसीलिए। लाइक विंटर कर्स का कम है इसलिए लोग चढ़ रहे हैं। मंकी को कैसे बस्ट करेंगे मैं वो समझ नहीं आया। ओह क्या मुंह के सामने से रीजनरेशन तोड़ा। ओह लायन मरा। 2 शॉट मैन। काका खल्लास वहीं पे। काका मामा चाचा सब खल्लास। 2 शॉट झुका ऐसे जमीन पर टच किया एक बार। जय धरती माँ का जय माँ। धरती मारता 2 बार सिर्फ टच किया खल्लास वहीं पे। नहीं ये गेम इनका नहीं है। आईजी का नहीं है। सीक्रेट का ही गेम है। यूजुअली मैं वो टेक्निक कुत्तों के सामने यूज करता हूँ। यहाँ पे जब मैं वॉक को लेकर जाता डॉगी को तो गली के कुत्ते आते हैं ना 2 बार ऐसे एक ही बार छूने का ऐसे बैक हो जाते सब। जमीन पे हाथ रखो सीधा बैक हो गया। क्या बैक हो गया वैसा। इसको मारा मंकी को दोबारा मार दिया। अरे रे 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 रे। वो देखो पपी मुंह के सामने टीपी मार रहा है। वो स्वैप करना वो भाई क्या डैमेज दे रहा है ये अफसर। अरे रे क्या माँ कसम। मतलब वो हथौड़ा से लेके मुंह पे मारा उसने। मेस बोलते हैं एक्चुअली उसको। हैमर नहीं बोलते। नहीं इसके पास हाथ है इसके पास हाथ है बड़ा हाथ है। पता है बाप रे। मतलब कितनी बार काम किया है कि हाथ इतना बड़ा हो गया। डेंजर है भाई वो। हाथ गाड़ी चला सिंगल है क्या? बाप रे सख्त लौंडा है भाई वो। ये फुल फॉर्म मतलब पूरा विकसित रूप है ये सख्त लौंडे का। मार मार के राइट हैंड देखो कितना बड़ा हो गया। जीजी बोल दिया भाई लोगों ने। रे रे रे
एल्डर टाइटन नर्फ होने वाला है बहुत। इसका फटका देखो कितना पावरफुल है। वो कैरी को मार रहा है, क्या बोलने का है? तुम स्ट्रीम करना बंद कर दिया क्या? नहीं चल रहा है मेरा, बीच में लैग हुआ था। ओके मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये एल्डर टाइटन का इतना फटका क्या बताए। टीम सीक्रेट बहुत डेंजरस है डूडी, ये मतलब ये तो पता नहीं ये लोग एटलीस्ट इसके सामने टिक भी पाएंगे कि नहीं। ओजी पूरी तैयारी के साथ आए। तुम सोचो इन्विक्टस गेमिंग, आई थिंक उनका मतलब विन रेशियो अच्छा था ना? हाँ उनका सबसे ज्यादा है, मतलब ग्रुप स्टेज में। ज्यादा है। मैं कहाँ पे मैंने देखा था, वो दिख रहा नहीं है वो चीज। वो उधर है तुम्हारा स्टेडिया वॉच में जो ये है ना, शेड्यूल नहीं उसका स्टैंडिंग पे ग्रुप स्टेज पे देखो आईजी का 14 है ग्रुप स्टेज 14-2 है डूड। और सीक्रेट और टीम सीक्रेट भी कम नहीं है, मतलब एलजीडी के नीचे ही है वो। बड़ो थोड़ा सा बहुत कम है। डेंजर मतलब खतरनाक है यूरोपियन टीम। ये 3 होंगे तो साला फाड़ देता है। पप्पी एक्चुअली अच्छे से पढ़ाई करके आया लगता है ईजी की। पप्पी का ऐसे भी इनका टीआई के बाद ही तो इनका सीक्रेट का जोश बढ़ जाता है। अरे साला ही ट्राई कर रहे हो क्या? नहीं मैं देख रहा हूँ कितना डैमेज होता है। के थ्रू भी लेके जाओ। हाँ उल गया ऊपर। हाँ ले बुलाओ अभी। आई थिंक इसका एग्नम सेप्टर चाहिए होता है। लाइक जितना ज्यादा हीरो है उतना ज्यादा डैमेज, ये इसका कॉन्सेप्ट, ये तो मेरे को मालूम है। और क्या होता है कि उसके सेकंड से तुम मैग्नम से बीकेबी होके आ सकते हो, ऐसा कुछ तो है। इसका लेवल 2 का ही है, लेवल 2 का ही मतलब 160 बोनस डैमेज दे रहा है, 170। बिकम एथरल स्पिरिट टू बिकम सेलिव। वो बीकेबी देता है, जितना हीरो के ऊपर जाएगा उतना हर एक हीरो के ऊपर 2 सेकंड का। अरे मैग्नम सेप्टर से मतलब बहुत पावरफुल है। ओके तुम एक बार उसका शार्ट डालो। शार्ट डालने से उसका फर्स्ट किल तो ऑटो कास्ट लाइक फर्स्ट किल लेना पड़ेगा तुमको उसके लिए। हाँ वो शार्ट के लिए फर्स्ट किल। फर्स्ट किल से उतना ज्यादा खेलते नहीं है। क्या बात करते हो तुम? मतलब लोग फर्स्ट किल मतलब डायरेक्ट वो सेकंड्स किल यूज कर गए। अरे हमको आके कैसा ठोकता है एल्डर टाइटन ऑफलेन। तुम्हारे गेम में एल्डर टाइटन ऑफलेन आता है? ऐसा नहीं, ऑटो कास्ट पे डालना मांगता, राइट क्लिक करो उसको। राइट क्लिक को ऑटो कास्ट में क्यों? मैं सेकंड स्किल डाल के फर्स्ट किल डाल सकता हूँ। नहीं मैं बोलता था वो राइट क्लिक करो क्यू को। ओह मतलब इस स्पेल के लिए? हाँ किया। और अभी वो 3 एक्स रुके हैं ना, हाँ उन पे स्पिरिट लेके जाओ और वो स्पिरिट से स्टॉम्प करो। मतलब स्पिरिट लेके क्यों दबाना है क्या? हाँ मतलब ऑटो कास्ट पे डाल दिया ना। मैं मतलब वहाँ पे ट्रांसफर हो जाऊंगा। वाओ सीरियसली नहीं पता था। नहीं मेरे को ये नहीं मालूम हमारे मारते क्या करने का वहाँ पे, मेरे को बताओ क्या करने का? मरने का, सीधा मरना पड़ता है वहाँ पे हमको तो। मतलब इको सेवर बनाता है, उनके पास कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे मतलब। हाँ इको सेवर ठीक है, इको सेवर बनाने का 2 फटका मारता है, भागने का उसके पास मूवमेंट स्पीड भी रहता है। मतलब वो मूवमेंट स्पीड का तुम और टैलेंट लोगे ठीक है। वो फेस बूट्स बना के मूवमेंट स्पीड याशा बेशा बना के लेके आता हो, दे दनादन देता हो। क्या करने का उस टाइम पे? मतलब मैं तो ब्लिंक डैगर की जरूरत नहीं, मैं मैग्नम शॉट भी जा सकता हूँ। हाँ एंड ऊपर से अल्टी का भी ये मतलब मस्त सीन है। मतलब इसका थर्ड स्किल जितना क्लोज जाओगे उतना लाइक उसका कम हो जाएगा, बेस आर्मर बेस मैजिक रेजिस्टेंस। और इसका एग्नम हुआ तो मतलब बीके भी वही पे मुंह पे।
Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. या लोगों ने बैट लाइक इसके इधर 100% क्लिप भी है 20 लेवल पे, समझ रहे हो सैम? बैटल फ्री भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब लेन को जो डिफेंड कर सकता है। भाई सीरियसली 450 डैमेज होगा लाइक 25 लेवल पे। नहीं नहीं भाई, डेंजर है। तुम समझ रहे हो 100% क्लियर समझ रहे हो तुम उसका मतलब क्या है? हाँ Dominating, I guess. Impossible kill. इसपे क्या सा एक फेसबुक जाते हैं, हाँ डिपेंड कर देता हूँ कैसे खेल रहा हो। फेसबुक फिर इको सेवर, ठीक है। उसके बाद यूजुअली कैसा रहता है कि इसको फटफट मारने का टाइप ऐसे कुछ तो बनाने का रहता है। मैं फटाफट मारूंगा ऐसा टाइप। तुमको पकड़ने को आना मांगता है उसको, तो फिर बैशर ठीक है। और वो एक कप डैमेज थ्रेशोल्ड ये कौन सा है? मतलब वो एक कप के टाइम पे जो डैमेज देगा, ओ मतलब वो डैमेज बढ़ जाएगा, मार ज़्यादा खाएगा वो एक कप से पहले। ओके अब समझा। That was unreal. More than 2 kills, but less than 4 kills. मतलब 100% क्लिप शायद उसके पास था, तुम्हारा डूम के पास, उसको भी हटा दिया गया था। ये क्लिप हटने वाला है इसके ऊपर से। इसका लाइक नॉर्मल गाइड में दिखा रहा है फेसबुक, एको सेबर, एग्नम सेप्टर, एग्नम शार्ट एंड लाइक अगर एक्सट्रीमिस्ट जाओगे तब लाइक बीके मून शार्ट, बीकेवी, सैटनिक, एसएल क्यूरियस, डेडलस एंड सिल्वर एज। अभी तो सिल्वर एज भी ओवर बफ्ड है, लाइक सिल्वर एज इसके पास हुआ तो मतलब फाड़ ही देगा। कुछ नहीं कर पा रहे थे हम लोग के सामने जब था। पहले तो आउट ड्राफ्ट हो गए तुमसे तुम्हारे से, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था ऐसे चीज का। Has been their most successful playstyle, but I also want to add to the फिर comment लाइक point. ये I think इतना secret धोता भी giving है। away all the comfort heroes sometimes also backfires. I think this is like the trade-off with the way that Team Secret drafts. It's sometimes like, you know, they're going to give you everything you want, and that's precisely what you need in order to win too. So I wouldn't be surprised if, you know, they probably tries the same thing, but it doesn't work out as well in game. There was that meta specific. ये हीरो नर्फ होने वाला है, बहुत ज्यादा नर्फ होगा। 500 डूड, 5 हीरो को छू के आया तो 500 600 डैमेज प्लस है, वो भी 600 डैमेज प्लस। हाँ तुम समझ रहे हो? और इसके मतलब किसी को जब मारने जाएगा उसके ऊपर कोई आर्मर वार्मर नहीं रहता है, जीरो हो जाता है आर्मर एंड फिजिकल रेजिस्टेंस। 100% ये गायब कर देता है आर्मर, मतलब फिजिकल हिट इसका मतलब पूरा लगेगा। मेरे पास एक भी आइटम नहीं है, सिर्फ मैंने शार्ड खाया है और एग्नम खाया है, और मैंने 5 हीरो के बीच में उसको घुमाया स्पिरिट को और वापस आया स्पिरिट 500 डैमेज प्लस। ओ लॉर्ड, मतलब 2 फटके, मतलब हम लोग वही क्या हो रहा था पता है, वो स्लिप कर रहा था, तो स्लिप में हमको 2 फटके में मार रहा था हमको। क्या करने का? good game plan, and then बाजू में also, खड़े ही नहीं रह सकते। तुम सोचो अगर मीपो आया तो आई थिंक टॉपसन बीच में कर रहा था वैसे, मीपो से इसको मार रहा था। मिप्पो से नहीं, इससे मिप्पो को धो रहा था। इससे मीपो को धो रहा था। And it feels completely in their comfort zone, but everything does. वो मैं एक चीज मानता हूँ, टॉपसन को गेम देखने का नजरिया कुछ अलग है, इसलिए वो टॉप 1 है यूरोप में। They banned out Ollie, something that I thought was very interesting. And when we listened to the interview with Kakia before the series, he's mentioned like one of the reasons we struggled. गेम को पूरे अलग नजरिए से ही देखता हूँ, वो कुछ दूसरा लेवल पे हो। तुम्हें क्या लगता है ये पोजीशन 5 बन सकता है तुम्हारे लिस्ट में, इल्डर टाइटन? Such a big deal to the team. It's mostly been viewed as like Actually, the least important role or something like that. So
they targeted him with all the first 3 bans. अभी We तक had तो जरूरत Phoenix नहीं with पड़ी है मेरे को followed सच up by बोलूं Bait. तो, क्योंकि And उसको फार्म when लगता I है think dude. Okaka, I mean, वो sorry, when I पुल think ऑफ करने तुम के लाइक लिए वैसा नहीं heroes, खेलोगे like, कि this लाइक यू नो immediately वन comes to हिट mind. वन So पंच मैन, I तुम think लाइक it was an पोजीशन interesting 5 approach to go खेलोगे. back to game 1, and I नहीं, think वो maybe वन that हिट caught वन पंच मैन होता है, वो IGN सपोर्ट्स को off निकाल देता है 2 हाँ फटके तो में. ऐसे ही निकाल देता है. मतलब ऐसे तुमको एग्नम सिफ्टर ये सब एको से ना जाके तुम नॉर्मल आइटम जाओगे, लाइक शार्ट जा सकते हो. नहीं, मैंने शार्ट देखा, आई थिंक शार्ट इज अ ओपी. शार्ड एक्चुअली उसको सिर्फ बीकेबी पियर्सिंग करता है ना. या लाइक दैट ना, शार्ड इज ओपी क्योंकि कोई भी शार्ड नहीं है जो ऐसे मतलब तुमको एक ब्लिंक का रेंज दे, कास्ट रेंज दे दे. When it comes to IG, I don't think it matters that much. These guys came from being 0-2 ओके, at the एग्नम grand उसका बीकेबी finals. पियर्सिंग करता This है, is still मतलब upper शार्ड bracket. उसको They're ब्लिंक in a करवा fine देता है, state. राइट? यस, एग्नम उसको बीकेबी दे देता है. मतलब जितने भी हीरो का लगा 2 इसलिए सेकंड का. लोग उसको रॉड ऑफ एटॉस ऐसे ही बनाता है. गेम में पपी ने क्या बनाया था, आइटम क्या था पपी का? आइटम क्या था मेरे को नहीं थे, मैं पपी नहीं खेल रहा था ना, वो अफसर खेल रहा था. ये अफसर क्या बनाया था फिर? बता देता हूँ. ये अफसर बनाया था, एग्नम ही जा रहा था. बूट ही बनाया है. एक बूट बनाया, फिर एग्नम जाने की कोशिश कर रहा था. एग्नम जा रहा था ना? यस, एग्नम जाते हैं लोग. एग्नम की तरफ जा रहा था. हाँ, ठीक है, वो मतलब वहां से निकल सकता है बेसिकली. नहीं, वो और भी ज्यादा टैंक की मतलब फटका मार सकता है ना. सेकंड्स की अगर मतलब डाल दिया, एग्नम मिल गया तो तुम एग्रेसिव हो सकते हो. टीपी भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में हो. मुझे लगता है नेक्स्ट बैच में एग्नम शॉट बफ होगा, सिल्वर एज नर्फ होगा, क्योंकि एग्नम शॉट को आगे लाया जाएगा टाइम के. We'll see. I don't think IG's out of this Sam? series yet. Do you think that the miracle might be तुम्हें like क्या लगता है? a pocket hero? Cheese strat maybe? Maybe some क्योंकि एग्नम शॉट इज लाइक गेम चेंजर है. IG? I doubt it. I Maybe don't the think pocket Ember Spirit. I don't think that they're feeling that Elder low Titan, to resort to some meepos or brews. एल्डर टाइटन को बीकेबी, अगर एल्डर टाइटन फर्स्ट पिक हो रहा है, राइट, तो तुम उसको बीकेबी पियर्सिंग स्पेल से काउंटर कर सकते हो, जैसे कि मतलब पीएस का रप्चर एंड ऑल दोस थिंग्स है. बट उतना फायदा नहीं है. तुम एक पोजीशन 5 के लिए इतना इन्वेस्ट करोगे क्या? Would make the game so much different. वो तो है. अगर मैं रप्चर सीओ डाल दूंगा तो मेन कैरी को क्या करूंगा मैं? Very many things that IG can do to really change it up. That's what I'm getting from this, but मतलब एल्डर टाइटन जब क्लोज आ जाता है तो लाइक तुम्हारे पास मैजिक आर्मर भी नहीं रहता पर है. याप्सर ने शार्ड बना था क्या फिर? ना, more dominant laning. तो क्या उसने लास्ट तक कुछ बनाया नहीं, मतलब कुछ नहीं बनाया, ऐसे ही मार रहा And था. this time around he was playing Winter Wyvern, which in theory had a good matchup, right? You were playing as Monkey King, you were playing as TA. नहीं, मैंने you were शार्ड playing as कभी Venge. मतलब There was किसी a को lot of बनाते हुए physical नहीं damage देखा अब coming तक. in from This is a Secret. new thing. But I think they just weren't able to set up the game plan. क्योंकि the way that शार्ड they were playing for all कुछ these, like, इन्वेस्टमेंट नहीं enabling देता, fly fly वैल्यू to फॉर get us to मनी good नहीं start. है. या वो ये कोर के शार्ड लिए, just- कोर के लिए, वो And for सपोर्ट के नहीं, लिए. शार्ड एक्चुअली maybe लग्जरी slightly shifting आइटम their है, game plan a little bit क्योंकि more to what we've seen them play. अगर तुम earlier एग्नम in जाओगे series तो and एटलीस्ट get तुमको pressure तेरा from They do 10 make the स्ट्रेंथ game ऐसे easier से for कुछ you, right? तो On one मिलता है. side you had this Yeah. Winter Wyvern. बट But शार्ड you बिना had एग्नम के आई Enchantress थिंक plus उसके ऊपर Elder अच्छा नहीं Titan. उतना. Enchantress and Elder Titan, they'll pretty much dominate on any single lane. लाइक तुम्हारे पास वो एग्नम सेप्टर आ गया, मतलब तुम सेकंड्स के लिए मार के. डिपेंड करता है. अगर तुम अंदर पहुंच नहीं पा रहे हो, या तब बट शार्ड. आई थिंक शार्ड इज फॉर ऑफलेन, शार्ड इज नॉट फॉर सपोर्ट. सपोर्ट. आई थिंक एग्नम जाएगा तो ओके, उसने एक स्टॉम्प मारा, नजदीक गया, कोई तुम्हारे तरफ आ रहा है मारने के लिए तुमको, तो कैरी मतलब थोड़ा एक शॉट देता है तो तुम ऐसा फटका देता हो कि कैरी का मतलब दिमाग हिल जाता है वैसे. या बहुत डैमेज देता है. पर प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एल्डर टाइटन को तुमने स्कूप किया ना, मतलब गैंग किया, या फिर पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है शायद से, इसकी वजह से वो याप्सर खेल रहा था मेरे हिसाब से, क्योंकि तुमको मेक श्योर करना है कि तुम्हारा स्पिरिट सबके थ्रू जाए, मतलब वो घूम के वो रिक्वायरमेंट फुल होने के बाद ही तो वो फाइट ले सकता है, रादर देन मतलब दिख गया डाल दिया एक स्पिरिट और लिया, नहीं वैसा नहीं रहता वो. उसको मतलब को वापस भी आना है, जाना भी है, वापस भी आना है. मतलब वो ये थोड़ा सा तुम्हारा उसकी तरह डबल हीरो कंट्रोल है, डबल हीरो.
वो मतलब पूरा रिक्वायरमेंट फुल करना पड़ता है उसको, 4 हीरोज को छू के फिर वापस आके फिर वो उससे मारता है, तो वो थोड़ा रिस्की टाइप का है। अगर तुमको कोई गैंग कर रहा है तो ये कुछ कर नहीं सकता, बट अगर तुमको किसी को गैंग करना है, मतलब हाई ग्राउंड पे लोग हैं, तुम हाई ग्राउंड पुश कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुमको पता है कि सब वहीं पे रुके, तो तुम वो स्पिरिट डाल के तुम आई थिंक छू सकते हो। एल्डर टाइटन हाई ग्राउंड पुशर में काउंट होगा। एल्डर टाइटन को काउंटर करने के लिए मेरे को लगता है रैड डोटा ही काम आएगा। यस, लाइक हाई क्योंकि नहीं, रैड एल्डर डोटा काम नहीं टाइटन आएगा क्योंकि एल्डर टाइटन के पास 100% क्लीव है। नहीं, पर वो कितना शॉट मारेगा, मतलब तुम समझ रहे हो क्या? एल्डर टाइटन इज स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर ग्रुपिंग टुगेदर, या मतलब तुम्हारा दुश्मन सब साथ में चिपके पड़े तो एल्डर टाइटन स्ट्रॉन्ग है, बट अगर सब बिखरे बिखरे है, सब रैड डोटा कर रहे, वो सब कोई अलग है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? या ओके, बोल सकते मतलब तो वैसा है, मैं वैसा बोल रहा हूँ उसको, हैं। मतलब मतलब सामने अकेले इनडायरेक्टली 1v1 करो एल्डर टाइटन के उसको साथ। इनडायरेक्टली काउंटर करो रादर देन डायरेक्टली काउंटर करने से, मतलब डायरेक्टली फेस करने से अच्छा इनडायरेक्टली तुम फेस करो उसको। अब एल्डर टाइटन के सबसे ज्यादा मतलब पसंदीदा हीरो अगर कोई होगा तो डार्क सीरर ही होगा। अगर एल्डर टाइटन अकेले है, ठीक है, और शायद से इसलिए उन्होंने वीवर लिया क्योंकि एल्डर टाइटन और वीवर वो भाग सकता है, ऐसा कुछ तो है, उसको हाँ, इग्नोर कर सकता है, या हम लोग को उसके लिए हेलबर्ड बनाना पड़ा डूडो एल्डर टाइटन के लिए, इतना चलो फिर तकलीफ से दे रहा पिक था हो गया, हमें। आईजी ने एल्डर टाइटन ले लिया। क्या एल्डर टाइटन उनको बहुत पता ज्यादा। है? 10 seconds remaining. अगर एल्डर टाइटन नर्फ नहीं होता है नेक्स्ट पैच में तो एल्डर टाइटन काफी अच्छा पोजीशन 5 होगा, पोजीशन 5 एंड पोजीशन 4 फ्यूचर में, लाइक उनके तुम्हारे ब्रैकेट में स्ट्रीमिंग होगा वाह। इलेक्ट्राइटन ना मेरे इसमें आया था, लाइक ऑफलाइन में आया था, मैं पर पोजीशन हमको उसको डील करने के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब अगर तुम इलेक्ट्राइटन को लेट गेम जाने देते हो ना तो प्रॉब्लम करता है वो, या बट बट इलेक्ट्राइटन अगर वही इलेक्ट्राइटन को तुम पोजिशनिंग करने के लिए टाइम देगा, अभी देखेंगे इलेक्ट्राइटन को कैसे वो लोग काउंटर करते हैं, वो देखना पड़ेगा अभी। ये वो अच्छा सीखने का टाइम है, क्योंकि कल है ना पपी पप्पी मतलब टीम सीक्रेट अगर जीत गया तो मेरे को समझ जाएगा कि एल्डर टाइटन को कैसे वो लोग काउंटर करते हैं। उन्होंने अर्चे कर लिया, अर्चे कर लेके क्या करेंगे? आई थिंक मॉर्फ पिक करने की कोशिश करेंगे, तो आईजी को मॉर्फ मालूम है 5 seconds और बैंड हो जाएगा। remaining. Dire team pick. Enchantress. एन्चेंट्रेस एन्चेंट्रेस अच्छा है एल्डर टाइटन के खिलाफ, क्यों? मार नहीं वो सकता। हील होते रहता है। हील नहीं, होते पर वो नहीं बीकेबी पियर्सिंग बीकेबी डालकर तुम एन्चेंट्रेस को धो सकते हो, बीकेबी नहीं रहेगा तो ही एन्चेंट्रेस को नहीं मार सकते। या स्लो, मतलब उसको एग्नम शिफ्टर चाहिए 10 चाहिए। seconds remaining. पहले एल्डर टाइटन का था क्या था, एग्नम शिफ्टर से उसका जो 5 फर्स्ट हाँ, स्किल था ना अब उसमें बीकेबी ऑन हो जाता था। अभी सपोज लेट्स से उसने 4 लोगों को ऐसा मारा, 4 लोगों का स्पिरिट लिया, ठीक है, और वो एन्चेंट्रेस को मारने आएगा तो स्लो मोशन हो जाएगा, क्योंकि एल्डर टाइटन ये अटैक स्पीड आइटम्स नहीं बनाता ना, तो ज्यादा से समझ ज्यादा में आ इको रहा है सेवर क्या? ही बनाता है। राइट, और मेरे को लगता है तुम्हारा वो सेकंड पर्जेबल है, एन्चेंट उसको पर्ज भी कर सकती है मेरे को लगता है, क्योंकि उसका सेकंड पर्ज है, राइट? Dire मुझे नहीं team लगता। banned. Lion. देखो मैं एक बार देखता हूँ। देख लो, मुझे लगता है लाइक सेकंड स्किल लाइक एल्डर टाइटन के पास एग्नम आ जाएगा तो बीकेबी ऑन हो जाएगा। क्या? लाइक अगर एल्डर टाइटन ने एग्नम बना लिया तो बीकेबी 10 आ गया। seconds remaining. एग्नम बना लिया तो बीके भी आ गया, हाँ वो है, बट तुम पोजीशन 5 को बीके भी बनाओगे क्या फिर? नहीं, मैं एग्नम बोलने आ बना रहा लिया हूँ। ना, एल्डर टाइटन एग्नम बनाएगा, बीकेबी थोड़ी ना बनाएगा। एग्नम मतलब ही तो बीकेबी हो गया ना। 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. लायन का मेरा एग्नम शॉट सबसे अच्छा लगता है, लायन का एग्नम शॉट लाइक लिटरली उसका काउंटर है पीएल का, जानते हो सैम? एक मिनट हाँ।
अभी तक ये बैंड नहीं हुआ मॉर्फ। टीम सीक्रेट का ही फर्स्ट पिक है तो टीम सीक्रेट कोशिश करेगा मॉर्फ को ना बैंड करने का। निकल गया। निकल जाता है। हाँ, सही है। पर्ज हो जाता है उसके सेकंड से। चलो इसका मतलब एन्चेंटर का एल्डर टाइटन सेकंड हुआ है, बेसिक एग्नम जैसे। सेप्टर चाहिए ही होगा। क्या? एग्नम सेप्टर चाहिए ही होगा इसको अगर सरवाइव करना है। अगर वो स्पिरिट को लेके आएगा मारने के लिए, उसके ऊपर ये डाल दिया, एक सेकंड स्किल डाल दिया एन्चेंट्रेस का, हाँ। तो वहीं पे खत्म है उसका कहानी, तो सादा हो स्प्रीड जाएगा। स्प्रीड ही गायब हो जाता है क्या उसका? ये गायब हो वो जाता है उसका बोनस डैमेज गायब हो जाता है। हाँ तो बट अगर इसके पास एल्डर टाइटन के पास एग्नम सेप्टर है तो नहीं होगा ना। तो कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स, तो यार अभी नहीं कर सकते। पर जब तो तुम सोचो ना, तब तक एग्नम चैप्टर बनाने तक मतलब तो उनको आई टाइम थिंक मिल एल्डर जाएगा। टाइटन के खिलाफ सबसे अच्छा काउंटर अगर कोई होगा तो ओराकेल होगा। तब तक वो फोर्स्टा या ऐसे कुछ तो बना सकते हैं। और नहीं ओराकेल उसको देखते क्या। मतलब सेकंड स्किल मार के एल्डर टाइटन को डिसेबल कर सकता है, डिजार्म कर सकता है। देखो, लायन इंस्टा हेक्स के लिए, लॉक के लिए, हाँ एल्डर टाइटन फॉलो अप स्टन के लिए, समझ में यस। आ रहा है क्या? आई थिंक ईएस इनके इनके सिचुएशन में ईएस इंस्टा स्टन के लिए, और देखते अभी तक इंस्टा अभी लॉक बोल नहीं कौन। सकते क्योंकि ये कभी कभी ये भी खेलता है तुम्हारा लाइक पोजीशन 3 पोजीशन 4 नहीं है, 4 और 3 में कंफ्यूजन है ये इसका। अगर पोजीशन 4 खेलता है तो या इंस्टा स्टन, और पोजीशन 3 खेलता है तो फॉलो अप से वो फॉलो अप भी नहीं बोल सकते, इंस्टा ही है, दोनों साइड पे इंस्टा ही है। इन्होंने मॉर बैंड कर दिया क्योंकि इनका पिक फर्स्ट है टीम सीक्रेट का। फालतू गाना लगा रहा है। Radiant team ban. बेंच बैन कर दिया मेरे हिसाब से। लास्ट गेम में विंच ने धोया इसीलिए। 10 seconds remaining. 5 seconds ये remaining. लोग क्या उठाने वाले मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। Radiant team आई थिंक उनको एलसी एलसी करना चाहिए टीम सीक्रेट को। हाँ, नहीं क्योंकि एलसीओ खुद भी उठा सकते हैं ना वो लोग। हाँ, अभी खुद उठा सकते हैं लोग एलसी। नहीं, पप्पी अगर लेट्स से पप्पी अगर एन्चेंट्रेस खेलता है, रैप्स और ईएस खेलता है, तो आई थिंक एलसी अगर उसको दिया गया, बट एलसी एन्चेंट्रेस को कैसे ड्यूल करेगा? बट मैं क्या बोल रहा था कि ऑफलेन एल्डर टाइटन और एलसी अगर पोजीशन 5 भी होता है, वो आके सेकंड स्किल डालेगा शार्ड लेने के बाद एल्डर टाइटन को, तो फिर वो पर्ज नहीं कर पाएगा एटलीस्ट। ऐसा सोच रहा हूँ, मतलब फ्री उतना बीकेबी है ना, और उसको अटैक स्पीड भी मिल रहा है। और हाँ बट एल्डर टाइटन पोजीशन 5 है। क्या दिमाग लगाया डूड, देखा तुमने? क्योंकि एल्डर टाइटन मिस करेगा अभी। यस ओ मतलब क्या बोलते हैं, टीम सी के पप्पी का दिमाग एक नंबर है, मेरे को सोचा नहीं था मतलब। फिजिकल के लिए सब कुछ को उसने मतलब सोच लिया है मतलब। वाओ पटाखे फूट रहे। अब क्या करेगा? आई थिंक सामने वाला अगर एलसी पे उठाता है उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है टीम सीक्रेट को। अगर एलसी ने दोनों में से किसी को मिस कर दिया, अच्छेकर और एन्चेंट्रेस को, अच्छेकर को मिस कर दिया कभी भी डुएल पे तो रोक लेगा, एंड विंड रेंजर को भी नेक्रो भी अच्छा है, नेक्रो बैन करना चाहिए, नेक्रो भी अच्छा है एक्चुअली। नेक्रो बैन होगा इसके बाद। नेक्रो बैन होगा ही होगा क्योंकि नेक्रो भी एन्चेंट्रेस अच्छा विंड है। रेंजर इनके खिलाफ नेक्रो बहुत अच्छा है। नेक्रो और और कौन सा है? Dire team pick. मार्स, नेक्रो मार्स।
स्पीक हो क्या गया। बोलते ओ, उन्होंने दिमाग लगाया, मैं बोला है मार्स, क्योंकि उनको उनको मार्स नहीं देने का था उनको, इसलिए उन्होंने मार्स उठाया। ये मार्स एल्डर टाइटन को कुछ नहीं कर सकता डूड, मतलब उसका डैमेज फुल जाए। स्पेक्टर स्पेक्टर उठाया। हाँ स्पेक्टर अच्छा है, लाइक स्पेक्टर लिटरली 1000 मैजिकल डैमेज दे सकता है अगर उसका एग्नम सेप्टर आ जाए। लाइक उसका डैगर डबल डैगर गिरता है, समझ रहे हो? वो तो शार्ड पे गिरता ना। नहीं नहीं, शार्ड पे उसका एग्नम सेप्टर पे ही डैगर गिर जाता है जिसके ऊपर ये होता है, आई थिंक सो। नहीं शार्ड पे होता वो एग्नम पे शाउट स्टेप मिलता है उसको। नेक्रो है उनके पास, और अभी मार्च चला गया, नेक्रो है उनके पास। ये देखो और एग्नम सेप्टर पे क्या मिलता है, सिंगल यूनिट हंट एंड कास्ट स्पेक्टर डैगर ऑन दैट टारगेट, एक डैगर मार देता है और तुम्हारा डैगर पावरफुल है, लाइक 240 डैमेज है और उसको टैलेंट ट्री में भी बोनस डैमेज मिलता है, लाइक 300 हो सकता है लाइक 15 लेवल पे, तो इसीलिए स्पेक्टर का वो अभी एग्नम उनको सेप्टर। कैरी उठाना है राइट, सिर्फ कैरी उठाना है करेक्ट। मैंने लाइफ स्टीलर उठा लिया। लाइफ स्टीलर उठाएगा। हाँ टीम सीक्रेट है। वो बैश करेगा ऐसा कुछ है क्या? वो लाइफ स्टीलर मार्स मतलब के वो खिलाफ एल्डर एंड टाइटन, एल्डर टाइटन जब सेकंड स्टॉर्म मारेगा तो लाइफ स्टीलर के पास एटलीस्ट बचने के लिए तो फर्स्ट या किल लाइक नहीं मार होता एल्डर है। टाइटन से भी बच सकता है, सब मार्स से भी, बीकेबी को काउंटर करने टाइप लिए उन्होंने हीरो। मार्स से भी बच बहुत पप्पी सकता कॉक है, है। स्पेक्टर से भी बच सकता है लाइफ स्टीलर। तो बस बीके भी है ना, मिल्ड फ्री बीके भी, लाइक वो अगर एक जाता। और, अभी कौन सा पोजीशन बाकी है अभी? ऑफलेन राइट। डिपेंड करता है, ऑफलेन में शायद से टीम सीक्रेट का बता नहीं एब, सकते। नेक्रो बैन किया है देखो। या भाई मेरे नेक्रो पास है दिमाग में, सोच नेक्रो मैं बैन बोल होगा रहा ही होगा, मैं था। बोला ना नेक्रो बैन होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनको नेक्रो देने का नहीं है, क्योंकि नेक्रो ये लाइनअप को काउंटर करता है डूड। कौन से, टीम इसलिए सीक्रेट का या आईजी का? आईजी का। हाँ तो टीम सीक्रेट आईजी ने अभी बैन की। मेरे को लगता है इनको जाना चाहिए। आई थिंक मिड आएगा टीम आ, सीक्रेट का, एन्चेंट्रेस आ, पोजीशन 5 खेलेगा एंड विंड रेंजर पोजीशन। अभी अभी ओके पक अभी मिड है ना। हाँ मैं अभी इनका बैंड है, उसके बाद मिड पिक है। मिड में साइलेंसर भी ठीक है, नहीं यार वो बट बहुत नहीं बकवास साइलेंसर हो नहीं, जाएगा। थोड़ा बहुत रोटेटिंग हीरोज चाहिए। पैंगो नहीं तो आई थिंक वो डॉन बेकर मिड अच्छा है लाइनअप के खिलाफ, एल्डर टाइटन लाए, आर्ट्स स्पेक्टर। उन्होंने स्टॉर्म बैंड किया टीम सीक्रेट ने, इन्होंने कुंका कुंका उठाया। उठाया। कुंका उठाया तो मेरे हिसाब से मैं मैं वही हील, बोल रहा हूँ, पैंगो ही मेरे को लग रहा है, पैंगो अच्छा है कि सच बोलूँ तो। पर बैंको खेलता है पैंगो क्या ये निशा? मेरे को नहीं पता। पैंगो अच्छा है, और इवन आई वुड से विंटर मिड भी किया तो भी ठीक है सच बोलूँ तो। विंटर का मतलब इन गेम में किल नहीं निकाल सकता विंटर किसी को मार के, क्या लाइक बात कर रहे हो? ऑर्किड डाल के अल्टी डाला तो मार जाता है सीधा। ऑर्किड मतलब मिड विंटर बोल रहे हो ना, मुझे लगा विंटर की बात करो। देखते क्या उठाया, टेम्पलर असैसिन। हाँ डी वो भी अच्छा है उसका ना, कोंगा का वो फर्स्ट किल को मतलब थर्ड स्किल को डॉज कर, सेकंड किल वो शॉट को डॉज कर सकता है, टी है सही विकेट ही है। ये अफसर पोजीशन विंड रेंजर पोजीशन 4 है एंड लाइक आर्चर पोजीशन 3 है, लाइफ स्टीलर पोजीशन 1 है, सेफ लेनर एंड पोजीशन 2 एंड पपी एज यूजुअल एन्चेंट्रेस। और मुझे लगता है टीए सही है, टीए सही पिक है, कुंका को देखने के बाद टीए ने सही उठाया। यही आई थिंक पास पिक किया उन्होंने, उनको ऑलरेडी माइंड में उन लोगों ने हाँ डिसाइड करके रखा था। यही आई थिंक एकमात्र पिक है जो कुंका के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि टीए का वो रिफ्लेक्शन से वो कुंका का डैमेज डॉज कर सकता है। लाइक इट लिटरली लाइक रेन ड्रॉप से पावरफुल है उसका एक स्किल, लायन का अल्टी तक वो ब्लॉक कर सकता है, अगर सही टाइम पे मारा तो। मतलब टीए के खिलाफ जाने वाला हीरो कोई नहीं है टीम ओजी की, टीम ओजी आईजी के पास। तुम्हें लगता है कुंका सही पिक है या कुंका की जगह पे वाइपर वाइपर होना चाहिए था?
सैम उनका उन्होंने विंड को पकड़ने के लिए और बेसिकली उनको एक हेलबर्ड वाला हीरो चाहिए था, हेलबर्ड बनाने जैसा कोई तो। और उनका आई थिंक पता नहीं, रेडियंस तो जाना चाहिए क्योंकि वो कैसा मारेगा उसको, हाँ, इन लोगों को विंड को कैसा मारेगा, क्योंकि कुंका तो एमके भी नहीं बना था, राइट? कुंका हैंडशॉट नहीं देता। बट कुंका के पास वो है ना, वो क्लीप शॉट, क्रीप को मार दिया तो विंड के ऊपर ही जाके पड़ेगा। क्रीप को मारा तो विंड के ऊपर भी पड़ेगा ना अगर वो पीछे रहा तो। वो है इनका टीम सीक्रेट का ड्राफ्ट बहुत दिमाग लगा के बनाया और उन्होंने, कुंका के एक पास नंबर है। अभी वो भी बफ है, सिल्वर एज बफ है। It was time to prepare for battle. दोनों टीम का ड्राफ्ट अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही लाइक ड्राफ्ट में हार गया गेम। नहीं, मेरे को टीम सीक्रेट का ड्राफ्ट अच्छा लगा था तो। नहीं, दोनों टीम का ड्राफ्ट ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हार गया ड्राफ्ट फेसिंग में ही। मतलब अब जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा इसमें से। हाँ, टीम सीक्रेट का ड्राफ्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर राइट है। हैंड साइड का जो टीम है ना, लेफ्ट हैंड साइड का टीम सीक्रेट, वो लेफ्ट हैंड साइड मेरे को सुनाई देता है हेडफोन में, और आईजी का राइट हैंड साइड पे हेडफोन पे हाँ, सुनाई देता है। वही ऐसा ही है। 30 seconds remaining. तो टीम सीक्रेट का ड्राफ्ट लिटिल बिट अच्छा है, लाइक थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि टीम सीक्रेट के ड्राफ्ट में उन्होंने पहले ही लाइक लाइफ स्टीलर को उठा लिया जो कुंका का हेवी काउंटर है। नहीं, किसने बोला? लाइफ स्टीलर कुंका का एक्स मार्क से बच सकता है ना। हाँ, फर्स्ट किल डाल के बच सकता है, या अल्टी डाल के भी बच सकता है। उसका इससे भी बच सकता है, कुंका का लाइक अल्टी से भी बच सकता है एंड फर्स्ट किल से भी बच सकता है। और लाइफ स्टीलर ने एग्नम बनाया तो वो डिसआर्म करता है ना भाई। या तो लाइक अगर लाइफ स्टीलर मतलब एक कुंका का काम, मतलब हेवी काउंटर है, मैं ये बोल रहा हूँ। उनका पे की काउंटर है, और आई थिंक उनके अंदर घुस गया ना तो सीधा डिसआर्म होते हैं ना वो। हाँ। तो अगर उनको उसको लग रहा है कि ये मारने आ रहा है कोई, अच्छे एल्डर टाइटन मारने आ रहा है, तो उसके अंदर भी घुस गया तो फिर भी वो तो कुछ कर नहीं सकता ना। पर मुझे पता नहीं उसका वो लाइफ स्टीलर का वो बीकेबी पियर्सिंग है कि नहीं हुआ एकदम शायद। फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत कूलडाउन कम है। वो भी है, मतलब कूलडाउन कम होने पर भी वो फाइट में एक ही बार तो यूज कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि वो मतलब पोजीशन 4 टाइप जाएगा करके। मतलब अच्छा अच्छा ड्राफ्ट करना है क्या? मिड पे कैमरा मिड पे ही है। वो पहले मिड पे ही दिखाते हैं ये लोग। क्या ताली बिली बजाते, इनके पास इतना टाइम रहता है क्या? ओ बच गया काका, काका बच गया। उसका मूवमेंट स्पीड 310, उसका मूवमेंट स्पीड 320 पकड़ लेगी। बट एक टैंगो एचपी रीजन कर लिया। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा फटका दे रहा, बस कुछ नहीं कर सकते। एक ये डालेगा बस। ये भी इधर ही पपी मर गया। नहीं भागेगा। बच गया। मैं बोला ना। मुझे लगा अभी शिकारी बनने वाला है, शिकारी। उसने टैंगो भी खाया ऊपर से। बट यार ये अफसर का रूबिक बहुत अच्छा है, मतलब ये अफसर के पास सबसे ज्यादा मुझे लगता है जितने भी डोटा प्लेयर देगा, मैप नॉलेज उसके पास सबसे ज्यादा है। ऐसा खेलना पड़ता है ना एल्डर टाइटन को, ऐसे गरीब जैसे ऐसे लेने का फिर आके मारने का। बट टैंक ही नहीं है ना। विंड रनर को मार नहीं सकता वो एक फटका मारेगा काफी है, भाग जाएगा वो। तो दूर दूर से मारना पड़ता है वो एल्डर टाइटन को, तो मतलब इन मतलब तो तुम उसको ठोक सकते हो। तुम उसके मतलब हाथ से मारने की कोशिश करोगे ना तो मुश्किल है। अभी इन्होंने गाने वाले को बुलाया इधर। क्या कर रहे हो?
फुल टैग बनाने की कोशिश कर। क्या क्या उसने आईजी ने ओली नहीं। बट मुझे लगता है एल्डर टाइटन पोजीशन 4 ज्यादा बेटर हो सकता है क्योंकि स्टैक बना सकता है बहुत आसानी से। सैम स्टैक तो बना सकता है बट तो बिना लेन छोड़ के वो स्टैक बना सकता है पोजीशन 4 पे जब खेलता है कोई। ये देखो कि कैसे कर रहा है, देखो भागो भागने का और फिर से आके काइट करने का। बस तो एक्चुअली इधर लाइन को मार देगा। देखो मरते मरते भी उसने पुल करके गया, देखा तुमने? वो क्रीब, उनका क्रीब जो पुल किया था उसने, वो क्रीब को टच करके गया। वो पप्पी है वो, क्या कर सकते हो। अभी तक इस पैच में मैंने चेन को पिक होते नहीं देखा। बूट और बॉटल दोनों देके गया वो। Amazon फ्री डिलीवरी। तुम्हें पता नहीं है क्या कि रूबी रीजन के आइटम्स है, वो कोरियर में आते हैं तो 15% लेस मूवमेंट स्पीड है कोरियर का। हाँ तो इसके वजह से शायद से वो बेस में ही आया ना। तो या वो ये मर गया था ना, लायन मर गया तो उधर लाइन मर गया तो यूजुअली वो लोग मिड पे टीपी मारते हैं एक्चुअली। 2 मिनट बॉटल रिफिल करने आते हैं। उनका बॉटल रिफिल करना उनका मेन माइंड है। अगर मरा भी नहीं है तो सुसाइड करके बॉटल रिफिल करते, मैंने देखा है। हाँ मेरा नहीं होता है, मैं वो एक खिला नहीं पाता हूँ बॉटल का। देख रहे हो कैसा फक। तो देखो अच्छे कर तो क्या डैमेज दिया, एक फटके में उसका हालत खराब कर दिया। थोड़ा हैरेस करना मुश्किल है एल्डर टाइटन से, सच बोलूं तो। या बट करना चालू, मतलब ये देखो एल्डर टाइटन थोड़ा सा मिड गेम प्लेयर है, मिड प्लेयर है। लाइक मिड गेम के टाइम पे सही है। उसके साथ ही घूम रहा है आप सर, कहीं उसको छोड़ भी नहीं रहा। वार्ड लगाने आया क्या? वार्ड तो है मिड पे। लो क्या हो गया? लो आई हो गया, ब्लॉक कर रहा है। ओ कुंगा के इधर शिप पे गिरा। ओ मरेगा यहाँ पे। आगे ओ हिट नहीं गिरा पाया। पप्पी ने बचा लिया। पप्पी ने शायद से उसको थोड़ा हील दिया है। बापी ने उसको स्लो कर दिया एल्डर टाइटन को। ओ माय गॉड, सही में काका ने सुसाइड कर लिया वहाँ पे। दूसरा हिट गिर जाता ना एल्डर टाइटन का तो वहीं पे खत्म था वो। मेरे को लगता है टीम सीक्रेट ही डिजर्व करता है टी10, सच बोलूं तो। या ये मिनट का रूल किसको मिला? आई थिंक उनका को मिला है। पता नहीं, लाइक इसका उन्होंने ज्यादा रून पिक किया। दोनों के टीम पे एक ही रून है, एक ही पिक हुआ। कुंगा के पास नहीं है, टी के पास भी नहीं है। एल्डर टाइटन के पास डैमेज नहीं है बट लायन यहाँ पे मौजूद है। एल्डर टाइटन फटका मारेगा पर एल्डर टाइटन नहीं ले सकता, भाग रहा है। उसको न्यूट्रल कैंप स्टैक को फार्म करने नहीं दे रहा हूँ। लाइन स्टन करेगा। आईजीबी कुछ कम नहीं है सैम। दैट इज फाइन, मतलब वो किसी न किसी को तो मारना तो था ही वहाँ पे। आई कैनॉट से एनीथिंग फॉर। क्या डिनाई किया तो? मतलब मैंने अभी तक जितने भी कुंका देखा ना, इनको स्टन भी करो एकदम परफेक्ट टाइम पे तुमको बाहर निकालता है। मतलब इनका वो स्टन ओ गया लाइन बदला।
भाई टीम सीक्रेट का याप सर का जो ओजी के खिलाफ खेला था ना सैम, उसका हर एक शैकल लगा था, हर एक शैकल। हाँ पता है मेरे को। एक हर एक शैकल उसने कनेक्ट किया था। शायद से उसके लिए उन्होंने वो डांस किया था, जैसे हाथ मिलाते होते जैसे कर रहे थे। और वो डांस शैकर वाला डांस ही है, मेरे को ऐसा ही लगा। और वो भी देखो ना, ओजी को हराया, लाइक जो लास्ट 2 टीआई में एक मैच नहीं हारा। ऐना नहीं है डूड, ऐना नहीं है। मैं क्या थोड़ी ना असली ओजी मानूंगा, बुलाओ उसको वापस। आना भी नहीं है, जेरेक्स भी नहीं है, जेरेक्स भी नहीं है। कोई तो बोल रहा था कि अगर ओजी हार जाता है तो ओजी सीधा फोन करेगा आना को, यूनिवर्सिटी का नाम बता। आना एक्चुअली वैलोरेंट पे फोकस्ड है आई गेस। ओए उसके बाद वैलोरेंट पे फोकस है तो उधर नोटेल बोलेगा मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, तू फर्स्ट प्राइज है, तू जीत चुका है, चुपचाप इधर आ। नहीं ऐसा नहीं, फोर्स नहीं कर सकते। एक्चुअली ऐना को टैलेंट है पता है। ऐना मतलब सबको ही प्रैक्टिस करते रहता है। ऐना क्या करता है पता है, ऐसे गॉर्डन रैमजी के ऐसे वीडियोस देखता है और ऐसे खाना है ना, खाना ऐसे खराब होते हुए कैसा प्रोसेस है वो देखते टाइम पास करते रहता है सब वीडियो। ट्रूली टैलेंटेड है वो, और वैलोरेंट में भी वो रेडिएंट पहुंच गया है। या आई थिंक ऐना लाइक उन टाइप का लोग है जो लाइक दिमाग में गेम खेलता रहता है बैठ के पूरा दिन, जैसे चेस प्लेयर होते हैं ना, वो हमेशा दिमाग में खेलते रहते खुद के साथ। आना भी उसी टाइप का था। कैसा आधा एचपी हो गया वो। एन्चेंट्रेस इन बाय डूड। मेरे को वो डबल पिक पसंद नहीं आया सच बोलूं तो आजकल। मतलब वो मतलब गेम रैंक में ना डबल पिक करने पे मजबूर करते हैं ना, तो मेरे को पसंद नहीं आया सच बोलूं तो। एक एक पिक का सही था ना, एक एक का ही सही था। या मेरे को एक एक चीज पसंद था। ओ ये मर गया। मेरे को पुराना ही पसंद था, कैरी पहले पिक हो जाता था, दिन जो बचता था उसका पिक करो। पुराने टाइम पे याद है कैरी फर्स्ट पिक होता था? नहीं कभी मेरे को तो ऐसा कभी नहीं याद है। जब वो हीरो मतलब ये नहीं था, रोल क्यों नहीं था, रोल क्यों नहीं होने से लोग मतलब ऐसे पिक करते थे, वो मधिर थे। मतलब वो एक्चुअली 5.5 के एमएमआर के बाद वैसे ही रहता है, रोल क्यों नहीं रहता। नहीं जब रोल क्यों नहीं था तब मेथड की तरफ कैरी पिक हो जाता था एंटी मैच पहले ही। मिड लेन में दो मिड लेना चाहते थे। नहीं सच बोलूं तो मैं कभी मतलब देखा नहीं वैसे। मेरे को याद नहीं, मैं डोटा आई थिंक 3 साल 2 साल जब से मैं स्ट्रीमिंग किया ना तब से मैं थोड़ा सीरियसली खेलने चालू किया। और उस टाइम पे उससे पहले था लाइक रैंक रोल आने से पहले। लाइक रैंक रोल बहुत ज्यादा ह्यूज ये इम्पैक्ट था। तो उसने मॉम बनाया, ये बनाया ना मीम हमार। क्यों ऐसे शिट व्हाट द फक? क्यों पता नहीं, नशा करके बैठा होगा। नहीं कुछ तो लॉजिक रहेगा। वो एक्चुअली वो टीए के लिए काम आता है। ये एल्डर टाइटन अगर स्टन कर पाया तो गिरा सकेगा। हाँ और वो फार्म करने के लिए भी एक्चुअली यूज की जरूरत नहीं है उनको। वो लेन को कैसे पुश करेगा, लेन को वो देखो कैसे लेन को काट रहा है। एन्चेंट्रेस लेन को काटे जा रहा है। कुछ नहीं करते दे रहा है लेन को काट रहा मतलब वो सेफ लेन से मिड लेन पे लेके जा रहा है क्रीप को। ये देखो ये स्ट्रैटेजी पता है तुमको? कौन सा? मिडिल में वॉर्ड डालते हैं सेंट्री, क्यों बोलो? कौन सा? कहाँ पे? बीच में? अभी डिवोर्ड किया ना अफसर ने, क्यों बीच में डालते हैं? हाँ तो क्यों उनका दिख जाए। कभी कभार कोने में डाले रहता ना वो सीरियसली उसने बॉटम लेन से क्रीप लाइक पपी ने बॉटम लेन से क्रीप मिड लेन पे लाके दिया, टीए को खिलाया, ले तू खा। तो पपी भी तो एल्का नोटेल भी तो ऐसे ही किया था ना आयना के लिए। आयना का एल्केमिस्ट था तो फिर आयना का एल्केमिस्ट आ रहा है।
यहाँ पे इसने किया, बॉटम से लेके आया लिटरली। वो क्यों लेके आया क्योंकि बॉटम के लेन में ना कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे फाइट लेने के लिए, इसलिए वो वहाँ से क्रिप्स मिड पे लेके आया है। बॉटम लेन पे डबल होए जा रहा है। मिशन अकम्प्लिश्ड। ओह, रोशन लिया जा रहा है, इनको भनक भी नहीं है। ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सच बोलूं तो। क्या रोशन? ये लोग रोशन मारेंगे करके। ये आ गया, मार्स भी जा रहा है। ओ, मार्स को अल्टी भी नहीं मारने दिया, ओ फाड़ दिया रे। ओ, चुरा लिया स्पेक्टर ने ले लिया रोशन। क्या ये निशा मरने वाला है, बट कुंका भी गया। ओ, हेस्ट ड्रोन फ्लाई भी मरने वाला है। क्या खेला वाह कसम जाए मैन। टिप दो उसको कोई तो। मौका नहीं है हमारे पास, रिपोर्ट करने का ही मौका है। आई थिंक हम लोगों को टिप देने का ऑप्शन रखना चाहिए था यहाँ पे, लाइक चीयरिंग जो होता ना उससे, मतलब लाइक मैच के बाद शायद जाय को ऐसे एक्शन स्लर बैठ के बोलता है, पता है लाइक कितना टिप मिला आपको? 10,000 टिप मिल गया। हाँ वो तो है, तो अगर टिप देने का मौका तो पैसा ही है ना उनके टैलेंट्स के लिए, तो वैल्व उनको टूर्नामेंट पे प्राइज मनी दे रहा है ना, वही उनका सैलरी है। अच्छा खेलो, क्योंकि हम लोग खेल ले, अब मेरे को थोड़ी ना वैल्व बुलाएगा मेरा गेम प्ले देखने के लिए। उनको प्रूव करना पड़ेगा, बट तुमको 5 जन चाहिए खुद के 5 जन चाहिए, और एक्सीलेंट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और पावर कनेक्शन भी चाहिए। लाइक अगर तुमको डोटा टूर्नामेंट में जाना है, तुमका घर चाहिए खुद का। वो देखो फार्म कर रहा हो क्रिप्स को। तुमको खुद का घर चाहिए, और तुम 5 जन रह सकते हो, ऐसी जगह चाहिए। 5 जन नहीं, 6 जन एक्चुअली। ओ, आ गया कुंका। क्या स्टन डाला डूड, एक नंबर। ओ, जाय ने स्टन डाल के बचा लिया पपी को। वो अटक भी गया ऊपर से। मार्स क्या स्टन डाला देखा तुमने? वो मार्स ही अटक गया। अगर वो ये कास्ट करने वाला था, अल्टी मार देता, वो अल्टी मार के फर्स्ट किल मारने वाला था। हाँ, बट क्यों उसे रोक दिया? कि क्यों स्टन वैसा है कि वो उसको फिर अंदर जाने के लिए मुश्किल पड़ता था। नहीं, अंदर नहीं जाना था उसको, मार्स को अंदर नहीं जाना था, उसको रोकना था, पपी को मारना था। एक्चुअली पप्पी को मारने के बाद देखो उसको सोलर क्रेश डालकर वो क्रीप आके टावर मार रहा है, टावर को डालने से 80 स्पीड अटैक स्पीड बढ़ जाता है। ओ लॉर्ड, मतलब तुम समझ रहे हो क्या कर रहा हो? वो वही देखो, दूसरा बच्चा भी, 2 बच्चे एक्स्ट्रा है। हाँ, 2 बच्चे एक्स्ट्रा अभी। ओ, डिनाई करने वाला था। ओ माय गॉड मैन, उसने स्टन किया उसको प्रॉपर। मैक्रो कंट्रोल। क्या खेल रहा पप्पी, माय गॉड। मेरे को एन्चेंट्रेस खेलने का मन कर रहा है इसको देखकर। मैक्रो कंट्रोल सैम, क्या कंट्रोल है मैक्रो का? मैक्रो कंट्रोल मतलब पप्पी क्या खेला डूड। वो क्रीप को वहीं पे क्यों रख रहा? अंदर आने नहीं दे रहा हो? आगे नहीं आने दे रहा। हाँ, विजन वहीं पे उसको मेंटेन करना लगता। यस, देखो मैंने देखा क्या बोलते हैं, एल्डर टाइटन को क्या रोकता है? रैट रोकता है, राइट? ये एन्चेंट्रेस नॉट ओनली उसको डिस्पेल कर सकता है, वो रैड भी कर रहा है एन्चेंट्रेस। तुम समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लेवल है भाई वो तो। उसने उसको स्लो किया। अच्छे करके बस ब्लिंक डगर है, बट उसने मार दिया।
हॉन्ट तो लेडर टाइटन को ही मारेगा। लायन टारगेट था पर लेडर टाइटन पली चढ़ गया। Radiant's middle tower may need a hand. इसके पास ठीक है। इंचेंटस के पास है सोलर क्रेस्ट। सोलर क्रेस्ट से आपको 50 अटैकिंग स्पीड मिलता है, 10 मूवमेंट स्पीड मिलता है अगर अपने अलाई के ऊपर कास्ट करते हो तो। क्या मिलता है? 50 अटैकिंग स्पीड। सोलर क्रेस्ट काफी अच्छा आइटम है अगर तुम्हारे मतलब एक मूनशॉट है बेसिकली। या नहीं एक मूनशॉट नहीं, आई हाफ थिंक मूनशॉट, हाफ मूनशॉट। लाइक तुम्हारे मतलब तुम्हारी टीम में अगर फेसलेस स्नाइपर ये है तो सोलर क्रेस्ट बहुत अच्छा आइटम है। बड़ा पोजीशन 4 पर ये तो पोजीशन 5 बना रहा है ना? या उन्हीं के लिए ही है। लाइक तुम समझ सकते हो तुम्हारे पास घंटा या आइटम कभी बनाया ही नहीं। वो आइटम में तभी बनाता हूँ अगर फेसलेस है तो। लाइक फेसलेस के क्रोनो मारने के टाइम पे वो बहुत काम आता है। या फिर एलसी है तुम्हारी टीम में, तुम्हारे दुश्मन में एलसी का अटैकिंग स्पीड भी कम करवा सकते हो। बीकेबी बना रहा है। ओ यहाँ पे मार देगा स्पेक्टर को। ओ लॉर्ड। ओ लायन का ब्लिंक डैगर स्टन। वो हील डाल के उसके बाजू में रुक रहा है देखो यार। ओ टीए को मार देगा क्या? अच्छे घर का आ गया एक को स्लैब। टीए बच्चा, टीए बच्चा, टीए बच्चा डूड। बचना नहीं चाहिए पर था। पप्पी मारा पर टीए बचना नहीं चाहिए था। बहुत मतलब बहुत कुछ कमिट किया टीए के ऊपर। लायन का अल्टी कमिट किया था क्या? हाँ किसके ऊपर किया था? फाइट रिकैप पे देखोगे ना। हाँ किसके यूज हुआ था? टीए के ऊपर ही यूज हुआ था। ये नहीं दिखा, इसने ही दिखा था किसके ऊपर यूज किया। नहीं पर तुम बैक करके देख सकते हो चाहे तो, पर मैंने देखा है कि टीए के ऊपर ही यूज किया उसने। बट फिर भी नहीं मरा। आई थिंक लायन का सबसे पावरफुल स्किल है जो फिंगर ये स्टैक है ना, फिंगर डेथ किल स्टैक, ये इसका सबसे पावरफुल स्किल है। ऐसी कितना खुश होते रहेगा अभी क्योंकि उसको उसका लायन बहुत फेवरेट है। उसको लायन मतलब लायन का सारा इमोर्टल है उसके पास। लायन मतलब लाइफ है उसके लिए। लायन अभी लाइक लैंसर का सबसे बड़ा काउंटर हो गया। एग्नम शॉट लेके आया, इल्यूजन सब खा जाता है वो एक झटके में। फिर से इसके ऊपर इस बार टीए नहीं बच पाएगा। अच्छे कर आया था। नहीं एक्चुअली उसने गलत ब्लिंक मारा। उसने उस जगह पे नहीं मारना चाहिए था। ओ एन्चेंटस भी गया, मिड टावर भी गया। एक्चुअली उसको ऐसा ब्लिंक नहीं मारना चाहिए था एकदम। उसको दूसरी लायन के पास भी डैगर है क्या? हाँ ब्लिंक डैगर है। वो ब्लिंक डैगर से तो आया। लास्ट टाइम भी ब्लिंक डैगर था। ब्लिंक डैगर खुद की तो घुसा था। उसको थोड़ा अच्छा ब्लिंक मारना चाहिए था निशा को। ओह क्या बचा अच्छे कर। वो सिल्वर एज बना भी चुका है ये। लाइफ स्टीलर ने सिल्वर एज बना भी लिया। इसका एग्नम शॉट भी हो गया। बट किसी के पास टर्न नहीं है। मैंने सही टिपी मारा। और मेरा उस दिन एक सवाल था। करने का रहता है, स्टाउन करने का रहता है। स्टन किसके पास टर्न है सारा यूज हो गया तो फट से टिपे मारने का रहता है। यस नहीं उधर स्टन तो एक ही जन के पास था। वो विंड का वो चालू हो गया था। उसने इसके लिए स्टन मारा ना। लायन मारा राइट उस टाइम में। लायन और कुंका को दोनों को पकड़ा था ना एक ही साथ। उसके शक्ल से कोई तो तीनों तीसरा कोई तो वॉचिंग पे है भाई। कौन है वो बंदा? बेगम। बेगम कुछ बोल नहीं रहा। बेगम वापस आ गया। वो बाहर गया था ना। उसका नवरात्रि का आखिरी डे। ओके कल दशहरा है।
ये कुछ क्रिप को कुछ हो ही नहीं रहा डूड, न्यूट्रल क्रिप लेके आ रहा है वो। दोनों टीम एक मतलब पूरा वो जान फार्म रहा कर रहा है न्यूट्रल क्रिप से, व्हाट द फक। अगर न्यूट्रल क्रिप को मारो तो ये वो देखो घुमा रहा है। ओ पपी के लाइफ संकट। अरे 15 सेकंड में अरे रोशन बाबा वो लोग ये फार्म करते बैठेंगे ना। ये देखो न्यूट्रल पपी क्रिप को farm न्यूट्रल करते क्रिप से बैठेंगे। देखो क्या कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है क्रिप को। और इनका क्रिप देखो आगे जा रहा है टावर के नीचे। Dire's middle tower is under fire. न्यूट्रल क्रिप टावर, इनका क्रिप चला गया टावर के नीचे और उनका मार भी दिया। ओह माय गॉड। ओह अच्छेकर को रोका। ओह अगर बच के निकलता भाई कुंका, यही भैया छोड़ो एमबीपी तेरे को ही दे देता है। Dire's top tower is not on top of things. भाई लिटरली पप्पी को देख के लग रहा है ये बच्चों के साथ खेल रहा है। हाँ सर क्या उसने क्रिप को कहाँ लेके गया? वो रोशन पिट के वहां पे जाके फार्म किया क्रिप से, और उनका जो क्रिप था वो मिड से मतलब सीधा चला गया टावर के नीचे। ओह नेक्स्ट लेवल डूड। हालांकि टावर के ऊपर उतना डैमेज नहीं किया बट कुछ भी मतलब उनके लेन से बाहर लेके गया फाइट पे, और मतलब उनकी टावर पे वो प्रेशर बनाया। हाँ प्रेशर बनाया उसमें। वाओ नेक्स्ट लेवल थिंकिंग। मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता लाइफ में तो। और ये सब उसने फाइट के दौरान मतलब करवाया। सोचा है। हाँ ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं बट ये सब ऐड होते हैं। तो लाइक पप्पी खेल रहा है। ओ इनको विजन मिल गया सीरियसली, एक वाट से इतना अच्छा विजन मिला इनको। जो मार्स को पहले निकाल रहे थे, कुंका को भी पकड़ लिया। अरे रे रे रे। एल्डर टाइटन का अल्टी आया, सब भागे इधर उधर। ओ मार्स का बाय बैक, लाइफ सिलर मरा। ठीक है बाय बैक आया ना। ओह अच्छे। This is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. काफी अच्छा बाय बैक है, काफी अच्छा फाइट पकड़ा है। 2 बाय बैक हुए ना शायद से। हाँ या मार्स का और लायन का। लायन का सब बी हो गए पर। ओके हेलबोर्ड ऑलरेडी इसने बना दिया है, तो अगला आइटम क्या बनाएगा फिर वो? अभी वो ये बनाएगा एसोल्ट। एसोल्ट भी बन चुका है कुंका का। अभी पूछो अगला आइटम क्या बनेगा। कुंका नहीं भाई, मार्स 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 हेलबर्ट से क्यों जा रहा है? कुंका के पास ऑलरेडी है हेलबर्ट। मार्स के पास जाने के लिए कोई आइटम ही नहीं है, अभी हेलबर्ट जाने की सोच रहे हो। बट और ये घोस्ट सेप्टर। किसके तो पास है? अच्छे करो लाइफ स्टाइल। विंड का जो शार्ड है ना वो, उसमें तुम लड़ ही नहीं सकते। अगर तुम लड़ोगे तो धक्का चला जाएगा। तुम्हें दौड़ना पड़ता है ऑपोजिट डायरेक्शन में सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते दौड़ के, वो भी स्टन ही है लिटरली। नहीं थोड़ा थोड़ा तुम आगे जा सकते हो बट ये नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं उसको, तुम फाइट नहीं ले सकते। अगर फाइट लोगे तो तुम धक्का जाओगे, रॉन्ग डायरेक्शन पे जाओगे, वैसा है। वो इसका कैंसिल हो जाता है तो आई थिंक डॉन बेकर का फर्स्ट किल। समझे? डॉन बेकर का फर्स्ट किल और जो हथौड़ा घुमाता है ना, देखो कैंसिल हो जाता है वो इनके उसमें, फिर वो सही नहीं जाता है, कुछ तो है उसमें। ईएस घुस गया है, लास्ट हीलर ईएस के अंदर घुस गया है। वो ईएस के पास ही ब्लिंक डैगर है। उसके पास एजेस है ना, पर वो देखो अच्छे का कहाँ पे है। उसने एल्डर टाइटन को मारने का सोचा, वो लायन को घुसेड़ दिया।
9 बज गया, अब लिंक टगर करके। Yes, like suicide at bomber. Yes, like मैंने पहुंचा दिया सर आपको आपके डेस्टिनेशन। वो ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर वार्ड है वो। Yes, is like हमने आपको डेस्टिनेशन पहुंचा दिया। लाइफ स्टीलर सर 5 स्टार देना प्लीज। एक्चुअली जब तुम्हारे पास एजेस रहते ना, तुमको ट्रायंगल पे फाइट लेने का रहता है एक्चुअली, क्योंकि ट्रायंगल सबसे मतलब कैसे बोलो, वहाँ पे सबसे ज्यादा खजाना है, क्योंकि वहाँ पे एंशिएंट है। कल का और इनका मैच था और वो एरिया को तुमने कैप्चर किया ना, तो मतलब तुम अगर उनको खजाना तुम भी नहीं ले रहे हो, पर उनको लेने मत दो, वैसा समझ में आ रहा है क्या? कल उसने क्या था, नेचर ने क्या करता था, ब्लॉक कर दिया था इनका लूना का बहुत फार्म रोका था। नेचर डायर साइड पे हमेशा अपने बच्चे उधर लेके भेज देता था, एंशिएंट कैप ब्लॉक कर दिया। उधर वो बैठ के वार्ड लगा रहा है, वो लाइफ स्टाइल के ऊपर गिरेगा। टीपी नेचर ब्लॉक करा और उधर ये कोशिश कर रहा था डिसरप्टर की, इधर वार्ड है क्या नहीं। वो दो वार्ड लगाया सेंट्री चेक करने के, वार्ड है क्या नहीं, बट वार्ड नहीं था। सीक्रेट और सुपर स्ट्रॉन्ग मैन, क्या दिमाग लगाया पप्पी ने, मैं तो कभी नहीं सोच पाता ऐसे। सालों का तजुर्बा ही है, मैं बोल सकता हूँ। 10 साल। पपी एकमात्र बंदा है जो 10 टीआई खेल रहा है, 10वां टीआई, और अभी तक मतलब ऐसा कोई नहीं है जो 10 के 10 टीआई खेला। समझ रहे हो? मतलब 10 के 10 टीआई में क्वालिफाई करने वाला एक कोई बंदा नहीं है। आई थिंक वो कुरु के होता, बट कुरु के भी इस बार क्वालिफाई नहीं किया। पता नहीं, कुरु के फर्स्ट टीआई में शायद नहीं था। नेट जाके आया फिर से। क्या तुम्हारा नेट चला गया था? मैंने सबसे ओल्ड ऐसे उस पे बोल रहे थे, फिर नेट चला गया। बोला था पपी एकमात्र बंदा है जो 10 साल टीआई में किया, टीआई खेल रहा है। पर एक भी आई थिंक एक ही टीआई जीता है वो, आई थिंक नावी के साथ जब था। मतलब टीआई जीतना तो बात की बात है, बट 10 साल मतलब हर बार वो ज्वाइन किया है, तब ये मेन स्टेज पे आके खेला है। समझ रहे हो? मतलब ये अकम्प्लिश भी बहुत लोगों ने नहीं कर पाए। मस्त है, एन्चेंटस मस्त फार्म कर रहा है बैठ के। एन्चेंट्रेस डेंजरस फार्म उठा सकता है, मेरे को वही रियलाइज हुआ। मतलब जहाँ पे मतलब डेड लेन है ना, हाँ डेड लेन में एन्चेंटस फार्म कर सकता है। फार्म कर सकता है, वही मतलब एन्चेंटस भी डेड लेन में फार्म करता है, डॉन ब्रेकर भी डेड लेन में फार्म करता है। एक्चुअली पपी जो क्रीप्स को लेके जाके रोशन के वहाँ पे फार्म करने का एक और ये भी है रीजन, कि क्रीप्स टावर के नीचे ही मर जाएंगे, तो वो एक्सपीरियंस और वो गोल्ड उनको डिनाई भी हो रहा है। हाँ राइट, वो भी एक पॉइंट है। ये मर गया, गायब ही हो गया, मौका ही नहीं दिया। ये भी चाहिए, ये भी था क्या? ये भी था, बट वन करने का मौका ही नहीं दिया। इसके पास पपी के पास पीके भी टीए के पास क्या ही नहीं दिया वन करने का। लाइक वो भी मतलब डेड लेन में फार्म करता है, डॉन ब्रेकर पोजीशन 4 डॉन ब्रेकर। अरे माँ कसम, एग्जैक्ट टाइम पे रोशन आया। बहुत अच्छा टाइमिंग है रोशन का, पर अक्षयकर अभी भी जिंदा है, तो रोशन के लिए अभी भी नहीं जाएंगे लोग। ओ फ्लाई गया। कैसे मर गया वो? अक्षयकर और उसका। What seriously क्या कर रहे थे? उसके पास सिल्वर एज है ना, लाइफ स्टीलर के पास।
वो ठीक है बट हाँ वो अकेला क्या कर रहा था ये बात है। उसने अल्टी कमिट किया था क्या? हाँ उस सेप्टर ने अल्टी कमिट पहले कर दिया था, वो टीए को मारने के टाइम पे कमिट कर दिया था। साउथ शेप से करना चाहता, उसकी गलती है। बट कोई दिखा नहीं ना उसको एनिमी का। रोशन रिस्पॉन किया था, उनको रोशन लेना चाहिए था जब टीए मार चुका है। अभी इस रोशन में ये मिलेगा एकदम। यार सॉल्ट बनाने के पीछे तो लाइट जेम उठा के लेके आया। जेम किसके लिए? एकदम किसके लिए? लाइफ स्टीलर सिल्वर एज, लाइफ स्टीलर सिल्वर एज। हाँ लाइफ स्टीलर सिल्वर एज है। मतलब गट्स देख रहे हो भाई, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। हाँ 5 मैच जिंदा है फिर भी रोशन ले रहा है। मतलब एल्डर टाइटन एक कुंका है, घुस घुस के मारेंगे। अरे ले भी लिया, मुंह के सामने से लिया। मतलब आगे ही नहीं बढ़ता है कितना भी आगे जाए। लायन गया, लायन गया। कट पपी ओह फुल मात्रा हील लेके जाएगा लगता है। किसको मिला ये सेप्टर? किसको मिला? अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया क्या? अच्छे कर को दिया सेप्टर। पकड़ा फिर से लायन को। देखो लायन कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, देखा? जॉगिंग कर रहा हूँ। उसमें आगे ही नहीं बढ़ सकते। मतलब वो लिटरली एक स्टन है, नाम का ही स्टन है, यू नो नाम नहीं है स्टन का बट वो स्टन है। वो टीए ने ऊपर वो डाला और इसने उसको, बाप रे। कल मैंने देखा था एक जन को जेम गिरा के वार्ड तोड़ते हुए ऊपर। हाँ वो थोड़ा विजन देता है ऊपर। हाँ मैं कोरियर से वार्ड तोड़ता हूँ। हाँ बट कोरियर तो हमेशा नहीं होता है। जेम तुम्हारे पास है, तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। कोरियर को मैं रखता हूँ एक्चुअली तो चेकिंग के लिए। एक मिनट। हाँ वो देखो वो को पीछे से लेके निकल रही है। सेकंड ने गलत अल्टी मारा। साहब साला टीए को मारो, पांचों के पांचों टीए को मारो। उनका आओ तो कुछ नहीं देखना, पांचों के पांचों टीए ही मारो, टीए को मारो। नहीं सर उधर से भाग रहा है, नहीं टीए। Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is gone with the wind. Radiant's bottom tower has uninvited guests. Step lively now. 6 लाइक हो गया। आओ मैं ध्यान ही नहीं दिया, अपना 6 लाइक हो गया।
बीकेबी ऑन करना पड़ा लिटरली उसको। इसी के साथ यबसार का हत्या, टीम आईजी कमबैक करते हुए। सीधा टीपी, बीकेबी वन सीधा टीपी। आता कुछ नहीं देखना है। बीकेबी ऑन करने के बाद बहुत ही कम हीरो है जो आपको स्टन कर सकते। ओनली स्टन। इस 20 स्प्रीड ब्रेकर है, वो स्टन कर सकता है अगर उसने चार्ज डाल दिया बीकेबी वन से पहले। दूसरा रोशन रिस्पॉन होगा 2.5 मिनट, 2.5 मिनट से नहीं 2 मिनट 40 सेकंड, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। और इस रोशन के पास रिफ्रेशर होगा और आज से करके पास रिफ्रेशर, मतलब तुम पंगा नहीं लेना चाहोगे। धपड़ धपड़ करके मारेगा तो थोड़ा सा चीयर कर देता हूँ को। रेम्बो वाला, सैम को रेम्बो वाला इमॉर्टल एकदम पसंद नहीं है, तो सैम को लगता है रेम्बो वाले इमॉर्टल से सामने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। लायन को ही पकड़ा करते हुए यार इन्होंने। हाँ क्या लाइक आज शेखर का टारगेट एक ही है, वो ये लायन को फोड़ो पहले। एक्चुअली वो उसको डिसेबल करता ना, या स्टन करता है, बहुत ज़्यादा त्रास देता है, बट लेट हो गया लायन को मार। नहीं वो इजी किल है, इसकी वजह से भी है। ये लायन बहुत ज़्यादा हैरास करता है, बहुत ज़्यादा। एक लायन इतना हैरास करता है, आप लोग अगर फेसलेस में क्रोनो भी मारते हो ना, लायन बाहर से चार मेरे को विंड पे थोड़ा ब्रोकन लगता है टू बी ऑनेस्ट। या वो बहुत ज्यादा ब्रोकन है, मूव नहीं करता है। लाइक तो अगर वाइड ने क्रोनो मारा ना, और विंड ने से वो शार्ड मारा ना, वाइड के पास बीकेबी नहीं तो नहीं, वो नहीं मार सकता किसी को भी। बोल रहा हूँ वो एंटी काउंटर, फुल काउंटर है वो। लिटरली वो स्टन है, स्टन है, सिर्फ नाम का नहीं है, नाम उसका स्टन ही है, फ्रीज कर देता है आपको। एंड उसका ग्लोबलनेस हटाओ, मुझे लगता है उसका ग्लोबलनेस हटा के उसका रेंज बहुत कम करना, वो बहुत ज्यादा ब्रोकन है। देखो कैसा है ना, पहली बात शैकल शॉट ट्रीज को भी बैठता है, हीरोज को भी बैठता है, ठीक है। विंड रनर का थर्ड स्किल मूवमेंट स्पीड देता है, और तुम्हें पता है कि अगर स्लो उसके दुश्मन के ऊपर से गया तो दुश्मन भी स्लो होता है। हाँ विंड का हाँ, पता है तुमको? हाँ, और रिव्यूजन भी देता है, ऊपर से जाने उसका क्लोज से गया तो हो जाएगा। एनिमी भी स्लो होता है डूड। हाँ, नियर बाय एनिमी स्लो होते हैं विंड रन। हाँ, वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उसका मतलब स्लो, इवेजन, मूवमेंट स्पीड तीनों मिलते हैं तुमको, वो भी 100% इवेजन। देखो अभी उसके ऊपर गैंग किया, अब 3 जन को मारना पड़ा अल्टी उसको मारने के लिए, वो भी पोजीशन 4। तो धो दिया फुल। ये देखो उनका मूव भी नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको नीचे से बाईबैक करके वहां पे डाल दिया उसने, इतना ज्यादा वो बाईबैक किया उन्होंने। विंड रेंजर के जो बाईबैक करके उसने सीधा वो डाल दिया, और कोई नहीं मरा इनका अभी। बहुत ज्यादा ओपी है। एल्डर टाइटन एग्नम जा रहा है अभी। अरे एल्डर टाइटन एग्नम ही जा रहा है, एग्नम ही जाते हैं सबके सब। वो बीकेबी मिलता है ना, you to become spell immune for 2 seconds every hero
हर एक हीरो के ऊपर जाएगा तो 2 सेकंड। अगर तुमने 500 के ऊपर लेके गए तो 10 सेकंड का तुम्हें बीकेबी मिलेगा। मार्स का अल्टी नहीं है और ये लोग फाइट ले रहे हैं। मतलब वीएस का भी अल्टी नहीं है वैसे देखा जाए तो। टैकल डूड। बाय बाय करके क्या उखड़ने वाले लोग? रोशन कंटेस्ट करने वाले क्या? इसका मतलब 3 मैन डाउन, आई मीन 2 मैन डाउन रोशन को कंटेस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले? कौन अंदर घुसेगा? डाउन है, 3 मैन नहीं, वो स्पेक्टर अंदर घुस के ये लेगा क्या? शाउट स्टेप मार के वो केस मतलब ये करेगा। स्पेक्टर और वो है ना, एजेस उठाएगा क्या गैर बार जैसा? वो स्लीप कर सकता है एंड कुम का भी स्टन कर सकता है। वो अगर रेज मारा तो क्या करेगा? मर जाएगा, जीजी लिख देगा। आई थिंक ये वाला बाईबैक वैसा है सैम कि मुझे बाईबैक तो लेटर करना है, मैं जल्दी कर लेता हूँ। किसने उसने खाने वाला है क्या एकदम? हाँ लिटरली खाया उसने। किसने? लाइफ स्टीलर ने। हाँ तो लाइफ स्टीलर भी खाएगा, और कौन खाएगा? अभी वो किसके अंदर घुस जाएगा, कोई मरने आ रहा तो फक। और किसी के पास यही नहीं ना एकदम, वो टीए का एकदम टीपी करने में मदद और उसने मेलस्टॉर्म नहीं बनाया डूड। ही नहीं रहा है वो भी, कभी नहीं मर रहा। और असॉल्टेड डूड उसके पास, क्या बात कर रहे हो? कुछ ऐसा चाहिए उसको मारने के लिए। पोस्टर किया उसने, उसको पॉपी ने पोस्टर किया रहेगा भाई, इधर मार दिया लाइफ स्टीलर को ही। और फिर एप्सर ने पोस्टर किया। लाइफ स्टीलर मर गया, एक बार मर गया, दूसरा बार अभी नहीं मरा। वो क्या बचाया, बस फायदा नहीं हुआ स्पेक्टर को बचाने का। अरे अरे उसके अंदर घुस गया वो, लायन के अंदर। आई थिंक सबसे हरामी स्किल है ये गेम में। जीजी लिख दिया उन्होंने। हाँ डूड, टीम सीक्रेट इज सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रो, सुपर स्ट्रॉन्ग। टीम सीक्रेट सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका पपी बहुत स्ट्रॉन्ग है माइंड गेम में। जो भी हो, मतलब वो टीम को ही रिप्रेजेंट करता ना। जस्ट बिकॉज तुमको सही हीरोज दे दिया, उसे सही हीरो बैन भी करने का। मतलब उसने नेक्रो विक्रो उन्होंने मतलब देखो सैम, लाइक पिकिंग फेस इज लाइक 75% चांस हो जाता है कि पिकिंग फेस में आप जीत जाओगे। मतलब 75% हो जाता है कहानी, बाकी 25% अगर सही खेल पाए तो। उनका ड्राफ्ट ही एकदम सेक्सी था डूड। क्या ड्राफ्ट ही इतना सेक्सी था, क्या बोलने का। थोड़ा बहुत ये चीटिंग है। क्या लाइक दिमाग लगाया, मतलब क्या दिमाग लगाया डूड, लिटरली। तुम अगर बोलोगे कि विंड रेंजर का एग्नम शॉट इज लाइक लिटरली अ चीटिंग। लाइक विंड रेंजर का एग्नम शॉट इक्वल टू अ टाइड हंटर, और लाइक यू नो टाइड हंटर का जो अल्टी है रैबेज, लाइक इक्वल है दोनों। मतलब 1400 रुपए का एक चीज के लिए तुमको एक बीके भी खर्च करना पड़ रहा है। इक्वल नहीं बोल सकता मैं, इक्वल बोलूंगा क्योंकि उसमें मूव नहीं कर सकते हो तुम, लाइक लिटरली स्टक हो उस जगह पे। वो एक्चुअली तुम हाँ बोल सकते हो, एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है, बट वो डिसेबल्ड नहीं है, याद रखो वो चीज। या डिसेबल से मैं क्या मतलब, तुम खड़ा कर रहे हो, तुमको बीके भी चाहिए उसको, उससे बचने के लिए, और कुछ ऑप्शन नहीं है। लोटस और किसी से बच नहीं सकते हो। लाइक तुम देखो, इसका 3 सेकंड के लिए तुम्हें डिसेबल कर देगा, मतलब चलने का तुम्हारा कुछ नहीं रखेगा। और तुम उसमें लाइक ऐसे मतलब दूसरा स्किल भी यूज करके कर सकते हो, बट उतना इफेक्टिव नहीं है। एंड टाइड हंटर को देखो, एक टाइड हंटर का कितना है, कितने सेकंड के लिए वो रैवेज से रोकता है। टाइड हंटर रैवेज मारता है लाइक 2.8 सेकंड के लिए, स्टन करता है। मतलब इक्वल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों स्किल को तुम्हें इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, तुम्हें बीके भी ऑन करना ही पड़ेगा। मतलब नॉट नेसेसरी, या फिर बीकेपी ऑन, या फिर तुम वहां पे वहां से ब्लिंक मारकर लीप मार के, या फिर मतलब कुछ भी मार के भाग सकते हो तो या तुमको ये दोनों स्किल को लाइक तुम्हें एक ही कैटेगरी में डालना है। अगर स्किल कैटेगरी में डालना है तो ये दोनों को आजू बाजू में होगा, जो मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि इसका कूल डाउन लाइक 150 सेकंड का है एंड विंड रेंजर का कूल डाउन 40 सेकंड का है।
40 सेकंड इज स्टिल ओके मतलब आई डोंट थिंक सो स्टिल ओके सैम लाइक टाइड हंटर के 150 सेकंड है उसका अल्टी का और इसका 40 सेकंड विंड है रेंजर का वो 3 सेकंड के लिए रुकता है राइट या टाइड हंटर 2.8 सेकंड के लिए याइक्स अब बताओ तुम मतलब तुम ये दो स्किल को सेम कैटेगरी सेम लेवल का स्किल है बट एक का कूलडाउन इतना ज्यादा है एक का कूलडाउन इतना कम बिकॉज 1400 रुपए खर्च किया लाइक टाइड हंटर से अगर तुम्हें बचना है उस एरिया से बाहर निकलो अगर एरिया के अंदर रहना है तो तुम्हें ब्लिंक डैगर करना है ब्लिंक डैगर नहीं सर बीकेबी करना है हाँ यहाँ पे तुम स्टन नहीं होते हो बट तुम वहीं पे खड़े हो एक्चुअली ये पूरे गेम में ना इन्होंने काउंटर ड्राफ्ट फेज में जीते बट जस्ट बिकॉज यू हैव अ ट्रैप डज नॉट मीन दैट यू विल विन you have to also play accordingly things right got rough, but no, so I genuinely think like they सिर्फ seem वो to ही have नहीं the था strategies like really well put together. You saw this Elder Titan. I don't think you play Elder Titan against Team Secret anymore. They responded with Ench, which made it impossible to मतलब play. तुम्हारे पास हथियार दिए पर हथियार मतलब चलाना एक भी नहीं जानना है ऑटोमेटिकली तुम जीत गए हो ऐसे नहीं था तुमको उसके हिसाब से खेलना भी पड़ेगा वैसे आई थिंक विंड रेंजर के अल्टी को लाइक हेवीली नर्फ करना चाहिए बहुत ज्यादा हेवीली वो अल्टी को उस स्किल को तुम सैम उसका कास्ट रेंज देखो लाइक टाइड हंटर के अल्टी को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा रेंज और विंड का अल्टी का वो रेंज अल्टी नहीं वो स्किल का रेंज कितना ज्यादा है मेरे को आज एक डिस्कॉर्ड पे मैसेज आया बोलकर कि कुछ खरीदो मतलब गिफ्ट दे रहा हूँ करके ऐसा कुछ तो मैसेज आया मैंने ब्लॉक कर दिया कर्नल का लेवल लग गया था ना लड़ा तो मैंने उस पे क्लिक ही नहीं क्लिक ऑन दिस यूआरएल बोला था मेरे को नहीं आया ऐसा कुछ And if I hide the names of the teams and you tell me which draft is better, I have to say that I would go for IGs. I think it's बोलते हैं IG का draft better है. I understand the Enchantress and Wind Ranger versus Elder Titan, but there's just so much to them. Having an easier meta hero in a form of Spectre with that Aghanim's, it just plays itself. Team Secret, they just needed to outplay with every single team fight, and they did do exactly that. That last rush fight that brought them ages, that was so on point. Maybe a little bit of luck as well. खाना वाना खा लो. Life stealer to the edge of the pit and not being able to कितना get on top. कितना बजे को है 9:30 को है ना 9:30 को अभी 10:30 है. Like you see this Kunkka who's 6'4", Yes, so at 10:30 है अभी. 9'4", ओके हो गया ना अभी टाइम है ना अभी आ गया ना ऑलमोस्ट लास्ट अभी लास्ट मैच एलजीडी पीएस मतलब अभी भी आधा घंटे लेंगे अरे तुम ये गेम खेलकर भी सपोज लेट्स से हमने समझा कि अल्ट्रा टाइटन ये सब कॉपी जो भी हो विंड रेंजर ये सब मैं कॉपी करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा मैं तुम्हें पता है चूतिया कहलाए जाओगे नहीं चूतिया कहलाए जाओगे भाई मैं भाई ये दो चीजें हो सकती है या तो फिर वो पैच आउटडेटेड हो जाएगा मतलब लोग वही पिक करेंगे और नया पैच आ जाएगा या नया पैच आएगा ही गारंटी क्योंकि एल्डर टाइटन नर्फ होगा विंड रेंजर का ये स्किल नर्फ होगा शायद से टीआई के बाद वो नर्फ होगा अभी टीआई के वक्त कोई कुछ करेगा नहीं क्योंकि तुम देखो लाइक टाइड हंटर का ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ टाइड हंटर को जाना पड़ता है ये करना पड़ता है विंड रेंजर को जाना नहीं पड़ता है वो लाइक बेस में बैठ के चला सकता है मतलब इतना ग्लोबल कहाँ से आया कौन सा भगवान है तू मुझे लगता है मैन फाइट करने के लिए उनके पास कोई था नहीं सच बोलो तो टीम सीक्रेट के पास नहीं आईजी के पास तो स्लादर मैं स्लादर टाइप्स मेरे को ऐसा फील हो रहा था स्लादर माइट बी बेटर और समथिंग लाइक दैट एक टीम आईजी का मतलब मैन फाइट पे मुझे मार्स उतना पसंद नहीं आता ऐसे लाइक लिटरली मार्स मैन फाइटर नहीं है अरे मार्स क्या बोलता है पता है मैं तेरे पोजीशन बना सकता है मार्स पोजीशन बना के दे सकता है मार्स एक एरिया को कंट्रोल करता है तुम आ ही नहीं सकते अंदर बीकेबी के बिना या बट मुझे लगता है लाइक मैं अगर रखूंगा मैं स्लाडर को रखना चाहता हूँ जो एग्रेसिव हो सकता है ठीक है बट मार्स के पास कंफर्म स्टन है ठीक है लॉन्ग रेंज स्टन है मार्स फिजिकल डैमेज ऑब्जर्व कर सकता है yes. और मार्स अरीना डाल सकता है बट फिर भी मर जाता है तुम भाग नहीं सकते वहां से और एल्डर टाइटन ने अगर स्टॉम्प और फर्स्ट किल डाला कुंका का शिप डाला प्रॉपर मतलब उनके माइंड पे वो परफेक्ट सिनेरियो चालू था जहाँ पे मैं मार्स में अल्टी डालूंगा 5 जनों को वहाँ पे कुंका शिप डालेगा और स्पेक्टर अल्टी आएगा स्पेक्टर का अल्टी स्टॉम्प होगा
मतलब समझ में और आ रहा है लायन के क्या? पास और एग्नम सेप्टर होगा। लायन एक फिंगर मारेगा, बस इतना बड़ा सपना सपना नहीं है एग्नम सेप्टर ने। लायन एक फिंगर मारेगा और स्पेक्टर क्लीन अप करेगा, ठीक है? या मतलब क्लीन अप मतलब सबका एचपी आधा या कम हुआ रहेगा और सबको नहीं, स्पेक्टर एल्डर टाइटन का खत्म अल्टी में ही करेगा एक आधा एक हो करके। जाएगा सबका। हाँ तो वही जो क्लीन अप मतलब आधा काम तो कर लिया, आधा खाना खा लिया, बाकी का खत्म करने का काम स्पेक्टर करेगा। वैसे उनके माइंड में था, बट कैसा था कि जैसे मार्स अल्टी डालता था या सब भटक जाते, सब ये इधर उधर। सब ब्लिंक मार के निकल जाते थे। और एक्चुअली उनको ग्रुप अप करने नहीं दे रहे थे, वो स्पेक्टर को बार बार वन मैन डाउन ही खेल रहे थे। अगर तुमने ध्यान दिया तो कहीं पे भी स्पेक्टर फार्म कर रहा है तो लाइफ स्टीलर कॉन्स्टेंटली ये इसके अंदर घुसकर वो ऑलवेज वन मैन डाउन ही खेल रहे थे वो लोग। या मतलब उनको पांचों को उनका उनका बट लाइनअप इज ऑल अबाउट 5 मैन, बट ठीक है? मुझे इट्स ऑल अबाउट 5 मैन। मुझे लगता है मार्स से बेटर ये हो सकता था, डार्क सीरर। नहीं, क्योंकि लाइफ स्टीलर को कौन मैनफाइट करेगा, या फिर को पकड़ तो के लाइफ कौन स्टीलर के रखेगा? साथ माइंड कैसे नहीं, मार्स। डार्क सेयर के पास टर्न नहीं है ना। तो डार्क सीरर के डार्क पास इल्यूजन है और उसके पास इल्यूजन तो है। सबको वैक्यूम भी है, और तुम्हारे पास एल्डर टाइटन है, तुम्हारे पास कुंका है, वैक्यूम तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल है। वैक्यूम है बट पता नहीं, डार्क सेयर नहीं लिया। डार्क सेयर वैक्यूम और डाल के डार्क सीरर लाइक इसका मतलब लाइफ स्टीलर के नहीं, खिलाफ मैं बहुत अर्ली। इमेजिन नहीं कर सकता डार्क शेयर कैसे हीरो को, क्योंकि डार्क शेयर अकेले किसी को अभी तक फिनिश करते हुए नहीं, मैंने तो नहीं डार्क सीरर देखा। अकेला लाइक मार्स जिस कैटेगरी में आता है, लाइक पोजीशन बनाने वाला, डार्क सीरर भी उसी कैटेगरी में देखो आता है, पोजीशन मार्स बनाने वाला। मार्स या एटलीस्ट एक मार्स हीरो थोड़ा को सा, खलास तो कर सकता है, मार्स लाइक ठीक है? लेवल 6 में ज्यादा पावरफुल है देन लेवल 20 में, क्योंकि सामने वाले भी 20 में पहुंच जाएगा, तब मार्स उतना भाई पावरफुल बट नहीं होता डार्क है। शेयर ने अगर अपने ऊपर आयरन शेल डाला तो पपी ने तो सेकंड डाल दिया तो गया ना काम से, पर जो या गया फिर। तो वो उसके अपने ऊपर क्यों मारेगा? उसको आयरन शील्ड तो अर्ली गेम में फार्म के लिए चाहिए ना। उसका पास जो इल्यूजन होता है, उसका इल्यूजन सबसे पावरफुल इल्यूजन है गेम में। वो ठीक है बट आई थिंक वो लाइक तो डार्क सीरर का बीकेबी जो इल्यूजन है, रिप्लिका डैमेज 100% नहीं, डैमेज देता है, वो एंड ईएस डैमेज के टेक अल्टी में सब 200 निकल जाएंगे, ईएस के अल्टी में निकल जाएंगे वो। एंड 200% डैमेज टेक करता है, और उसका जो एग्नम शार्ड है उससे पंच भी लेकर मतलब ताबड़ तोड़े उसका पंच। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एज ए लाइक मैं मार्स की वो है जगह पे बट अगर इसको लेता। एक्चुअली कैसा है ना, मकुंका ने एक किसको भी एक्स किया है ना, वहां पे आके वो ब्लिंक मार के कारीना सेट करके वो तुम उसके बाहर भाग ही नहीं सकते, तुमको वही कंपलसरी मरना है वैसा। या आई थिंक लाइफ स्टीलर भी वैसे मरा था, बट डार्क शेयर वो ऑफर ठीक नहीं है सर। करता। अगर डार्क शेयर खेलना है तो हाँ, आई थिंक खच्ची टू है। पोजीशन 4 पे भी ठीक रहता था, बट विंड इज बेटर है क्योंकि डार्क शेयर नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ मार्स की जगह पे। वो खड़ा है, डार्क शेयर मतलब विंड रेंजर खड़े रह के और शैकल शॉट मार रहा है, वो शैकल शॉट से कितने मर रहे पता है? और डार्क सीरर के पास दूसरा स्किल है कि वो मूवमेंट स्पीड दे सकता है, हेवी मूवमेंट विंड स्पीड। कितना ब्रोकन है उसका विंड। तो विंड तो मैं ब्रोकन है तो बोल ही दिया। अनडिस्पे उसका 15 टैलेंट देखो, अनडिस्पेबल विंड रन, मतलब तुम डिस्पेल ही नहीं कर सकते विंड रन को। हाँ, लाइक वो तो ब्रोकन ही है विंड। लाइक मैं मार्स की जगह पे मैं उसको मतलब डार्क सीरर को देखना चाहता था, क्योंकि डार्क सीरर इतना अच्छा है, अगर टीए को कभी इल्यूजन में पकड़ लिया टीए खुद मारा जाएगा, उसके पास इतना ज्यादा डैमेज है। और लाइक डार्क सीरर मतलब इसीलिए फेमस है कि वो पोजीशन बनाने में एक्सपर्ट है। लाइक अगर निग्मा होता तो मैं डार्क सीरर 10 बार देख चुका होता कि माइंड कंट्रोल क्या खेलता है डार्क सीरर। तो मानोगे ना सर, माइंड कंट्रोल का वन ऑफ द बेस्ट हीरो है डार्क सीरर। वो पता नहीं, मैं उसको टी टाइड हंटर के वजह से ही जानता। टाइड हंटर टी है बुरो के नहीं, उसके लिए उसको सदमा आता रहेगा रात में, मतलब ऐसे बुरे सब आते रहे टाइड हंटर टी है, नहीं 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 गए टी है का उसको तीन नहीं, तो बोला एक I चौथे like- गेम में बोला मैं टाइड हंटर टी नहीं कर सकता, Like- प्लीज मेरा माइंड फक मत करो। उसने अलग दिया। तुम्हारा जो थियोरी है सैम, वो मुझे पसंद आया, बट वो थियोरी पे टीम आईजी खड़ा नहीं हो पाया। हाँ, क्यों खड़ा नहीं हो पाया? क्योंकि ऑलवेज वो लोग वन मैन डाउन ही खेल रहे थे। या सच बोलूं तो मतलब किसी को पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी को पकड़, क्या हो सबके रहा पास था? सबके पास ब्लिंक डैगर आ गया था।
लाइक निशा ब्लिंग डगा रही है फोस्ट अप। एक्चुअली क्या हुआ पता है, वो सबसे बुरा फाइट कहाँ पे था पता है, वो निशा मिड में फिंगर डाल के मरा नहीं, पप्पी मारा उसकी वजह से, याद है तुमको? हाँ हाँ हाँ। हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि वो उनका जो लाइन कॉम्बो लाइनअप है उस पे काम करने के लिए उनको ये चाहिए था, बीकेबी आने तक ही ये सब कर सकते हो। इसका जवाब सिर्फ बीकेबी के अंदर ही था, बट वो टीए को नहीं रोक पाए। वो उन्होंने कोशिश किया, पप्पी इसलिए क्या कर रहा टीए था, को रोकने वाला कोई हीरो ही नहीं था, पप्पी ने सही पिक किया टीए। पप्पी हाँ, और पप्पी क्या कर रहा था, वेव को टावर के नीचे आने नहीं दे रहा था। हाँ। तो तो क्या हो रहा था कि टीए को मतलब उनको टीए मैप में दिख ही नहीं रहा था, सच बोलूं तो। लाइक टीए को रोकने वाला हीरो ही नहीं था, किसी के पास बर्न डैमेज टाइप कुछ नहीं था, लाइक बोनस डैमेज, एक्स्ट्रा डैमेज गिरता है, कुछ नहीं था। जो भी किल्स उन्होंने टीए के ऊपर किए वो उनको स्मोक कंपलसरी यूज करना पड़ता था। ऐसा कहीं पे भी सिचुएशन नहीं था कि वो क्रीप फार्म कर रहा है और वहां पे आके वो गैंग होके मार गया, ऐसा सिचुएशन नहीं था। उनको स्मोक करके आना पड़ रहा था कंपलसरी। लाइक उनको 3 अल्टी मारना पड़ रहा था टीए को मारने के लिए, कुंका का, मार्स का, एंड 3 में 4 अल्टी एक्चुअली, लायन का भी मारना पड़ रहा था, स्पेक्टर को भी मारना पड़ रहा था। हाँ, बट इतना हैवी इन्वेस्टमेंट एक हीरो को मारने के लिए, उसके बाद लाइफ स्टीलर, और मतलब वो भी मर नहीं रहा था। मैं मानता हूँ एक बार वो न्यूट्रल उनका एंशेंट के वहां पे मरा, ठीक है, मतलब वो ट्रायंगल को कंटेस्ट कर रहे थे, वहां पे मरा, बट नहीं, वो मतलब इतना रिसोर्सेस एक हीरो को मारने के लिए, तो लाइफ स्टीलर क्या, वो तो जन्नती है, वो तो बिजनेस फार्म कर रहा था वो तो। वो तो बाद में अच्छे करके अंदर टैक्सी सर्विस लेके घूम रहा था अच्छे कर का। मुझे लगता है कुछ रेजर वेजर ऐसा टाइप्स कुछ तो लेना था। रेजर बैन था ना शायद से, कि नहीं इनका पहले पिक था, टीए लास्ट पिक था, तो सही पिक था। टीए इज लाइक चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, ऐसा पिक था टीम सीक्रेट के लिए। हमारे पास मेरे को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है रेजर बेटर पिक रहता लाइक था। रेजर वाइपर कुछ नहीं था टीए को जो काउंटर करे। टीए का रिफ्लेक्शन ओपी, बट टीए का था लास्ट पिक था ना, या टीए लास्ट पिक 10th पिक था। लाइक वही तो बोल रहा हूँ, लाइक उधर पपी बैठ के हंस रहा होगा, लाइक जब पिक फेस हुआ, कुंका उठाया, वो भी लाइक हंसते हंसते पिक किया टीए। मतलब उनका पिक इतना जल्दी था, तुम सोच नहीं सकते थे, वो रेडी बैठे थे। रेडी बैठे थे, हाँ, उनके पास ऑलरेडी जवाब था उस सिचुएशन का, और पूरा मैप विजन था, ठीक है। मतलब वो उसका, मुझे नहीं लगता कि रेजर वो ऑफर करता है, क्योंकि टीए ऑफर करता है, टीए रॉश भी ऑफर करता है, क्योंकि उन्होंने अर्ली आरएस निकाला है, राइट। अभी मेरे को समझ में आया, उन्होंने सारा रोशन का एजेस टीए को ही दिया, इसलिए उसका बीकेबी मतलब वो बीकेबी आ गया उसका, क्योंकि उनको 23 मिनट में बीकेबी ला गया टीए। और बट इतना ज्यादा लाइक लाइफ स्टीलर इतना फ्री पाम किया कि लाइक उसका लाइक 21 मिनट में सिल्वर एज आ चुका है। हाँ, बट क्या था ना, उसको एजेस दिया, ठीक है, उसको एजेस दिया, तो टीए को मतलब उनका जो माइंडसेट था, हमको मतलब टीए को ठोकने का है, वो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके पास एजेस है, वो लोग नहीं, एजेस पहला वाला एजेस स्पेक्टर ने चुरा लिया था। हाँ, पहला वाला, बट मतलब उनका माइंड तो, उनका क्या बोलते हैं, उनका हिसाब तो वही था ना, उनका कैलकुलेशन क्या था कि अगर मेरे जो कॉम्बो हीरोज रहते हैं ना, 5 मैन कॉम्बो वाले, उनको काउंटर करने के लिए एजेस ही लगता है। मेरे को ऐसा लग रहा है एजेस, या फिर तुम्हें ऑन डिस्क चाहिए। एक बार इन्वेस्ट पूरा कर देंगे तुमको मारने के लिए, तुम फिर से उठोगे, तो उसके बाद क्या करने का, मारने का सीधा, कुछ नहीं कर सकते। लाइक स्पेशली जब तुम्हारे पास ह्यूज कॉम्बो, एल्डर टाइटन का अल्टी, कुंका का अल्टी, मार्स का अल्टी, लाइक तुम्हें मारने के लिए पूरा रिसोर्स खत्म हो गया, एंड लाइक सेकंड टाइम कुछ नहीं है, तुम सीधा 5 मैन फाइट ले सकते हो। बाज में पप्पी बैठ के बाज में हील कर रहा, मतलब वो मतलब इतना कुछ मारने के बावजूद भी वो मरा नहीं ना। मुझे लगता है कि लाइक टीम आईजी इसीलिए हारा क्योंकि उनके जितने भी अल्टीज है उनका कूलडाउन बहुत ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली, लाइक टीम सीक्रेट का उनका कूलडाउन बहुत कम है। कूलडाउन हाई है और लेंस काफी पुश, मतलब वो लोग सेकंड फाइट नहीं ले सकते, लाइक सेकंड स्टैट में फाइट नहीं ले सकते, लाइक राउंड 2 फाइट नहीं है इनके पास। लाइक आईजी के पास राउंड 2 फाइट का कोई स्टैट्स ही नहीं है, लाइक कभी नहीं जा सकते। अदर एंड लाइक एक जन मर गया, लाइक इन्होंने एक जन के ऊपर बोल लो। एक और चीज मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, पप्पी ने ज्यादा फोकस मिड के क्रिप्स पे डाला था, क्योंकि टीए एंशिएंट स्टैक मतलब वो लेफ्ट और राइट वहीं पे फार्म करता है मिड लेन के। डोटा खेलता है मुंह से खाली।
वो लोग वहीं पे वहीं पे वो फाइट वहीं पे वो फार्म करता है, राइट? या लाइक पॉपी ने किया क्या, बॉटम लेन से क्रीप लेके मिड लेन पे टीए को खिलाया। हाँ वो है, वो खिलाया और बाद में पर वो पुश इंश्योर कर रहा था कि वो टावर के नीचे ना आए, क्योंकि वो इसलिए उनको अंदर आने के लिए उसने दोनों साइड पे वार्ड लगा के रख दिए थे, हाई ग्राउंड वार्ड था, तो उसको आने के लिए उसको स्मोक मार के आना पड़ रहा था। और स्मोक मारा तो समझ जाने का मतलब कोई दिख रहा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है कि हाँ ये लोग ने स्मोक मारा है या फिर स्मोक है करके। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो वो अच्छा स्ट्रेटजी था, मतलब उसने एक हार्ड सिचुएशन बना के रखा था टीए को गैंग करने के लिए। अगर उन्होंने टीए को गैंग भी किया तो लाइफ स्टीलर फ्री फार्म कर रहा है। या लाइफ स्टीलर ने फ्री फार्म किया, उसने साला 23 मिनट में सिल्वर एज लाके खड़ा कर दिया। ये देखो कैसा खेल रहा है ये बंदा, मतलब वो पूरा हैंडीकैप है, ऐसे ही खेलता है सीरियसली। तो देखेंगे, रुको एक मिनट। And then I go to school again, and I got my bachelor and my master degree. What are your other goals looking ahead? I'm 27. Well, it's good to live with my parents, but there is a time you need to move out and live for your own. Also Marc an sich ist wirklich auch ein Vorbild, auch für mich. Also er hat mir eigentlich beigebracht, dass es für jedes Problem eigentlich eine Lösung gibt. Man muss nur immer mal ein bisschen um die Ecke denken und I think he's the living example for how to manage the situation like that. I appreciate that I can be a part of his story, I would say. For me, Dota is a big thing in my life because it's my ओह इसका मतलब सर के जो साइड है उससे भी वो कंट्रोल करता है। I think it's good for me because I can accept my situation, my handicap better, and accept who you are, because mostly the people doesn't really know that I have a handicap online. When you play bad, they said you play bad, and it's okay. So this handicap wasn't really a thing, and now it's not really a thing. क्या हाथ से भी नहीं खेलता क्या, सिर्फ मुंह और सर से खेलता है क्या? हाँ वो सर के उससे ये करता है। Mars move in our own apartment is on down my his next goal is mostly मैं वो सोच रहा था कि मुंह से माउस कंट्रोल करता है, बट हम लोगों को 2 हाथ कम पड़ते हैं भाई। मैं आता हूँ, मैं भी खाना लेके आता हूँ। To everybody at home, because Mark is 3K MMR, and I think that for a lot of people it's like, oh shoot, you know, there's no excuses anymore. There's no excuses anymore at that point. But glad to see Mark doing well. My panel is also doing well because we're about to watch another semi-finals in the upper bracket, and we've swept things up a little bit. I'm joined by Insania and Tigov, but also LOA. Welcome to joining the panel. Thank you. How are you doing? Doing well, considering the circumstances. Oh, no. Okay, yeah, I like it. Focusing on the positive here as well, because we're about to witness some exciting Dota 2 here in the upper bracket, and I want to get something out of the way that I feel like hasn't been talked about today at all, or maybe at least not that much. We're about to witness one best of 3. Really nice Dota game. This one best of 3 for the players, for the teams, on the line. $2.2 million, Insania. It's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. Is that at all in your mind when you play? At all? I think it probably is going into the game. You probably know better than I do. But I would imagine, like, as soon as you start playing, it's kind of out of your head. But when you die or the game is looking rough, I think that's maybe when those thoughts start creeping in. But you gotta just shut it out. Yeah, will you agree with that? Yeah, I mean, if you focus on the money, you're going to lose sight of what you should be focusing on. Yeah. Okay. Otherwise, you know, the $1 million dream coil can turn into the $2 million feed at the Roche pit. No one's going to enjoy that. Apart from the opposing team, that would then get 2.2 extra million. By the way, you shouldn't feel sorry for whoever loses, because they already guaranteed a 1.4 million T. It's a big pot. There is enough for everyone. Yeah, I think it's you only really care about the money once if you've lost, and someone who lost early on, you know, very early on, and last place, you see everyone else earning, you know, 6 figures, and you're getting like 5. Like, oof, oh no, but yeah, millions are enough. You know, these players, I feel like this is the best thing, right?
you play for the love of the game, right? Yep. And then the money's the nice incentive at the end. Yep, and we're going to find out what these teams are playing against each other very, very soon. The second series for Virtus.pro on the main stage here at the International 10, and this team is looking incredible. Yesterday we saw their series against Vici Gaming with a 2-1, a very convincing finish, and I know people were worried that, like, okay, you know, this team, if they lose one game, they could be shaky, they could be losing confidence, and it could all go downhill from there, but instead the opposite was true. They lost one game, and then the fire kicked in, and now they're ready to go up against their opponents, PSG.LGD. The Goliaths, the Behemoths, it's PSG.LGD. In many people's bracket, they take it all. They take the crown, and they will become your world champion. They're still, of course, not there yet, but they are on the right track here in the upper bracket semifinals. They have had one series before this one against T1. They were able to take it. They did drop one game, but to be fair, I don't think anybody was doubting who was gonna take it in the end. And PSG.LGD looking so strong, looking unbeatable, and they have looked unbeatable for such a long time. Can they keep up the momentum? Can they keep up their ride here in this upper bracket? We're about to find out. This upper bracket semifinals between Virtus.pro and PSG.LGD coming to you very, very soon. And we're gonna break this series down real nice right now, because I want to start by talking about PSG.LGD. They're the favorites for the tournament. LOA, going into it, were you also as a team looking at PSG.LGD as the team to have the biggest bullseye on their backs? I think so. I think they are the team that came in and showed, at least at the last major, they are the most dominant. They are a very versatile team. Xiao8 is not an easy player to draft against. He's extremely adaptable. He's creative. They're not going to play the same thing twice in the same way. Even if they do, they play the Magnus multiple times. It could be played different ways. It could be itemized different ways. It's a very difficult team to play against, as I can tell you, and it's not an easy team to beat in a series. Yeah, and he mentioned Xiao8 as a coach, very important role. Yeah, no, for sure. And I think it's instrumental with PSG because, you know, speaking to Leon Arthur, top lad, by the way, helping bring, I think, you know, the Chinese scene to the Western scene. That's the best thing about this year, by the way. It's just understanding more about the teams, because, like, PSG is like that hallmark team where I think a lot of, you know, Westerners are now looking at this team going, I actually enjoy watching them play. I appreciate, because I know in the past it was very much, we had this kind of ignorance towards other scenes, I think. So that's pretty cool. But anyway, going back to Xiao8, you know, he was talking to me about how at the start of the season, he has the option to, you know, be streaming and coaching and stuff like that. But he actively said to his team, like, I'm not going to really focus on streaming. I'm just going to work on the team, lead by example. It's like, he could earn a lot of money, right, streaming, but he fully declines all that, focus fully on the team, and it's kind of that attitude that's kind of spearheads the team to being as dominant as they are today. Yeah, they are definitely looking very dominant. This TI for this organization, it's their 9th international. They only missed TI1. And I say that's their 9th international, but if you count LFY, you know, it's a little bit of sister organization there. Then they actually were in 10, and they've had top 6 finishes in almost every single one. But they have never won it, and there's something missing there in Stadium. Why haven't they ever won it? I think in previous years you might have even go as far as say they got unlucky. I think TI8 it was really like on the cusp, but at the end of like they just missed that little bit of clutch, which I think this team this year has. I think this team has proved that you know they can win any game. It doesn't matter if they're winning, if they're losing. At any given time in the game, they have the ability to come back, and I think I've heard a lot of people talk about how hardworking they are and how much time they put into the game, and I think that's why they have that
they've played these situations out. They've been behind. They've been ahead. They know what to do in almost every single situation. Yeah, and you mentioned that the clutchness of PSG.LGD, which is perfect because we have a clip for you guys of PSG.LGD versus T1. I think a lot of people have already seen this clip and they're not going to be sad to see it again because it was something that hadn't happened before at a TI main stage. A team fight. And it starts so simple with a team fight, T. You got a team fight and people die. It happens, right? Yeah, but then obviously as team fights go and how the meta of TI goes, I think it was 3 years ago, buybacks, it was 3 per series on average, and then suddenly it's now jumped up to the 7 to 8 plus. It's kind of how Dota become, and I believe you're kind of moving towards the point. This was the 10 buyback fight, yes? Yes, it was. Oh, beautiful, wasn't it? It really was, and it feels like such a unique thing, LOA. Like, have you seen this before? Like, obviously this fight you probably have, but have you seen like this scenario before where 10 people die back? 10 people buy back, but nobody died back. Yeah, it's definitely a unique scenario. I also think it speaks to LGD that this game for them is a very difficult game to win at a certain point. They probably feel like they're getting outscaled. I mean, they're playing against Doom, Mag, Medusa. Yeah. Very difficult late game fights, a lot of spells to think about. And they're making this game very hard for T1 to close out. Yeah. It takes a 10 buyback fight to win a game against this team. Yeah, and that's the main thing, right? It's like at least we got to see PSG bleed a little bit in this tournament, right? They lost once to Secret, and then now, of course, they lost to T1, eventually winning that series. But it does kind of show how PSG, like LOA was mentioning before, like the team, they are able to adapt not only within outside of a series, but in the series. Not a lot of teams can bring their prep to game 1, 2, or 3 and suddenly pivot that on the fly, right? And I think this is what PSG has shown throughout the tournament and previous tournaments. When they go to a game 3 or a game 2, they're not kind of still looking at their notes, right? They're kind of bringing in fresh ideas. They're thinking on the fly as they're losing, as they're kind of winning. Oh, we can perfect or improve here and there. Yeah, we got, by the way, 3 TI champions on the side of PSG.LGD, and I count the coach. We're counting Zhao as well as one of those 3. I know that they don't really consider themselves having the Wings flair because they are their own team, but they do have some of that in Sania. Yeah, absolutely. I mean, I think you can just tell by how much the Western scene loves them, right? Yes. I think the last time the West loved the Chinese team this much, it was Wings. It was Wings, yeah. Absolutely. I think everybody has seen the belly rubs. Love those. It was Those just a are little great. bit of rub for good luck. I want to talk about Virtus.pro as well because, yes, we have a lot of veterans, or a couple veterans at least, inside of PSG.LGD. On the side of Virtus.pro, this is the only team at the International 10 that nobody has ever been to an International before, not even the coach, because even though there's been first-timers on other teams, at least the coach is a more experienced one. But also Bulk, the coach of Virtus.pro, has not set foot on a main stage of TI. Right? Am I wrong in saying that? I see you're thinking. Did I do my research wrong, T? I had my thinking cap on because I know he was at TI 9, but I don't know I think he was like an assistant coach for the VP squad, I believe, but I can't remember. I think he was Gambit's coach that year. Yes. But he might have gone to the TI as like an assistant analyst type. But it was very hidden, very like not really like the 12th voice. Yeah, because Arseek was at that point the main coach. Exactly. Yeah. So it was his first like real. This is his time to shine, and doing pretty well. Bringing the young lads together. I think when you look at average age of that team, it's like 19, 20. Compare that to PSG, they're hitting 23, 24. Yeah. A little bit older. Yeah. So I think that alone, you really need someone who can bring those fresh ideas and kind of warp them into something that can actually win a tournament, right? Yeah, you need to unify the young spirit of that team. Yep. I think those guys do a tremendous job of it on their own. There are 5 players who come from the same time, the same spirit, the same fierce mentality, and they have that natural synergy, the natural buy-in into each other, the trust. You need somebody to help focus that, get them on the same page, drive it in a direction. And they got Bulk, of course, for that in-game. They got a very, very tall basketball player. And I'm saying that being 6'2", by the way. The very tall basketball player helping them outside the game. And I think that story is so interesting because it is a former basketball professional, and he's helping them specifically, as what DM called it, he's helping them with discipline. And that is something, if you're the best, because they've been the best in their region for the whole season, and that's smooth sailing. But if you're the best, maybe you get a little lax in Sania. Maybe at some point, sit back, and then you need someone to say, no, you're gonna wake up 8 a.m. and you're gonna have this healthy breakfast, and then you're gonna practice. Having someone to do that might be
a very valuable thing for them. Yeah, I mean, I know before almost every major, like during the online season, we scrimmed Virtus.pro quite a bit, and we just kept getting clapped. They would just dumpster us over and over and over again, and I'd be like, all right, Singapore major, this team's gonna show up, they're gonna show up big, they're gonna be so strong. And then for whatever reason, it seems like whenever they would do well in their online season, they'd go to the major, and then they would just fall flat. So it seems like whatever Mr. Basketball player is helping them with is working out, and they're looking a lot stronger. And yeah, I really think this team is like the most snowbally team here at the event. And if they win this series, I would not be surprised to see them go to the grand finals. Yeah, they of course are playing for Virtus.pro as an org. I want to mention them too. Obviously, we mentioned for PSG.LGD that they've done very well at TIs. Virtus.pro has had top 6 finishes, but not more than that. And of course, if you win this coming series, you are guaranteed top 3. So that would be a massive, massive jump in rankings already for the org. And of course, it's insanely good for the players if they make it that way. I think also, I feel like we have to mention to you that it's insanely good for the region and for maybe even the game as a whole, that such young players can just show up and do it. Yeah, I feel like Eastern Europe kind of held the title for that, really, right? We have Spirit and VP, very much kind of fresh faces to the scene to some degree. 2019, kind of them all kind of appearing to some degree. So yeah, I feel like Eastern Europe has really kind of shown how DPC is very healthy for promoting new Dota, bringing new teams up, and hopefully we have that trickle effect to other regions so that we are kind of having everyone equally supported and getting good quality Dota from everyone. Yeah, I know, Aloe, you're very passionate about the North American Dota scene. Of course, I mean, seeing this squad, do you feel like okay, this is what the DPC is meant to promote? I think everybody in Dota would love to see a lot of strong regions, and those really strong regions competing against each other with the best teams. I think healthy regions as a whole promotes better Dota, better community, better games. That's what we're here for, right? I think those guys embody the spirit of the region, along with team spirit, and they're doing a tremendous job at like being the flagship team for what they want to represent. Talking about flagships, I want to talk about flagships of the teams because Nothing to Say versus GPK. That's going to be my one to watch. Insania, how about you? I mean, I think Nightfall is probably one of the only carry player captains that we have here at TI. So for me, I think it's going to be really interesting to see how he matches up against Ahmed, like balancing the captaining act and at the same time, matching up against arguably the best carry player in the world. How about you, T? I'm just happy that we get. इतना prediction हुआ मेरा सही देखते. IG नीचे आ गया, ये तो राइट है अपना. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ. PSG आ जाए नीचे. फिर सीक्रेट नहीं, सीक्रेट आएगा तो कोई फायदा नहीं है. आठ करने में कितना पॉइंट मिलेगा? 2000, 9-10 पे 15,000 एंड 12-14 पे 20,000, 10,000, 15 प्लस पे 20,000, 20,000 ये पॉइंट मिलेगा. ओह, मेरे लेवल अप हो गया एक. Luna. Shaker, I love that. That was a good set. Shaker का अच्छा set था. And fantasy पे कितना पॉइंट मिलेगा? टॉप 10 पे रहूँगा तो 6 मतलब 6,000, मतलब 6 लेवल. टॉप 25 पे रहूँगा 3,000. टॉप 50 पे 25 पे रह सकता हूँ मैं. लाइक आई एम 20,000 नाउ. मैं 20,000 पे हूँ. 20,000 की बोल रहा हूँ. 2,000. 1900 था, अभी कम हो गया थोड़ी देर में. और पॉइंट भी नहीं. आईजी वाला पॉइंट मिलेगा अभी भी. आईजी वाला पॉइंट हो गया. स्कोर ऑफ द डे लाइक 150. जितना दिन बढ़ता है उतना स्कोर कम होता है.
अभी ज़्यादा पॉइंट नहीं देता है, लाइक इधर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला था, सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला मेरे को फर्स्ट डे 1 पे, लाइक टॉप 10 पे था डे 1 पे, इधर था। अब नीचे की तरफ अब 6 लेवल उधर मिल जाएगा, नॉट बैड। एंड या इधर से मेरे को मिल जाएगा 5 लेवल, 9 तो सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर PSG.LGD नीचे आ जाए तो 9। एंड इसके बाद सही नहीं होगा, उसके बाद लाइक VP अगर आगे गया तो 10। ओह नीचे आने वाले पे सही नहीं होता है, वो काउंट नहीं होता है नीचे आने वाले पे। अगर सीक्रेट हार गया एंड देन सीक्रेट आगे गया तो एक सही होगा, एंड अगर यहाँ से VP आगे गया तो सही होगा। जो इम्पॉसिबल है, लाइक मेरा और एक ही मिलेगा, वो है VP अगर आगे जाता है तो वो पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट नहीं काउंट होता है। इधर इससे हार गया ना चले बीस्ट कोस्ट, अगर यहाँ पे आ जाता है बीस्ट कोस्ट का अच्छा ये था, आई लाइक दैट टीम, तो मैंने सब उधर ही डाल दिया। एंड OG भी हार गया सला। Fire in general, to be honest, like he was there in the top 4. Like just the fact that you're able just to annoy this carry in 5, maybe you felt this at some point if you scrimmed against him or whatever, but like it's that off-lane momentum they bring, having to have like every team on series. They're bringing 4 heroes top at minute 10. Army is now free farming the entire jungle, and that one TP you do to top lane, you feel so bad because even if you kill to their timing in the mid game. They are not a team you're going to run over in lanes very often, and if you fall behind versus them, they are extremely good at controlling the map, and they very rarely. हाँ लाइक काय का मेहनत करूँ इधर बैठ बैठ के लिखूँ, इधर ही लिखने का मौका है मेरे पास। That footing on the map. All right, let me ask a question that I haven't asked yet for this series. Do you guys all have PSG.LGD winning? Like अगर Sam होता है, then it's like epic conversation होता है। Just like LOA said, you know, पूरा next level conversation होता है। Can they run over LGD? Because I think they're gonna have to. They're gonna have to get a big edge. अगर Sam and मतलब then can they analytic पे हम लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा conversation होता है। I think the way that होता LGD है। drafts, you're gonna be running into Ame, but he's gonna be playing with these Elder Titan Aura or the Magnus and Power. Whereas I think Nightfall's Sam के पास भी टाइम नहीं होता है, but आज luckily Sam मिल गया, and that's gonna be their way. इसलिए इतना conversation, heavy conversation हो रहा है कि you know हमारे बीच में डिबेट हो रहा है कि इससे ज़्यादा ये होता तो बेटर होता। हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का थम पूरा पर डिबेट कर रहे हैं। Make it short. Make it short. Oof. It's for an entertainment purpose, like हम debate करते They're the हैं। ones bring it to PSG. I think It's not PSG, like they know Sam exactly का जो what they point do of in this view है game. वो Like मुझे you पसंद नहीं mentioned, है। I'd like to see some Dawnbreaker or Darkseer, just heroes that VP can play with and into, you know, like kind of fail-safe aggressive style heroes. All right. Most important thing for you? If you go and you try and win the lanes versus LGD, don't lose the lane. Don't lose you know, the if lane. you go in with those bristles or Banes or Dawnbreaker carry, this type of stuff, win those lanes. All right, guys, let's have it. It's drafting time. Let's go. Virtus.pro versus PSG. Dire team ban. Radiant team pick. Dire team pick. Monkey and ये bad इधर। Oh PSG.LGD start like उधर Dawnbreaker insta pick Dawnbreaker first pick। like रिजर्व टाइम पे जाने से पहले ही like फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर पिक, मतलब इंस्टा पिक बोलते हैं इसको। एंड Dawnbreaker का मसल बहुत ज़्यादा है, like look at this leg मसल, पता नहीं कितने किलो का पुशअप मारता है, इस हथियार का वजन बहुत ज़्यादा होगा। क्या साइलेंसर Dawnbreaker का अल्टी को कैंसिल करता है? सैम बता पाएगा।
Radiant team pick. Earth Shaker. Radiant team ban. Fuck this pick, like कितना fast pick हो रहा है. अभी real pick चालू हो गया. Like Dawnbreaker insta pick, इन्होंने थोड़ा सा सोचा, but इन्होंने उतना ज़्यादा नहीं सोचा. Like 20 सेकंड ही सोचा, साइलेंसर और अनशेकर एक साथ पिक हो गया. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. दूसरा बैंड. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Game is going to be a fun too. 10 seconds remaining. TI 18 का रनर अप. सॉरी TI 18 की बोल रहा हूँ, TI 8 का. यार ये कंफ्यूजन हो जाता है. लाइक 2018 में हुआ तो 18 ही बोलता हूँ. लाइक TI 8 का रनर अप एंड TI, इन्होंने अभी तक TI पे Virtus.pro कभी टॉप 3 में भी नहीं गए. जो बोल रहे थे लाइक टॉप 6 तक ही पहुंचे अभी तक. लेस्ट्रैक एंड इन्वोकर बोथ बैंड एक साथ. वाओ. लाइक PSG.LGD के पास ही फर्स्ट पिक है, सो मॉर्क को जितना हो सके Virtus.pro कवर करने की कोशिश करेंगे. ये अच्छे करो. इतना मॉर्क कॉम्बो बहुत ओपी कॉम्बो है इस टूर्नामेंट पे सो फार. एंड फाइनली रिजर्व टाइम यूज कर रहे हैं PSG.LGD. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. रेसर. ओह, इनके पास मॉर्क का पिक करने का मौका है VP के पास. सोच रहे क्या मॉर्क उठाओ क्या ना उठाओ. Radiant team pick. एंड उन्होंने बेन उठाया. शुरू हो गया इनका. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. ¿Pero qué está pasando, manito? Yo me vuelvo loco. Radiant team pick. Dire team. Visage and Luna. Oh, that's a unique pick. Like first time देख रहा हूँ Visage pick होते हुए मैंने.
Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. वे भी सोच रहा है लूना मॉर्प उठाऊं क्या ना उठाऊं. Radiant team ban. Whistle back. 你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ बाहर का इतना म्यूजिक बज रहा है मेरे को अंदर का कुछ समझ सुनाई नहीं दे रहा है. 10 seconds remaining. Genie 19 is coming. Bunka. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Imber spirit. Choose wisely. नाइटफॉल सेफ लेनर है इनका. नाइटफॉल यूजुअली डॉन ब्रेकर खेलता है. Ember Spirit's offlaner DM is like offlaner and save position 4 and he's a position 5. Kingslayer.
किंग स्लेयर, कितने स्लेयर हो सकते हैं? ड्रैगन स्लेयर, लाइक ड्रैगन स्लेयर आई थिंक सबसे, उसमें सबसे औदा ये दिया जाता था वाइकिंग्स को, लाइक ड्रैगन स्लेयर. 我不理解。 He's a dragon slayer. वाइकिंग में लाइक अलग अलग नाम होते थे, लाइक जिन्होंने Assassin's Creed वालहला खेला उनको शायद मालूम होगा कि वाइकिंग का लोगों के कैरेक्टर के हिसाब से उनको नाम दिया जाता था. लाइक उनके साथ कोई कोई राजा बनने में किसी को मदद किया है, लाइक का नाम किंग मेकर बन गया, लाइक पेट नेम. एंड Assassin's Creed में स्पॉयलर्स का नाम था एवॉर उल्फ केस, क्योंकि उसके गर्दन में एक बार लाइक उल्फ ने काटा उसके सर पे, उसका नाम था उल्फ केस. एवॉर द उल्फ केस, उल्फ केस सर. Prepare for battle. Pero qué está pasando, 这么看着队友不生气吧，哥哥？怎么看着队友不生气吧，哥哥？ Да нет, друг, я не оправдываюсь. Да нет, друг, я не оправдываюсь. इतना घटिया स्मोक वेस्ट हो गया ना दोनों टीम की तरफ से. हालांकि इन्होंने स्मोक से वार्ड कर दिया जो इनके लिए इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा. Thirty seconds to battle. नहीं देखना है किसके पास क्या आइटम है, लाइक आइटम को देखो. लाइक आई थिंक इसका कंट्रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है. लुक एट दिस, लाइक कोलिंग ब्लेड मोस्टली लोग एक्स में रखते हैं. लाइक मेरा कोलिंग ब्लेड हमेशा एक्स में ही रहता है कि एक्स दबाने में सबसे आसानी होता है. तो दैट्स एक्स. लाइक इनका अलग है, चाइनीस हाथ है, लाइक छोटा है. अच्छा हमारा इंडियन के हाथ भी उतने लंबे नहीं है भाई कानून के. बट गेम हो चुका है शुरू. मिड लेन का ये दिखाते ही ये लोग, लाइक मिड लेन का एंड कुंका का हैरस चालू. तो बस क्या नैनचक है क्या? आई थिंक इसके पास एक नैनचक है और एक डिवाइन रेपियर. ठकाश ठकाश करके साउंड आता है. नैनचक ऐसा एक हथियार है जिससे किसी का भी सर फोड़ सकते हो. काफ़ी वर्सेटाइल वेपन है. डिफेंडिंग में एक्सपर्ट है एंड अटैकिंग में भी एक्सपर्ट है. ओके लाइक डीएम ऑफलाइन मतलब लेन स्विच करके खेल रहे हैं. ओह क्या डैमेज खाया लिटरली. लाइक बिसलर के खिलाफ अच्छा ही रहे बिसलबैक जितना स्किल यूज करेगा विसेज को उतना चार्ज मिलेगा. ओह कुरियर मारने में कामयाब. बट इनके पास बेन है. बेन बहुत अच्छा है. अच्छा ही तो है. एज ए पोजीशन 5 मैं एक बेन के ऊपर परफेक्टली भरोसा कर सकता हूँ अगर उसको खेलना आता है. जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ लाइक सीएम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ. भले ही सीएम के पास डिजेबल है, बाना रीजन है, आई डोंट थिंक सो मैं एक सीएम के ऊपर कभी भरोसा करूँगा ज़िंदगी में. नोप. एज अ सैम. Denied.
हाँ इसके पास बॉटल नहीं है, इसका बॉटल आ रहा है शायद कुरियर में। Fair exchange. Oh my God. लास्ट एडवाइस कुंका के पास सबसे ज़्यादा है, देन टाइड हंटर के पास है, देन ओह लुक एट दिस, लाइक दिस थिंग गिव अस शो अस लाइक यू नो हु इज द टॉप 3, तो फिर गोल्ड सिल्वर वो भी डाल देते हैं। या कुंका का नाम का आगे निकल गया खाता। Pero ¿qué está pasando, manito? Ya me vuelvo loco. Denied. Never refuse gold given. Gold from my chest. ज़्यादा डैमेज नहीं है। Earth first. Oh, there is another rune. Да нет, друг, я не оправдываюсь. Да нет, друг, я не оправдываюсь. बैठा है घात लगा के। 我不理解。 First blood. Oh. Thanks and have fun. And the open odds. जंप लगा उसके ऊपर। 我不理解。 Dire has secured their structures. ओ साइलेंसर मारा, पर डॉन ब्रेकर नहीं बच पाएगा। ओ डॉन ब्रेकर सीरियसली बच गया लास्ट शॉट से। ये सैम इसी की बात कर रहा था, हमेशा डॉन ब्रेकर के बाजू से निकल जाओ। लाइक डॉन ब्रेकर वो समुराई है जो सामने ही देखता है, बाजू में आ जाओगे उसको कुछ नहीं दिखेगा। डॉन ब्रेकर के लिए ज़िंदगी 2D में चलता है, और लोगों के लिए ज़िंदगी में 3D में चलता है। 3D विजन की बात कर रहा हूँ, डॉन ब्रेकर का विजन 2D है, बाजू से निकल जाओ। तो डॉन ब्रेकर काउंटर है, डॉन ब्रेकर काउंटर करना कैसे है, बाजू से निकल जाओ। ओह आ गया। Not so safe harbor, eh? ओ डीडी एंड डॉन ब्रेकर नहीं बच पाएगा। मैं मराठन धन पाओ। कुछ दिन पहले किसी का मैं ऐसे फेसबुक देख रहा तो किसी ने पोस्ट किया, आपने कौन सा मूवी देख रहे हो, लाइक यू नो फेसबुक में फ्रेंड। तो एक जन लिखता है मैं प्रेम रतन धन पाओ देख रहा हूँ। आई एम लाइक व्हाट द फक, गेट सम लाइफ। मतलब प्रेम रतन धन पाओ देखने की मूवी है। भाई ये बहुत मस्त है। ओह पूरा अच्छे करके ले अल्टी यूज़ कर लिया, तो वो आ रहा था, उन्होंने लेंस चेंज कर लिया क्या। उसको लाइक है ना बिसलबैक को लाइक ऐसे भी 2 मिनट लाइक 5 मिनट के बाद लेंस चेंज ही करना था, तो अभी चेंज कर लेता हूँ। अर्ली में इसी जगह से शुरू करता हूँ।
लाइक सेफ लेन बोला जाता है बट सेफ लेन सेफ नहीं है. Can you imagine the safe lane is no longer a safe? नंबर क्लिक नहीं करेगा. नंबर को एक फटके में समझ आ गया कि इधर से मेरे डाल नहीं गलेगी, इधर से निकल जाओ. Oh, Bane out of range था. मान नहीं पाता ले. अच्छा लाइक लेवल Bane level 4 का ही था. Your admiral is on board. Deceptive rune of invisibility. टैग बनाया क्या कुछ? हाँ एम्बर किल नहीं कर पा रहा. डैमेज नहीं है एम्बर के पास. डॉन ब्रेकर दिखा रहा है. Dyer's middle tower is in the wrong end of business. Yes, bounty. ओह अब एक स्टैक बन चुका है. एम्बर के लिए बहुत अच्छा है. बैक को ये स्टैक मिल रहा है, आराम से खाएगा. इनका स्टैक है अराउंड 900 गोल्ड हर एक स्टैक से 3. Dyer's bottom tower is on its way further down. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Step lively now. Your admiral is on board. चेन नहीं है तो बस अभी तक चेन नहीं है. Dyer's bottom tower is under attack. ओह डीडी मिल गया. ये बहुत अच्छा है. किल कर सकता है किसी को भी. देखा बिसलबैक सब आम छोड़ने वालों में से नहीं है. बिसलबैक Radiant's bottom tower has uninvited guests. Radiant's bottom tower has a nasty situation. Radiant's middle tower is बट under यार attack. एक चीज जान लो, लास्ट गेम और इस गेम में पॉपी नेक्स्ट लेवल है. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. बिसलबैक का इम्पैक्ट क्या होगा इस गेम में, जो मेरे को जानना है. ये भी Coin for me. That's
Dire's top tower is not on top of things. Be ensnared in fire. Invisibility. भाई वो दूसरा तीसरा बंदा है मतलब मुझे रहना ही नहीं इधर, मैं था ही नहीं इधर। एम्बर इज लाइक मैं सीधा पतली गली से निकल जाऊंगा। ये पपी का जो लेवल है उनका गेम प्ले का, उनका उतना लेवल हाई नहीं है। ओह क्या बचाया बेन ने यार उसको सच्ची में। ओ भाई 200 गोल्ड बच्चे मार के। ग्लोबल साइलेंस उससे अपने बच्चे को नहीं उतार सकता है। विशेष को बच्चे मारने पे बहुत पैसा मिलता है। ये देख रहा 300 गोल्ड। Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under fire. Radiant's bottom tower has a nasty situation. 100 gold another from that. Radiant's bottom tower is under attack. Thanks. 63, 62, 80, 63, 37. लेवल वाइज 5 लेवल ऊपर है। गोल्ड वाइज 4% गोल्ड ऊपर है। More than a 1k but less than a 2k. वन के थोड़ा सा ज्यादा है। Dire's middle tower is under attack. इनको एक किल ना निकल रहा है इस दोनों से बीच में से तो कोई फायदा नहीं। लाइक पी का फार्म बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है इसका फार्म। ओ इधर एक किल मिलने का चांस है। और यहाँ पे मारा गया। शिकार करने आए थे खुद ही शिकार बन गए। शिकार बन गए साले सीरियसली। एक्चुअली बहुत डैमेज कम है। एम्बर के पास आइटम नहीं है ना, जब फिर इसका मेलोस्टॉर्म नहीं आता तो फिर इसके पास कुछ डैमेज ही नहीं है। रवि पे इम्पल्स स्पीड का एक फ़ायदा है कि इम्पल्स स्पीड का मेलोस्टॉर्म आ गया, वो एक्टिव हो गया एंड इज लाइक मार के एक नंबर बना लेगा और उसको मैजिकल खेलना है तो। दूसरा टावर लॉस करते हुए लाइक टीम PSG ने एक भी टावर लॉस नहीं किया। देख सकते हैं टावर का HP लाइक 25%, लाइक 10% कम किया। ये तो पूरा वर्जिनी है। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहा है VP। जांच रहा है फर्स्ट गेम में, अगर जांच रहा है तो सेकंड गेम हार जाएंगे लोग। अच्छे करा रहा है बस अच्छे करा, आई थिंक ऑन टाइम पे पहुंच नहीं पाए। ओह पहुंच गया। Oh, that's a good tight hunter. Savage. And ये लोग पॉइंट नहीं ले पाएंगे। Step lively now. Your admiral is on board. टाइट हंटर सर्वाइव नहीं कर सकता। That was a good fight. They win the fight, but मुझे नहीं लगता नेटवर्क वाइज उतना चेंजेस हुआ है। लाइक शो रिकैप लाइक गोल्ड चेंजेस। लाइक लूना बैठ के चुपचाप फार्म ही करे जा रहा है, वो भी इनके जंगल में। और तुम लूना का फार्म नहीं रोक पाए तो कोई फायदा नहीं है। फाइनली VP ने टावर निकालने। Dire's middle tower is under fire. Let's shake things up.
एम्बर का मिलस्टोन बन चुका है, रैग्नम का भी फर्स्ट पार्ट बन चुका है। एम्बर इतना भी पीछे नहीं है। सैम होता तो बोलता है ये आइटम नहीं खरीदना चाहिए था, पॉइंट बूस्टर। ओह 100 गोल्ड, फ्री का 100 गोल्ड है भाई। इनविजिबिलिटी रून, विजलबैग आके चेक कर रहा था रून लिया क्या नहीं लिया। टाइटन टेस्ट छोड़ के भी जा सकते हैं, इसलिए विजलबैग आके चेक कर रहा है। अरे रून Double damage. Ooh, that's a good item, Philosopher's Stone. Philosopher's Stone is like 30 gold per minute. आपके टोटल इंटरनेट में ऐड होता रहेगा 30 गोल्ड पर मिनट। 1 मिनट का 30, 10 मिनट का तो नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। ओ सॉरी 30 नहीं, 80 1 मिनट का 80, 2 मिनट 10, 800 not only 80 gold, it's like perfect support item. 200 more mana regen। बेन के ऊपर देखना चाहूँगा फिलोसोफर स्टोन, बेन या फिर साइलेंसर। हालांकि ये लोग यूज़ नहीं करते फिलोसोफर स्टोन को। बेन और साइलेंसर के ऊपर यूज़ हुआ तो इनका एक आइटम आ जाता है, लाइक फ्लिंग डैगर, फोर स्टाफ आराम से आ सकता है। एंड इसके पास डैमेज नहीं है। That's a good global silence. Oh seriously, एक HP से बच गया। How much? 200। Oh my god, मिडवे में एक फाइट हो गया जहाँ विजलबैग की पली चढ़ गया। विजलबैग के पास अभी तक बीके भी नहीं आया। बीके के लिए उसको थोड़ा सा आइटम चाहिए, कैसे बोल चाहिए। Dire's middle tower has fallen. Like VP बहुत पिछड़े हुए हैं, के साथ नहीं खेल रहे, अलग अलग ही खेल। आज लगा था कि 4 मैच है, यू नो फर्स्ट में खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगा, सब टाइम टू टाइम होगा। हाँ ऐसा पहले गेम में उनका मशीन टूट गया, सीक्रेट के गेम में सीक्रेट का मशीन गया। It heals like Technical the salt sea difficulty. air. Blessings upon a loyal warrior. Pero qué está pasando, manito? Pero qué está pasando, manito? Back to 4. Radiant's top tower needs bandages. का एक Bad like बहुत ऊपर
बहुत ज़्यादा apa Radiant's middle tower is under attack. एग्नम सेक्टर से 2 बार उसका गश यूज फार्मिंग के बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा रेंज ओ 1000 किलो Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Isom is doubling. Bounty! Coin for me. Must be dreaming. अरे एम्बर टपक गया था Radiant's middle tower is not safe. I see that Radiant just fortified their structures. Radiant's middle tower may need a hand. Dire have fortified their structures. Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Moon's blessings. Radiant's middle tower is under attack. कम बैक कर सकते Heist! Not so safe harbor, eh? Radiant's bottom tower has uninvited guests. ¿Pero qué está pasando, manito? Llame al valor. Radiant's bottom tower is under attack. हेलो हुआ क्या तेरा वो सीएस जो यस अनुप दो मैच खेले 2 जीत गए अनुप गया खाना बाकी खाना नहीं खाएगा मैं तो खा के आया था 10:30 बजे कौन खाता है 10:30 बजे आया भाई क्या धोया है नहीं उन लोगों सीक्रेट वालों ने आईजी को यस अच्छा हुआ था मिस टीम निकल गया बस अब ये एलजीडी को भी निकाल दो नहीं लोअर ब्रैकेट में
बस वही वो निकाल लेगा उधर से भाई। T1 वर्सेस उसके खिलाफ जो मतलब अभी ओजी के साथ कल खेलेगा Dyer's middle tower is under fire. ना ओजी का जीतता है तो लगता है ओजी हारेगा T1 से। T1 के साथ थोड़ी उसका मैच है, टीम स्पिरिट के साथ है, टीम स्पिरिट के साथ मैच है कल 12:30 बजे। हारेगा आपका टीम करेक्ट बेचारा एविल जेनेसिस कर दिया। चल आरटीजी Radiant's top tower needs bandages. तो रैंक अप हुआ क्या है, गोल्ड या सिल्वर? सिल्वर इलाइट। रोज के साथ 2 मैच खेलते हो क्या रैंक? चलो टाइम का Radiant's top tower is being walloped. कौन आया? हो गया सैम खाना? खाना और थोड़ा नीचे कोई तो दोस्त लोग आए थे तो टहल के आ गए। चाय पीने गए थे? चाय नहीं पीने गए थे, ऐसे पीछे बात कर रहे थे। क्या चल रहा है? वीपी वर्सेस PSG.LGD मेरा LGD ले रहा है वीपी का। वीपी का भी अच्छा स्कोर है ना शायद से। हाँ वो बी ग्रुप में है ना वो। मेरे को बिसलबैग एज ए सेफ लेनर पसंद नहीं आया। बिसलबैग एज ए मेन कैरी मेरे को इस टाइम पे मैं सबसे पहले वी से मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वी यही जैसे Invisibility. That's for me. स्मोक किया, इनका पैटर्न क्या है? सेफ लेन पिस्टल बैक क्यों ऐसे? क्या करके बैठा था? नशा करके नहीं। ओ बर्ड के लिए डूड। Dominating performance. ओ बर्ड और Radiant's bottom tower has uninvited guests. Dyer's middle tower is in the wrong end of business. सब टीम वाले इधर-उधर घूम रहे हैं। Dyer's middle tower is इनका मतलब इनका वैसा नहीं है, गेम नहीं चल रहा है उनका, सोलो गेम चल रहा है, इधर-उधर घूम रहे हैं। एक्चुअली कैसा रहता है ना, अगर तुमने डायरेक्टली इसको मारा, क्या है उसका नाम, बर्ड का नाम क्या है वो, क्या है मार दिया भाई डॉन ब्रेकर को। इसको मारा नहीं रे, डॉन ब्रेकर को मार दिया ना इस विसेज का जो ग्रेव क्लिपर्स क्लोक है ना वो इट इज शेयर्ड बिटवीन दैट ये बच्चा। तो क्या करता है कि पहला हिट 4 हिट तक तो उसको कुछ डैमेज ही नहीं लगता, 4 हिट के बाद तो डैमेज लगता है। पर अगर तुम डायरेक्टली विसेज को मारोगे 4 हिट तो उसके बाद उसका बच्चा एक मतलब फिर वो बच्चा फट से मर जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये लिया है बीबी। विसेज बीबी का काउंटर है। हाँ विसेज बीबी का काउंटर है अर्ली गेम में। बीबी विसेज का काउंटर है। विसेज ने मतलब ऑलमोस्ट मार दिया था बीबी तो जो चार्ज होता है ना, चार्ज। अरे लैग क्यों हो रहा है यहाँ? गॉड गोइंग टू कम बैक। अरे लैग हो रहा था। ये देख विसेज कटा, बच गया। कौन सा स्किल है विसेज का?
60 Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are खुद भी सो जाता है। fortified. उसके बच्चे की तरह Radiant's top वो tower. अभी बैठ जाता है और उसके टाइम विन भी होता है और वो उसका विन होता है। Radiant's top tower was crushed to smithereens. बहुत टाइम लगा। तो बच्चे को मारने में बहुत पैसा मिलता है 100 गोल्ड। 100 गोल्ड मिलता है भाई। 2 को मारो 200 गोल्ड है ना। ऑफलाइनर लाइक हेल ऑफ डोमिनेटर बना ही रहे आजकल। ये आईजी वर्सेस उसमें कुंका को क्या धोया भाई। सीक्रेट है। सीक्रेट वालों ने लाइक सीक्रेट का गेम देख के ये गेम देखने के बाद बोरिंग। उनका भाई तीनों मैच बहुत ओपी हुआ था। नो उनका 2 ही हुआ है। 2 ही मैच था सॉरी दोनों मैच पर बहुत लंबा लंबा खींचा ना। कहाँ लंबा खींचा सही था एवरेज टाइम। नहीं भाई लंबा ही है टीआई में उतना था। सामने से ले लिया। PSG.LGD को मिला उसने ही उसको मिला। स्लैम जामा ग्लोबल Dominating, I guess. भाई बीबी कट के 4 हो गया सिल्वर है। बीबी कट गया। ओ मार दिया। ओ मार दिया इसने विसेज ने। विसेज में सिल्वर एज बनाता है। आइलैक कर गया किल करने के लिए। सिल्वर एज नहीं है विसेज के पास। विसेज का वो चार्ज है ना जिसे कट गया। और सर के ऊपर जो चार्ज है और उसके पास डीडी भी था। तो जो फर्स्ट या सेकंड होता है वो स्लो करके डैमेज देता है ना। भाई क्या फाइट हो गई यहाँ पे। सब टपाटपी कटने लगे। पीके भी खत्म सब कटने शुरू हो गया। नहीं बाई बैक किया खाली। एक बीके भी 你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ उसे टावर निकालना चाहिए था इसमें। लगता ना कोई है ही नहीं टीम में जिंदा जो कुछ कर सकता है। एक वीपी के पास टावर हिटर नहीं है। सैम क्या बिसल बैक को टावर हिटर मानोगे? सैम सर बिसल बैक को क्या टावर हिटर मानोगे? टावर किलर टावर पुशर अलग होता है किलर अलग होता है। ये कुछ नहीं इनमें से कुछ नहीं। ये पुशर है सिर्फ ये एम्बर स्पिरिट भी किलर नहीं है। टावर पुशर तो बिसल बैक भी है पिन पुश कर सकते हैं अच्छे से। पर टावर निकलना जैसे लूना टावर निकाल देगा खड़े खड़े। लूना भाई 2 मिनट दो उसको पूरा खाली कर देगा। इनके पास टावर का कोई मतलब मेगा घुस गया ना तब भी PSG.LGD खड़े रह के उधर फाइट कर सकते हैं। भाई पोस्ट अप मारे जा रहे हैं। बैठ गया पता है अभी निकलेगा। ओ भाई टाइड हंटर के लिए एक को स्लैम मार दिया। ओ इधर इसको लूना पे पकड़ा। लूना का चालू हो गया अल्टी। ओ कुंका मर गया। और लूना मरा ही नहीं था और मार दिया। मॉब ले लिया बैन ने मार के निकला भाई। ऐसा नहीं है भाई सब मर गए इनके। क्या हो गया? अरे गजब फाइट हो गई भाई इधर। मतलब लूना उसने टिप क्यों किया बेन को? क्या हुआ था? बेन ने किल लेकर लूना को मार दिया। लूना को मारा मरते मरते उसने उसको भी लेकर मर गया। वो तो लाइक हम भी डूबेंगे। HP से कम था उसको पता है मैं मरने वाला हूँ। और लास्ट लूना को हिट मार के
ये ब्रेन स्वाइप करके मर गया। हाँ मर गया। मैं तो मरा पर मैन को लेकर जा। रिकैप करेंगे क्या ये लोग? आई डोंट थिंक सो। कर रहे रिकैप कर रहे हैं। अच्छा तुम उसमें करोगे तो दिखाएगा। हम तो इन गेम देख रहे हैं। साइड को जो भाई पड़ा है ना वहाँ पे इको स्लैम सीधा। लाइक बेन के अल्टी से लूना मर नहीं रहा है लिटरली। इनके पास जो डैमेज नहीं है करने के लिए। द लेवलर मिल गया इनको एलजीडी को। दे दो लूना को। 40 मिनट में मिलता है ना। 37 मिनट हो गया ना भाई। लूना को दे दो। खच 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 काटेगी फ्रूट निंजा की तरह। नथिंग टू से चिल्ला रहा था क्या? लूना ने रख लिया अपने पास भाई द लेवलर। बट उसके पास दूसरा आइटम ज्यादा बेटर। हाँ पर वो पुशिंग के टाइम पे रखेगा निकालेगा लेवलर वो को। क्लॉक रखा है। फिक्स्ड क्लॉक लोकी रखा है। मैजिक रेजिस्टेंस आर्मर नहीं मैजिक रेजिस्टेंस मिलता है ना उसमें। या इनविजिबिलिटी मिलता है और मैजिक रेजिस्टेंस। गार्डियन ग्रेव्स गार्डियन ग्रेव्स को बोल रहा हूँ। ये ग्लिमर के ओके। ये बीबी के पास कोई मतलब टावर पुशर नहीं है। पुश कर सकता है टावर बट टावर निकाल नहीं सकता है। मतलब 3 जनों के बीच में उसने उसको ब्रेन अप करके मारा राइट? यस यस। मतलब उसके ऊपर अल्टी मार रहा था और उसको किल मिल जाता बट इधर ये कुंका आ गया बचाने के लिए और वो बच गया और इनके सारे मर गए। तो वहाँ पे वो ब्रेन स्वैप करके लास्ट में खुद को मतलब मरने वाला था खुद को उसको ब्रेन स्वैप करके उसको मार के मारा। पोजीशन 5 जब एक कोर को मारता है ना, मैं जब ग्रिमस्टॉप से कोर को मारता हूँ ना, दैट इज लाइक ह्यूज, दैट इज टू ह्यूज। मतलब होना ही नहीं चाहिए। पोजीशन 5 एक पोजीशन 1 या मतलब कोर को नहीं मारना चाहिए। वो मतलब पाप है वो। सामने वालों के लिए शर्मनाक चीज है। हाँ मर जाना। मिड या फिर सेफ लेन उससे मारेगा तो थोड़ा बहुत मतलब आ गया बेन। बेन ने सुला दिया अल्टी नहीं मारा। इनका रोटेशन बहुत अच्छा है। लाइक वीपी का PSG.LGD का रोटेशन बहुत जल्दी होता है। जैसा देख सब निकल गए तीनों। आई थिंक साइलेंसर को सेफ स्टिक जाना चाहिए इस मैच। वो चालू ही नहीं कर पाए उससे पहले ही मर रहा है ये साइलेंसर। कुछ दूसरा डोटा ही खेल रहे हैं। ये नॉर्मल डोटा नहीं है। ये लोग जो खेल रहे हैं मेरा झेपड़ा ही नहीं है। क्या क्यों किया है ये सब लाइनअप क्या है ये? इनका ये वीपी का। हाँ वीपी और LGD का ये कुछ अलग ही खेल रहे हैं लोग। लाइक वीपी का लाइनअप ये है क्योंकि वो पुराने मतलब ये सब नए टीम है ना, नए प्लेयर है। like पुराने लोगों को बोला भाड़ में जाओ भोसड़ी वालों, तुम जो बोलोगे हम उसका उल्टा करेंगे, ऐसा है। ईएस तो लिया है, ईएस तो मेटा में है, ईएस है, लूना है, इनके पास वो था बेन है, नहीं इनके पास एम्बर तो आना ही है। इनके पास वो था मतलब मॉर्फ लेने का ये था बट इन्होंने मॉर्फ पिक ही नहीं किया। हाँ अच्छा कर मॉर्फ कॉम्बो कर सकते थे। एक सिलोस लगा अभी दूसरा भी लगेगा। ये भी ऑन कर लिया। बैन मर जाएगा। साइड को काट दिया। ओहो एक और स्लैम अब कट जाएगा। साइलेंसर को दे। ओ बच गया। मर गया। ये भी गया। जीजी लिख दो भाई, बीच खत्म करो। औकात नहीं है, समझ गए। 2-2 मिनट तक स्कूल गए भाई उनका। औकात नहीं है। अब लूना जाएगी, लेवलर निकालेगी और कट 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 कट।
साइड मारा तो है बहुत पीछे उन्होंने वो फाइट क्यों लिया? कुंका के पास तो एजेस है। मेरे को हमें नहीं पूछा, हमें मत पूछो। इनके पास दिमाग होता तो ये सीक्रेट ना बन जाते। लेवलर पे स्विच किया है लूना ने, अब खत्म कर देंगे। अब देख नो भाई यही प्रॉब्लम, यही लूना और मॉर्फ का यही प्रॉब्लम है। भाई एक हिट में एचपी में आधा एचपी हो गया एक हिट में पेन का। कुछ नहीं कर सकते, खड़े के खड़े गए। अभी 2 मैच है ना, एक ही मैच होगा। और कौन जीता? पहला वीपी, दूसरा एलजीडी। नहीं भी फर्स्ट मैच है, एलजीडी जीता। ये अपर ब्रैकेट है ना ये तो। अगर वीपी जीत तो 2, वीपी नहीं जीतता तो हाँ बाहर में जाओ, नीचे अच्छा। जाओ साला। वही ना, मतलब कि स्कोर बोर्ड देखे भाई इसकी आग। लुक एट दिस, लाइक डॉन बेकर इनका सपोर्ट है, ये भी साला 26 लेवल पे। मतलब साइलेंसर पिक हुआ, साइलेंसर अच्छा पिक था, बट साइलेंसर किसी काम के नहीं आया। लाइक एक फोस्ट अप और एक बूट। सेफ स्टिक जा सकता था भाई, वो लूना को रोक सकता या भाई कुंका उसका रोक सकता। खुद का बूट तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो शिपस्टिक बनाएगा। आशा तो कर सकते हैं। आशा उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत ज्यादा स्कैरी है डूड। कौन? वो कुछ तो दूसरे लेवल पे ही खेल रहे हैं। कौन? PSLGD? हाँ नहीं वो तो अलग दूसरे ही कर लेवल रहे है, हैं। ये वीपी मतलब इनको आता ही नहीं है, ये बात ले। इनसे होता ही नहीं है। क्या फेक क्राउड क्या चिल्ला पुकार कर रहा है, खाली है स्टेज। एक आइटम वाइज देखो, लाइक बहुत गंदा है। सीक्रेट तो भाई अपर ब्रैकेट फाइनल में पहुंच चुका है। और उसके साथ टॉप होगा 3 या टॉप 4 ऐसे कुछ तो। नहीं टॉप 3 पे पहुंच गया सीक्रेट, लाइक मिनिमम टॉप 3 है। यस, अपर ब्रैकेट में टॉप 3 है। नहीं वो टॉप 3 में ही, अपर ब्रैकेट नहीं, लोअर ब्रैकेट में भी टॉप 3 है। स्टेडियम पे अपर ब्रैकेट फाइनल्स में सीक्रेट है, और इसमें से एलजीडी जीतेगा, एलजीडी आ जाएगा। या लाइक इनमें से जो भी जीता वो टॉप 3 में पहुंच गया है। और उसके बाद सिर्फ लोअर ब्रैकेट का ही मैच होंगे अब। लाइक कल उसके साथ ओजी का मैच होगा, 2 मैच होगा कल ओजी का। कल ओजी वर्सेस टी स्पिरिट का होगा, और ओजी वर्सेस उसका भी, आईजी का भी होगा। नहीं, आईजी का नीचे के साथ होगा। T1 वर्सेस वीजी में से जो जीतेगा उसका आईजी के साथ होगा। हाँ, और वीपी अगर यहाँ पे हारती है तो ओजी वर्सेस वीपी होगा। ओजी के साथ, ये ओजी के साथ आईजी का ही होगा। आईजी नीचे चला गया। ओह यस, दफा ये तो कभी देखा ही नहीं। वही देख के तो बोल रहा हूँ। मतलब कि आईजी को चूज दिया था क्या, तुम नीचे जा सकते हो ऊपर जा सकते हो, उन्होंने बोला ओजी के साथ नहीं खेलेंगे, टीवन को ही साथ खेलेंगे, धो सकेंगे। बोले हम उसके बाद वाले नेक्स्ट में हम और ओजी खेलेंगे सिर्फ। लोअर ब्रैकेट का फाइनल कितना है? देख वो होगा फिर आई थिंक आज तक मतलब लोअर ब्रैकेट से शुरू करके सिर्फ एक ही टीम फाइनल पे पहुंचा है, वो है लिक्विड या 9 पे। वो भी जरा आके हार गया था ओजी के साथ। हाँ बट वो लोअर ब्रैकेट में हर मैच जीता था। वो लोअर ब्रैकेट से ही मतलब पूरा फाइट करके आगे आए थे। 8 में ओजी नहीं था। अभी लोअर ब्रैकेट का एक भी टीम नहीं है, लाइक लोअर ब्रैकेट के जो 8 टीम थे, 8 के 8 घर गए। लाइक अनडाइंग, फनाटिक, क्वींसी, एस्ट्रे, पीसी, एलाइन, सीजी, एलिफेंट, सब के सब बट अभी जितने भी टीम बचे हैं लाइक सब अपर ब्रैकेट के। आईजी, टीम स्पिरिट, सीक्रेट, ओजी, पीएसजी, एलजीडी, T1, वीपी, वीजी। They just hit 49 different heroes picked at this tournament with that Dawnbreaker, and people have been saying it even before this tournament started. मतलब इनको कितना पैसे का ऑफर मिला होगा, फिर ऐसे बकचोदी कर रहे हैं। The most versatile TI winners of all time. They picked 58 different heroes, which
during TI6 was over half the hero pool कि available. इधर होगा मतलब With VFX में Faith कुछ Beyond नहीं है and तुम Y इधर ही on the देखोगे अभी roster, could you really be surprised? It's just a little fraction of it. VP may be a little bit out of their depth when they have to deal with juggernauts like this, which Juggernaut also picked. Same with Techies, and it's not Xingqiu. Faith Beyond played Techies at TI6. Will we see it? I don't know. So far, it doesn't seem like LGD are even being tested enough to start dipping into the reserves of their capabilities. But I don't know. VP, hopefully they can bring it back for game number 2 because so far I don't really know if these... तेरा ब्लेड भाई देख क्या लंबा चौड़ा भाई लग रहा है एकदम आय हाय Those guys are terrifying. तो Of उड़ the रहा है massive नीचे big देख स्वेन visage को as देख well as इज्जत we ही नहीं है saw भाई that स्वेन की visage in the नेचर game, इनका which कोई is now इज्जत we're ही going to नहीं talk है all about that. But first, I want to check in with another member of our broadcast team that we haven't seen enough of, in my opinion. इसका But we're तेरे going को to नहीं check लग in रहा with her right प्रोग्रेस हो गया है now. वॉरियर It's Casey. लास्ट मैच से ज्यादा देख Hi, नहीं oh लग my रहा gosh. What तू a लास्ट मैच couple का of टीआई का days. देखेगा This has been absolutely insane. It's तो आई थिंक इसको exactly the कैंसर TI था ना इसको that क्यों we नहीं बुलाया wanted. इसको क्यों नहीं बुलाया And it's the मम्मी बन TI गया we ना deserve. Dare I say it? अम्मा बना है Trying to interact इसने with as बनाया many of you और as पीछे possible डायनासोर उसमें online because I know that this community is just पीछे so जो फोटो देख fantastic बना and के it रखा हुआ spans the entire globe. So I thought I'd ask a few interesting लगाया भी questions देखो to try सर to get some होटल का वो वाला conversations going. I'll TI8 get का to that in फोटो just a moment because I got some responses I wasn't expecting. And actually, I'm not even sure we're allowed to share some of them, but we're going to try anyway नोटल because वर्सेस why फ्लाई not? वाला I've been होटल seeing a वर्सेस lot of फ्लाई tweets from people who've been watching TI since the very beginning, like all the way back to अगर इस बार TI1, रहता ना TI2, इजी तो TI3. बहुत हो And I'm जाता also seeing a सुमेल lot का of भी बदला हो messages जाता from newer नोटल ने तो community बदला ले ही members for लिया whom this is their very होटल first तो TI. So I want to 8 में share ही ले some of लिया them because I 18 think में we ही can ले all लिया remember that excitement of सुमेल लेता watching इस our बार very first main event. So I want to take a look at this one from Oracle Spammer who said, I started playing Dota when Dragon's Blood came out, so TI10 is my first TI, but damn, it's already the most brutal thing I've ever seen. And by the way, that was tweeted, TI10 I is the believe, brutal बोल रहा है was सब that before EG was eliminated? Ooh, spoiler alert. Ooh, I hope you already knew that. I want to get to a couple TI8 other में tweets देखता that ना I think ब्रूटलिटी encapsulate how किसे we're all बोलते हैं feeling as we enter and टॉक्सिसिटी किसको start to बोलते हैं end पता out चलता and तेरे close को out day TI8  3. So let's परफेक्ट take a ये look. था These four were some of मूवी my जैसा था favorites. लिटरली I asked if you could describe Huh? TI10 in just one That sentence so is far right. this year. What would you TI8 लाइक say? लिटरली एक मूवी शो And चल रहा था Harry Blade said, expect the TI9 unexpected and सबसे enjoy the मतलब ride. सस्ता TI था मतलब Ed Scruff said, well OG worth the आया खेला wait. जीत के Yes, निकल I गया agree. Although 2 years is so long. I thought this one summed it up for all of us. Just, I hope I said that right. someone pick And then this Techies last one, excuse me, Ravenshaw 520. well worth You wait can see yourself out. किसको व्यर्थ लग रहा है I'm भाई kidding, वेट but like someone हमको picked नहीं लग Techies. रहा है No, worth it no. अब We तक do not TI do दूसरा 11 that. देखते हैं हम हाँ We'll see. तो Okay. और इसे Now हमका we get बैटल to पास भी अगर आता अगर TI which is TI10 this होता or राइट the टाइम पे तो GIFs. आना खेल So रहा what would you होता say? I said if you could वो describe जी तीसरी बार TI10 जीत so चुका far, होता GIF, what would you show? So let's go through some of आना these. खेल We're रहा gonna see if we होता can get them to work. Corrupt Drop Bear, nice username. ओ Harken ये back बहुत to पुराना TI9 and Cap's water bottle cast ये तो है and ये said, "This is me versus my family seeing me yell at the TV." As well, Nolan tweeted ये the बॉटम Steve में जब Carell फाइट हुआ nodding, था tearing up. उसका Actually, a lot of you used टीम this कौन GIF सा to था याद describe है it, especially after the match yesterday where we saw the brothers. Just the nodding and the single tear. And then Fall Emery tweeted, "Come on, bro, don't leave me hanging." With the पता है high सैम इस five, बार TI में another बहुत बार homage फक to the बोला गया brothers. Now, as I send it सैम back to you guys, Okay. I have a very important Yeah. thing I would like to bring up. याद है ना एक बार व्हाट द Last फक बोल time दिया था एक कास्टर को on उसको this, लात मार के निकाल दिया था tweeted about this इस dinosaur, बार TI which में is मतलब one of my कितना daughter's फक यूज favorites. हुआ And वर्ड I called it a diplodocus. And many of किसने you बोला fuck saw by the way? fit वो उसने to उस call me लड़की out ने for बोला mispronouncing it. जिसका हंसी है Now, I respect that we all लाइक say यूजुअली things प्लेयर बोला differently, but दे in डजंट my फक्ड अप defense, this फक अप is my daughter's book, and लड़की this बोला is तो how ठीक the है man लड़के बोले says तो ही it. गांड मारते तो ये क्या बच्चा पालना सिखाएगी या Just in case you didn't hear that. Diplodocus. Does को he बोलते हैं टाइम sound वेस्ट like an करना overly hyped cheerleader when he says it? Yes. चिड़ी बात है Do we fault him for it? No, because that's how we all sound at TI10. And with that, back to you. Keep tweeting with hashtag TI10 so I can share more of this. throughout the event, guys. एफी नाम है एफी Thank you so much, Casey. And I must say, I also वो remember some कास्टर of ने her कैसे words मतलब some of the other days where कास्टिंग she कर रहा था said मतलब that इतना we have to सिचुएशन look out अच्छा for था कि उसने वो potential मुंह से Easter निकल eggs गया व्हाट द in फक हैपेंड her उसको background. निकाल There दिया have been
been able था. to figure anything out yet. So if you know anything, let me know.
or let Casey know that you figured it out. I want to talk more about the game we just इस witnessed, बार though, तो because like we're in the सब upper bracket fuck semifinals, and fuck PSG.LGD इस्तेमाल कर रहे हैं. is on their way to becoming guaranteed top 3 at this event. It's just a game of Dota 2, 2.2 million extra on the line on one series, and they did it with a Visage position 5, Curtis. Yeah, big fan. I think in particular LGD, they've been running this combo in pubs, Visage Luna. It's extremely strong. It's basically like Visage Drow in that the aura just gives your birds extra damage, but Luna also provides additional team fight. अगर PSG.LGD मतलब VP दोबारा हारा तो सीधा घर जाएगा. Position 5 Visage था क्या वो? Yes. How VP tried to approach that. It was the bristleback carry they have. They try and lane it into the Luna as well, which I really feel like trying to aggressively lane into Luna doesn't feel too great if they bring double support. Right? Visage का main skill magical है, main do damage. some bullying, but as soon as you bring that third support Back magical के खिलाफ नहीं जा सकता है. आप Back तो पीठ पे जाके मैं मार सकते हो बच्चों से, पर stun कर सकते हो. Laning phase with the lead they really wanted, and of course Ember dying solo to the mid kunker. Yeah, I mean aggressively tri-laning into Luna Visage tri-lane, very difficult at the end of the day. Two of the strongest tri-laners out there. I also think इसको अभी तक घर नहीं बेचा, लाके बकचोदी पे ले इधर. लोग कम है हमारे पास. I think VP went in with an idea of we want to win the lanes tempo this game, and the lanes didn't pan out for them, so they were on the back foot. But they did have some very good team fights from a position that was not easy. I want to talk about those team fights because, to be fair, before the game started, we said that, okay, VP, their best shot they have at taking down PSG.LGD is set that tempo high and run over PSG.LGD, which obviously didn't work in the lanes, right? ये क्या opinion देंगे भाई, इनका भी पहला ही टी आई है. But they're still able to take these team fights. क्या QC वो बहुत पुराना player है. नहीं उसका हर एक TI पे बहुत पुराना TI player है. First TI नहीं है, last year भी था, उससे पहले भी था. हाँ तो नहीं ना कभी. इससे बोला, वो हमेशा आता है, उसको हमेशा बुला के रहते हैं. Remnants coming in as well to try and get the final bit of damage to kill off army. Like they did do the nice things well. जैसे OG अगर हार गया ना तो OG को घर नहीं बेचेगा, रखना पड़ेगा उसको. Which are kind of very good against aggression, right? You have Dawn, you have Tide, you have. और VP आ रहा बोलेगा भाग भोसड़ी का. Even if they get picked off, you're gonna have to use so many. उसको तो अभी तक रख दिया होगा. You're never really getting deeper into the map. So VP had some amazing pickoffs, but they just didn't have that extra little something to get into the game properly. Now we just saw the players walk back into the booth, so there's one thing they've been talking about in the break that they have had. It's how to. For PSG.LGD is how to continue on winning, sure, but I want to talk about what VP needs to change. Like देख next match में OG के time पे उसको बुलाएगा, Fly को बुलाएगा. What do they need to address in order to turn this around? क्या लगता है कौन जीतेगा? पूछेगा. Just felt a bit weird in that game. What's the next move from the Noted? They're really good at running early aggression, but I feel like it's sort of hard to run over LGD. I think the only time that LGD showed a bit of weakness in this tournament was when they played that game 2 versus T1, and T1 picked a long scale, and LGD, in that game, they made some uncharacteristic moves. You know, they tried to go on carry Dusa at their tier 2 mid. It was not successful. I think in this game, like VP, even though they got some things going, like Bane Silencer support, some bristleback carry, there's no real skill coming from, so it's like they're on the timer, they're pressured, and they have to outplay the enemy in order to win. Just outplay the enemy in order to win. Isn't that what you always should do, though? The best team is surely the one that always outplays the other. Is Dota not that simple, LOA? To a degree, though, these things make it easier or harder to do sometimes. साढ़े बारह नहीं, 1:30 बजे बोल. Point is true in that नाम का ही 12:30 बजे. T1 has had LGD's number in some of these series. They don't beat them, but they often take games off them. These games are very close, and I think it's because T1 is a very good team at extending games and getting to their win condition, and it puts a lot of pressure. मतलब audience नहीं है, फिर भी इनको बकचोदी कम नहीं करना है. Has every hero of VP honor, and she's sitting with 200 or 300 HP, and it's that close to maybe नींद नहीं आनी चाहिए, रात को 1:30 तक मैच है. Maybe Dawnbreaker didn't have an assault Kuros, right? Maybe she. भाई इससे ज़्यादा रात लगेगा. रात के 7 बजे चालू हुआ, सुबह के 12 बजे तक मैं देखा हूँ. वो अलग टी है भाई, उसका मजा ही अलग होता. AC low there's too much farm for sure, but yeah, like they mentioned as well, just the idea for VP, if you don't crush your lanes, at least have a way to play out like these fights, because VP, they did play really well at punishing PSG. Like this wasn't the flawless game, because like PSG running in the mid river fight, they're kind of running into the river, then instantly dying. Like if VP had a better lineup, that's kind of the turn of the tides, right? That's when they kind of make their mark in the game. So VP was always in position to punish any mistake PSG made, right? It's just they don't have that extra core, that hero, right? They also had something that helped the Bursel use his timing a bit better, like some kind of buff. I mean, historically we've seen
Bristle IO or something like Again, Bristle Omni type lineup, right? Something that can let them go high ground or go in the Roche but take the fight a bit easier might have helped them a bit as well. Yeah. Might have helped them a little bit indeed. If I were to look at this lineup a week ago, I would have said courtesy of these two supports, the Dawnbreaker Visage support duo, how can you get away with that? That looks very greedy, and they also got the gold. Who was sacked for that? Was there anybody that gave up some of their gold to be able to allow XinQ and Y to get that? Honestly, Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team pick. Ten seconds remaining. Team pick. Dire team pick. Monkey King. Ten seconds Tiny remaining. Italia. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Winter Wyvern. मैग्नस बैन कर दिया. Winter Byron. 10 seconds remaining. Ban. Monkey King Winter. 你这么菜，你的队友不会生气吧，哥哥？ दिया उन्होंने आयो उठाने के लिए. ठीक है. तीसरा मैच का इनको 10 seconds remaining. सोच लग रही है. एक्चुअली PSG थोड़ा एक साइलेंसर बैन करना 5 चाहिए. seconds remaining. Dire team ban. LGD wants third match. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ban. क्या बैन कर रही है? अनडाइंग और ये हेड राइडर. 10 seconds remaining. अनडाइंग बैन कर रहे मतलब शायद से स्नैपर उठाने वाले क्या? क्या पता भाई, इन लोगों का पिक क्या गांजा मार कर पिक करेंगे ये लोग. Dire team ban. बैट राइडर बैन किया, टीम कराने वाला शायद से. टिंकर बैन. बोला ना, मैं बोला था टिंकर आने वाला. बैट राइडर बैन मतलब टिंकर आने वाला है करके टिंकर बैन कर दिया उन्होंने. 10 seconds remaining. अभी टिंकर बैन हो गया. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Invoker.
इनोकर बैन मतलब वाइड बीच स्पिरिट 10 seconds remaining. मेरे को लग रहा है वर्ड स्पिरिट मिट इनोकर जाएगा। क्यों बैन किया फिर इन्होंने? 5 seconds remaining. इनोकर किसको ठोकता है? ओके मे बी वो टाइनी को नहीं इनोकर मिड हीरो है उनका मिड के लिए कुछ तो लाइनअप में प्रॉब्लम दे रहा है इनोकर Dire team ban. Dire team pick. Radiant team pick. Necrophos. मॉर्फलिन नेक्रोफॉस शायद से 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Necrophos. Radiant team pick. मॉर्फलिंग भी बैन, Dire फॉक team भी pick. बैन, स्टॉर्म स्पिरिट भी बैन, टिंकर भी बैन, 这么菜的队友不会生气吧，哥哥？ डार्क से डार्क सीयर और स्पिरिट ओह डार्क से ऑफलाइन, टाइनी सेफलाइन 10 seconds पक बैन remaining. किया यस पक तो बैन हुआ। टाइनी सेफलाइन जाएगा, डार्क से ऑफलाइन, स्पिरिट आयो Radiant team तो ban. सपोर्ट मिड लेनर बाकी है, इनका पिक हो जाए, अभी सेफलाइन पिक होगा इनका भी या ऑफलाइन। ओरेकल मैं सोचा ही था मेरे को लगा ये लोग ओरेकल उठाएंगे करके क्योंकि वो पर्च कर देगा करके फिर जो डिसरप्टर ये नहीं कर पा रहा था शैडो डीमन वो ओरेकल करेगा बट उन्होंने ओरेकल पिक कर दिया मतलब वो ओरेकल पोजीशन 5 विंटर मोस्ट लाइकली पोजीशन 4 नेक्रो पोजीशन 2 सेफलेन मंकी या फिर मिड मंकी हो सकता है नहीं से मिड नेक्रोफॉस होगा मिड नेक्रोफोस ऑफलाइन भी नेक्रोफोस हो सकता है मेरे को ऑफलाइन ही लग रहा है नेक्रो। भाई फाइनली मैं डार्क सीरियर को देख रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वो मंकी किंग टाइनी के अगेंस्ट लेन करेगा? मुझे नहीं टाइनी लगता सेफलाइन है, टाइनी मिड हो नेक्रो Dire team टाइनी मिड होगा आई थिंक सो मुझे लगता है टाइनी सेफलेन होगा ये रोटेट करेगा मतलब तुम अगर टाइनी को मिड बोल रहे हो मतलब वो रोटेट करने को बोल रहे हो वो क्या रोटेट करने वाला है लेवल 6 होके क्या वो करेगा जंगल करेगा क्या? नहीं वो सेफलेन टाइनी है टाइनी को ब्लिंक डैगर और यही तो चाहिए। नेक्रो शायद से आयो टाइनी करेगा, आयो टाइनी होगा, मिड मंकी रहेगा या फिर मिड मंकी नेक्रो ऑफलाइन मुझे तो यही लास्ट लग पिक रहा है होगा तब पता चलेगा क्या होगा टाइनी। लास्ट पिक अभी मिड होगा मोस्ट लाइक नहीं हाँ मिड ही होगा क्या पता आयो को ऑफलाइन आई डाल थिंक दे साला सेव की तरह। आई थिंक कुंका इज ओपन आई गेस 10 seconds सच remaining. बोलूं तो क्योंकि मंकी किंग को पकड़ सकता है एक्स करके शायद से 5 seconds remaining. बट स्टॉर्म भी ओपन है। और नहीं स्टॉर्म बैंड है, स्टॉर्म पहले बैंड हुआ। पहले ही बैन हुआ। इसलिए नहीं वो एक्चुअली Radiant team pick. पता नहीं देखना पड़ेगा इनका लास्ट पिक। भाई बीपी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, चूतिया है सबके वो करने में। क्वीन ऑफ पेन बैन, लेसरैक वो भी बैन हो गया फक रेजर भी बैन, पॉप भी बैन। 10 seconds remaining. थिंक सो लाइक टिंकर बैंड नहीं 5 हुआ। seconds remaining. हो गया टिंकर बैन है क्या बात कर इन्होंने रहे हो बैन किया। डार्क चेयर के नीचे हाँ इन्होंने वो बैन जब उन्होंने बैट राइडर बैन किया तो इन्होंने टिंकर बैन कर दिया उनको पता था कि टायर्ड टिंकर उठाने वाले हैं करके मेरे को लग रहा है वर्ड स्पिरिट ही पिक होगा। शैडो फीड व्हाइट स्पिरिट ने एम्बर स्पिरिट पिक होना चाहिए होना है तो शैडो क्योंकि चूतिया है, शैडो फीड ही उठाएगा। Dire team pick.
वाइड ये क्या लॉजिक हो गया? बोला ना, वाइड उठाया, क्या लॉजिक में लॉजिक लगता है इनके गेम के लिए, वीवी के लिए? बोला भाई वॉइड स्पिरिट ही उठाएगा, इनका फिक्स था ये, यही होता है। तो सेफ लेन टाइनी है, सेफलेंट आयो टाइनी होगा और डार्क से स्पिरिट और ये मिड वाइड स्पिरिट। एक कुंका आ गया। कोंका भाई, नथिंग टू से को एक ही आता है साला मिड में, कोंका ही खेलना आता है। नहीं मैं बोल रे, ही रहा था कुंका आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कुंका इजी है, लाइक पनिश कर लाइक सकता है मिड नाइटफॉल, लेनर। हाँ सेफ लेन टाइनी। नहीं, कुंका कुंका का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वाइड स्पिरिट तो उसको डॉज कर सकता है, उसने कुंका क्यों उठाया फिर? और स्पिरिट भी उसको ले सकता है आराम से। तो ऑफ लेन कैसे? नेक्रो है। क्या है ये? एलजीडी तीसरा मैच करना चाहती है और कुछ नहीं। सीरियसली, क्योंकि कुंका वो एक्स करते नहीं, वो डिसएसिमुलेट सेकंड स्किल डालने से नहीं होता, वो कॉम्बो कैंसिल ही हो जाता है। अल्टी से भी कैंसिल कर सकता है आई थिंक, राइट टाइम पे। लॉकडाउन नहीं है उनके, वाइड स्पिरिट को कैसे पकड़ेंगे वो? आई थिंक ओराकल ही जो है लॉकडाउन दे सकता है, गाइस बट ओराकल्स के उससे भी बच सकता है वो सेकंड स्किल से। लाइक मुझे इसीलिए वाइड स्पीड में, लाइक स्पीड में एम्बर स्पीड अच्छा लगता है, क्योंकि एम्बर स्पीड के पास 2 एस्केप इसको है। क्या हो गया? क्या है? मार खाया जैसा। कोच है कोच का इंटरव्यू देख रहे हो क्या तुम? कोच ये जेंकिंस है। हाँ, वाला सेट अच्छा है वाइड स्पीड का। नहीं, एक जोकर जैसा खड़ा है बीच में, चलो पूरी चला, पूरी मेरे को लग रहा है थर्ड पूरा मैच लग होगा। गया जैसे। क्या हो गया इसको? सोना है। वो चला गया, बेगम बेगम सोने चला गया। 生气吧哥哥。 और टेलीपोर्टेशन कैंसिल, टीम विद द मोस्ट रोशन किल। चलो वीपी को ही सपोर्ट करते हैं, प्लेयर विद द हाईएस्ट टोटल मैजिकल प्योर डैमेज। नाइटफॉल, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर डेथ एट द एंड क्या ऑफ द नेक्रोफॉस बोला? क्या नाइटफॉल बोला? नेक्रोफॉस बोल दिया उसने। क्या टोटल नंबर प्लेयर डेथ इन द एंड ऑफ द गेम 26 to 40। पता नहीं यार इन लोग इतना आगे क्यों वर्ड लगाया इसने आके। आजकल सब साइड साइड में वर्ड लगाते हैं ना, कोई मिडिल में नहीं लगाता, तो इसलिए 生气吧哥哥。 तो उन्होंने शुरू हो गया है क्या अलग से, मतलब माउस में अलग की है क्या इनके पास एक्स्ट्रा की दबाने के लिए? लाइक यूजुअली तुम्हारे लेफ्ट हैंड में 18 की है दबाने के लिए गेम में। पता नहीं कहाँ से चलाते हो। लाइक QWERT 5, ASDF 9, AZ और इधर 6, 15 हो गए। देन तुम्हारा ऑल्ट 16, कंट्रोल 17 एंड उधर स्कोर बोर्ड देखने के लिए और एक एक्स्ट्रा। उन्होंने ओरल और नेक्रो के साथ कॉम्बो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नेक्रो का कॉम्बो बहुत मस्त है। उस दिन ओजी के खिलाफ मतलब उसको 160 सेकंड के लिए सुला डाला। याद है ना? आयन शेल पर्च कर दिया। हाँ वो तो करेगा ही। उसका काम ही है पर्च करना, लाइक आयो के खिलाफ। बट मंकी के खिलाफ उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि मंकी का अटैकिंग वो डार्क शेयर को काउंटर करने के लिए और नेक्रो को बफ करने के लिए। कुंका बहुत ज्यादा हैरास कर सकता है। आई थिंक कुंका के खिलाफ परफेक्ट काउंटर टीए है, एंड दूसरा अगर काउंटर मैं कुंका के खिलाफ लेना चाहूँगा अस्कर। हैरास को हैरास से ही जवाब देगा। मेरे को लगता है ये गेम में कुंका को ये बनाना पड़ेगा हैक्स। वो तो लास्ट गेम में भी बनाया था उसने। वही बनाना पड़ेगा, तो ये इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि मंकी किंग को हेलबर्ट ने बनाया ना, इसके वजह से कुंका गए वो शायद से। हाँ बट फेसलेस मैंने अभी तक मतलब देखा नहीं है।
टूर्नामेंट पे फेसलेस देखना चाहूँगा ये क्या डैमेज दे रहा है सीरियसली टाइम। I shall repay in kind. हाँ मैंने देखा लाइक ये वार्ड डिनाई करने के लिए बीच में वार्ड लगाते हैं, फिर उनका तोड़ते हैं, फिर खुद का तोड़ देते हैं। सेंट्री यार मुझे लगता है लाइक 100% सेंट्री का वो रेटिंग रखने के लिए बच गया। बढ़ाया सेंट्री से कुछ एक्सपी नहीं मिलता डिनाई करने पर, बट वो मिलता है ना तुमको सेटिस्फेक्शन। मतलब डार्क सीडर को सही खेलना है इसीलिए सेव पूरा इसके पीछे लगा है, ओरेकल के पीछे, तो उसको ओरेकल को छोड़ना नहीं है एक पल के लिए भी। बट क्या पता सब डिनाई कर रहा है। डार्क सीडर के पास 6 ही लास्ट है। लेन को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर। ओ लास्ट हिट नहीं छोड़ना था। आज क्रिप नहीं, न्यूट्रल क्रिप का रेंज क्रिप तो नहीं मिलेगा इनको। नहीं चला क्रिप का इक्विलिब्रियम चेंज करना चाह रहे थे। गेम के लिए हार्ड लेन है, सन लेन नहीं है। लाइक मंकी के खिलाफ हर ऑफलाइनर की ये होता है। मैं खुद ऑफलाइन खेला हूँ तो मुझे पसंद है। हेलो टाइटेनियम गेमिंग यो ब्रो यो। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट पड़ा, बस टाइम के साथ बात करते हैं। हाँ भाई है क्या चला गया टाइटेनियम गेमिंग? पता नहीं, चला भी जा सकता है। बट लेट गेम क्या तुम्हें लगता है कि वीपी के पास चांस है? अरे टाइनी है वो फॉर्म, वो दिमाग उसका बहुत ही है, मतलब उसका दिमाग वो टाइनी वो हीरो ही ऐसा है, बहुत अतरंगी है वो। बट लाइक मैं अगर टाइनी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैं नेक्रो को बोलूंगा टाइनी के ऊपर अल्टी मार, खत्म कर उसको। लाइक बाईबैक में नेक्रो ने अगर किसी को मार दिया अल्टी से, आई गॉड आई थिंक नेक्रो का वो अल्टी सबसे पावरफुल अल्टी है। वो अल्टी याद है ना सैम नेक्रो का, बाईबैक नहीं कर सकते हो। हाँ सैम, हाँ वो पता है, वो मैं करने का मैं सपोर्ट नेक्रो खेलने का उस टाइम पे। या लाइक जीजी बटन बोला जाता था, अक्ल नहीं था। लाइक उसको जीजी बटन बोला जाता था। लोग उस पे ऊपर रिफ्रेशर डाल करके डालते थे, कल बायबैक नहीं लेने का, बायबैक कर ही नहीं सकते तो चेंज किया। मतलब कूल डाउन प्लस बायबैक नहीं कर सकते। यस मतलब लोग उसको जीजी अल्टी बोलते थे, इतना पावरफुल अल्टी था भाई। ये सेब बहुत अच्छा खेल रहा है, लाइक लेन को नीचे लेके जाना कि मंकी के पास कम एक्सपीरियंस बचे। तो बिंदास खाया अल्टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना उसको। मतलब इनका अलग ही नशा चल रहा है टॉप लेन में। ओह अच्छा बाउंटी मिला, अच्छा रून मिला, आई थिंक बेस्ट रून है। Small adjustment. आई थिंक कुंका मिड उठाने का एक ही कारण है, ये एक स्मार्ट लेके बेस जा सकता है। You just achieved first blood.
Thanks and 7 मिनट लाइक 6-6.5 मिनट पे फर्स्ट ब्लड हो रहा है। खचांग। अबे मरा नहीं। Dyer's middle tower is in the wrong end of business. Part of the plan. एक के बदले 2। Surrender all hope to the void. ओह, उनका ने वेट किया। तुम्हें क्या लगता है सैम, टाइनी का ट्री ग्रैब करके एक हिट मारने के बाद ट्री थ्रो करना ज़्यादा है या सेकंड हिट के लिए इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा है? सैम? Dyer's bottom tower is under attack. आयो डिलीट हो गया सीधा, समुद्र के अंदर ही चला गया। 你这么菜，你的队友不会生气吧？ अरे ये भी गया। Shame. ओह इन अगले वो इन बिस्कुट चला आयो मरने के बाद आके क्या करता है, बॉटल रिफिल करके देता है। Radiant's bottom tower has a nasty situation. मतलब इनके लिए दूसरा कोई लाइन नहीं है टीपी का। फर्स्ट 10 मिनट तक इनका टीपी का लाइन एक ही है, मिड लेन। अगर मरे हो टीपी कर रहे हो तो मिड लेन पे टीपी करो। Is under attack. डिस्कनेक्टेड था। ओह मुझे लगा कनेक्शन भी जाते हैं, मतलब जा रहा आ रहा है तो हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब लाइक इनने मरने के बाद ना इनका टीपी का सिर्फ एक ही है, फर्स्ट 10 मिनट तक मिड पे टीपी करो। चला गया सैम, लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। अभी हो। Radiant's bottom tower has uninvited guests. Led without doubt to this. Don't mind if I do. Oracle का है। हाँ ओरेकल अच्छा है, लाइक फॉल्स प्रॉमिस इफेक्टिव है अगेंस्ट टाइनी, बट सरवाइव नहीं कर सकता है टाइनी के, मार देगा लाइक टाइनी। फॉल्स प्रॉमिस भी दोगे तो भी टाइनी मार देगा। Radiant's bottom tower is under attack. ओ बच जाता। Radiant's bottom tower has a nasty situation. अयो अगर बच जाता ना वहाँ पे, उनका वहीं पे डूब के मर जाता। उसी पानी में उनका डूब जाता। Is under attack. Radiant's middle tower is not safe. सैम देखो अभी ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस कितना है सैम? कम हो गया कि बढ़ गया है? बढ़ गया। और बड़ा है कम हुआ क्या फायदा, तो नहीं दे सकता। ओ भाई लाइक पैसे के मतलब औकात नहीं, लाइक प्ले स्टेशन ही खरीद लो अगर सही में मिलता है तो। Dyer's middle tower is under fire. खरीदना तो है बट क्या कर सकते हैं, प्राइस प्ले स्टेशन का प्राइस तो मैं क्या आगे पूछ के आया, प्ले का प्राइस 72,000 बोल रहा है मेरे को, 50,000 का। नहीं उसमें 50,000 का 25% वैट है। नहीं 50,000 में मिल रहा है डूड, एक्चुअल प्राइस 50,000 है, बट वो बोल रहा है कि डिमांड नहीं है करके, इसलिए मैं 72,000 में मैं दे सकता हूँ करके। बकचोदी ना करो, भोसड़ी के नहीं लेता। तो जस्ट बिकॉज़ वो बोल रहा थोड़ी ना मैं लेना वाला। यार लाइक उसका भी ग्राफिक्स कार्ड का भी सेम रीजन है। मार दिया अल्टी। इतना लो एचपी में इसके सामने आके क्या खुजली कर रहा था। Become feast for the flesh flies. Radiant's middle tower is not safe. Killing spree. Radiant's middle tower is under attack.
मुझे नहीं लगता वीपी के पास कोई चांस है। Radiant's middle tower was smashed into pieces. PSG.LGD ने कुंका लेके भी धो डाल रहा है। लेन से बाहर निकाल दिया है क्या डायनी को? हाँ, डायनी का टावर कब का उड़ चुका है। भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास है ना सोने का तलवार भी हो तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सामने वाला लकड़ी के डंडे से ही तुमको धो डालेगा। ऑलमोस्ट लाइक उनके गोरखा रेजिमेंट। लाइक बंदूक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कुकरी से ही सबको काट डालेगा। गोरखा रेजिमेंट ही एकमात्र है जो लाइक ना सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, ब्रूटल नहीं मतलब इंटेलिजेंट है, तो फाइटिंग स्टाइल यूनिक है। निडर है। सबसे ज्यादा ब्रूटल अगर बोलता है तो उनको बोलते हैं नागा रेजिमेंट को। हेड हंटर बोलते हैं उनका। वो डार्क सीडर टैक्टिशियन है। ये मंकी के इस वॉइस से मेरे को आज पहली बार पता चला लाइक डार्क सीडर टैक्टिशियन है। ये लोग डार्क शेयर क्यों उठा है, मेरे को वही समझ में नहीं आया। क्या देख के डार्क शेयर उठा है? मंकी लेंस पुश करके रखेगा इसके अंदर से क्या? आई थिंक डेड लेन में पुश कर सकता है क्योंकि लेट गेम उनको लेके जाना है। टाइनी लेट गेम में उन्हें कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कर सकता। टाइनी उतना भी पावरफुल नहीं है सैम। अरे 3000 का डैमेज डूड 1 सेकंड 3 सेकंड में वो स्टन टॉस 2 फटके को सेबर के सिल्वर एज के साथ भूल जाने का। पावर ट्रेड्स भी बनाता है वो, तो उसके पास 3k एचपी रहता है। 3k एचपी 15 मिनट 15 लेवल 15 पे और 3k डैमेज। तुम सोचो क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान का, मतलब ऐसे हीरो का क्या हो सकता है? कुछ नहीं, मरने का सीधा मरना है इशू पड़ता है कंपल्सरी। टावर को ऐसा मारता, और इनके पास देखो टाइनी होने की वजह से लोग एक अच्छा स्कोप मिल गया ना ओपनिंग, वो लोग एंडी कर देंगे। लाइक लेट गेम जाना पड़ेगा टाइनी के लिए बहुत, तो इसलिए शायद से उन्होंने डार्क शेयर उठाया था क्योंकि वो लेंस को पुश करके रखेगा करके। थोड़ा सा फाइट दे सकता है, सोलो फाइट ले सकता है मान लो। डार्क शेयर एक्चुअली क्या करता है 1v4 फाइट ले सकता है, 1v5 का एक ना, फाइट वो ले। एक आयरन शेड ने क्लिक के ऊपर डाल के छोड़ दिया वो क्रिप को, तो वो क्रिप लेन पुश करते रहेगा ऑटोमेटिकली। तुम्हारे मतलब लोग इंश्योर कर रहे हैं कि लेन हमारी तरफ पुश ना हो। उसके लिए तो मतलब वो भाई पपी ने दिखाया कि भाई पानी के इस पर आना मत। हाँ, नदी है, बॉर्डर है, इधर इस पर आना नहीं। पपी ने वो दिखाया। इन्हें वो दिखाया, ठीक है। एक उससे बर हो गया उसका। एक उससे बर नहीं, शैडो ब्लेड हो गया। शैडो ब्लेड भी हो गया पावर ट्रेड्स के साथ क्या? हाँ, पावर ट्रेड एको से बर तो पहले ही बनाया, शैडो ब्लेड अब लिया। शैडो ब्लेड एक क्रिस्टलिस और सिल्वर एज 2 फटका एक अभी सिर्फ एक क्रिस्टलिस चाहिए तो सिल्वर एज बन जाएगा। खलास वहीं पे खलास। देखा वो विंटर कैसा गया, पर कुत्ता हीरो है, मेरे को पसंद नहीं है। टाइनी निकाल लिया, टाइनी को निकाल लिया। टाइनी सीधा मिड पे टीपी भी मार दिया। आयो बोला मर जाके तू। आयो इज लाइक अपने मौत की घड़ी गिन रहा है। उनका उसको एक्स कर सकते हैं, ठीक है। आयो लाइक आयो का लेक्चरर ने लिटरली अल्टी डाला उसके ऊपर, चाहिए नहीं था। लाइक आयो वहाँ पे लिटरली मतलब अपने मौत की घड़ी गिनता है वैसे टाइम पे। लाइक उसको देखता है 10 9 8 7। आयो लाइक बाय बाय। जब 2 होता है आयो लाइक गाना चलाता है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना जिक्र का। वो बीके भी जा रहा है, लूरज नहीं जा रहा है।
Dominating performance. Killing spree. Killing spree. वहाँ पे वार्ड है। ओ बचा लिया। ओह पेड़ काट दिया। इसके सामने ही आके गिरा। टाइनी अभी तक एक बार भी नहीं मरा। उसके पास ऑलरेडी 200 लास्ट हिट हो चुके हैं लाइक 17 मिनट पे। मैम हम कहाँ पे रहते हैं? लाइक हमारा 10 मिनट में लास्ट हिट टारगेट 50 होता है, इनका 200 हो जाता है 20 मिनट में। मुझे टावर के नीचे पहला जो टावर है ना, हाँ पहले टावर के नीचे लास्ट हिट लेना मेरे को आता है। मैं हर एक ट्रिप पे लास्ट हिट ले सकता हूँ। दूसरे टावर पे नहीं होता, इसलिए दूसरे टावर पे बहुत लोगों का नहीं होता है। नहीं होता। इसलिए क्या करना पड़ता है कि मैं ग्रिप स्ट्रोक पे मेरा फर्स्ट किल मैक्स करता हूँ, जिससे मतलब क्या होता है कि वो एक ब्रश मारने पर ही पूरा टावर क्लीन हो जाता है, पूरा क्रिप पे क्लीन हो जाता है। मैं शायद से अगर कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना चाहता तो मैं अपना थर्ड डालूंगा मेरे खुद की क्रिप के ऊपर, तो ऐसे करके थोड़ा देर फटेगा, एचपी आ जाएगा और उसके बाद ब्रश मार के कलर बीपी हो पहले ही मर गया, उसके ऊपर भी अल्टी। मतलब वो जानबूझ के अल्टी चल रहा है क्योंकि वो टाइम कम आया उसको, जानबूझ के कर रहा है वैसे। नॉट ओनली टाइम, आई थिंक गोल्ड भी ये होता है, मतलब गोल्ड इनकम भी वेरी करता है। गोल्ड इनकम वो नहीं करता, बाईबैक के बाद कम गोल्ड मिलता है ना। मतलब वो सीरियसली उसका बायबैक के बाद टाइमर बढ़ता है भाई। अगर बायबैक किया तो 30 सेकंड ऐड हो जाते हैं, 30 से 40 सेकंड ऐसे तुम्हारे उसका वही है कि बाईबैक फोर्स करवाओ ताकि बाईबैक के बाद ये अल्टी मारे। आई थिंक 40 सेकंड, क्योंकि 120 सेकंड था जब वो ये मारा था टॉप सन मिड का। बायबैक लोग क्यों करते हैं? बायबैक इसलिए करते हैं क्योंकि बैरक्स जा रहा है, बट बैरक्स जाने से क्या फर्क पड़ता है? बैरक जाने से जो आने वाला क्रीप है वो कम गोल्ड देता है दुश्मन का, इसलिए लोग बायबैक करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर गोल्ड को सेव करना चाहते हैं। वो इसलिए बायबैक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम 6 स्लॉटेड हो, तुम्हें कुछ आइटम कैरी नहीं कर सकते तो तुम बायबैक में भी डिफेंस के लिए करोगे, बट वो फार्मिंग के लिए भी यूज होता है वो बायबैक। टाइनी ग्रीडी हो गया। They're unstoppable. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. टाइनी यहाँ पे ग्रीडी था बहुत ज्यादा। इनका कोर अभी तक एक भी नहीं मरा, समझ रहे हो सैम? PSG.LGD का अब 0-0 पे जो भी मरे उनके सपोर्ट में। और मतलब तीनों ऑफलाइनर सेफ लेनर मिड लेनर तीनों। जो 7 मरे और सपोर्ट ही मरे। अच्छा नहीं ला पाएगा टाइनी अकेला सैम पकड़ के। टाइनी एयरलाइन नहीं चलेगा आज। टाइनी डेडलस ने क्रिस्टलिस, टाइनी बीके सिल्वर एज बीके भी बन चुका है टाइनी का। हाँ बीके भी, हाँ वो एक बार मारना चालू करेगा ना, कोई नहीं खड़ा रहेगा देखो। टेक्निक